paper, Fluffy, as we take a look at this, it looks plain and simple as if one of the teams had dominated the other team, but in reality, it was much more than that. Yeah, I mean, all the games yesterday were a full 3-map series for both of the games. All the teams should be fighting for their spot. I'm sure that Mika in the previous video really explained the stakes of what it takes to win. But we also have to know what for the teams that lose, it's a lot of pressure now on them because they can only lose one more game for the people who fall into the lower bracket, as they will be eliminated and will lose their chance for that international spotlight. And then, oh, sorry, do you have anything to add, Asarai? I just wanted to say as well, it feels like people might say that, oh, it's just an off game for the team that won. But for teams like Cerberus as well as Ghetto Artists, it feels like they are definitely here to perform. And we should be seeing that come into play, even though they are going to be, situated in the lower brackets. Right on our screens right now is the Group B play-ins. Again, as you guys can see, Bleed Esports proceeding directly to match number 4, and we're gonna find out in just a little bit who's actually gonna join them over there for that match. Not revealing too much away because we will have our formal team introductions later on. With that, why don't we take a look at the upcoming series scheduled for today? So yesterday, amazing performances from the BEs of the play-ins. I'm referring to Boom Esports and Bleed Esports, of course. Today is another story of Boy meets World, because we do have returning teams like Made in Thailand and Team Big BAAM on one corner, and on the other corner are the newcomers, Enigma Gaming and Regum Qeon. Regum Qeon, if as we get to know them later on, maybe we'll see a little bit of familiar faces on the Southeast Asian region, but we'll have to wait and see for that. Now, I do know that you guys probably have a lot to share about these teams, so why don't we divert our attention on the first series in the schedule? It's a match that's pretty close to our hearts, our very own homegrown talents from the Philippines versus a formidable foe from Vietnam. For the first team, we have the so-called King of Kings, which is actually the literal translation of their Latin name. Their PH run was extraordinary, defeating the likes of Southfield Esports and Naos Esports, whom we saw here at the last stage. They're setting foot on APAC in hopes to bring home the glory as a team that we never saw coming. Let's welcome Regum Qeon. Regum Qeon, ladies and gentlemen. We've got the big brains of Rabbit, the remarkable duelist Kelly S, the flexible Tuge, and of course, the inseparable Draxi and Nexi. Floppy, we got to see the action up close and personal as they went through the PH Challengers. But why don't you share to the audience what a team like RRQ is really like? A team like RRQ, they say that no king rules forever, but the King of Kings RRQ are really trying to change that coming into the PH scene. This team was full of dynamic duos, as you mentioned, all those connections, that Draxi Nexi connection, the Rabbit Kelly S, and the Flash 2G or Tuge, and they came from their respective former teams, and they have gone through the gauntlet that is VCT PH. They found their groove and caused a chill streak of 2-0s against almost every team except falling short a bit against Team Secret and Oasis Gaming. But it's really nice for me to see Nexi and Draxi, especially here on the APAC stage, as for those who just heard about this team from APAC, for the local scene of the PH, these two are superstars in their own right. They made their mark in the VCT PH. They did not miss a single playoff in the entirety of VCT, but this is the first time that we'll be seeing them on the APAC environment. So the big question for me is, how are they going to be able to adapt in a meta that they're not used to, and how quickly can they improve against a lot of these top teams? A lot of their players are really hard hitters. We have Kelly S, especially highest CPS here in the PH, or one of the highest at least, and of course Nexi, one of the best Sentinels that we have as well. I'll just add to that as that even though they don't have APAC experience, they do technically have Southeast Asia experience with Tuge and Flash, being
previous members of Zeal, also known as 6045 Pirates. They were able to at least get a little bit of understanding of how the Southeast Asia meta works, and at least that is a good chunk of what APAC has to offer. I also wanted to add, how you talked about the cohesion of all of these players, and we'll probably see that coming into this series. That one of the things that made, I think, RRQ scary during the PH run that they had was just how well they're able to adjust on the fly. And if, Big BAAM is not ready for that, they might be taken aback by how just quick RRQ are able to adjust to these to the upcoming series. Once again, we've come to the conclusion that Valorant is a game that's really centered on adjustment, especially on this level of competition. Yet again, that was the King of Kings fighting here on the APAC stage to get the throne that they think they deserve. On the other end, they're up against a team that was previously the top team of Vietnam, dating back to the times when they were still known as Steal Your Glory. Nowadays, they're still one of the top teams in the country. I mean, that's what APAC is all about, after all, looking for the best of the best in the region. Is this their turn to shine once again? Let's find out with Team Big BAAM. This is Team Big BAAM. I'm looking at this roster and I immediately remember how much of a flex player these guys can be. So I'm really curious to see how much flexibility these guys have to offer. Asarai, I'm sure that your curiosity is just the same as mine. Oh yeah, for sure. This is a team that I think, for the most part, Vietnam as an entire region likes to, especially with their top teams, just stick together for as long as they possibly can. That's been apparent with Cerberus, and even now looking at Big BAAM, it's also about the same thing. This is entirely almost the same roster, if not the roster, that we saw way back in Sea Challengers 2021. And that was the first time, I think, that we saw Vietnam come into the scene. For people that, are just tuning into the APAC broadcast, Vietnam was the region that got in the latest for their own VCT. So this is still a fledgling region technically, even though it's already been, I think, more than a year since then. But it is going to be very exciting to see how this team can perform. Because the last time that we did see them, they weren't really... it didn't feel like they were a team. It was just, it felt like they just had a lot of good talents that were able to perform a lot more. We saw players like Nathal, like NTK, really step up to the pace. They are still able to do the same thing as of their previous matches. But again, there is still that lingering question. Can they bring it all the way back up? Because for Vietnam, I think the best team that they have is in the form of Cerberus, and we already saw how they were able to perform. Can Big BAAM step up to that kind of performance level, or will they just do something similar to what we saw from last year? That is definitely the question on our minds right now. Cerberus Esports really set a standard yesterday, and we'll have to wait and see what other Vietnam teams out here have to offer here on the APAC stage. Now, let me take it a step back, because I was looking at the player cameras earlier, and I just gotta say that the whole devil thing that was going on over there with one of the players was really cute. Would you consider wearing one of those, Asarai? Yeah, why not? You know what? I like change you my a devil outfit. kind of guy. Yeah, bro. Maybe for Fluffy, a halo is more fitting, because Fluffy's such a good boy. It's a sweetheart. I'd like to be. You are? What do you mean? Okay, I can. Wait, okay. I can't stop laughing now. I'm imagining Fluffy with a halo, and then... So I'm like the middle ground. Okay, you know what? Maybe the actual scenario here, Asura, is that Fluffy is the mere human being, and then we're his like right and left shoulder. One of us is an angel, one of us is a devil, and we're just whispering things in his ear. Which one is your right again, Fluffy? Can you raise your hand on your right side? Right. You? Oh, I'm the angel here, Asura. So you're the bad guy. Yeah, I'm a bad boy now. Okay, dude.
I don't know. If you guys are watching the live stream right now, can you please answer the question? Do you think Asterai is a bad boy? Yeah. Honesty only, please. Oh, there's a whispering caster in my head. I think it's Raph saying no. Yeah, there's a carried voice in the wind where he's not supposed to be in the call, but he's like somehow getting comments. You know, I'm gonna reprimand him later because I'm a bad boy. Okay, since we're already on the topic of bad boys, among these two teams, Fluffy, who do you think is the quote-unquote bad boy when it comes to playing the game? Like, not in a sense that they're bad at the game, but obviously, like, they can really make the other team fearful of them. I mean, to play off Asterai's point a while ago, I feel like RRQ had similar struggles where they kind of had like a bit of an identity crisis, especially early on in the group stages for VCT Stage. But as we moved on to week 2, they really found their groove, and that's when they really started strong. And one of the things I remember very vividly is one of the interviews in VCT PH where Rabbit was saying that they don't really go by the book. They kind of take that book and throw it away. One of the strengths of their team is that because they come from so many different former teams, and they've played so many different roles, they come with a roster that's so flexible and is willing to adapt not just in composition, but they're used to adapting in playstyle. So when they're put in a literal position on the map where they're not used to playing, they can really adapt. So I feel like in a bad boy aspect, that's kind of good because they don't really play by the book, they don't really go by the rules, and it's one of their strengths as a team because it makes them very hard to read, and it also makes you play on your toes as you're not sure if they're gonna do the default answer when they're presented the question or if they're gonna come up with something else. Very interesting point. You phrased that in a way. Asterai, would you actually agree that RRQ are the bad boys from PH? Okay, I don't know if we're gonna keep with the description of bad boy, but they are a team that definitely has a lot to offer. I think this was a team that when they started, it had a lot of expectation on them because everybody just came from a pro team. None of them was a beginner or something like that. So there really is a lot that they could just bring to the table and it mix well. And in practice, that actually could work. And we saw them actually be able to do that once they started, as Fluffy mentioned, getting into the groove of things. What I really like about this team in particular is I feel like it's just a complete package overall, right? They have an extremely strong front line, you have an extremely strong back line, and then they have somebody in the middle that's just commanding the entire team, which I think really works well for how RRQ wants to bring everything into the fold. Okay, I feel like our audience are gonna think that, hey, these guys are talking a lot about RRQ. Well, again, they're homegrown talents from our country. Please don't hate us for it. So let's talk a little bit more about Team BAAM. I was gonna say bad boy, but I'm letting it go. I'm dropping the whole bad boy thing. Anything you want to add, Fluffy, when it comes to Team Big BAAM? I feel like with Team Big BAAM, one thing we don't overlook is back in like Siege Challenger, they only dropped like one game, I think. Correct me if I'm wrong, but they only lost once or maybe 2 maps in the entire VCT. So this team has that strength of playing together for so long, like Asterai mentioned, and they really have that consistency that backs it up in the results. So they're not a team that can easily be faltered, and I feel like against a team that's kind of unpredictable like RRQ, they really have that capacity to learn how to adapt because they've been going through it for so long that it might be easier for them compared to other teams to really just answer the questions that RRQ is presenting. I will add here as well, right? Questions and all of that aside, there's also one that I kind of wanted to add as well here, that when I was checking out the statistics of everything, the agent selection of our certain regions, from Vietnam comparing it to the Philippines, there has been a lot more leaning towards from Vietnam players to actually pick up a lot more of the Reina. And I know that this is like something a little bit obscure, but I also wanted to point out that might be cause for a little bit of worry for Vietnam here, because that just means that Vietnam, maybe aside from the off teams like Cerberus, Fancy United, and maybe even Big BAAM, might be just leaning towards a lot more of aggressive, double duelist comps, possibly. And
up against like Philippine teams. Again, since we come from the region, we've seen kind of what happens here. We've seen MYSG do it as well. That there might be just the one duelist comps that have a lot more focus towards the use of utility. That could be a case for worry for Vietnam if they're not used to like set strategies. Being able to use possibly if we see like a fade, the haunt setups, the fault lines from really good breaches, which we also do see from RRQ from time to time. This could be really something of a hindrance for Big BAM if they're not very much prepared for it. So that's something just to kind of watch out for us and the viewers. It only gets more curious and curious from here. Luckily, though, as we keep progressing, we get to answer some of the questions that linger on our minds. For example, what map are we going to be fighting at? I don't know. I have my guesses, but we're about to see what the answers are. So we're here at our map vetoes, and one thing I noticed upon looking at the stats is that both RRQ and Team Big BAM have an Insta-BAM map, and it's none other than Fracture. So right off the bat, Asarai, I'm not expecting to see Fracture in this series, but surprisingly, it's not the first ban here. Oh, do you want to go, Fluffy, or should I go? I can, but as mentioned, they did ban out the Fracture. Big BAM, of course, doing the research, as we know that RRQ, even though it's not their most comfortable map, as mentioned in one of their interviews, Split is a map that they've had so much success with, taking out a lot of the top teams here in the PH. So I'm not surprised that they go for that ban. My question a bit, before the bans came in was thinking because they're going to both ban Fracture, which one was actually going to ban Fracture, but as it turns out, it will be RRQ instead, and we will have Haven as well as Ascent locked in for a 2 first half. I was gonna say that this is as good of an outcome that I was probably expecting from Big BAM as they try to traverse the very risky waters of this ban picks that we do have. I think them selecting Haven at the very start is a risk that they're definitely willing to take. They know it's a very strong map for RRQ, so why not just take it away from the board? One map that I am expecting them to actually want to play as the decider map is one of their stronger maps in the Vietnam region, which is Bind. But RRQ have taken that away, so we are going to be looking at Icebox. Ooh, that is the map that I fondly remember Big BAM, at least back in Sea Challengers 2021, doing okay individually, but not well as a team. So again, with the months that have passed, is this enough, or can we even go to a map number 3? Just like you, I love me a good Icebox game, and obviously Team Big BAM seems to love it too. They did have a well-balanced defense and attack statistic on this map before. They have, however, been beaten by another Filipino in the past, which was Action PH. If RRQ has anywhere the same level of play that Action brought to the table back in APAC 1, then Fluffy, it could cause Team Big BAM a world of trouble. I feel like Icebox is one of those maps that we all know is heavily reliant on that aim mechanic, which I'm sure that RRQ already has. They have the top players from a lot of teams here in the PH formerly, and now that they're together, I don't think it'll be as big of a struggle. My mind is more focused on the Haven game, because even though Big BAM did pick Haven for their map, it's actually one of RRQ's comfortable maps, I'd like to say. It's one of the most popular maps in the PH region in general, and it's one of the maps where they really had the most success with, especially when they started improving and adapting to a lot of the opponents here. So I wonder how that's going to translate now that we're in the APAC scene. It looks like both teams have done, due diligence and have really learned about each other, banning out the strongest maps of each other with that Bind and especially that Split. So coming into this, I feel like it's fairly fair. I'm more surprised, if anything, that Big BAM did decide to ban out Breeze, as I assumed that they were going to leave it open, if I'm going to be honest, because RRQ has never won a game on that map. So maybe they're hiding it or working on it for APAC. You never really know, because as we mentioned yesterday, statistics is one thing, it's just a reference of the past, and the teams that show up today are what really matters. Could also be because of the fact that actually, no, because I was probably expecting them to pick up maps that are a lot more free in terms of the way to approach it. Bigger maps such as Ascent, Breeze, I think maybe even Bind would be to the favor of Big BAM, especially as, they want to go for straight up aim heavy duels and whatnot, and all of these
maps that they've kind of selected will really push them to interact with the utilities from RRQ. So that is a case to worry about here for Big BAAM. But I am very interested to see how that kind of goes. So coming into specifically to Haven, we should be seeing the standard composition from RRQ, which is the double initiator with the Astra. So that is definitely, again, a case for worry, because if they're not able to bait out certain utilities, they might be rushing into a site where they're just gonna, run headfirst into basically all of the stuff that RRQ can throw at them. Now, I've checked the records before, and I believe that Team Big BAAM did have a lot of good games on Haven. It's just that the big boys from their team, like Fancy United Esports and Cerberus Esports, are really out to get them. Not cutting them any slack when they enter either of the ABCs over here on Haven. But the other map that we are going to be looking forward to, wait. What was the second map? I keep forgetting what the second map is. Ascent. Yeah. I don't know what's wrong with my memory. Okay. Now, RRQ, I don't think it is the hottest map for RRQ when it comes to Ascent, especially when they start off attacking. But Fluffy, for Team Big BAAM, did you know that this was actually their top pick map over at Vietnam Challengers? Yeah, I feel like it's a very strong map, which is also why I find it kind of weird that RRQ is going to be willing to lean into it. Maybe they were just trying to avoid, getting into that breeze in case that it would end up being the decider. But knowing that it was picked first phase, I feel like the map veto, they really had to know that coming into this that they have a plan to play into Haven. Like Asura mentioned, there's a lot of time coming from the last time we saw these teams to up to now. So there's a lot more adaptability that can pop out from these teams. And if they can really improve on their current setups, it can really be that detrimental. And the one, I think, like low-key kind of underestimated part about map bans and time is when you haven't seen a team for a while and they never really played it before, you also don't really know what to expect when you come into a game like APAC. So it could be a big surprise for a Big BAAM. Well, now that you mention it in that way, I am curious, Asurai, what does it mean that both of these teams have been banning out Fracture as much as they can? Well, I think it's just some of the teams not really expecting what to play against on Fracture, because I think Fracture is such an open-ended map that you can have so much expression specifically with compositions. We've seen some teams bring out the Neon, and it has really ruined people that are just not expecting it. You know how, again, I think the best example would be Paper Rex and how they play Forsaken on that Neon, where he just rushes right out, and then everybody says, oh, we got the kill on Forsaken. But then the trade game is so good for Paper Rex that, teams just cannot rebound from that. There's just so many things that could happen with that map that I think teams just do not want to play it just yet. Or maybe, like Fluffy said a while ago, they're just saving certain maps for, later on for APAC. Right, and I feel like to add to that, Fracture is just one of those maps that obviously we all know that it's very different from other maps. It has kind of like 4 entrances-ish. You kind of have to pincer attack when you're on the attack, and as a defender, you can rotate. But unlike other maps that are more retake focused, it's not a very wide map. So because it's so small, a lot of these things, a lot of the utility, especially like from the Neon that Azure mentioned, or Breach especially, really hits home and hits so hard in a map like this where everything is so close quartered. So if you're not prepared to deal with a coordinated attack, it's also a good idea to just ban it out and play your strengths more than try to pop your weaknesses, especially now that, teams that are going into this play-ins are coming in for play-ins, meaning that they're trying to get to the group stages. They can save strategies, yes, which is super possible, but the risk management for a lot of teams is, I feel like, a big factor where you're thinking, oh, do we play our strong maps right now and just make it to the next segment of the tournament? Or are we willing to try something new right now? Like, is now the best time? So I guess it's just a case-to-case basis of figuring out what you're comfortable with or when you're not comfy with. So overall, that's just my thoughts on Fracture in general and why I feel like teams are just avoiding it, at least these two teams. Very good point, Fluffy. Risk potentially could be avoided, but with that, maps have been locked in. One curiosity yet again checked out, but there is still a lot to be unveiled. We hate this part that's coming up next, but I guess we can start here in terms of curiosity. I'm talking about predictions. Our fellow dear panelists really pains me every time we have to go to this point because, again,
potentially embarrassment. But not for me, though. I got a 2-0 yesterday. Fluffy, I don't think you got anything right yesterday. Yeah, that's what the O2 stands for, unfortunately. But hopefully we're going to change that today. I feel like for me, with the picks that came out, just because the weaker maps of RRQ got banned out, and of course they're from a region, I have to say that I think RRQ have a higher chance of taking it. But like we mentioned, because some of the maps like Ascent are not their strongest maps, I might be upset again, but I'm still going to go with RRQ overall. Okay, I'm going to go first on Asteroid. I want to ask Asteroid last. I think it's pretty evident that RRQ is my bias. Again, homegrown Filipino pride over here. On top of that, I love watching Kelly S be that aggressive jet player that we've come to know. Excited to see him potentially lead this team to victory. What about you, Asterai? Are you going to be the bad boy in the prediction? Well, I have to be now, don't I? Because, like, you guys already picked RRQ. I'm going to go for Big BAAM here. And I will point out that I feel like this region still has things to offer. They might be a little bit late on how to adapt to the situation, but I still do see a lot of potential with this particular region, especially with Cerberus and right now competing with Big BAAM. You know, I've actually talked with my friend before, who also is very integrated in the Vietnamese scene, and he's mentioned like certain players in Big BAAM to be incredibly talented. So maybe that talent can jettison this team to getting a map, maybe even the series against RRQ, but that's just me. I mean, Asterai being the bad guy over here, but he does have valid points. I'll give him that. Predictions all secured now, but at the end of the day, at least one of us is gonna be right. Maybe two of us. We'll see. We'll see. Asterai really looking forward to getting his prediction right. Maybe. I'm not sure what that smile is all about. But there you have it, guys. Predictions locked right beneath your panelists. We've got Likeable for RRQ, Fluffy RRQ, and Asterai for Team Big BAAM. With that, we're going to be heading over to our agent selections for the anticipated compositions. So first things first, we are going to be on Haven. I'm kind of looking forward to seeing Rabbit on the Sova over here. I've seen his Sova plays here. Really shows how comfortable he is on Haven when he builds out that Sova. But what about you, Fluffy? What do you think are the compositions we'll be seeing on Haven? For RQ, the Sova is great, but I've also seen them play a lot with Sky, so I wouldn't be surprised to see that. But what I'm sure of, at least I hope I'm sure of, is that they're going to lock in that Astra pick. Astra over other controllers in a map like Haven. You know, after the patch that we're playing on, Astra is kind of nerfed in the sense that you can't really use a lot of the utility that are CC abilities, like the stun or the gravity well, but she does provide still that global presence. You know, she's not limited to range, and especially on the defensive side, just having a lot of these ready stars active to help your team immediately, especially against a lot of these explosive pushes, buys so much time instantly for your team to come back. And as I say that, I feel like Tuji or Tuga is blocking in that. But surprisingly, to my pleasure, we have Rabbit on the Fade this time. I think this is the first time that they brought this out. I will add as well that I don't think I've seen Draxi actually play the Breach, or if he has, it's not alongside the Fade. Because the last time when we saw the double initiator, it was Sky and Sova, like I was mentioning. So this is going to be incredibly interesting. What also is interesting here from Big BAAM on the other side, you know, this is so that we can just spread out the looks on the agent selection, is that they're bringing out the roster or the agent composition that actually worked out better for them on Haven when they went up against UBT Esports, which is the Jet and Raze. And this goes back to my same point. Is the double duelist really what they want to go for here? But I really like this. This has a lot of that explosiveness. It's the 1-2 punch. The Jet goes in, you have the pain shells from the Raze, and then you do have that safe backline coming in from the chamber as well as the Sky. So this could be a really good match to look forward to. And again, just always excited to see the Fade. Oh, definitely. Oh, I feel like you're holding back on us when it comes to the Fade, Astra. I'm pretty sure you're really excited to see this agent. To be honest with you guys who are watching, please stay tuned, because I'm pretty sure Asterai has some sort of joke behind any of these agents. He's just smiling because he already gave me a glimpse. See? He's like warning us. Asterai is the granddad of dad jokes.
I'll call him that. That's a He good went one. from a bad boy to a granddad of the dad jokes. What versatility this character really has. But there we Get have off it, my guys. lawn, kids! Alright, with that, guys, predictions have been locked, the maps have been locked, and, of course, the agent selections have been locked. There we go, our homegrown talents versus Vietnam's very own. I'm excited to keep the ball rolling from here on, so Fluffy and I will see you later. Asarai, you and the rest of the casters, please take it away. Oh wow, I mean, Laika, the rest of the casters, I have a name, mind you. Again, guys, welcome. My name is Raph. Of course, I am joined by the ever so esteemed bad boy of VCT, Mr. Asarai. Asarai, I'm curious why you're not wearing your aviators, your leather jacket, and telling me that, yeah, it's cool being on VCT. I'm wearing a but black again, shirt, alright? I'm wearing a black shirt. So am I. Okay, I kind of have to turn my lights Oh, up. I'm wait, kind of blending dude. in here. You know, What's the brand of your shirt, please? Please. it's Regatta. It's got. Can we not do this? Can we not do this to ourselves and, you know, expose our shopping habits and our coordinated buys, apparently? No, But- not like this, bro. Just to loop back, right? The panel had many great points. Again, Big BAAM potentially having that secret sauce to find a little bit more success in comparison to their VN counterparts. Again, they do have a step up on Big BAAM. I believe it's their fellow contenders, Fancy and Cerberus. I think they've lost to them, but sometimes it's the compatibility, right? We saw that. It was very evident in our own stage, or not our own stage, our own qualifier with Secret in the previous stage, where they did really well on the way up against international champions, but when it came back, oh, they had a big target on their backs. You definitely do. And now, as Haven begins, we'll see how all of this comes into swing. The Breach Fade, man. Haven't really seen this on Haven as much, but it does allow for a lot more, I think, oppression. It doesn't give you the best recon, I guess, you know, Haunt compared to the recon dart, but it's still really reliable. And then the fault line just clears up so many of those close corners that you're like, oh, somebody's probably not there, but you don't, you know, fully check it, and then somebody's there. So this one gives a lot more for RRQ to work with. Yeah, that's a fair assumption. One thing I really am surprised with is we know the comfort of Kelly S on the Raze, but is it the most comfortable thing to run on this map? Maybe for him personally, but we've seen other teams just do fine without it. But look at this, Asarai, a pretty slow and innocuous grind towards around, what, 30 seconds has passed. Not a lot of map control on either side here, and I like it. It's a feeling out stage, you know? Talk to me first before you buy me dinner. I like to, you know, long walks on the beach and long walks on A long. This Big BAAM is already setting up for the A site. Rabbit's been spotted out the close already. Nathong throws out the nade. The stun comes in. This is good. This gives them a little bit more time, a little bit more space to get things started, but they need to be explosive. They've already thrown out their utility. If they don't, they might just allow RRQ to take a breath and just stop the attack. Oh, that's problematic for Big BAAM. Rabbit just, you know, gets jettisoned to the stars, but that doesn't matter. They've still taken one on the board already. Very quick, considering that VN, I said this multiple times on our previous broadcast, they are so impressive on pistol rounds. RRQ, they are no slouch either, which is also reflected in their stats, right? In our own local qualifier, they won the most pistol rounds
barring Secret maybe. I'd have to brush up on my stats, go back on that. But putting our eyes on Big BAAM, I like how they kept the same core. Again, Natong has become pretty much a staple in our APAC stage. He's been present in both. And it looks like he might, or at least he's probably on the trajectory to be yet another standout player for Big BAAM. Absolutely. BAAM came out. Draxi very fast on that rebuttal, and the nades just being thrown out. All right. Well, ladies Yeah, and gentlemen, nothing really to be had there. And I really do like... कैप्टन प्राइस मेरे साथ जुड़ते हुए अभी डेस्क पे सैम एंड जैसे कि आप लोगों ने देखा आरआरक्यू ने तो पहले दोनों ही राउंड्स में अपना डोमिनेशन दिखा दिया है। अभी तीसरे राउंड पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी शुरुआत हुई है एंड इनफैक्ट एक रीटेक करके दिखाया है। सैम, व्हाट डू यू से टू दैट डोमिनेशन जो आरआरक्यू अभी दिखा रही है? क्यों तैयारी के साथ आ चुके हैं, दे आर हियर टू विन, क्योंकि देखिए एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। उनको भी पता है एक बिगर स्टेज पे जाना है। यहाँ पे सिर्फ एपैक नहीं, जब मुलाकात होगा मास्टर्स में और ज्यादा बेहतरीन टीम के साथ, तब के लिए तैयारी कर चुके हैं। इसी की वजह से ये राउंड बैक टू बैक जीतती हुई नजर आ चुकी है आरआरक्यू। But I love the flank from 2G। देखिए वो सबसे पहले तो राइट हैंड साइड खिलाड़ी को निकाले, फिर स्पाइक प्लांटर जो कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिसएंगेज थे, वो ध्यान नहीं दे रहे थे शायद उस मोमेंट पे। सो वेडिट से कि उसके बाद इमीडिएटली शट डाउन किया गया एंड बहुत ही आप कह सकते हैं खूबी दिखाया उन्होंने इस रीटेक के लिए। पर देखेंगे जरूर क्या दोबारा से एक और राउंड निकाल पाएंगे। वो चौथा राउंड क्या उनके कंट्रोल में आएगा? इनफैक्ट नहीं, एक गराज एंड मिड का पुश एक्सपेक्ट करते हुए अटैकर्स हाफ से तो अभी ज्यादा हलचल नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कैलियस के पास, बिकॉज वो अगर गराज कंट्रोल गवा देते हैं फिर सी साइड एंड बी दोनों जगह ओपन हो जाएगा। देखिए बैम के पास ये राउंड ऑलमोस्ट लाइक इन पेपर जा चुका है, क्योंकि उनके पास वेपनरी नहीं है। कैप्टन एंट्री लेने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं, उस स्पेक्टर के साथ कमाल करने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं। नाथोंग कैन एक्चुअली डू इट, बट वो मौका मिलेगा कि नहीं। बट उस बीच यहाँ पे देखिए मॉफ आगे जा चुके हैं, एंट्री ले सकते हैं, बट वहाँ पे ट्रेडमार्क एंट्री जब लेंगे। बट इन द मीन टाइम रेबिट अपना फर्स्ट पिक डॉग पे निकाल चुके हैं। देयर एन इनिशिएटर डाउन, बट मार्शल से एक शॉट जरूर कनेक्ट करेंगे, बट अभी प्लेयर गवाया नहीं। कैन विल बी डाउनिंग दैट ड्यूलिस्ट। एनटीके फाइंड्स वन। चौर में भी यहाँ पर ऑलरेडी कुछ ही सेकंड्स के अंदर द राउंड जस्ट गेट चेंज्ड। आई मीन व्हाट्स दैट प्ले फ्रॉम आरआरक्यू। देखिए जैसे उन्हें पहला पिक मिला इमीडिएटली सारे डायरेक्शन से डिफेंडर्स जो है पुश इन करते हुए नजर आए। एक खिलाड़ी आप देखिए गराज डोर से निकले, एक खिलाड़ी ऑलरेडी ए लॉन्ग पुश कर चुके थे एंड पूरी की पूरी बिग बैम की टीम दे वर लाइक यू नो कॉट आउट इन अ मिड फायर। सिर्फ इंफॉर्मेशन जानना था, जैसे पहले 2 पिक्स मिल गया, उनको पता चला कि दिल बी ट्राइंग टू फाइट इट आउट एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि उनका इको राउंड था, ब्रोकन राउंड था एंड यस दे डिड ट्राई टू डू सम डैमेज। एक पिक मिला था उनको, बट देन दे कन्वर्टेड इट। अभी एक फुल बाय। एक और बात, अगर इसको नहीं जीत पाए यहाँ पे बैम, देन मुश्किल होगा कैप्टन, क्योंकि आप ही सोचिए 6 राउंड बैक टू बैक गवाना इज गोइंग टू बी नॉट दैट ग्रेट अटैकिंग हाफ में स्पेशली। बट यहाँ पे देखिए क्विक प्लान के लिए जा चुके हैं, आफ्टर शॉक आएगा बट इमीडिएट प्लान एंड डॉज। वेल लकी फॉर दैट टेलविन, नहीं तो दिक्कत हो सकता था जेट के लिए। बताऊं जैसे देखिए अभी एस्ट्रा ये नेबुला डाल के जरूर कोशिश रहेगी कि शायद से एक रीटेक सक्सेसफुल हो पाए, बट अभी क्या है और एस्ट्रो स्टार हमें दिख रहा है जरूर। आरआरक्यू के लिए शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है, तो उन्हें ये स्पीड कंटिन्यू भी रखना पड़ेगा। बट टाइम के 3 आगे आते ही मिलकर ट्रेड आएगा जरूर 2G के द्वारा एंड गराज से डिनाई करेंगे सब कुछ एंड फाइट को सेकंड किया जा रहा है। कवर फायर देने की कोशिश रहेगी जरूर, लेकिन क्या डिफ्यूज किया जाएगा? यस, इट्स अ निंजा डिफ्यूज बिकॉज़ प्रोस डोंट स्पीक एंड अ क्लच कमिंग इन फ्रॉम रैबिट। 5-0 का स्कोर। हेवन में डिफेंडर साइड पे डोमिनेशन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं हमें आरआरक्यू। देखिए कैप्टन, हमें हर वक्त देखने के लिए मौका मिलता है कि स्मोक के अंदर खिलाड़ी स्प्रे करने के लिए मौका ढूंढते हैं, दे नेवर स्टेप आउट। बट यहाँ पे आरआरक्यू चेंज दैट, वो वहाँ पे आगे गए, वहाँ से फाइट लेते रहे, जिसकी वजह से बैम को पता भी नहीं चला कि डिफ्यूज हो रहा था। यस दे डिड हैव अ स्लाइट हिट, बट जैसे प्लेयर्स बाहर आ रहे थे वो सोच रहे थे मे बी वहाँ पे डिफ्यूज नहीं हो रहा था, बट डिफ्यूज करते हुए नजर आए, कोई उनको रोक नहीं पाया। ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट आप देख सकते हो यहाँ पे उनका ऑडियो जो था वो डिफरेंट था, तो उनको अंदाजा लगाना था, दैट वर नॉट कंफर्म्ड एंड इसके वजह से एक मुश्किल हो गया। बट इमीडिएटली एक टाइम आउट कॉल करते हुए कैप्टन मच नीडेड होगा, क्योंकि बैम अपने अटैकिंग हाफ में अभी तक एक भी राउंड नहीं लिया है।
Well, Big Bam, I don't know what to say to them, but एक चीज तो क्लियर रहेगा देखिए कि RRQ ने जो preparations किए हैं, it's all working out, and they're not like that those usual defenders जो side में passively इंतजार करते हैं and you know रोकने की कोशिश करते हैं. They give away the site and site देने के बावजूद भी जो retake वो करके दिखा रहे हैं, not from a single angle but from multiple angles वो shut down करते हुए नजर आ रहे हैं. Especially मैं कहना चाहूंगा कि देखिए Big Bam के पास वो double duelist composition है, Jet and Raze के साथ अब जरूर site में entry ज्यादा जल्दी ले पाएंगे, but when it comes to the holding plan, जब आपको hold out करना होगा spike plant करने के बाद, there you're gonna have a lot of trouble and उसी को avoid करना पड़ेगा Big Bam को. Fast round already निकाल चुके हैं RRQ, looking forward to that 6. अगर लगातार rounds का streak ऐसे मिलता रहा, then next become Qeon. They are gonna have a wonderful start today in this matchup. Exactly, they're looking forward to it already. But देखिए इस बार इनकी का blade शुरू हो चुका है. Next is already down, बिल्कुल भी उनको punish करते हुए नजर आया, पर अभी भी aggression देखने के लिए मौका नहीं मिल रहा है. Spike अभी भी थोड़ा I would say slow जरूर चल रहा है because they understand they've lost numerous rounds and एक और round नहीं खोना चाहते. Blade से already शुरुआत हो चुकी है, advantage मिल चुका है, but 2G को देखिए वो already आगे बढ़ रहा है. इसको read पीना जरूर कर रहा है, but there's a trap है immediately तोड़ने की वजह से पीना को पता चल चुका है, but are they ready to take a fight? 2GE वापस जाएंगे, he'll give them a cue. कहीं ना कहीं अभी भी attacker spawn में खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं. Of course, an attacker spawn इसीलिए इतना slow push लिया जा रहा है so that you know bait out किया जाए defenders को, and वो bait out का फायदा भी मिला है. आप देखिए पहला pick मिलता हुआ हमें नजर आया है BAAM को. However, I've got your trail. commitment आता हुआ and इसी के बीच में NTK को एक और pick मिलेगा and Regum 2K gets a one for himself as well. But after all, उसे वो fucking मिलने वाला है. इसके बीच में दो आ गया थे, Traxel को shut down किया जाएगा. It's all down to BE. पहले भी एक clutch करके उन्होंने दिखाया है. HP की बात करेंगे देखिए सबसे कम HP अगर हम बात करते हैं going to be on that range and immediately उनको shut down किया जाता है. In fact वो base down से ही खात्मा करते हुए नजर आए. NTK one jump to make it all happen and finally BAAM एक राउंड निकालते हुए नजर आए हैं. देखिए कैप्टन अभी इस राउंड से पहले आप बात कर रहे थे कि इस डब्ल्यू से आपको एंट्री जरूर आसान मिल जाएगा, बट उसके बाद रीटेक सॉरी पोस्ट लाइन पोजीशनिंग में थोड़ा मुश्किल हो सकता है. तो इसके वजह से इमीडिएटली BAAM अपना जो स्टाइल है बदल दिया. उन्होंने सिर्फ पिक्स पे खेलने के लिए वहां पे तैयारी किया, जितने पिक्स मिलता गया उसके बाद जाके स्पाइक प्लान करना जब उनके पास बहुत ज्यादा नंबर एडवांटेज. And I think that's the reason this round worked out. And also कि NTK का जो blade का उतना sharp connection देखने के लिए मौका मिला. Oh, you're worried about NTK's blade? I wonder if in fact, second matchup is very interesting as well. And second matchup बहुत ज़्यादा लोग hyped up भी है. Made in Thailand versus Enigma Gaming. Well, वो match जो है 1:30 को start होने वाला है, दोपहर 1:30 बजे start होगा. But coming back to this game once again, 5-1 का स्कोर एंड बिग बैम दे हैव ओपनड अप. लेकिन ये ओपनिंग कब तक वो बनाए रख पाएंगे? क्या उनको दोबारा से एक और राउंड मिलेगा? विल द स्कोर्स बी लेवल अप इवन? बहुत सारे सवाल रहेंगे जो इस हाफ में ही आपको आंसर्स मिलते हुए नजर आएंगे. देखिए मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है. जैसे हम बात कर रहे थे पिछले राउंड का जो स्ट्रैटेजी बदल दिया उन्होंने, थोड़ा स्लो खेला, वहां पे वो पिक्स पे ऊपर खेल रहे थे, बट यहाँ पे पता चल चुका था RRQ दे डिड नॉट वांट टू गिव देम द एडवांटेज. तो उन्होंने ही वहां पे ए लॉन्ग पे पुशअप किया एंड वहां पे देख सकते हो लॉबी पे 3 लोगों को एलिमिनेट करते हुए नजर आया. अभी नंबर का डिसएडवांटेज के साथ BAAM खेल रहे हैं एंड दे आर वेरी वेरी वरीड अबाउट इट. जी हाँ, स्पाइक उनके पास रहेगा, बट उसका क्या ही फायदा उठा पाएंगे जबकि उनके पास नंबर्स नहीं है एंड दे हैव नो इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पे खिलाड़ी है, क्योंकि उनके पास इनिशिएटर भी नहीं है. एंड जो भी इनिशिएटर उनके पास है दैट्स अ फ्लैशर. जी हाँ, से इन्फॉर्मेशन जरूर मिल सकता है बट नॉट द एग्जैक्ट पिंग. बट एंट्री एक खिलाड़ी ले चुके हैं, नेशनल का राइफल दिख चुका है एंड 2GE विल बी एलिमिनेटिंग. आखिरी खिलाड़ी कॉल मिल चुका है कि बी की तरफ भी आना चाहिए एंड 2GE उनको भी एलिमिनेट करते हुए छठा राउंड RRQ के नाम अपने डिफेंसिव हाफ में लुकिंग ब्रिलियंट. And देखिए 2G को हमने सिर्फ ये पहली बार नहीं देखा है that he clutches away with that round. I mean not an exact clutch but although ये लास्ट के खिलाड़ियों को एलिमिनेट करना and वो भी single handedly he did it in the anti-eco buy round as well. दोबारा से वही दर्शक में निकला है, but ये aggressive hold बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है जरूर. Being on the back of 2G, देखिए यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों को उन्होंने एंकर डाउन किया. That's a 6th round. 6 का स्कोर. अटैकर्स हाफ में बिग बैम. Nothing has been done so far. क्या यहाँ पर एक आपको पास अप का मौका मिलेगा? फिर देखिए फाइंड आउट. देखिए मुझे RRQ की बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी पसंद आ रहा है. दैट इज दे आर ओनली अग्रेसिंग ऑन वन, नॉट एवरीवेयर. एक अल्टीमेट का इस्तेमाल बट कोई एडवांटेज नहीं मिलता. बट वेरी क्लोज इज गोना बी
एंड वहां पे गिर जाएंगे। आई मीन उन्होंने ट्रॉलर का इस्तेमाल किया, पनिश होते हुए नजर आएंगे। मॉफ को एक पिक एंड यहाँ पे फाइट लेते हुए नजर आएंगे। 2G नेक्स्ट साथ देंगे जिसकी वजह से पीना वहां पे डाउन हो जाएंगे। बट अल्टीमेट का इस्तेमाल न्यूरल थेफ्ट की वजह से सारे खिलाड़ियों का इन्फॉर्मेशन निकल जाता है। बट अल्टीमेट का इस्तेमाल किए थे बट डजंट फाइंड एनीथिंग। जी नहीं, नाटोंग हैज गिवन हिम नथिंग इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। डॉग पिक निकालेंगे आखिरी खिलाड़ी 2G जिसका पोजीशन फॉलो हो चुका था एक पिक निकालने के बाद। विद 3 के नाटोंग दूसरी राउंड अपने टीममेट्स को खिलाते हुए 6-2 बट BAAM it's going to be 2-6. Well, it's going to be a hard one to spell. ये काफी राउंड्स नहीं है, 2 राउंड्स अगर जो 4 राउंड्स बाकी है, 4 राउंड्स बाकी होंगे अगर I mean that will be the big BAAM that they need. And as आप में लीड लेना पड़ता है आपको, वो अभी तक नहीं मिला बिग BAAM को। मुश्किल में जरूर लग रही है यहाँ पे बिग BAAM। देखेंगे क्या फायदा उठा पाएंगे। I mean can they actually find their momentum? थर्ड फोर्स को जरूर काइंड ऑफ पुश बैक किया जाता है। मॉफ तैयार है, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्फॉर्मेशन बट यहाँ पे देखिए गराज कंट्रोल लेने के लिए तैयारी चल रहा है फ्रॉम टीम बिग BAAM। ओह नो, बूम बॉट, नथिंग फाउंड, नथिंग गेन, जस्ट टाइम वेस्टेड। Absolutely. मुझे बुरा भी लगता है बट देखिए 2G he manages to just गराज में बैक ऑफ करते उसके बाद मिडिल में इस्तेमाल। ओह इट्स अ डिसिपेटेड क्रैक जो हमें ड्रॉप होते हुए दिखाई दे। राज लिंक पे ट्रेल ब्लेजर गोइंग इन लेकिन उसको भी सिर्फ इन्फो मिलेगा। गार्ड हाउस से ज्यादा कुछ नहीं। यस प्लेइंग ऑन गराज लिंक, well playing on CT now and immediately rotation. All right, like it's going towards the A side is RRQ ready because देखिए A side पे सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, बाकी चारों के चारों जो खिलाड़ी they're not on A side so they have to be very careful about where they're willing to go. But rotation आ रहे हैं, Rabbit gets one, Rabbit gets a second, लेकिन NTK1 will be returning the paper, solo pick निकाल के जाएंगे। That's so super from Elias, shuts down NTK. But Kelly is going to be leading and right the spike has been planted. Cosmic Eye device का भी इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन ये 2v2 का होल्ड एक क्रॉस पैस किया गया है। We all know it. Cosmic Device का and they make it happen. BAAM Dorf. A crossfire set up from Dorf and Pina. तीसरा राउंड बिग BAAM के द्वारा। I mean देखिए यहाँ पे उनका जो हेवी हिटर्स है वही यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको राउंड वापस लेके आते हुए नजर आ रहे हैं। बट देखिए उस राउंड में अगर रैबिट को एक और पिक मिलता था, अगर वहाँ पे एनके को एलिमिनेट कर देता ना, then the round would have been completely lost for team big BAAM. But रैबिट गुड ट्राई। बट देखिए कॉस्मिक डिवाइड जो है कैप्टन दोनों साइड से इस्तेमाल किया था, अटैकर साइड से भी और डिफेंडर साइड से भी। बट वो डिफेंडर साइड का कॉस्मिक डिवाइड फायदा नहीं दिया क्योंकि कोई पोस्ट प्लांट के लिए गया ही नहीं। जैसे आपने बताया एक ब्रिलियंट क्रॉसफायर होल्ड कर रहे थे टुवर्ड्स द डिफेंडर स्पॉन एंड जब कोई खिलाड़ी वहां पे डिफेंडर साइड से बाहर आने के लिए मौका ढूंढता है दैट इज जस्ट अ ब्रिलियंट क्रॉसफायर एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटेस्ट। द ओनली वे कि किसी खिलाड़ी को वो मौका मिल सकता है कि ओपोनेंट को विफ करना पड़ेगा। बट वो देखिए जब एक क्रॉसफायर है वो विफ करना थोड़ा मुश्किल ही होता है। कहीं ना कहीं अगर एक खिलाड़ी भी विफ करता है दूसरे खिलाड़ी कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं। बट इस बार दोनों खिलाड़ी साथ देते हुए नजर आए एंड दैट्स द थर्ड वन। द स्कोर लाइन कहीं ना कहीं थोड़ा पास जा रहा है कैप्टन, 3-6 का स्कोर लाइन है अभी। वेल इसी के साथ साथ हम सीधा आगे बढ़ेंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर इस हाफ के 10वें राउंड के ऊपर। जिस तरीके से बिग BAAM ने 2 लगातार राउंड निकाले हैं, आई मीन इट्स सेफ टू से कि बिग BAAM के पास अभी भी वो पोटेंशियल हमें दिख रहा है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, लाइक इंडिविजुअली टैलेंटेड जरूर है, गॉड गिफ्टेड प्लेयर्स है वो, उन्होंने अपना स्किल लेवल जो है डेवलप किया है। बट पिछले राउंड का हार इकोनॉमी में थोड़ा सा डेंट करेगा आरआरक्यू का। एक ही वैंडल ले पाए, वो एक ही राइफल आपको देखने का मौका मिलेगा जो कि रैबिट के पास मौजूद है। देखेंगे क्या उस एक राइफल की वजह से कोई राउंड ले सकता है कि नहीं, क्योंकि जो 3 राउंड यहाँ पे एक्चुअली 2 राउंड्स बैक टू बैक मिला है टीम बिग BAAM, दे आर मोर देन हैप्पी अबाउट इट, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर 4th और 3rd कॉन्सिक्यूटिव राउंड। देखेंगे जरूर मिलेगा कि नहीं। बट जैसे आप बात कर रहे थे रैबिट कहाँ पे, रैबिट इज होल्डिंग अ वेरी एग्रेसिव एंगल। जब पिछली बार देखने के लिए मौका मिल रहा था कि वो डिओ टैगिंग करते थे, खेली के साथ अग्रेसिव एंगल होल्ड कर रहे थे, इस पर वो अकेले है। आई मीन ही नीड्स टू बी वरीड एज सून एज दैट राइफल गेट्स ड्रॉप्ड, जैसे आप बता रहे थे इमीडिएटली ए साइड भी खुल जाएगा एंड कहीं ना कहीं वो पूरा राउंड भी खुल जाएगा कैप्टन। यू नो आई विल जस्ट से कि जो मोमेंटम के साथ, जो पेस के साथ प्लेयर्स आगे बढ़ रहे हैं, आरआरक्यू को जो 3 राउंड्स आप कह सकते हैं मजबूर किया गया है गंवाने में, तीनों के तीनों राउंड वो पेस थोड़ा स्लो अप्रोच किया गया था। जितने भी बार बिग BAAM ने कोशिश की है कि लेकिन वो थोड़ा वेरी क्विक पेस अप्रोच हर बार डिनाई हुआ है।
there's that night shot coming in. It पहुंच नहीं पाए, but ये जो push आ रहा है इसको रोकना पड़ेगा 2G को. Astral smokes deployed and Sheriff from 2GE move को down करके जाएंगे. Numbers gain जरूर अभी के लिए रहेगा RRQ के पास, लेकिन weapons Spike planted. problematic scene for RRQ. देखिए 2G जो शॉट कनेक्ट करके वापसी कर चुके थे, दैट वाज ब्रिलियंट. बट अभी देखिए उनको भी पता है अगर एक और वेपन दे देंगे, स्पेशली विद द नंबर एडवांटेज, कहीं ना कहीं पूरा राउंड बदल सकता है. बट एक बैच केली की तरफ से, इज एनीबॉडी रीडिंग इट? जी हाँ, एनटीके वहीं पे अपनी नजरें तैनात कर रहे हैं. Ready for the fight, so Kelly was ready for the player to be eliminated. Connect the first second के लिए भी वहाँ पर मौका ढूंढ रहा है. मीना वहाँ पे तैनात है, and that's all completely decimates the team. But Nexi, he makes it happen, और Nexi को भी एक 3K मिलता हुआ and clutch करने के लिए भी मौका. What was this round? I mean, I'll just say कि Thrifty. Sheriff's are enough for now. Sheriff's are enough for now. But you have to give the credits to G को, जिन्होंने वो opening pick निकाला, जिससे already pressure create किया गया था. एक राइफल लेके आए थे इस राउंड पे रैबिट. कुछ राइफल से उनको जरूर एक पिक मिला, but rather than that, they had nothing to work with. Like look at this play. Just swings down, connects that one tap, and उसके बाद Kelly's का ये जो flank था, that was also very very important. And Player look at the standing. players go. One enemy जैसे ही remaining. वो nebula हटता है, they just swarmed all of the players जो सीलोंग पे मौजूद थे, and that's another round. I mean, superbly done retake by RRQ. In fact, एक swiftly round निकालते हैं. Captain, that round was just unsealed, जैसे आपने बताया, जिसकी वजह से अच्छा पॉइंट आ चुका है. But now look at them, how aggressive and strong they're looking. Operator भी हाथ में आ चुका है. Next he also finds one along with Rabbit, and already number का disadvantage यहाँ पे Big Bam को होते हुए, and they're now unable to figure out anything. अभी भी देखिए A push की तरफ ही वो जरूर सोच रहे हैं, but can they execute? पिछले बार जरूर 5 लोग जब A execute के लिए आए थे with a 5v3 situation, जीतते हुए नजर आए. एंड जी हाँ, साइड भी मिल गया उनको, कंट्रोल स्पाइक भी प्लान करते हुए नजर आए. बट नाउ इट्स एन इक्वल स्टैंड ऑफ. 3v3 सिचुएशन मुश्किल होने वाला है. ऑन द अदर एंड देखिए RRQ, they're not at all worried क्योंकि उनके पास 5 खिलाड़ी तैनात है, एंड they've stationed the rest 2 players. एक B में रहेंगे, एक C साइड में रहेंगे. But this hold at A, it's a triangle, captain. जैसे हम बात कर रहे थे, एक 2 players crossfire, यहाँ पे एक ट्रिपल crossfire है. एक के साथ हाथों में ऑपरेटर रहने वाला है. It's kind of a Bermuda triangle. No, I would call it a Bermuda triangle. अगर कोई step in करता है ना, घूम हो जाएंगे वहाँ पे. Yeah, of course. I mean, देखिए, this is not Bermuda, right? It's Haven, so we can call it a Valorant triangle. I mean, all things fair. But देखिए, जो तीनों खिलाड़ी बचे हुए हैं BAAM की तरफ से, 30 seconds left. तीनों खिलाड़ी लिंक से जा रहे हैं. There needs to be some information relayed. I don't know if 2G has read it or he has no idea, but it's going to be a C execute, and control मिल चुका है साइड का. There's no one. See, I'm surprised कि RRQ ने complete side open छोड़ दिया है, but it's all because they have the numbers and they can play it on that retake. But CS will be shut down. Go for the big play, but no, that wrongly timed cyber cage deployment. उनको पनिश करते हुए नजर आए हैं. Immediately 2G down to a 2v4. दूर रहेगा जरूर ये राउंड. लेकिन सबसे पहले गराज को क्लियर ऑफ करना चाहते हैं. गराज लिंक के अंदर ही बैठे हुए पीना inside that nebula. One enemy remaining. Blank takes out Nesang, and Pina will be taking out 2GE. Abhi one to take the scenario. Takes one more down. Utilities plus rifle से pressurize करके down किया जाता है उनको, and that's the 8th round for RRQ. जैसे शॉट्स ले रहे थे पीना, अगर वो आफ्टर शॉक नहीं आता, मे बी ही कुड हैव वन द राउंड, क्योंकि एक प्लेयर्स को वहां पे एलिमिनेट करते हुए नजर आ रहे थे. ही वाज क्विकली टेकिंग दोस फाइट्स. आई मीन, ऐसे नहीं लग रहा था कि वो फाइट से बैक ऑफ करना चाहते थे कैप्टन. बट ब्रिलियंट यूज ऑफ द नंबर्स एंड द यूटिलिटीज सेट. अभी बढ़ेंगे आखिरी राउंड इस पहले हाफ का, एंड ऑलरेडी RRQ के पास एक बेहतरीन लीड. देखिए कैप्टन, ये दोनों टीम्स लूजर ब्रैकेट फाइनल से यहाँ पे आ चुकी है प्ले-ins में, एंड दैट टेल्स यू कि वो भी कहीं ना कहीं अपने रीजन को रिप्रेजेंट करके आगे चलना चाहते हैं ग्रुप स्टेजेस में. दे डोंट वांट टू स्टे हियर इन द प्ले-ins. क्या यही से वो वापसी नहीं करना चाहते. Oh, son. That's another one. Sam, what's the score again, by the way? आजकल 9. Get out of my way. I think Okay, 8 keep more it. is more occurrence. Yeah, I think 8 more is more occurrence. But let's see 9-3. Can it be? Or it's going to be an 8-4. तो क्या पर सीधा आगे बढ़ेंगे, बैक साइड क्लियर आउट करने की पूरी कोशिश. कामयाबी मिलती जरूर. but the pincer coming in from Kelly as well. दिक्कत बनेगी. but the pincer will take the insane stay there. और किया जाएगा. You want to fight it? It's going to be a very good one. Next and Rabbit on that DK, but NTK making it very hard. Gets a 2K for himself. Auction play, but it is a Rabbit. कोशिशें चल रही है DK.
के ऊपर हल्का but Tina make sure his teammate is not down and चौथा round 8-4 is the score. Switching sides. Attackers जरूर उनकी कोशिश थी कि वो lead लेके जाए but RRQ on the defenders half itself. I mean 8-4 का स्कोर लाइन, so it still looks like doable. कमबैक हो सकता है खुद अपने डिफेंसिव हाफ में भी, बट जैसे वो थोड़े फोर्स चल रहा था उसके साथ कैली के पेंशियल से एक पिक मिला. आई थिंक इट कुड हैव गॉन ईदर वे. 1 एचपी के साथ एनटी के बचे थे. अगर पीना का साथ नहीं मिलता वहां पे कैप्टन, आई थिंक वहां पे बिग बैम गवा सकती थी. आई मीन रैबिट हैड द कैपेबिलिटी. अभी साइड स्विच होने के बाद इट्स अप टू आरआरक्यू टू फिनिश इट राइट नाउ, क्योंकि देखिए जो 4 राउंड बैम के पास है उतना ही 4 राउंड आरआरक्यू को चाहिए इस सेकेंड हाफ में इमीडिएटली मैप पॉइंट पे पहुंचने का एंड मैप पॉइंट से सीधा इस हेवन मैप को खत्म करने का. एंड ऑल्सो कैप्टन ये टीम बिग बैम का पिक है एंड वहीं पे उनको कहीं ना कहीं अगर मात देंगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कैप्टन. Of course, and देखिए पहले हाफ में जो भी हुआ है. Now you need to stress more कि आप डिफेंडर्स हाफ में स्पेशली डिफेंस में आके क्या कर सकते हैं. हमें पता है कि डिफेंडर्स के लिए it's hard to play this map because every angle there needs to be a player present. It's gonna be tough. देखेंगे जरूर कि कौन यहाँ पे बेहतरीन तरीके से खेलते हुए नजर आएंगे. बट जी हाँ, 2-3-4 राउंड्स निकले हैं ना यहाँ पे टीम बिग बैम के लिए, वो सारे उनके मोस्टली ड्यूलिस्ट हेवी राउंड्स है, जहाँ पे देख सकते हो एंट्री में नातोंग अपना पहला पिक निकालते हुए वहां से बैक टू बैक 2 और किल्स निकालते हुए 3 के राउंड कमिंग इन फ्रॉम नातोंग. एनटीके की तरफ से भी जो ब्लेड स्टॉर्म का राउंड था वहां पे भी उनको 3 के मिला टू गेट द राउंड अंडर कंट्रोल, टू गेट द पॉइंट फॉर हिज टीम. आई थिंक ऐसे ही राउंड ज्यादा निकाला है उन्होंने कंपेयर टू उनके बाकी खिलाड़ी. अगर बात करेंगे डॉफ, पीना एंड मॉफ, आई थिंक कहीं ना कहीं इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो और भी ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि देख रहे थे हम मॉफ को जरूर पिछले राउंड में, आई वुड से लास्ट सेकंड राउंड में एक पिक जरूर मिला, बट उसके बाद इमीडिएटली उन्होंने वहां पे क्या किया, यूटिलिटी इन्वेस्टमेंट. आई मीन जी हाँ, वो राइट कॉल था टू क्लोज ऑफ द एंगल, क्योंकि बहुत सारे डिफेंडर्स आएंगे, बट दैट पोजीशन दैट ही वाज इन वो कहीं ना कहीं सोच समझ के खेलना था उनको. ऐसी छोटी मोटी गलतियों की वजह से टीम बिग बैम राउंड हारती हुई नजर आया. बट आई फील लाइक कि कैसे उनका अग्रेसिव स्टैंस को तोड़ दिया जा रहा था फ्रॉम आरआरक्यू, दैट कैन अगेन हैपन हियर, जहां पे टीम बिग बैम अग्रेसिव जा सकती है एंड इमीडिएटली उनको मात देती हुई नजर आ सकती है इफ आरआरक्यू आर नॉट रेडी. क्योंकि देखिए जो सीलोंग पे तैनात है, इट लुक्स टू बी अ वेरी अग्रेसिव मूव. आगे जरूर Yeah, I mean they will push. It's set forward कि वो पुश करेंगे, but दोनों ही पिक्स मिलेगा जरूर. इनफैक्ट एक तीसरे की तलाश भी थी जरूर, बट उसको डिनाई किया जाएगा. नेक्सी, I mean he does the damage. देखिए हमें पता है it's more like आप कह सकते हैं a pocket sheriff that you have. जो हेडहंटर रहता है नेक्सी, पहला शॉट दोनों के ऊपर कनेक्ट हुआ है, दूसरा शॉट वेल वॉल बैंक जरूर था, but that's decent enough damage done without armor. It's enough to take you down. 2 पिक्स निकाले और उसके बाद immediately ट्रेड आता है उनका, बट रैबिट मेक श्योर. One enemy remaining. कितना साबित करे. I feel bad right now for Big Bam because double duelist, attacker sided map. अगर मैं रहता Big Bam की साइड में, I would have felt scared कि यार और राउंड्स निकालने थे. एंड देखिए जस्ट ऑन टॉप ऑफ दैट आरआरक्यू द ब्यूटीफुल एग्जीक्यूट, एंड स्पेशली जो स्ट्रैट लेके आए थे सी राउंड पुश करके मे बी थोड़ा सा डिसएंगेज करना, उसको तो तोड़ते हुए नजर आए हैं नेक्स्ट. आई मीन अगर वो हेडहंटर नहीं रहता वो डबल ड्यूलिस्ट पुश कहीं ना कहीं काम कर सकता था, बट हु वुड हैव नोन दैट वाज जस्ट रिस्क मूव कमिंग थ्रू फ्रॉम टीम बिग बैम एंड वो कहीं ना कहीं फायदा ही नहीं किया. दैट इज जस्ट अ ब्रिलियंट मूव एंड प्ले कमिंग थ्रू. बट यहाँ पे देखिए इमीडिएटली अग्रेसिव जाते हुए के लिए नजर आ रहा है, बट इट्स ड्रॉप फायर के लिए एक ड्यूल जीतेंगे. दूसरे प्लेयर का पोजीशन बूम बॉट के वजह से पता चल चुका है. बॉट टू द राइट क्लिक द स्ट्रॉन्ग प्लेयर को एलिमिनेट करेंगे. दूसरे प्लेयर का पिक के लिए गया है, बट ट्रैक विद द ट्रेड नेक्स्ट साथ देते हुए ए साइड एंट्री ले चुके हैं. नाउ दे हैव द साइट अंडर कंट्रोल. One enemy remaining. राउंड का कोई चांस ही नहीं रहेगा, बिकॉज़ आरआरक्यू दे प्रूव आउट टू बी वे मोर स्ट्रांग. अब देखिए जब भी पिस्टल राउंड आता है या फिर जब भी एंटी को बाय राउंड रहते हैं, आरआरक्यू इज लाइक ओके आई डोंट केयर, लेट्स पुट आवरसेल्व्स ऑन 6th gear and roll hard onto the attacker side. I agree with you, Captain. RRQ just right now I would say overpowering One enemy Team Big remaining. Bam. I mean उनको यहाँ पे
अब से काउंटर करने के लिए भी मौका नहीं मिल रहा। जैसे हम बात कर रहे थे, जस्ट अ कपल ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग फ्रॉम टीम बिग बैम, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं वो फायर पावर महसूस हो रहा है फॉर आरआरक्यू। बट अदरवाइज आरआरक्यू जिसे साथ में खेल रहे हैं ना, दैट टीम गेम प्ले इज लुकिंग वेरी ब्रिलियंट। अगर इस टीम गेम प्ले को नहीं तोड़ पाएंगे टीम बिग बैम, दे लुक लाइक दे माइट हैव ऑलरेडी लॉस्ट द मैप। सिर्फ और सिर्फ 3 और राउंड चाहिए यहाँ पे आरआरक्यू को। बिग बैम still haven't found anything even in the second half. And let's not forget कि जो भी टीम इन दोनों में से जीतती है, they are going to face off against the winners, जो हमें अगले मुकाबले में देखने वाले लोग। That के स्पेड के यूटिल के साथ सीधा blast back का इस्तेमाल, and Kelly puts in hand, gets one pick, but next with the headhunter make sure कि Kelly का जो पिक है बिल्कुल निकाल नहीं जाता। Flash, but Rabbit, he just saves the day. I mean, that flash could have changed everything. इतना बढ़िया एक फ्लैश बस प्लेयर्स की बेमौजूदगी बिग बैम को मजबूर करते हैं इस राउंड को, लेकिन हाथ धोना पड़ा उनको इस राउंड से। That one flash अगर जिससे हम बात करते हैं ना, वो वाइट स्विंग की वजह से कोई ना कोई खिलाड़ियों को अंदाजा नहीं रहता कि कैसे फाइट लिया जाए। अगर वो वाइट स्विंग यहाँ पे आ जाता, it would have been the end, it would have been the round for team big bam. एक छोटा गलती एंड देखिए सिर्फ डॉग को वहाँ पे फाइट लेना पड़ा, बट बाकी सारे खिलाड़ी एक ही पोजीशन में वहाँ पे स्विंग करते हुए नजर आए। रैबिट विद 3 के 11वां पॉइंट भी यहाँ पे आ चुका है। वो उनका फुल बाय राउंड था कैप्टन, एंड नाउ दे आर प्लेइंग विद अ ब्रोकन 3K with a bulldog, right? That's another statement, but देखिए के लिए आगे आने की कोशिश और आगे आते हैं, बट उनको भी शटडाउन किया गया। पीना गेट्स, now they have to be worried. Now you have to be worried, but why worry when you have 2G getting Pina offline? Down मतलब आपके पास कंट्रोलर नहीं रहेगा, बट रैबिट को इमीडिएटली पिक अप किया जाता है मॉक के द्वारा। लेगा जरूर, she just goes all guns blazing. I mean 2G, he honestly doesn't care. Finally कोशिश रहेगी कि वो he baits out that spy cam dart. देखिए अभी भी unless I mean, give it to him. Man, give it to him. Give him the ace. Please give him the ace. I mean, it's much needed because ये पहला गेम है इस Spike planted. मैचअप में, इस ग्रुप में। It's going to be a hard one. देखिए अकेले बचे हुए हैं NTK 1. He has to flick up on the left back of the guard. It's not going to be an easy task. Oh, 2GE with an ace. RQ just dominating on every half they go. I mean, कैप्टन यहाँ पे ऑलरेडी राउंड गवा चुके थे। 2 प्लेयर्स एंट्री लेने के बाद आरआरक्यू did not have the numbers, but 2GE, what was that round? I mean, जो कॉन्फिडेंस उनके ऊपर था, while he had the spike cam dart on him, हर एक टीम को बेट करवा रहे थे, and they were falling for that bait. एक एक करके खिलाड़ी आगे आ रहे थे। They were thinking कि कहीं ना कहीं जो पिक आ रहा था, when he was standing stationary, उनको लग रहा था, okay, he's trying to remove that spike cam dart, exactly, and right? वो swing कर रहे थे, and he was ready for the fight. 2GE, this man is too damn smart and 1000 IQ. And you know what? हम इसको कहते हैं कि बता के मारा है। Literally अपना पोजीशन बता के उन्होंने मारा है जरूर। But we'll see कि अगला राउंड क्या मैच पॉइंट पे ऑलरेडी आ चुके हैं RRQ। Will they get the 13th round and close it off right here, या फिर कुछ और मौका आएगा? But door आगे आते हैं। In fact, nobody checks that corner and gets punished as well। 2GE के लिए सबको भी डाउन किया गया। अब इसके साथ फिर एक पिक निकाला गया है NTK 1 के द्वारा। Door finally takes down Rabbit. It's a 5th for Big Bam, but अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। 7 rounds for a comeback. Now it's going to be an easy one. In fact, I think it's an impossible one because अभी तक जो फॉर्म दिखाया है Qeon ने, RRQ का फुल फॉर्म रहेगा ये। I don't think वो इतनी आसानी से गिव अवे करने वाले। In fact, 7 rounds at a stretch, I find it very hard to believe. जब भी ड्यूल्स लेते हैं, it is always team Big Bang looking good, but मजबूर है जब ड्यूल लेने के लिए यहाँ पे आगे आ जाता है RRQ। I think तब ही सब कुछ बिगड़ जाता है टीम बिग बैम। You want to play? Let's play. जिस पे 2G goes in for jumping, थोड़ा टैग आउट जरूर हो चुका है। 2D फोर्स यहाँ पे एक्टिवेट देखने के लिए मौका मिल रहा है नेक्सी के हाथों, बट ए साइड में कोई खिलाड़ी नहीं है, कोई भी अग्रेसिव जाने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। It looks to be a B and a C sided goal coming through। इस साइफर को अपने यूटिलिटीज के साथ A के तरफ चेंज किया गया। Yeah. But I'm worried about one more thing, Sam. This pick is by Big Bam. Exactly. ये Big Bam का मैप है. And look at the score. I mean, you have to देखिए, we all know this is just upper brackets, right? एक और मौका आपको मिलेगा जरूर। एक और मौका आगे बढ़ रहे हैं। In fact,
स्मोक के अंदर ही एक शॉट लिया जाएगा तो सपोर्ट का, बट उसके साथ साथ थ्रो स्टॉपर का इन्वेस्टमेंट, नथिंग गेट्स डन विद दैट थ्रो स्टॉपर। एंड अभी सीधा स्लैम इन करने की कोशिश, नेक्सी गेट्स वन, Qeon gets a double, Qeon gets a trying to go for more, but Nexi will shut them down. Big BAAM loses the first map, but RRQ shows us what domination is like. And यही domination की तलाश में अगले मैप पे भी जरूर रहेंगे. Another map. क्या RRQ फिर से dominate करके जा सकते हैं? देखिए उनका ही वो मैप चॉइस होने वाला कैप्टन. Now with this confidence, RRQ they're going to be running away. Oh my God. I think maybe बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, because RRQ के पास जो मोमेंटम है अभी, जिस मोमेंटम के साथ वो खेल रहे हैं, I really believe कि they can go for even more. I mean, they're just doing an amazing day. But अभी के लिए तो RRQ, man, you guys just put a huge nail on Big BAAM's coffin. But अभी तक हम देख रहे हैं like RRQ, GG's to them, जो domination उन्होंने दिखाया है. नाम इनका बिग बैम है, पर बिग बैम तो RRQ की तरफ से भी देखने का मौका मिला. we'll definitely see कि आगे जाके क्या होता है, आगे जाके क्या लगातार राउंड्स निकाल पाएंगे या फिर हमें एक कंप्लीटली टेबल्स टर्न होते हुए नजर आएंगे. we'll all just see. और अगला मैप it's going to be Ascent, जो कि RRQ का पिक है, and we all know Ascent mid RRQ. You cannot breach the mid control जो RRQ लेके रखते हैं, be it from Cubby, be it from bottom mid, be it from top mid. वो mid control, I don't think anybody has better mid control than RRQ. Enigma Gaming Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Got it from me, all the energy extra. You don't wanna see me with a hip rip. Generations pulled up, look how things will switch. People that quick, now they wanna move on the bitch. Boy wanna go to a bitch, nah. Working a 9 to 5, I had to go and feed the guys. Nobody did it right, I had to show them how to grind. I had to be the odds, this is the life I live for God. Taking a step at a time, we going up, we headed to Mars. Taking them chances, making decisions, you know I'm never gonna lie. Till you let go, I'm copying all of who you gon' be inside. I cannot fake it, I gotta face it, I gotta do the time. You gotta wait, make for a great pay, make sure you're doing your job. Gotta deal with the patience, 200 at every occasion. Going to different locations, how they got when I need some direction. Me and Vinci go up every session. Cook it up, yeah, you know it's no pressure. Yeah, you know how we do it, we all in. We can slow up and you never catch us. Working a 9 to 5, I had to go and feed the guys. Nobody did it right, I had to show them how to grind. I had to be the odds, this is the life I live for God. Taking a step at a time, we going up, we headed to Mars. You know my slimes, they came from the bottom to top. They can define us, they tryna find us, boy, I know you with the ops. We're not the same, no, you can't compare me, I don't belong in the box. Don't try to play me, no, I'm not friendly, this is everything I got. Ain't no playing around, this is no playground. It no matter, I do what I say now. I'ma go give them something to say now. Got them stuck on my back like a spray ground. CZ's don't gotta complain. I'm a shooter, got eyes in my vein. They said that I would never make it, they thought I was crazy, they said I'm insane. Working a 9 to 5, I had to go and feed the guys. Nobody did it right, I had to show them how to grind. I had to be the odds, this is the life I live for God. Taking a step at a time, we going up, we headed to Mars. Undefined for life. Oh man, what you talking about, man? What? You so crazy, bruh. Wasn't too long before I realized a whole lot of truth, just realized. Two groups faking the real guys, and both of them plotting on your meal size. Gotta be more, is this real life?
Got a bad hand, but I still try. Try and knock me down and I still climb. I can see the promised land right over the hill line. And when I get there, yeah, we all gon' party. Learn how to surf cause the waves is gnarly. Gotta make the bread, gotta bake the barley. But it take a little वापस आ चुके हैं हम टीम बिग बैम वर्सेस टीम आरआरक्यू रेक्स रीगन कियोन के साथ, जहां पे रेक्स रीगन कियोन ने एक डोमिनेटिंग हेवन का मुकाबला दिखाया है यहाँ पे गेम। और इस बीच में हमारे साथ जुड़ चुके गेम्स एक्वाइटी, एंड क्या ही शानदार मुकाबला था इन दोनों के बीच में। इट वाज जस्ट वंडरफुल। आप देख सकते हो शुरुआत से आरआरक्यू डोमिनेट करती हुई नजर आया, एंड इट वाज जस्ट ब्रिलियंट। आई मीन कोई जवाब ही नहीं मिला यहाँ पे टीम बिग बैम की तरफ से। जी हाँ, एक दो राउंड उन्होंने लिया था फर्स्ट हाफ में, स्पेशली ओनली 4, बट उनके जो ड्यूलिस्ट थे उनके वजह से लेते हुए नजर आया गेम से। शुक्रिया सैम। एंड जी हाँ, यहाँ पर वो एक मैसेज देना चाहते हैं अपने ग्रुप बी की टीम्स के लिए, बाकी टीम्स के लिए, कि कुछ इस प्रकार का उनका गेम रहने वाला है। और पहला ही गेम अगर मान लीजिए इतना डोमिनेटिंग वे में खत्म होता नजर आएगा तो बाकी गेम्स लेट्स फाइंड आउट क्या रहेंगे। बट सबसे बड़ा यहाँ पर बिग बैम के लिए दिक्कत यह है कि उनके बिग मैप में उनको मात दी गई, वो भी इस तरह के स्कोर के साथ। I mean, किसी ने सोचा नहीं था whenever you pick a map, but जी हाँ, यहाँ पे अगर बात करेंगे रेक्स रीगम कियोन का, उनका जो ये चॉइस है, they are really good both on Haven as well as जो एक और मैप था बाइंड जो हम सोचे थे पिक हो सकता है। I mean, also same goes for अगर बात करेंगे टीम बिग बैम का भी यहाँ पे एक कहीं ना कहीं बेहतरीन मैप में से एक माना जाता है, क्योंकि इट्स अ लिटिल बिट बेटर। 60% तक इनका कहीं ना कहीं विन रेशियो देखने के लिए मौका मिलता है, बट आई थिंक इट वाज जस्ट टीम रेक्स रीगन कियोन जो इनके लिए तैयारी करके आए थे। इवन दो बिग बैम वर गुड एंड बेटर इन देयर मैप, यहाँ पे देखने के लिए मौका मिला कि जो खेल रही थी टीम, दैट वाज टीम रेक्स रीगन कियोन, उन दोनों ने यहाँ पे कमाल करते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं जैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट मुकाबला होने वाला है गेम, सो दैट इज गोइंग टू बी एन असेंट। आई मीन क्लासिक मैचअप होने वाला है, वेनिला मैचअप होने वाला ऑन दैट मैप, बट अगर एक मैप में ऑलरेडी जीत हासिल हो चुका है रेक्स रीगन कियोन का, आई थिंक मुश्किल होने वाला है जैसे अगले मैप में बढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई रहेगा यहाँ पे आरआरक्यू के पास, बट आपको क्या लगता है, कैन सेम जो यहाँ पे काउंटर लेके आए थे आरआरक्यू टीम बिग बैम के ऊपर, क्या वो वापस हो सकता है? कैन टीम बिग बैम एक काउंटर लेके आ सकती है आरआरक्यू के ऊपर? देखिए, अभी के लिए अगर पहला ही गेम है, पहला मैप है, यहाँ पर हार का सामना अगर करने को मिला है, गलतियां हुई है यहाँ पर बिग बैम की तरफ से और वो शायद उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, बट अगर उस गलतियों को सुधारते हैं यहाँ पर इस मैप नंबर 2 में, बेशक एक मुश्किल टास्क होने वाला है, क्योंकि अब जो ये एसएन का मुकाबला है
अगर मैं चेकआउट करता हूँ आरआरक्यू का, यहाँ पर थोड़े से इनके जो स्टैट्स हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 52% इनके विनर हमें देखने को मिलते नजर आते हैं। विनिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इस पे एक तरफा एक मार्क दी जा सकती है अगर स्टैट्स के ऊपर बात करें, बट जिस तरह का स्टार्ट अभी मिला है यहाँ पर आरआरक्यू को लग नहीं रहा है, यहाँ पर वो कोशिश करेंगे 2-0 से ही यहाँ पर इसको समाप्त करें, तीसरे मैप तक नहीं लेके जाने वाले। और हमारा तीसरा मैप एज वी ऑल नो कि आइस बॉक्स का यहाँ पर रहेगा, जो डिसाइडर मैप रहेगा, बट कोशिश तो है यहाँ पर आरआरक्यू के द्वारा कि इसको 2-0 से ही यहाँ पर खत्म किया जा सके और एक डोमिनेटिंग विक्ट्री फिर से वो कोशिश करेंगे। बट लेट्स फाइंड आउट कि क्या रहेंगे रिजल्ट्स। देखिए गिम्सो, अगर बात करेंगे इन दोनों के बीच में और असेंट का मुकाबला, दोनों का चांसेस 50-50 है। इवन अगर हम मैच स्टैट्स के बारे में बात करेंगे, वहां पे भी उनका जो विन स्टैट्स है वो इक्वल है, तो वो जताता है कि इन दोनों का जो फाइट रहने वाला है इट कैन बी ऑन द इक्वल्स। बट जैसे हम बात कर रहे थे, जो हेवन का अभी अभी एक डोमिनेटिंग विक्ट्री आरआरक्यू की तरफ से देखने के लिए मौका मिला, एंड यही हम बोलते हैं बेस्ट ऑफ 3 में जो इनिशियल स्टार्ट होता है, इनिशियल मोमेंटम जो होता है, वहां पे अगर एक को कहीं ना कहीं कैपिटलाइज करने के लिए मौका मिल जाता है, वो कॉन्फिडेंस मिल जाता है, वो कॉन्फिडेंस कैरी ओवर हो सकता है। बट अगर उसी कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप ओवर अग्रेस कर देते हैं गेम्स, आई थिंक मुश्किल हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं वहां पे पनिश किया जा सकता है। अगर वैसे मौके टीम बिग बैम को मिला, आई थिंक दे कैन आल्सो क्लोज ऑफ एन असेंट। जी, बट कुछ अगर हम और बात करते हैं, कुछ और एनालिसिस अगर हम करते हैं हेवन मैप में, तो आरआरक्यू बार बार मौके दे रही थी उनको, चलिए ठीक है हम रीटेक में छोड़ देते हैं, और काफ़ी बेहतरीन क्लचेस हमने जो देखे आरआरक्यू की तरफ से, मतलब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब नंबर्स नहीं थे आरआरक्यू के पास, स्टिल उन्होंने 2-3 ऐसे राउंड निकाले। तो अगर आप इस सिचुएशन में भी अगर आप मात खा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपने कितनी बड़ी यहाँ पर मिस्टेक्स यहाँ पर करी है। मतलब नंबर्स होने के बावजूद भी आपने स्पाइक इनिशिएट करा, आपको डिफेंड वो करनी थी बस साइड कुछ देर के लिए, लेकिन जी नहीं, वहां पर आरआरक्यू उनके ऊपर डोमिनेट करती नजर आई। एंड कोशिश करनी पड़ेगी इसको जितना ज्यादा मिनिमाइज कर सके, जितनी कम गलतियां अब यहाँ पर की जाएगी बिग बैम के द्वारा, तो शायद वो यहाँ पर अपने इस दूसरे मैप में, बेशक उनका मैप नहीं है लेकिन जीत दर्ज करते नजर आए। एज आपने यहाँ पर बताई है 52% का इस दोनों का ही यहाँ पर विनिंग परसेंटेज चल रहा है। मैं काफी क्वाइट शॉक्ड हूँ कि ये एसएन मैप किस लिए पिक किया, क्योंकि उनका अगर हम बात करें आरआरक्यू का सबसे अगर आप देखा जाए तो मेरे ख्याल से 60% स्प्लिट का है, बट शायद बैन कर दिया गया था इसी वजह से, अदरवाइज शायद वो जा सकते हैं स्प्लिट के लिए, बट स्प्लिट एक्शन तो देखने को नहीं मिलेगा। अब इसी के साथ हमें करनी पड़ेगी शुरुआत, कुछ ही देर का बस इंतजार है हमारे मैप में स्टार्ट होने को। लेकिन अगर हम हेवन मैप की अगर और हम चर्चा करें, कभी सी साइड कभी बी साइड ए साइड, मतलब एंट्री अगर हो भी रही है हर बार वहां पर, अगर आपने देखा भी, हमने स्टैट्स पे भी कुछ देर पहले देखे थे, वहां पर फ्रैग विंस में जीत मिल रही थी और ऑब्जेक्टिव विंस एक भी बार नहीं जीतने दिया। तो एक वो साफ दर्शा रहा है कि अगर वो डिफेंसिव हाफ में है तो अपना वहां पर स्पाइक डिफ्यूज नहीं होने देंगे मान लीजिए, एंड अगर अटैकिंग साइड में तो प्लांट ही इनिशिएट नहीं होने देंगे बिग बैम का। तो ये तो अभी हमें पहले स्टैट्स मैच के स्टैट्स में देखने को मिलता नजर आया। देखिए एकदम से एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो टीम आरआरक्यू के पास जो रीड था टीम बिग बैम के ऊपर, जो हम देख रहे थे जब अटैकिंग डिफेंसिव हाफ में थोड़ी छोड़िए, वहां पे थोड़ा अग्रेसिव जाके इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी यहाँ पे टीम रेक्स रिगम कियोन ने। बट अगर बात करेंगे अटैकिंग हाफ में जो आरआरक्यू करती हुई नजर आई, वो रीड कर रहे थे। जो पहले ही राउंड में अगर देख लीजिए, हेड हंटर के साथ नेक्सी ने वहां पे पीक किया, उनको पता था कहीं ना कहीं खिलाड़ी रह सकता है, एंड वो अग्रेसिव भी आ रहे थे, दोनों खिलाड़ी को पनिश करेंगे। तीसरे पिक के लिए भी गए थे, बट जब वहां पे पिक मिल गया उनका, इमीडिएटली ट्रेड लेने के लिए खिलाड़ी तैयार थे। When that happened, वहां पे नंबर्स का एडवांटेज मिल चुका था आरआरक्यू को, एंड दे वर जस्ट रियली कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अगले राउंड की अगर बात करेंगे, जब भी वो ए साइड पे जाने के लिए मौका ढूंढ रहे थे, दे वर रेडी एंड होल्डिंग इट आउट। बी साइड एग्जीक्यूशन अगर बात करेंगे, वहां पे भी उन्होंने एक बार सीधे गए, अगर कोई मौका नहीं मिला, जी हाँ वापसी करते हुए नजर आए। बट जो प्ले था 2GE के तरफ से, जो एस का राउंड था उन्होंने जो निकाला, कॉन्स्टेंटली स्पाइक एंड डार्ट के तरफ से वो पिंग हो रहे थे। आई मीन हमें पता है वो कितना अनोइंग होता है गेम्स, क्योंकि जब भी वो पिंग होता है, यू काइंड ऑफ फ्रीक आउट की मेरा लोकेशन पता चल जा रहा है, एंड हर वक्त मैं कहीं भी जा रहा हूं तो उनको पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ पे स्पाइक इनिशिएट हो सकता है, कहाँ पे राउंड निकालना चाहता हूँ। बट ही वाज यूजिंग दैट एज बेट, एंड बेट यूज करने के बाद भी उनको एस मिला, ना कि वहां पे 3K या 4K, उन्होंने एस निकाला, उन्होंने अकेले वो एक पूरा राउंड, जी हाँ नेक्सी के साथ मिला। नेक्सी वहां पे स्पाइक भी प्लान करे, नेक्सी तैयार थे, अगर 2G वहां पे गिरते हुए नजर आए, नेक्सी इमीडिएटली ट्रेड लेने के लिए तैयार थे। बट 2GE के पास जो कॉन्फिडेंस था, एंड जो हर राउंड पे खेलते हुए नजर आया अटैकिंग हाफ में, ही जस्ट प्रूव्ड कि हर एक खिलाड़ी
आरआरक्यू की तरफ से जब उतरना था उनको अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना था, लेते हुए नजर आ रहे थे गेम्स। अगर ऐसे ही खेलते रहे आरआरक्यू, आई थिंक इट कैन बी इजी फॉर देम। बट टीम बिग बैम जैसे हम बात कर रहे थे, उनके जो हैवी हिटर्स है यहाँ पे थे एनटीके एज वेल एज नथोंग, ये या दोनों जो खेलते हुए नजर आ रहे थे जब भी 3K 4K निकाल रहे थे, दिस वाज जस्ट ब्रिलियंट। बट अभी देखेंगे जैसे बात कर रहे थे उनके ऊपर एजेंट सिलेक्शन के ऊपर कौन कौन सा पिक आएगा। यहाँ पे फ्लैश वापस आ चुके हैं आरआरक्यू की तरफ से। मैं इनको जरूर मिस कर रहा था, बट इनके पास देखिए एक और एक्स्ट्रा खिलाड़ी है जिसकी वजह से मिक्स एंड मैच करते रहते हैं। 2G ऑन द इनिशिएटर नाउ। नेक्स्ट ये अभी चलेंगे सेंटिनल के ऊपर। केली जैसे हम ड्यूलिस्ट की जैसे बात कर रहे थे, वही ड्यूलिस्ट के ऊपर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैक्सी विद एन ओमन डॉफ यहाँ पे स्विच करेंगे केओ के साथ। नॉटोंग स्विचेस टू अ सेंटिनल, दैट इज गोइंग टू बी चेंबर। मॉप यहाँ पे स्विच अप करते हुए नजर आएंगे ऑन द फेड इनिशिएटर। पीना यहाँ पे जैसे आज हम देख रहे थे, अभी भी आशा के ऊपर खेलते हुए नजर आएंगे। एनटीके एज वेल लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज चैट। तो कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे जो असेंट का ये एजेंट सिलेक्शन है, इट लुक्स रियली गुड इन टर्म्स ऑफ अगर बात बोलेंगे कि डबल ड्यूलिस्ट सेटअप है, क्योंकि हमें पता है चेंबर एक्ट्स एज द सूडो ड्यूलिस्ट। तो हम यहाँ पर अगर आप देखें कैटेगरी वाइज में, तो यहाँ पर आप अगर आप बात करें कैटेगरी, तो वहाँ पर एस्ट्रा है, तो इधर ओमन है, वहाँ पर जेट है, तो यहाँ पर रेज है। तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। मुझे लगा था कुछ ऐसे कॉमन एजेंट्स हो सकते हैं दोनों के पिक द्वारा, बट ऐसे देखने को नहीं पा रहे। वहाँ पर सुबह है तो इधर के हुआ है, तो ये चीज रहेगी। और अगर उधर चैम्बर है तो यहाँ पर केजे है। मजा काफी यहाँ पर आने वाला है। ये ग्राफिक्स के जरिए वो चीज हमें देखने को मिल पा रही है कुछ ही देर के अंदर। बेशक अभी यहाँ पर अभी अगर हम बात करें, कुछ देर का बस और इंतजार करना पड़ेगा। टॉपिक में आने वाला था यहाँ पर कि सैम क्या लगता है कौन से एजेंट्स पिक्स यहाँ पर होने वाले, बट हमारे सामने स्क्रीन ही आ चुकी है और पता चलता है कौन कौन से एजेंट्स यहाँ पर पिक किए गए हैं। तो कोशिश रहेगी अब यहाँ पर, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर एसेंट में, बिग बैम यहाँ पर स्टार्ट करेगी डिफेंसिव हाफ से। कोशिश एटलीस्ट 7 राउंड वो निकालने की। डिफेंसिव मैप है, डिफेंसिव ओरिएंटेड मैप है। अगर यहाँ से वो 7 मिनिमम राउंड नहीं निकाले गए तो फिर आपको पता है कि रिजल्ट किस प्रकार यहाँ पर निकाला गया आरआरक्यू के द्वारा। और उनका एग्रेशन हमने वो अटैकिंग हाफ में देख ही लिया था। पिछले जो हमने मैप की अगर बात करी इवन की, वो हमने देख लिया है। एंड आपने एक चीज़ की बात करी थी कॉन्फिडेंस, तो जी हाँ देखिए गन पावर क्षमता दोनों में है, उसमें कोई दोहराए नहीं है। हेडशॉट परसेंटेज काफ़ी अच्छे वो स्टैट्स नजर आ रहे थे, डैमेज भी अच्छा खासा दे रहे थे, लेकिन दिक्कत आ रही थी वो कॉन्फिडेंस, वो जो मोमेंटम खुद बिल्ड होने दिया बिग बैम ने आरआरक्यू के लिए। अगर वहां पर रुकावट आ जाती, अगर कुछ ऐसे राउंड निकलते, मान लीजिए अगर 2 राउंड निकाल रहे आरआरक्यू, 1 राउंड यहाँ पर बिग बैम, ये कुछ बीच में रुकावट आनी चाहिए थी जिससे मोमेंटम उनका ब्रेक हो जाता और शायद ये इस तरह का स्कोर हमें देखने को नहीं मिलता। होपफुली अभी तो मैं बस यही बोलूंगा, क्योंकि वी ऑल नो कि ये एक डबल एलिमिनेशन, ये एक फॉर्मेट हमें देखने को मिल रहा है इस प्लेन्स में। उन्हें पता है कि अगर यहाँ पर हार का सामना करने को मिला तो लोअर ब्रैकेट, बट वहां तक क्यों जाना? अभी आपके पास मौका है, तो इस मैप को यहाँ पर जीतने की कोशिश कीजिए, डिसाइडर मैप की तरफ लेके जाइए। हु नोज, अगर मान लीजिए उन्हें मेहनत की तो वो भी जीत दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कल के भी मैप्स की अगर हम बात करें, कल अगर हम बात करें बूम ई स्पोर्ट्स, सर्बरस की बात की जाए, ब्लीड ई स्पोर्ट्स एंड गेटो आर्टिस्ट की बात करें, वहां पर भी कुछ ऐसे मैचेस हमें देखने को मिले थे कि पहला मैप टीम हारी थी, अपने मैप में भी हारी थी, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 2 मुकाबले जीती। तो कुछ भी पॉसिबल हो सकते हैं, वो करके दिखा सकते हैं, तो आप में भी वो क्षमता है। देखिए गेम्स जो आजकल ये काइंड ऑफ अगर बोल सकते हैं एक ट्रेंड है कि आप ओपोनेंट के मैप में जीते हुए नजर आएंगे एंड वो आपके मैप में जीते हुए नजर आएंगे। आखिर में जाके डिसाइडर को ऊपर ही एक मुकाबला होता है जहां पे आपको पता चल जाता है कौन एक बेहतरीन आई वुड से खेलते हुए नजर आएंगे एक टीम, एंड ऑल्सो उस दिन उस मैप में जो डिसाइडर है वहां पे कौन सी टीम बेहतरीन तरीके से अपना स्ट्रैटेजीज खेल पा रही है। बट जी हम जो बेंच भी अगर देख रहे, जो भी पिक्स देख रहे, वहां पे 1-2 मैप्स कहीं ना कहीं हम सोच जो रहे कि ये मैप आना चाहिए, वो बैन होता हुआ नजर आ रहा है। जो हम सोच रहे ये बैन होता हुआ नजर आना चाहिए, वो पिक होता हुआ नजर आ रहा है। बट जैसे हम शुरुआत में सोच रहे थे, आई थिंक दिस शुड बी कि वही स्ट्रैटेजी के ऊपर खेला जा रहा है जो नॉर्मल आई वुड से इन जनरल मैप से जो वैलोरेंट में बहुत टाइम से देख रहे हैं हम लोग, उसी मैप में खेल के क्वालिफाई होना चाहते हैं। जब आएगा जो रिस्क मूवमेंट आएगा उनका, जो ग्रुप स्टेज में जाएंगे, जब प्लेऑफ्स में खेलेंगे, तब जब उनको एक मौका मिलेगा कि कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज के साथ स्टार्ट करेंगे, उनका एक स्ट्रॉन्ग मैप जिसका एक स्ट्रैटेजी अभी तक उन्होंने रिवील नहीं किया, उसका चॉइस लेते हुए नजर आ सकते हैं। एंड थिंक उसी के लिए होल्ड कर रहे हैं। बट असेंट जैसे आपने बात किया था, जो डिफेंसिव हाफ में कमाल करते हुए नजर आए यहाँ पे आरआरक्यू ने, आई थिंक अगर वही डिफेंसिव कमाल टीम बिग बैम करती हुई नजर आएंगे, देन आई थिंक दे शुड हैव अ गुड राउंड। क्योंकि अगर आरआरक्यू की बात करेंगे, जो डिफेंसिव हाफ है स्पेशली हेवन पे उन्होंने निकाला, इट वाज 4 to 5 राउंड्स। बट अभी चलेंगे असेंट के मुकाबले के ऊपर। शुरुआत होगा जैसे आपने बताया टीम बिग बैम क्या डिफेंसिव एडवांटेज ले पाएंगे, देखना पड़ेगा गेम जोन।
चलिए यहाँ पर फाइनली जिसका हम इंतजार कर रहे थे मैप नंबर 2 के आगाज होने का, वो फाइनली हमारा हो चुका है स्टार्ट। फिलहाल के लिए कोशिश है यहाँ पर ए साइड अप्रोच करनी, बट इंस्टेंट आप रोटेशन देखिए, बढ़ रहे थे ए साइड की तरफ बट मिड अप्रोच करके अब कोशिश कर रहे हैं कि बी साइड पहुंचा जा सके मिड मार्केट के थ्रू। देखेंगे जरूर क्या उनको मौका मिलेगा। वेरी अग्रेसिव के लिए अंदर एंट्री ले चुके हैं बट अपना शॉट मिस करेंगे नाथोंग, जिसकी वजह से यहाँ पे उनको पूरा कंट्रोल मिल चुका था। बट नाथोंग इमीडिएटली स्विचेस टू इस क्लासिक, 2 पिक्स निकालेंगे एंड T2GE देखिए पिछले बार भी बहुत मेहनत कर रहे थे ऑन कंट्रोलर और एस्ट्रा, इस बार स्विच अप कर चुके हैं ऑन फेड बट अभी भी डैमेज कर चुके हैं। स्पाइक प्लांट करने के लिए एंट्री भी मिल चुका है। 4v3 रीटेक की रिजर्व। देखिए अभी के लिए अगर देखा जाए तीनों खिलाड़ी मौजूद है, ऐसा नहीं कोई खिलाड़ी आपको गैराज साइड आपको बी मेन की तरफ नजर आए, जी नहीं, सभी खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पर साइड की तरफ। फिलहाल के लिए नियर साइटेड हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार का 1v1 का सिनेरियो बचा हुआ, ट्रेल बन चुका है, उन्हें पता है कहां पर वो एग्जैक्ट खिलाड़ी है। वेट ज्यादा नहीं करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, अप्रोच करेंगे एंड हियर वी गो, फ्लैश के द्वारा वो क्लासिक पिक एंड पहला राउंड। बट दाद देनी पड़ेगी नंबर्स ना होने के बावजूद भी एग्जैक्टली यहाँ पर। बट इसका श्रेय ये जो लास्ट पिक निकाला गया है, अगर हम बात करें फ्लैश के द्वारा, मान लीजिए अगर नहीं आता वहां पर ट्रेल नहीं बनता, उनको नहीं पता चल पाता एग्जैक्ट कहां पर है खिलाड़ी। केमजो जो यहाँ पे बैक एंड फोर्थ हो रहा है स्पेशली विद नंबर डिसएडवांटेज, आई थिंक इसके लिए बिल्कुल तैयार भी नहीं थी टीम बिग बैम। बट जैसे खेल रहे RRQ विद वेरी लेस इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं, उनको पता था जो तीनों खिलाड़ी थे वो एंट्री ले चुके थे, फिर भी जब रीटेक का एक सिचुएशन आया दे वर गिविंग देम हाफ इन्फॉर्मेशन, उनको पता नहीं चला। बट अभी देखिए इन्फॉर्मेशन इस बार भी निकल चुका है कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हो सकता है। डॉफ गोइंग इन फॉर जंप स्टिक, पनिश होंगे, ही इज ड्रॉप टू 48। आई मीन एक और स्ट्रे बुलेट, स्पेशली वो स्पेक्टर है, वो अगर कनेक्ट हो जाए एंड वहां पे वो एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। उसी बीच कहीं ना कहीं थोड़ा आई वुड से प्लेयर्स को पुल ऑफ करने के लिए दूसरी डायरेक्शन में वहां पे 2 खिलाड़ी जैसे हम देख रहे हैं जिन्होंने भी केली एज वेल एज नेक्सी साथ देके आगे बढ़ने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं। बी लॉबी का कंट्रोल जरूर मिल चुका है, मॉफ का उन्होंने साउंड क्यू सुन चुके हैं, बट इस बीच फ्लैश आल ड्रोन से इन्फॉर्मेशन निकलने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं बट उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। मॉफ ट्राइंग टू काइंड ऑफ फाइट आउट, बट देखिए उनको सोच समझ के खेलना पड़ेगा गेम्स। अगर बी साइड में एक पिक मिल गया देन वी माइट सी द रोटेशन कमिंग थ्रू, बट पिक मिलने से पहले ही रोटेशन आ रहा है बिकॉज दे हैव पुश्ड मॉफ बैक एंड इमीडिएटली देखिए रोटेशन आ रहा है एंड बाकी खिलाड़ी ए साइड से अभी रोटेट कर रहे हैं। बट इस बीच द अटैकर्स वो ऑलरेडी एक बड़े रोटेशन पे निकल चुके थे, तो उनको कहीं ना कहीं आसानी होना चाहिए साइट में एंट्री लेने के लिए। बट जी हाँ, डिफेंडर्स के वजह से उनको थोड़ा फायदा तो मिलता है रोटेशन पे, थोड़ा आसान से रोटेशन करने के लिए एंड रोटेट करते हुए यहाँ पे साइट के अंदर आ रहा है। बट लुक एट दिस अग्रेसिव पोजीशन फ्रॉम केली। से वेट करेंगे आपस में, लेकिन इंफॉर्मेशन जिस प्रकार निकाला गया 3v2 का स्प्लिट था, वहां पर 3 खिलाड़ी मौजूद थे मेन की साइड। जब पता चलता है कि एक ही खिलाड़ी मॉफ वहां पर मौजूद है, इजिली उनको निकाला गया और साइड पे कंट्रोल लिया गया। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए 2G वेट करेंगे, स्टिक टू द वॉल रहने वाले हैं, बट देख लिया उन्होंने और मुझे लग नहीं रहा यहाँ पर एंटी के यहाँ पर पीक करने वाले हैं। वो वेट करें कुछ स्किल्स यहाँ पर सिक्योर करने का, लग नहीं रहा वो इरादा की साइड रीटेक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चाहते हैं वो यहाँ पर। देखिए इस बार उनके पास कोई वेपन नहीं है क्योंकि एंड अगर जाएंगे आगे तो अगर उनका वेपन शुद्ध गवाएंगे देन दैट्स एन इकोनॉमी डैमेज जो करना नहीं चाहते फॉर द साइड ऑफ टीम RRQ। बट फिर भी एक वेपन गवाया बिकॉज ऑफ एनटीकेस मार्शल, बट विद 4K केली हंट पे निकल चुके थे सिर्फ और सिर्फ 20 HP पे। मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं अगर वेपन गवाएंगे इकोनॉमी डैमेज होगा, मुश्किल हो सकता है। बट लाइक देखिए ऑलरेडी हम नकेल चुके हैं टीम बिग बैम को, उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पे हम तोड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो राउंड भी है हम प्लेयर्स को एलिमिनेट करते हुए जीत जाएंगे एंड जी जीत भी चुके हैं 2-0। ये मैं पिक की बात करते हैं सैमा, वो वेट कर रहे थे वो कितने खिलाड़ी वहां पर पीक करेंगे उनकी तरफ से। बट यहाँ पर रेज आप कैली का आप एंट्री देखिए किस तरह से वो बढ़ते हैं, वो बढ़ सकते थे बीच से साइड से आराम से वॉकिंग, बट नहीं, उनको चाहिए थे स्किल्स और जी हाँ वो के उन्होंने यहाँ पर निकाले गए। लेकिन अब इंपॉर्टेंट राउंड रहे क्योंकि अब यहाँ पर कंप्लीट पाए है, बट फिलहाल के लिए एनटीके मेरे ख्याल से मुश्किलें आ सकते हैं। उनका डैश इन भी है वो भी खत्म हो चुका है, पीछे अपने आप को धकेलेंगे ताकि बचा सके। लेकिन अभी के लिए मिड मार्केट अप्रोच तो सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पर। जी हाँ, जैसे आगे बढ़ेंगे स्विचेस का कंट्रोल मिल जाएगा उनको। आई थिंक बी मेन से भी पुश आना चाहिए, बट नतोंग मेकिंग इट डिफिकल्ट। केली को एक पिक मिलेगा और नतोंग और मॉफ साथ देते हुए नतोंग को 4K मिलेगा। ही जस्ट क्लीन्स ऑल द प्लेयर्स ऑफ
एंड पहला राउंड यहाँ पे टीम बिग बैंग को मिलता हुआ एंड जरूरी था यहाँ पे राउंड गेम जो, क्योंकि ये राउंड उनका फुल बाई था। अगर इस राउंड को गवाते बोनस आरआरक्यू को मिल जाता है, उसी के बदौलत उनको चौथा पॉइंट भी मिल जाता, चौथा राउंड भी मिल सकता था। मेकिंग श्योर डज नॉट हैपन। नॉट ऑन द स्टेशन थे, देखिए उस चेंबर के साथ ही डिड नॉट मूव एट ऑल। सेकंड लेन पे तैनात है एंड उसी पोजीशन पे 4 खिलाड़ी को एलिमिनेट करते हुए नजर आएंगे नताओंग। लग रहा था कि आरआरक्यू कुछ ज्यादा जल्दी में वो चाहते थे कि अपने वेपन्स यहाँ पर Ultimate बाय भी आ करके चुका आए। है। जी हाँ, अब अल्टीमेट्स के अब यहाँ पर रहेगा, बट किस प्रकार उपयोग करते हैं वो देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए एक एजेंट को सप्रेशन पता चल चुका है कि खिलाड़ी मौजूद है वहाँ पर। ड्रैक्सी तो ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है एंड तैनात है, बट इस बार सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी थे जो होंगे नेक्सी। बट उस बीच देखिए आगे बढ़ने के लिए मौका ढूंढ रहे थे, थोड़ा अग्रेसिव ए लॉबी पे खेलने के लिए मौका ढूंढ रहे थे। अगर चाहते कहीं ना कहीं एक ट्रेड करने के लिए मौका रह सकता था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ड्रैक्सी थे। बट इस बीच मिड को क्लोज ऑफ करके आई थिंक ये एग्जीक्यूशन ट्रीज की तरफ होने वाला है। दे क्लोज ऑफ एंड ब्लॉक्ड ऑफ द विजन एट मार्केट एंड स्लो यहाँ पे एक पेस्ड अप्रोच लिया जा रहा है, मिड को होल्ड कर रहे हैं and okay they're actually going in for the market push again, but देखिए 2D force active है, 2D force के ऊपर खेल के सोच के यहाँ पे खेलना पड़ेगा। अगर गलती करेंगे मुश्किल हो सकता है, बट आई थिंक थोड़ा पैसिव एंगल्स होल्ड करके इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, उसी की वजह से सिर्फ और सिर्फ मिड को होल्ड करके दूर से खेला जा रहा है। एंड फाइनल जो मैं बात कर रहा था ट्रीज का अप्रोच अभी जा रहा है यहाँ पे आरआरक्यू। टाइम अगर आप नेक्सी का देखेंगे, एक और चाहिए, एक अल्टीमेट और चाहिए, और उनका यहाँ पर जो लॉकडाउन है वो एक्टिव हो सकता है। बट जैसे एंट्री करते हैं पॉप के द्वारा वो इनिशियल 2 पिक्स, उसके बाद पीना भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ट्रेड बेशक आ चुका है, लेकिन अपना काम कर चुके हैं, नंबर्स एडवांटेज को क्रिएट कर चुके हैं। बट उसी बीच रैक्सी आएंगे, उम्मीद फिर से जगाएंगे एंड साथ ही साथ यहाँ पर उनके फेट का भी साथ यानी 2G का भी साथ मिलता हुआ, और ये इंस्टेंटली क्या ही गेम पलटा है। लग रहा था कि बिग बैम यहाँ पर निकाल सकते हो, देखिए फिर से वही सिचुएशन क्रिएट होती हुई 1v1। लेट्स फाइंड आउट कौन निकाल के जाएगा। देखेंगे जरूर। नथोंग ऑन 1v1 हेड हंटर के साथ तैनात है, उनका जो 2D फोर्स है वो भी था, बट मुश्किल हो सकता है। पोजीशन पता चल चुका है 2GE यहाँ पे देखिए नथोंग को एलिमिनेट करना चाहते ही, वाज प्लेइंग अराउंड विद द यूटिलिटीज एंड जी हाँ 2GE एक और बार अपनी टीम के लिए एक और राउंड दिलाते हुए नजर आएंगे विद 3K। कोई खिलाड़ी उनको रोक नहीं पा रहा है। पिछले राउंड में कंट्रोलर पे खेल रहे थे, इस बार इनिशिएटर, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं मौके और ज्यादा मिलता है एंड उसी मौके के ऊपर यहाँ पे वो कंट्रोल एंड ऑल्सो पिक्स लेते हुए नजर आ रहे हैं गेम। बट ये इंपॉर्टेंट था, अगर ये राउंड अगर निकाल देते, अगर बिग बैम अगर ये निकाल देते तो शायद वो मोमेंटम वो वेट कर रहे हैं कब से, मैप नंबर 1 से नहीं मिल पा रहा है, वो शायद मिल जाता, सिचुएशन 2-2 की हो जाती। बट आरआरक्यू को आपने चांस दे दिया तो शायद अब उस चीज के लिए आप तैयार भी रहिए। बट फिलहाल के लिए नेक्स्ट किल निकालेंगे, फर्स्ट ब्लड निकालेंगे और पीछे धकेलेंगे। देखिए बार बार अगर आप अप्रोच देखेंगे, हम आरआरक्यू का देख पा रहे हैं, हर बार ए अप्रोच भी किया जा रहा है, बी अप्रोच भी किया जा रहा है और साथ साथ मिड मार्केट भी अप्रोच किया जा रहा है। तो इसकी वजह से कंफ्यूजन काफी क्रिएट कर रहे हो बिग बैम के फेज में। देखिए वो बहुत क्रूशियल था राउंड गेम, जो उसको अगर नहीं जीते यहाँ पे इको पे आ सकती थी आरआरक्यू, जिससे जो इको पे धकेल चुकी है टीम बिग बैम को। एक प्लेयर्स को आइसोलेट करते हुए पिक्स लेते हुए नजर आए। मॉफ ही ट्राइड टू गो इन फॉर अ फाइट, बट एनटीके का ब्लेड स्टॉर्म एक्टिवेट हो चुका है एंड अगेन वो पहला पिक निकाल चुके हैं। नाउ इट्स 1v3 सिचुएशन फॉर हिम। पहले आप प्लेयर को यहाँ पे देख चुके थे, बट फ्लैश वाज मूविंग, जिसके वजह से वो अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाए एंड एनटीके हारते हुए नजर आए। अगर एनटीके को मौका मिलता, हमें पता है उनका ब्लेड कितना I would say sharp रहता है गेम शो, but this time it did not work. देखिए नियर साइड कर चुके थे प्रोलोस के जरिए, रैक्सी पेना को वहां पर निकालते नजर आए। मतलब आप देखिए जो अगर लास्ट मोमेंट पे अगर आप देखेंगे, हर बार अगर देखेंगे तो एक पॉजिटिव ट्रेड निकल रहा है आरआरक्यू की तरफ से। फिलहाल के लिए देखिए इतना दिक्कत भरा राउंड नहीं था क्योंकि वेपन्स नहीं थे, एक इको राउंड था, बट अब ये इंपॉर्टेंट राउंड रहेगा फॉर द बिग बैम ई-स्पोर्ट्स एंड कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने एक अर्ली पिकॉन्स नहीं दे यहाँ पर आरआरक्यू को। अदरवाइज ओपनिंग मिल गई तो फिर से वो एक क्विक रोटेशन कहीं से भी अप्रोच आ सकता है, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा यहाँ पर बिग बैम को। बट गेम शो यहाँ पे देखिए ओडिन बाहर आ चुके हैं मॉफ की तरफ से। आई मीन असेंट पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप ओडिन पे नहीं खेले, एंड वो ओडिन के साथ आ चुके। केली ही इज कमिंग इन फॉर अ पीक। मॉफ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिगल पीक कर रहा है, बट उनके जिगल पीक के अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, there's Nathong to swing out, but जो स्पाइक है इट्स एट ए।
इस बीच में अगर बात करेंगे जो खिलाड़ी who's just rotating, that's going to be Draxi. वो कहीं ना कहीं अपने टीममेट्स के साथ इंफॉर्मेशन निकाल रहा है कि कहाँ पे हो सकते हैं ज्यादातर खिलाड़ी, कहाँ पे ज्यादातर यूटिलिटी हो सकता है. लॉकडाउन जिसके वजह से इन्फॉर्मेशन बेट आउट किया जा सकता है, बट नातोंग के पास रॉन्डेवू है एंड दैट्स द रीजन ही इज जस्ट वेटिंग इट आउट. बट जैसे उनको पता चल जाएगा कि नानो स्वॉर्म से उनको क्लियर आउट करने के लिए मौका ढूंढ रहे थे, ही जस्ट गोज इन अ लिटिल बिट अग्रेसिव एंड जैसे वहां पे दो प्लेयर्स देखने के लिए मौका मिल जाता है, ही ट्राइज टू क्लियर आउट. बट उसी बीच जैसे लॉकडाउन फिनिश हो जाता है, दे इमीडिएटली एग्जीक्यूटेड ईच साइड. वो टाइमिंग देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे टीम बिग बैम सोच रही होगी दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एंटर एज सून एज दिस आई वुड से लॉकडाउन इज डन. उसी टाइमिंग के ऊपर दे एंटर दैट वे. स्पाइक भी डाउन कर चुके हैं, बट मॉफ को एक पिक जरूर ओडिन से मिला था गेंजो. पर चलिए हॉर्न के जरिए क्या कुछ लोकेशन आ सकते कि नहीं, जी नहीं, कोई फायदा तो नहीं मिला, बट ओडिन के जरिए उन्हें किल तो निकाल दिया है. 2v4 का रीटेक आई गेस एक इम्पॉसिबल था टास्क है. और अभी क्या चल रहा होगा माइंडसेट पे, लग रहा है कि यहाँ पर शायद कॉल आ गया होगा कि आप सेव कर सकते हैं, बट हॉन्ग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं. लग तो रहा था कि चलिए कुछ फ्रैग्स के लिए, बट जी नहीं, यहाँ पर 2v4 अगर वो जाएंगे भी तो शायद मुश्किल में आ सकते हो. और आप देखिए अप्रोच किया जा रहा है उनके ऊपर, मुश्किल टास्क के बट करके दिखा सकने वाले थे, लेकिन नेक्सी ना केवल नताओं को करेंगे, मॉफ को भी वो डाउन करके वो जो सेव करने की उम्मीद थी, सेव किया जा सकता था वहां पर. सैम देखिए ओडिन एज वेल एज एक आई गेस वैंडल या फैंटम जो भी था, बट ओडिन वहां पे गिर चुके हैं उनके हाथों से. That's a huge investment. जैसे हम ऑपरेटर का बात करते हैं, आफ्टर ऑपरेटर इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन ओडिन. बट ये टाइमिंग देखे, as soon as the lockdown got finished at P site, वहां पे सोच ही रहे थे खिलाड़ी टीम बिग बैंग की तरफ से कि हम रोटेट करके जाएंगे बी के साइड पे. वहां पे एंट्री में भी अभी हो रहा है, बट उसी ये लोग एंट्री लेंगे, दे क्लियर आउट साइट एंड ट्रीज एट द सेम टाइम, जिसके वजह से सरप्राइज होते हुए नजर आया बैम. एंड आई थिंक आफ्टरवर्ड्स यू सॉ व्हाट हैपेंड. एक और राउंड जीती हुई नजर आ चुकी है आरआरक्यू, बट टाइम आउट बैम कॉल करते हुए. देखिए बैम ने टाइम आउट पिछली बार भी लिया था गेम्स जब हेवन का मुकाबला हो रहा था, एक राउंड का फायदा मिल रहा था उस टाइम आउट के बाद, बट उसके बाद इमीडिएटली वापस राउंड को लेके आती हुई नजर आ रही थी आरआरक्यू. So I don't know how useful this timeout is going to be. सैम फेक सक्सेसफुल हुआ. वो जिस तरह से लॉकडाउन इनिशिएट किया गया था, प्रिटेंड करवाएंगे कि बस एंट्री होने वाली है, लेकिन हमने देखा ये ए साइड की तरफ पहले से ठान चुके थे, स्पाइकर ए साइड की तरफ मौजूद था एंड जैसे वो किल निकाला गया तुरंत ही एक साइड कंट्रोल. बट फिलहाल के लिए ये एक इको राउंड रहने वाला है बिग बैम के लिए. मुझे लगा था शायद हो सकता था कि इसके बाद वो यहाँ पर टाइम आउट लेते, बट जी नहीं, पहले से यहाँ पर अप्रोच मतलब पहले से वो टाइम आउट लेकर बता दिया गया कि क्या आपको करना पड़ेगा. बेशक ये राउंड हारे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगला राउंड आपको नहीं हारना है, इसका ध्यान रख के चलना पड़ेगा. और अप्रोच अगर आप देखिए एग्रेसिव में आगे गए जरूर थे, लेकिन तैनात तैयारी में थे यहाँ पर आरक्यू खिलाड़ी. जी हाँ, केली भी अपने पेंशन से एक पिक बी नाउ. ओह माय गॉड, दैट शेरिफ शॉट्स आई वुड से बहुत दर्दनाक था. आई मीन महसूस भी हो चुका है वहां पे आरआरक्यू को, बट नंबर्स हैं उनके पास. स्पाइक भी प्लांट कर रहा है, आखिरी खिलाड़ी नतोंग. आई मीन इतना दूर थे अपने टीममेट से, अभी रोटेट करके आना पड़ेगा. ही इज जस्ट वरीड अबाउट कि कहीं ना कहीं एक लेट लर्कर अगर हो जाएगा, मे बी ट्रीज से कोई खिलाड़ी पुश कर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ऑल दीज थिंग्स गोइंग ऑन हिज माइंड, बट कोई भी खिलाड़ी उनको पुश नहीं कर रहा है, दे आर जस्ट होल्डिंग डाउन. बट मौका मिल सकता है, हमने देखा है बहुत खिलाड़ियों को हेडहंटर के साथ कमाल करते हुए. नतोंग ही स्लोली गोइंग अप, जनरेटर में एक पोजीशन पता चल जाएगा, बट 2G इज एनफ. दूसरे खिलाड़ी वहीं पे रैप्टर्स के बाजू में बॉक्स के ऊपर खड़े थे, बट 2G वहीं पे इनको एलिमिनेट करेंगे एंड यहाँ पे छठा पॉइंट मिलता हुआ आरआरक्यू को. इट्स लुकिंग वेरी डिफिकल्ट गेम. सो देखिए हम बात कर रहे थे कि हेवन का मैप अटैकिंग फेवर्ड मैप है, जहाँ पे आरआरक्यू डोमिनेट करती हुई नजर आए. अभी असेंट है जो डिफेंस फेवर्ड मैप है, डिफेंस में भी यहाँ पे डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है आरआरक्यू. बिल्कुल. एंड शायद मेरे ख्याल से जितने भी बेंचमार्क होते हैं ना, लाइक डिफेंसिव और अटैकिंग के, वो अभी के लिए ब्रेक करती नजर आ रही है. 7 हम राउंड बोल रहे थे एटलीस्ट निकाले यहाँ पर बिग बैम, बट आरआरक्यू कुछ और ही यहाँ पर सोच के आ रखी है. वो एक तरह का डोमिनेशन यहाँ पर दिखाना चाहते हैं और बाकी टीम्स को भी मैसेज देना चाहते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला है, और वो अभी तक उसमें सक्सेस उनको मिल रही है. फिलहाल के लिए इंजन की तरफ एक खिलाड़ी जरूर रहेगा एंड ये नाइटफॉल के जरिए इनको भी यहाँ पर मिलती नजर आई खिलाड़ियों की ट्रेल मार्क जो बनेंगे. केली जब भी अपने अल्टीमेट इस्तेमाल किया, हर वक्त उनको फायदा मिला है. यहाँ पे फ्लैश भी कहना प्लेयर को टैग करने के लिए मौका ढूंढ रहे थे, बट कोई मौका नहीं मिला. दे डिड डॉज. पिंग आउट हो चुका था उनका पोजीशन, टैग हो चुके थे वो खिलाड़ी, बट कोई हंटर्स फ्यूरी से कोई टैग नहीं मिला. अभी देखिए साइड में एंट्री ले चुके हैं, बट काउंटर अल्टीमेट यहाँ पे जरूर आएगा.
कैन दे एक्चुअली विन दिस आउट, क्योंकि ऑडियो डेफिनेटली डिके हो चुका है, उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ एक पिक में मिलेगा, बट नाथोंग एंड मॉफ डबलिंग डाउन कैपिटलाइज करेंगे, इमीडिएटली प्लेयर्स को एलिमिनेट करेंगे। आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे बचते हुए नेक्सी, ही इज इन द 1v2 ड्यूओ, दोनों स्विंग आउट करने के लिए मौका ढूंढेंगे, बट नेक्सी ही क्लचेस इट, 3K फॉर हिम। यहाँ पे क्लच मास्टरों से भरा हुआ है आरआरक्यू का टीम गेम जो, एंड स्पेशली दैट गाय, इससे पहले भी उन्होंने करके दिखाया ये चीजें, उनके लिए वो बोल रहे कि अब आज वो चीज मामूली सी हो रही है, बट उसके लिए रीजन है यहाँ पर वो मौके जो दी जा रहे हैं। आप ये देखिए दोनों तरफ से आप वो फंस चुके थे, आए जरूर थे, कोशिश यहाँ पर नाथोंग ने काफी अच्छी करी। आप अगर आप उनके रिफ्लेक्स देखेंगे एक के बाद दूसरा पिक भी यहाँ पर निकालेगा, लेकिन नेक्सी ये उनसे ज्यादा फास्ट हमें नजर आए। बट एंट्री जिस प्रकार यहाँ पर दिलाई गई थी, वहाँ पर नाइटफॉल का इस्तेमाल एंड ड्रोन का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। बट फिलहाल के लिए 7-1 8 राउंड यहाँ पर बीत चुके हैं, आखिरी 4 राउंड है, इसके बाद साइड स्विच इन हमें देखने को मिलती नजर आएगी। स्पाइक छोड़ा गया है साहब, आप देखिए इस बार कुछ और मुझे लग रहा है प्लान बी कुछ चल रहा है माइंड साइड पे। देखिए टू डी फोर्स एक्टिवेट है, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो खेलने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जब टू डी फोर्स एक्टिव हो जाता है, अगर स्पाइक कैरियर का ऊपर एक पहला पिक मिल जाता है, स्पाइक उनके सामने गिर सकता है, उसको रिकवर करने में और भी ज़्यादा खिलाड़ी अगर आगे जाएंगे देन मे भी मुश्किल और ज़्यादा हो सकता है, हर एक प्लेयर वो गंवा सकता है। ट्रेडमार्क बहुत अग्रेसिव लगाया गया था, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन तो निकाल दिया गया है कि जब ट्रेडमार्क तोड़ा गया है तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी बी मेन की तरफ होना चाहिए। ट्रॉलर बाहर आते ही मॉफ की तरफ से उसको डिस्ट्रॉय जरूर किया गया है, बट देखिए अभी भी स्पाइक बहुत स्लो खेल रहे हैं, बट अभी भी मुझे जो एग्जीक्यूशन लग रहा है ना गेम जो, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी एट ई साइड इटसेल्फ। तो चलिए यहाँ पर पता चल जाएगा हॉर्न के जरिए, लेकिन अगर आप देखेंगे नेक्सी के पास मौका है वहां पर एटलीस्ट और उठाने का, और एक पिक निकाल देते हैं तो लॉकडाउन फिर से इनिशिएट वो कर सकते हैं, साइड क्लियरेंस वो दिखा सकते हैं। बट अगर आप ओमन की तरफ देखते हैं, जी हाँ मुझे लग रहा है कि कुछ ही देर के अंदर बी साइड की तरफ ही कमिट होता नजर आए, क्योंकि समय अब ज्यादा नहीं बचा है, 30 सेकेंड 5v5, ये मजा आने वाला है यहाँ पर कि किस प्रकार वो साइड कंट्रोल लेंगे, और अगर कंट्रोल होता भी है तो रीटेक किस प्रकार करेगा यहाँ पर बिग बैम के द्वारा। टू डी फोर्स का यहाँ पे पता चल चुका है, बट एज यू सेड मुश्किल जरूर हो सकता है। साइड के अंदर एंट्री ले चुके हैं फ्रॉम द शैडोज, बट इमीडिएटली कैंसिल करेंगे उसको क्योंकि उनको पता है बहुत ज्यादा खिलाड़ी है, टाइम बीता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड रहने वाला। 2G को एक पिक मिलेगा, एनटी के एंड नाथोंग मेकिंग इट डिफिकल्ट, फ्लैश एंट्री लेंगे, पीना एज वेल एज नाथोंग अभी भी तैनात है, नेक्सी उनको एलिमिनेट करेंगे, बट टाइम बीत चुका है, राउंड जा चुका है, अगर स्पाइक भी प्लान करने के लिए मौका ढूंढेंगे मुश्किल हो सकता है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। वहां पे फाइट लेने के लिए आखिरी 2 खिलाड़ी को एलिमिनेट करने के लिए मौका ढूंढ रहे थे, बट इट डिड नॉट हैपन। आई मीन कहीं ना कहीं जो आखिरी 30 सेकंड पे उन्होंने कमिट करने का सोचा ना गेम, जो वहां पे बहुत बड़ी गलती हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा खिलाड़ी बी साइड पे तैनात थे, स्पेशली द 2D फोर्स फ्रॉम नाथोंग। देन वी कैन से को थ्रिफ्टी ही था एक तरीके से, आपने अगर देखा वो बेशक राउंड खत्म होने के बाद वो किल्स निकाले जरूर गए, सिक्योर किए गए, बट वो एक काइंड ऑफ थ्रिफ्टी। आप देखिए वेपन्स नहीं थे उनके पास, और कुछ ऐसे राउंड्स और निकालने पड़ेंगे, एटलीस्ट ये स्कोर 7-5 तक भी लेके जा सकते हैं यहाँ पर टीम। 3 राउंड और बचे हुए हैं, और अगर 5 राउंड भी अगर आ जाते तो बिग बैम यहाँ पर खुश रहेगी कि उनके पास एटलीस्ट कुछ राउंड है अपने आप को बचाने के लिए। अटैकिंग हाफ में आएंगे तो लेट्स फाइंड आउट वो शुरुआती पिस्टल राउंड के ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि जितने बचे हुए राउंड है सब बिग बैम या डिफेंसिव हाफ में आते हुए नजर आए। स्लो राउंड वापस, आई मीन देखिए आरआरक्यू को भी पता चल चुका है, अगर बहुत अग्रेसिव एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं एक क्रॉस फायर एस्टैब्लिश करते हुए नजर आ रही है बिग बैम, जिसकी वजह से मौका ही नहीं मिल रहा है उनको, एंड आई थिंक उसी के ऊपर यहाँ पर स्लो खेला जा रहा है टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। पिछले बार अगर बात करेंगे वो 2D फोर्स जो था नाथोंग के ऊपर, दे नेवर गॉट द इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पे खेल रहे थे नाथोंग, एंड आई थिंक उसके वजह से मुश्किल उनको जरूर हुआ, एंड वो इफेक्ट भी पड़ा जब बैम प्लेयर्स को एलिमिनेट करते हुए नजर आए, एंड राउंड भी उनके हाथों आ गया। इस बार नॉट ओनली कि 2D फोर्स जा चुका है, बट पिछले राउंड में जैसे आप बता रहे थे वीकर बाइस थे, इस बार फुल बाइस नजर आ रहे हैं। ऑल्सो दे हैव द अल्टीमेट नल कमांड है, उसके साथ उनके पास कॉस्मिक डिवाइड भी है, अगर नल कमांड एक्टिवेट होता है सही टाइम पे कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन को रोका जा सकता है। स्पाइक ए पे आ रहा है और वहाँ पे डॉफ भी ए साइड पे नजर आ रहा है, प्लेयर को देख चुके हैं, बट डॉफ कुछ करने से पहले वहाँ पे नेक्स्ट उनको एलिमिनेट करेंगे, बेहतरीन तरीके से वहाँ पे पैरानोया जरूर आएगा, इन्फॉर्मेशन निकाला जाएगा, बट पीना ही गेट्स अ 3, मेक इट अ 4th, आखिरी खिलाड़ी है वहां पे, एंड ही एसेस इट। एक ही स्प्रे में लाइन ऑफ फायर में वहां पर खिलाड़ियों को आ जाना एक ही जगह पर, एक किल होता 2 किल जाते, बट बाकी खिलाड़ी वो अप्रोच जिस प्रकार करा, एंड आप देख सकते हैं मुझे लग रहा है शायद कहीं एक टाइम आउट ना ले लिया हो, लेकिन आप देखिए ये जो पहला किल था उसके बाद दूसरा दिन, उसके बाद जैसे ही उनके पास वेपन आता है, उन्होंने शॉक डर्ट का इस्तेमाल करा था सोहा ने, फ्लैश ने,
जब तक वेपन आता, लेकिन पीना की जरूर दाद देनी चाहूंगा यहाँ पर मैं, जिस प्रकार राउंड निकाला गया और जो मुझे लग रहा था यहाँ पर एक टाइम आउट लिया गया। जी हाँ, आरआरक्यू के द्वारा मुझे लग रहा है कि एक टाइम आउट आरआरक्यू के द्वारा जी हाँ लिया गया है, एंड जरूरी भी था यहाँ पर सैम, क्योंकि काफी वक्त से वो जो इस तरह से लगातार 2 राउंड माइट भी हारे थे लगातार, स्पेशली मैं लगातार की बात करूंगा यहाँ पर, एंड वेपन्स की बात की जाए तो लिए जा सकते हैं। अब अगर हाफ शील्ड अगर आप देखेंगे यहाँ पर कैली के द्वारा, एटलीस्ट हाफ शील्ड एंड एक कंप्लीट वेंटल यहाँ पर फैंटम के साथ, बट जो भी था बहुत फास्ट फॉरवर्ड एक पुश हमें देखने को मिलता नजर आया था। अदरवाइज हर बार जब भी आरआरक्यू के खिलाड़ियों का किल निकल रहा था, अगर मान लीजिए फर्स्ट ब्लड उनका निकल रहा है, वो इंस्टेंट रोटेट करते थे, बट वो मूव जो था उनकी तरफ से ईटी की तरफ अप्रोच करना ही करना है, तो पीना उस चीज के लिए तैयार थे कि आप आइए, हम आपका वेलकम करेंगे जरूर। देखिए जो एक वहाँ पे गलती हुआ जैसे आपने बताया, जी हाँ पीना कैपिटलाइज किए उस गलती के ऊपर, दैट वाज कि दोनों जो एग्जीक्यूशन था ए मेन की तरफ से एंड ट्रीज की तरफ से वो साथ में नहीं हुआ। ट्रीज के खिलाड़ी एंट्री ले चुके थे, ए मेन में अभी तक खिलाड़ी तैनात थे जो एंट्री लेना चाहिए था, एंड देखिए आखिरी खिलाड़ी जब एंट्री लिए तब तक तो सारे खिलाड़ी ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके थे, एंड आई थिंक दैट्स वेयर एवरीथिंग फेल अपार्ट। अगर इस बार भी वही गलती करेंगे देन वी माइट एंड अप सीइंग अ 7-5, क्योंकि चौथा पॉइंट मिल जाएगा, उसके बाद इकोनॉमी आप देख ही सकते हो आरआरक्यू के ऊपर, दे हैव नथिंग टू प्ले विद। लॉकडाउन वापस जरूर आ चुका है एंड किलजॉय का पोजीशन भी पता चल चुका है, एंड किलजॉय के पास ही वहां पे स्पाइक जरूर रहेगा। मिड में एंट्री ले चुके हैं, मिड का कंट्रोल भी मिल चुका है यहाँ पे आरआरक्यू को, बट केली के साथ देते हुए नजर आ रहे हैं ड्रैक्सी। क्या उनको कोई फायदा मिलेगा देखना पड़ेगा मिड के तरफ, क्योंकि मिड के तरफ जो स्टेशन कर रहा है वो होंगे मॉफ, वो ए साइड से जो स्टेप्स है वहां से नजरें गड़ा के बैठे हैं कि कोई क्रॉस करेगा को तो इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, एंड उनको इन्फॉर्मेशन मिल चुका, जैसे वो स्मोक आएगा फ्लैश बेहतरीन तरीके से आएगा, नतोंग को सिर्फ और सिर्फ एक पिक उस स्विंग में, नेक्सी उसका ट्रेड निकालते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आप देखिए एबिलिटीज पे फर्क से चुके थे, बट बाल बचे वहां पर। अगर वो स्प्रे आता, वो विजन ब्लॉक नहीं होता तो शायद वहां पर वो फंस भी सकते थे, बट फिलहाल के लिए एंट्री जो चाहते थे वो उनको मिल चुकी है। 4-4 ये फाइट देखने में काफी मजा आने वाला है, लेकिन यहाँ पर नाइफ के जरिए एक ही खिलाड़ी बस एजेंट सरप्राइज होता नजर आएगा, लेकिन क्या किल निकाल पाएंगे कि नहीं। जी हाँ, वहां पर बड़े हेड ऑफ किल सिक्योर करा है, बट एक ही एंगल चेक करना वो भी बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर सैम। आखिरी खिलाड़ी लॉकडाउन भी है यहाँ पे, डिटेन हो सकता है, जी हाँ दोनों साइड में थे, टाइमिंग दे कमिटेड फॉर इट। देखिए गेम्सो उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं अगर पुश करेंगे, क्योंकि दे पुश ऑलरेडी रीटेक के लिए आ चुके थे जब लॉकडाउन इनिशिएट हुआ, एंट्री लिए थे डॉफ, एंड आई थिंक डॉफ का ही वहां पे कॉल था कि चलिए अग्रेस करते, क्योंकि डॉफ को एक पिक मिल चुका था वहां पे, एंड वो पिक मिलने के बाद डॉफ और भी अग्रेसिव गए थे, बट दैट पॉइंट जहां पे डॉफ ने रेडियनेट बॉक्स का कॉर्नर्स नहीं चेक किया, वहां पे पूरा गलती हुआ, एंड ड्रैक्सी को मौका मिला वहां पे दूसरा पिक भी निकालने के लिए। अगर वो दूसरा पिक नहीं मिलता ड्रैक्सी को देन मे बी दिस राउंड वुड हैव बीन डन, बट जी हाँ जैसे खेलना चाहिए था नेक्सी को अपने अल्टीमेट के ऊपर, जस्ट टू मेक श्योर कि वो अल्टीमेट पॉप ऑफ हो जाए, वो हुआ, फायदा भी मिला वहां पे उनको। दूसरे राउंड तक बढ़ेंगे, बट एनटीके के पास ब्लेडस्टॉर्म भी है एज वेल एज द ऑपरेटर से पहला पिक। नेक्सी एज सून एज ही वांटेड टू गो फॉर अ पीक, वहां पे पैरानोया हो चुके थे जिसकी वजह से डैमेज पड़ा, बट पीना यहाँ पे ड्रैक्सी को एलिमिनेट करके ऑलरेडी कैट ऑफ के ऊपर आ चुके थे, एंड पीना गेट्स अनदर वन। नेक्सी जरूर ट्रेड करेंगे उसको, बट नंबर्स देखिए यहाँ पे 2v4 सिचुएशन ब्लेडस्टॉर्म के साथ अब ट्रैप करेंगे। फ्लैश इज वेरी लो राइट नाउ, बट ट्रीज पे भी देखिए खिलाड़ी ऑलरेडी आ चुके हैं, फ्लैश बीइंग डैमेज विद एवरीथिंग। देखिए उनके ऊपर ब्लेडस्टॉर्म आया, अभी फ्रैगमेंट है, एंड ऑल्सो स्प्रे भी कहीं ना कहीं जब वो जा रहे थे क्रॉसओवर कर रहे थे कनेक्ट हुआ थोड़ी बुलेट्स, बट देखिए डॉर्फ इज जस्ट पुशिंग अप ए मेन, एंड ए मेन से ऑलरेडी मिड आ रहा है गेम्सो। देखिए चांसेस फिलहाल के लिए राउंड खत्म होने के बाद साइड जैसी स्विच इन होगी 8-4 होने के चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं, और जब नंबर्स आपके पास आ जाते हैं तो आप किसी भी डायरेक्शन की तरफ से अप्रोच कर सकते हैं। फ्लैश ऊपर से यहाँ पर देखिए एचपी नहीं है, 20 एचपी सर्वाइव कर रहे, लेकिन स्टिल ट्राई जरूर कर रहे थे। देखिए आखिरी एचपी तक वो अपने आप से अपनी टीम के लिए कोशिश जरूर कर रहे थे, पर अनफॉर्चुनेट रहते हैं। लेकिन ये स्कोर आरआरक्यू काफी पसंद है, क्योंकि अब वो आ चुके हैं डिफेंसिव हाफ की तरफ। लेकिन अगर आप ये कंप्लीट एक स्कोर बोर्ड देखेंगे, नेक्सी अलग ही वो हाईलाइट हो रहे हैं अपनी टीम की तरफ से, 17 किल्स उन्होंने निकाले, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके बाकी टीममेट साथ नहीं दे रहे, सब कोई 9 किल कोई 7 किल, तो मतलब एक अच्छा टीम वर्क हमें देखने को मिलता नजर आ रहा है।
जी हाँ गिम्स, जो हम बात कर रहे थे कहीं ना कहीं टीम वर्क जो देखने के लिए मौका मिलता है दैट इज ऑलवेज गुड एंड आई थिंक उसी टीम वर्क के वजह से बहुत ज़्यादा राउंड्स लेने के लिए आपको मिल जाता है। बट वापस टीम बैम की अगर बात करेंगे, उनका जो हैवी हिटर्स है वो ही ज़्यादा यहाँ पे कैपिटलाइज करते हुए नजर आए। बट इस बार जी हाँ, एक चीज़ जो बेहतर है कमिंग इन फ्रॉम टीम बिग बैम, वो होगा जो असिस्ट आपको देखने के लिए मौका मिल रहा है डॉर्फ और मॉफ की तरफ से। पिछले बार वो असिस्ट भी आपको सिर्फ 3 या 4 में देखने के लिए मौका मिल रहा था, बट अभी 9 और 8। तो कहीं ना कहीं टीम के साथ ये भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, अपने टीममेट्स को थोड़ा असिस्ट भी करते हुए नजर आ रहा है। बट देखिए सोच समझ के खेलना पड़ेगा। उनके डिफेंसिव हाफ में उनको सिर्फ और सिर्फ 4 राउंड मिला है। ऑन द अदर एंड आरआरक्यू यहाँ पे लेके जा चुकी है 8 राउंड। 4 राउंड का ये डिफरेंस होने वाला, पिस्टल राउंड बहुत क्रूशियल होने वाला है टीम बिग बैम को। अगर बिग बैम रेक्स रिगम कियोन को रोक नहीं पाई देन आई थिंक दिस मैप इज आल्सो लॉस्ट एंड इस सीरीज को एटलीस्ट आरआरक्यू 2-0 में ही मात देती हुई नजर आ सकती है टीम बिग बैम को। देखिए डॉफ एंड मॉफ को यहाँ पर साथ देना पड़ेगा टीम का। अभी देखिए उतने किल्स नहीं निकाल पाए, लेकिन असिस्ट आ रहा है, लेकिन वो एंड रिजल्ट जो रहता है, एंड आउटपुट जो रहता है वो राउंड विक्ट्री का, वो नहीं आ पा रहा है। इस चीज का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 9th और 10th राउंड वो लगातार जीते गए थे। लगा था कि यहाँ पर बचे हुए जो आखिरी 2 राउंड है उसमें भी यहाँ पर जीत दर्ज कर पाएंगे, बट जी नहीं, वहां पर 11वां राउंड हारा जाता है। 12वां राउंड एटलीस्ट जीत कर उन्हें एक थोड़ा सा चैन के साथ जरूर ली होगी कि एटलीस्ट 5 जो ज्यादा मैक्सिमम जो 6 राउंड की लीड है एटलीस्ट कम से कम उसको 4 पे लेकर आए हैं। अभी भी एक उम्मीद बन सकती है, इस 4 जो गैप अभी जो फासला है 4 राउंड का, इसको 2 में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके लिए ये पिस्टल राउंड जीतना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा बिग बैम के लिए। लेकिन एंट्री किस प्रकार करेंगे, फिलहाल के लिए आप मैप की तरफ अगर नजर दौड़ाते हैं तो कोशिश तो यही है कि मिड लिंक के थ्रू मिड, देन या तो मिड मार्केट या तो फिर ट्री साइड। वो अप्रोच कैसा रहेगा, क्योंकि एस्ट्रा अगर आप देखेंगे उनकी एस्ट्रा ई साइड की तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रही है। देखिए एक ही टीम अभी एस्ट्रा लेके नजर आ रही है, दैट्स गोइंग टू बी बिग बैम। जैसे पिछले बार हम देखने के लिए मौका मिल रहा था दोनों साइड से एस्ट्रा, वो नहीं नजर आ रहा है। आई थिंक उसके वजह से कहीं ना कहीं आरआरक्यू को थोड़ा और फायदा मिल रहा है टू बी प्रोएक्टिव एंड अग्रेसिव, क्योंकि हमें पता है एस्ट्रा एज अ कंट्रोलर इज अ लिटिल बिट पैसिव। बट मिड अप्रोच जैसे हम देख रहे थे जब ले रहे थे आरआरक्यू, वैसे ही अप्रोच यहाँ पे लेना चाहते हैं। बट ऑलरेडी बी पुश, बी मेन पुश हो चुका है। नेक्स्ट ही 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर चुके हैं और भी प्लेयर्स को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे टीज से भी पुश हो चुका है। कॉर्नर कर चुके हैं यहाँ पे टीम बिग बैम को। 2G 1 पिक निकालेंगे दोनों प्लेयर्स यहाँ पे हाई मिड की तरफ कॉर्नर हो चुके हैं। 2G विद 3K विद द क्लासिक यहाँ पे पहला पिस्टल राउंड निकालते हुए नजर आएंगे। देखिए जो रीड है आरआरक्यू की तरफ से वो बहुत बेहतरीन है गेम। सो आई मीन आई हैव जीरो आइडिया इन टर्म्स ऑफ कि हम कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, बट वो क्लीन रीड देखिए उनके तरफ से। 2 प्लेयर वाइड स्विंग किए बी मेन की तरफ से एंड उसके बाद जब वो प्लेयर का पिक मिला दे जस्ट केप्ट पुशिंग अहेड एंड ट्रीज को भी वहां पे उन्होंने कॉल दिया कि आप भी पुश कीजिए क्योंकि दिस इज अ मिड एग्जीक्यूशन। सैम एक और चीज है इन्फो गेम, उनको जब पता चलता है कि सभी जो अटैकर साइड के खिलाड़ी वो बिल्कुल बीचों बीच फंस चुके हैं, तो यहाँ पर क्यों एक ट्रैप में फंसाया जा सके। तो बिल्कुल मिड लिंक से भी आते हैं, ट्री साइड की तरफ से आते हैं और वो किसकी तरफ देखेंगे, क्रॉसर किस तरफ लेके जाएंगे। बट चलिए अब हमारा नेक्स्ट राउंड भी स्टार्ट हो चुका है एंड जो हम बात करते बिग बैम के लिए इंपॉर्टेंट था वो अनफॉर्चुनेटली उनसे वो गवाते नजर आए। आरआरक्यू को बेनिफिट इस चीज का मिलेगा और बढ़िया मौका है यहाँ पर डबल डिजिट्स में पहुंचने का। देखिए अभी भी एक अग्रेसिव पोजीशन फ्रॉम नेक्सी एंड फ्लैश का पोजीशन यहाँ पे पता है नहीं, आई डोंट नो क्लू, बट नेक्सी का ट्रेड यहाँ पे निकलने के लिए मौका मिल जाएगा। बट फ्लैश इज लुकिंग फॉरवर्ड टू कैपिटलाइज, बट डॉफ उसका ट्रेड जरूर करेंगे। बट केली तैनात थे एंड केली टेक्स डॉफ डाउन। जो वेपन रिकवर करने के लिए मौका ढूंढ रहे थे खिलाड़ी उनको डाउन करेंगे। पीना इज रीडिंग दिस राइट, बट उनके ऊपर स्पाइक रहेगा, सोच समझ के स्विंग करना पड़ेगा। केली विल बी रेडी एंड केली विद अनदर शट डाउन करेंगे यहाँ पे टीम बिग बैम को। 3K निकालते हुए नजर आएंगे एंड डबल डिजिट्स फॉर आरआरक्यू। देखिए हर कोई चाहता है यहाँ पर इसका पार्ट बनना, 3K 4K एंड एस तो हमने आज देखने को मिल भी चुके हैं ऑलरेडी, इस मैच में भी हमें देखने को मिल चुका है। बट यस, लेकिन सैम अगर आप इसको देखेंगे कुछ देर पहले वो जो स्प्रे कंटिन्यू रहा, पहले प्रोरस को डिस्ट्रॉय किया जाता है, प्रोरर क्योंकि हमें पता है कि थोड़ा सा ज्यादा बुलेट्स खाता है डिस्ट्रॉय होने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करा। देन उसके बाद सामने जो खिलाड़ी जिसने प्रोरर का वो इस्तेमाल करा था फेट को, स्प्रे नहीं रुका उनका, अगर शायद रुक जाता तो माइट भी वो किल मिल सकता था, फिर हो सकता था जो रिजल्ट है वो कुछ और हमें देखने को मिल जाता पिछले राउंड में। राउलर से इस बार फ्लैश को धकेल दिया गया। फ्लैश का पोजीशन भी उनको पता चल चुका था, बट फ्लैश उस पोजीशन से स्पैम करने के लिए मौका ढूंढ रहे थे एंड जी हाँ स्टोंग के ऊपर कनेक्ट भी करेंगे स्पैम की वजह से।
बट कैन दे फाइंड द फर्स्ट पिक, क्योंकि वेपन का एडवांटेज इस बार टीम बिग बैम पर रहेगा। मिड एग्रेशन वापस देखने के लिए मौका मिल रहा है। मिड में वहां पे देखिए कॉर्नर किया जा रहा है। बी मेन की तरफ से भी ऑलरेडी नेक्सी पुश कर चुके हैं, मुश्किल हो सकता है। ट्रीज को चेक करने के लिए इमीडिएटली रोटेशन यहाँ पे चेंज किया जा रहा है। वहां पे क्रॉस फायर आ सकता है, जंप पिक करेंगे यहाँ पे 2G, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बट सीज कहीं ना कहीं वहां पे गलती करेंगे। बट फ्लैश गेट्स द फर्स्ट, जैसे वहां पे बी मेन का हम पुश कर रहे थे, वो पुश की वजह से ड्रैक्सी को एक पिक एंड ड्रैक्सी डबल्स डाउन, गेट्स द सेकंड, बट डॉफ उसको ट्रेड करेंगे। बट 2G ही पुशेस अप फ्रॉम ट्रीज एंड उनको एक पिक मिलेगा एंड नाउ ही हैज हिज स्पाइक अंडर कंट्रोल। बट वो गलत डायरेक्शन में देख रहे थे, पीना उसकी कैपिटलाइजेशन करेंगे। बट नेक्सी को रीड जरूर किया उन्होंने, बट टरेट आई थिंक दैट वाज अ सेव, गुड एटलीस्ट फॉर हिज लाइफ, क्योंकि अपने आप को बचा के टाइम बाई किया है, जिसकी वजह से ट्रीज को देखिए, ट्रीज एज वेल एज कैटवॉक जो है वहां से खिलाड़ी ऑलरेडी पुश अप कर चुके हैं एंड दैट वाज जस्ट टाइम टू बी बॉट। एंड यही हम बात कर रहे हैं, जो टीम गेम खेल रही है यहाँ पे RRQ गेम, तो टाइम बाई किया जा रहा है। अगर बात करें जो मैप एरिया है वो लेते हुए नजर आ रहा है एंड वो प्रोएक्टिव है, ऐसे नहीं नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे एग्जीक्यूट आएगा तब जाके एंगल होल्ड किया जाए। दे आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। थोड़ा उनको इन्फॉर्मेशन और साउंड क्यू मिल जाता है और जब जंप पिक करते हैं वो, तब अगर इन्फॉर्मेशन निकल जाता है या मे बी समबडी डैमेजेस देम, इमीडिएटली वो वहां पे एक स्ट्रैटेजी रेडी रखते हैं कि एक क्रॉस फायर का, एंड उनको मौका भी मिल रहा है। नाउ वी आर जस्ट 1 राउंड अवे फ्रॉम मैच पॉइंट एंड सीरीज पॉइंट एंड इस पे यहाँ पे इको पे खेलते हुए नजर आ रही है टीम बिग बैम। मैम एक चीज हर बार हम नोटिस कर रहे हैं बिग बैम की तरफ से, अगर किल उनका अगर निकल रहा है तो 2-3 किल इंस्टेंटली एक ही जगह पे। इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जरूर। उन्हें पता था कि देखिए वेपन्स नहीं है अच्छे खासे भाई, नहीं अगर आप देख पा रहे हैं उनके पास क्रेड्स नहीं थे, जिसकी वजह से शेरिफ बाय पे उनको मजबूर किया गया। ऐसा वो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पर और अटैकर्स के लिए काफी मुश्किल रहेगा। प्लस ब्रॉलर से नियर साइड हो जाना, लेकिन 2G शायद बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि 2 से 3 खिलाड़ी उनके ऊपर इस प्रकार का अप्रोच करेंगे। सैम जी आई थिंक 2G वहां पे ब्रॉलर्स के ऊपर कैपिटलाइज करने के लिए मौका ढूंढ रहे थे, बट डॉग की तरफ से एक बेहतरीन फ्लैश पिट के लिए कैपिटलाइजिंग, इमीडिएटली स्प्रे ट्रांसफर करेंगे एंड जस्ट अ सेकंड एंड वो कन्वर्ट करेंगे एंड गेट्स द 4K मैच पॉइंट इन सीरीज पॉइंट पे। यहाँ पे रेक्स रीगम कियोन क्या ही शानदार खेल रही है। आई मीन फ्लैश आने के बावजूद केली वहां पे अपने आप को होल्ड किए एंड जो स्प्रे ट्रांसफर आपको देखने के लिए मौका मिला गेंजो, दैट वाज जस्ट ब्रिलियंट। ये देखिए अब उन्हें पता था रिलोड पे अगर जाएंगे तो उनका किल मिल जाएगा। आई मीन वो रेडी भी थे गेम्सो कि रिलोड पे जाएंगे इमीडिएटली स्विच करेंगे अपने सेकेंडरी पे। बिल्कुल सैम, लेकिन फाइनली सैम यहाँ पर अब आ चुके हैं वो कंप्लीट सीरीज। अगर हम बात करें मैच पॉइंट की तरफ, जी हाँ गाइस ऑलरेडी 1-0 की बढ़त उनके पास है RRQ के पास और कोशिश करेंगे कि 13-4 के साथ वो समाप्त करे। बट बिग बैम आखिरी मौका है, एक आखिरी चांस है यहाँ पर। अगर यहाँ से एक हार का सामना करने को मिला, तैयार रहिए फिर लोअर ब्रैकेट्स के लिए। आई थिंक मुश्किल होने वाला है। देखिए अगर जैसे आपने बात किया जो अगला मैच होने वाला है उनका वो एलिमिनेशन मैच होने वाला है, तो जो मौका मिल सकता था यहाँ पे शुरुआत में वो गवाते हुए नजर आ रहा है। बट इस बार केली अकेले थोड़ा अग्रेसिव है एंड उसी पोजीशन में दूसरा खिलाड़ी भी नॉट उसी पोजीशन में दूसरी तरफ से पोजीशन में पनिश होते हुए नजर आया एंड एमटी के अग्रेसिव चले जाएंगे एंड ट्रीज पे सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी। अभी तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकल चुका है यहाँ पे गेम से, रीड आ चुका है टीम बिग बैम की तरफ से कि कहाँ पे होल्ड करते हैं खिलाड़ी एंड जैसे जैसे वो आ रहे थे एंट्री ले रहे थे, स्विंग किया उन्होंने, उनको इन्फॉर्मेशन मिला कि खिलाड़ी का हाथ लेंगे। Look at the usage. Look at the usage of the haunt. वहाँ पे बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया and that lineup was just insane. Information भी निकल चुका है but लॉकडाउन का इस्तेमाल 2v4 पे यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी मौका ढूंढ रहे हैं but Flash gets one and Mia Moff and Doff यहाँ पे दोनों आखिरी 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट करेंगे एंड एक और राउंड के लिए अपने आप को जिंदा रखेंगे यहाँ पे टीम बिग बैम। टाइम क्या लग रहा है आपको कि लॉकडाउन के पूरे इफेक्ट होने का खत्म इंतजार करना चाहिए था वो पीक, क्योंकि अगर आपने देखे दोनों ही खिलाड़ी रैफ्टर साइड की तरफ थे, तो क्या लग रहा है कि वो इंतजार करना चाहिए था वहां पर खत्म होने का, या फिर उनको अंडर दैट हेल्थ साइड की तरफ वो अगर करते तो शायद कुछ रहता बात? देखिए गेम्सो वो जो पीक किया उन्होंने वो सही था क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं था कि कहाँ पे है खिलाड़ी। उन्होंने सोचा जैसे लॉकडाउन पूरा इनिशिएट होगा
खिलाड़ी वापसी जा रहे होंगे, इसलिए पिक किया, बट खिलाड़ी उसके लिए तैयार थे। बट अभी देखिए एग्जीक्यूशन साइट ऑलरेडी आगे आ रहा है। नल कमांड की वजह से जो भी यूटिलिटी साइट में है सबको डिनाई कर चुके हैं। आपने देखा नैनोस्टॉर्म का अलार्म बॉट था, सबको डिनाई किया, बट नेक्सी के राइफल को नहीं, फ्लैश का राइफल को नहीं। नेक्सी एक पिक के बाद जरूर डाउन हो जाएंगे, बट साइड के अंदर ऑलरेडी एंट्री मिल चुका है एंड कॉस्मिक डिवाइड की मदद से कहीं ना कहीं अपने आप को डिवाइड करना चाहता है। बट देखिए नाइटफॉल भी आएगा, एंट्री के विद ब्लेड स्टॉर्म्स एवर सो शार्प। 3 प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन कर चुके हैं, उसके बाद पिक निकालेंगे, बट 2GE ब्रिंग्स इट टू अ 1v1 सिचुएशन। और डॉफ का हेल्थ देखिए इतना ज्यादा बेहतर नहीं है, ही इज जस्ट सर्वाइविंग विद 66। अगर बात करेंगे 2GE का, उनके पास हेल्थ भी है पूरा एंड शील्ड भी है, बट रीड जरूर कर रहे हैं। बट 2GE फिनिशेस इट ऑफ 3K के साथ। एंड हर वक्त जब 2GE आखिरी खिलाड़ी बन के नजर आते हैं, 2GE और नेक्सी ये दोनों क्लच करते हुए नजर आते हैं। एंड दैट इज ऑल। यहाँ पे जो अगला मैच होगा RRQ का, वो चलेंगे ब्लीड के साथ मुकाबला करने के लिए, जो ऑलरेडी अपना पहला मैच जीत चुके हैं। 2-0 और वो भी स्कोर किस प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, एक वन साइड डोमिनेशन। 13-5 दर्शा दिए यहाँ पर सैम RRQ ने कि बाकी टीम को अलर्ट रहने के लिए उनकी तरफ से, एंड एक कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं उनकी तरफ से, एक कदम आगे उन्होंने बढ़ाया है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज के लिए। यहाँ पर एग्जैक्टली गेम जो एक कदम बढ़ा चुके हैं, they'll be looking really happy about it। बट जी हाँ, अगर बात करेंगे टीम बिग बैम का, वो कहीं ना कहीं नाखुश रहेंगे गेम जो, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इतना डोमिनेटिंग विक्ट्री देखने के लिए मौका मिलेगा। क्योंकि कल का मैचेस भी हमने जब देखा था वो पूरा वन साइडेड नहीं था, वहां पे आपको देखने के लिए मौका मिला बेस्ट ऑफ 3 में तीनों मुकाबले होने का। बट यहाँ पे क्या हुआ, इट वाज जस्ट वन साइडेड डोमिनेशन, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो बाकी खिलाड़ी है, बाकी टीम से उनको तैयारी करना पड़ेगा RRQ के लिए। क्योंकि मुझे जो लग रहा है ना, RRQ जो VCT APAC चैलेंजर स्टेज 2 में एंट्री ले चुके हैं, दे आर रेडी विद अग्रेशन टू रिप्रेजेंट नॉट ओनली द रीजन, APAC को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्लोबल स्टेज पे मास्टर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बट अभी भी वो जो मास्टर्स का आई वुड से जो पोजीशन और एंट्री जो है, वो अभी भी बहुत लंबा सफर रहने वाला है। उनको यहाँ पे प्लेन्स को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ग्रुप स्टेजेस को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद जाके प्लेऑफ्स में, एंड प्लेऑफ्स में जाके उनको ग्रैंड फाइनल्स में पहुंचना पड़ेगा। तो सफर बहुत लंबा रहने वाला है। बट एक टीम जो अभी हमारे साथ है, अभी भी तैनात है, एक और मुकाबला रहेगा इनके बीच में, मुकाबला आएगा गेटो आर्टिस्ट वर्सेस टीम बिग बैम। इनका एक एलिमिनेशन मैच है यहाँ पे प्लेन्स में, ये पहला टीम हो सकती है जो एलिमिनेट हो सकती है गेम्सो। बिल्कुल, अब कोई दूसरे और मौके नहीं मिलेंगे, ये आखिरी चांस रहेगा। लेकिन जो भी शेड्यूल होगा वो तो आपको अपडेट मिल जाएगा। लेकिन अभी तो हमारा ये एक ही मुकाबला समाप्त हुआ है, अभी तो आगे के दिलचस्प मुकाबले यानी मिथ वर्सेस एनिग्मा गेमिंग, इसका भी हम जरूर आगे बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए हम इस मैप की ज्यादा बात करेंगे। अभी यहाँ पर समाप्त हुआ है यहाँ पर RRQ एंड बिग बैम की तरफ से। तो अभी के लिए सैम, यहाँ पर हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस से हाजिर जरूर होंगे। Wasn't too long before I realized a whole lot of truth, just realized. Two groups faking the real guys, and both of them plotting on your meal size. Gotta be more, is this real life? Got a bad hand, but I still try. Trying on me down and I still climb. I can see the promised land right over the hill line. And I broke a lot of hearts in my lifetime, thinking that their heart wasn't like mine. Finally got through a lifeline, and I stumbled upon a right mind. Love showed up at the right time. Put her in a white dress, get the white wine. Some people do it for the nighttime, but I'm thinking more, make your life mine. Yeah. Is it possible we could last forever and ever and ever?
What's up, ladies and gentlemen? स्वागत है आप सबका फिर से APAC Challenger Stage 2 एंड VCT का ये जो मुकाबला था, पहला मुकाबला तो गेम्स गेम्स एंड आप मैं देख रहा था बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दर्शकों को एंटरटेन भी कर रहे थे, बट एक वन साइडेड डोमिनेशन हो थॉट ऐसा एक मुकाबला आएगा. इनफैक्ट पहले मैप के बाद मुझे तो लगा था शायद से विल सी समथिंग चेंजिंग, मे बी एक होल्डिंग ग्राउंड मिलेगा जरूर, बट वो नहीं हुआ. एंड in the end it all came down to a very tiny and narrow space जहां पर हमने देखा 13th राउंड क्लोज किया गया and it was all over 2-0 के साथ साथ ओवरऑल जीतते हुए नजर आई हैं हमें RRQ. But अगला मुकाबला it's going to be a big one. It's going to be a big one. Yes, it is going to be the SA boys playing against Made in Thailand. बट एक बार स्कोर बोर्ड पे हम जरूर नजर डालेंगे जो हमने देखा था इस मैप पे. सो विल टेक अ लुक एट द स्कोर बोर्ड एज वेल. मेड इन थाईलैंड के साथ साथ जो एनिग्मा गेमिंग का मुकाबला है वो हम देखेंगे जरूर, बट आप देख सकते हैं 13-5 वाज द स्कोर. ओवरऑल डैमेज की बात करते हैं तो pretty close there, don't you think, Sam? I mean, I agree with you, Captain, कि जो खेल था in terms of the damage as well as अगर headshot percentage बहुत close जरूर नजर आ रहा है. But देखिए, जब आपको कम मौके मिलता है that means you will be more precise, right? So I think उसी के वजह से वो score line in terms of damage and headshot percentage कहीं ना कहीं आपको बेहतर नजर आ रहा है. But I think अगर और भी ज़्यादा नजदीक जाता गेम then we would have seen a little bit of a difference जहाँ पे maybe RRQ बेहतर हो सकती थी या team Big Bang. But RRQ just showed their sheer domination और वो किसके लिए आए यहाँ पे APAC Challenger Stage 2 में. Of course, and वो हमें दिख भी रहा है. आप देखिए लगातार पहले दो राउंड तो जीतते हुए हमें नजर आए जरूर. RRQ ने एक राउंड निकाला BAAM ने, but after that there was a streak of rounds जो RRQ कैपचर करते नजर आए. Nexi coming as the MVP once again. पिछली बार चेंबर खेल रहे थे इस मैप पे, वो Killjoy खेलते हुए नजर आए. 3.2 KDA, would you look at that? I mean, अगर देखिए आपके कंट्रोलर्स एंड आपके जो सेंटिनल्स है अगर इतने बेहतरीन तरीके से खेलते हुए नजर आएंगे एंड ऑल्सो बिकम द टॉप फ्रैगर्स, आई थिंक कहीं ना कहीं जो टीम स्पेशली जो हार रही है उनको थोड़ा कहीं ना कहीं सोच के बेहतर करना पड़ेगा. बट ऑन दी अदर एंड जो जीतती हुई टीम नजर आ रही है वहां पे आप देख सकते हैं KDB ऑल पॉजिटिव. बट अगर बात करेंगे यहाँ पे जो टीम हारती हुई नजर है आप देख सकते हैं उनका KD कहीं ना कहीं नेगेटिव पे एक खिलाड़ी पे ऊपर जा चुका है, स्पेशली NTK को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला इस बार कैप्टन. पिछले बार एटलीस्ट वहां पे NTK के ब्लेडस्टॉर्म की वजह से हम देख रहे थे NTK के एंट्री की वजह से उनको मौके मिल रहा था, उनको कहीं ना कहीं एडवांटेज भी मिल रहा था इन टर्म्स ऑफ those Bladestorm and kills in 3Ks. बट इस बार वो होता भी नजर नहीं आया. नतोंग का भी अगर बात करेंगे देखिए एक राउंड में उनका जो परफॉर्मेंस था, डोमिनेशन था सेकंड लेन की तरफ से फ्रॉम हिज डिफेंसिव एंड बहुत बेहतरीन तरीके से देखने के लिए मौका मिला. बट जो पीना करके दिखाए when he was stuck at switches, उनके ऊपर पैराने आता है बट कोई स्विंग नहीं करता है. स्विंग कब करते हैं? वो पैराने क्लियर होने के बाद एंड जस्ट वन नैरो स्पेस जो था पीना के पास वहीं से प्लेयर्स को एलिमिनेट करते वो भी वहां पे एस निकालते हुए नजर आएंगे. I mean, पिछली बार एस्ट्रा थे, इस बार भी एस्ट्रा है, बट पिछली बार 2G एस्ट्रा, बट दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी पीना ऑन द एस्ट्रा ऑन द एस. Of course, and that was amazing. I mean, देखिए एस आया है दोनों गेम्स में, एस आया है. वेल यू कैन से कि दोनों ऑपोजिट टीम से आए हैं जरूर, बट RRQ man, that's some strong team we've got out there. आगे जाके क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी इस टीम के लोअर ब्रैकेट्स में ऑलरेडी आपको जाते हुए नजर आए हैं. बिग बैंग, बट बिग बैंग के अगेंस्ट में किसका मुकाबला होगा वो हम जरूर पता लगाएंगे अगले बेस्ट ऑफ 3 के दौरान. जी आई मीन देखना जरूर पड़ेगा जो अगले मुकाबले होने वाले, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है. बट मुझे नहीं लग रहा है टीम बिग बैंग इतने आसानी से हार मानेंगे इन टर्म्स ऑफ लूजिंग दिस सीरीज. एटलीस्ट जो अगला मैचअप होने वाला है, दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग बेटर ऑन देयर एलिमिनेशन मैचअप, क्योंकि कोई अपने जो एलिमिनेशन मैच होता है वहां पे ऐसे एक डोमिनेटिंग हाफ किसी न किसी को लेने के लिए मौका नहीं देते. दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग एंड एलिमिनेटिंग व्हिच एवर टीम दैट इज. बट बात करेंगे MVP, आप देख सकते हो नेक्सी. आई मीन हम जरूर 2G को देख रहे थे बट नेक्सी ऑन अ सेंटिनल जो कमाल करके दिखाया. एंड एक राउंड पे उन्होंने जो होल्ड किया अपने लॉकडाउन के साथ, एंड एक और राउंड पे आई थिंक उनके डिफेंसिव हाफ में था, ही जस्ट अग्रेस्ड एंड एलिमिनेट डॉग हु वाज द लास्ट प्लेयर 1v1 सिचुएशन में, एंड राउंड भी वहां पे दिलाते हुए नजर आए स्पाइक डिफ्यूज करने के बाद. Of course, and that's just amazing. जरूर समझ के रहना पड़ेगा यहाँ पर RRQ के अगेंस्ट में. बट RRQ के अगेंस्ट में क्या एनिग्मा गेमिंग एक मुकाबला दिखा पाएंगे, और इज इट गोइंग टू बी वंस अगेन? अगर आप बात करते हैं तो मेड इन थाईलैंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्मिडेबल टीम, एंड आप कह सकते हैं उनके लिए तो दिस मैच विल सीम लाइक अ पीस ऑफ केक. बट एनिग्मा गेमिंग क्या प्रिपरेशंस करके आए हैं उसके ऊपर ही सारी चीजें डिपेंडेंट रहेंगी, एंड आई एम गोइंग टू बी इंक्लाइंड टू दैट एज वेल. देखिए
तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं सेकंड मैचअप, इट्स अ लिटिल बिट क्लोजर टू अस, Yeah. क्योंकि हम देख के आ चुके हैं एक टीम को, एंड यही से निकल के आ चुके हैं ना साउथ एशियन रीजन्स, तो कहीं ना कहीं थोड़ा नजदीक रहेंगे हमारे दिल का। बट जी हाँ, जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड एक टीम के ऊपर हावी होने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं, वो टीम भी जैसे आपने अभी भी दर्शाया और जस्टिफाई भी किया, दे आर नॉट एन ईजी टीम टू टेक डाउन। जी हाँ, प्लेन्स में नजर आ रही है, बट जब उनके रीजन में खेल रहे थे वहां पे डोमिनेट करके उसके बाद कहीं ना कहीं दो उनके और भी बेहतरीन टीम्स थी जो ग्रुप स्टेज में ऑलरेडी एंट्री ले चुके, उसके बाद आ चुके हैं। सो वी आर लुकिंग एट वेरी गुड टीम्स कमिंग इन फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एज वेल। तो आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है इस मैचअप में। ऑफ कोर्स, एंड आसानी की बात करेंगे, देखेंगे जरूर किसके लिए आसानी आएगी। इनफैक्ट हमें वो पता लगेगा जरूर मैप सिलेक्शंस के बेसिस पे भी। देखिए, हमें पता है कि ब्रीज पर्मा बैन रहता है, ब्रीज पर्मा बैन रहता है एनिग्मा गेमिंग का, लेकिन उसके अलावा जो दूसरा बैन आएगा कौन से मैप के ऊपर आएगा? एनिग्मा गेमिंग के लिए कुछ मैप जरूर स्ट्रांग है। हेवन इज अ स्ट्रांग ग्राउंड दैट दे हैव, स्प्लिट भी उनका स्ट्रांग है, और आप कह सकते हैं बाकी सारे के सारे मैप्स जो है ना उनके सेट है। लेकिन ओपोनेंट्स कौन से मैप को बैन करना चाहेंगे, विल डेफिनेटली सी। हर एक टीम का वो वीक पॉइंट रहता है। इनफैक्ट मैंने देखा भी था कि वाईबी एज अ कोच ऑफ एनिग्मा गेमिंग, ही वाज इन फैक्ट प्रिपेयरिंग स्ट्रैट्स फॉर ब्रीज। तो अगर ब्रीज बैन नहीं भी आता है, आई एम नॉट गोना बी शॉक्ड एट ऑल। आई एग्री विद यू कैप्टन। जैसे हम बात भी कर रहे थे ना, देयर बी अ कपल ऑफ मैप्स जो टीम्स अभी भी अपने जो हाइंड साइड में है, जो ब्लाइंड साइड में ओपोनेंट को रखना चाहते हैं, दे वांट टू कीप इट एज अ वाइल्ड कार्ड, बट हम बता भी नहीं सकते क्योंकि वी वर जस्ट सीइंग, जब भी हम देख रहे थे क्वालिफिकेशन स्टेजेस में कि टीम्स जब वो पिक नहीं करती है, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ डेटा टू वर्क ऑन देम, एंड उसकी वजह से जब दूसरी टीम आती है जो ऑलरेडी खेल चुकी है, फ्रैक्चर ले लीजिए, ब्रीज ले लीजिए, दे माइट बी लुकिंग गुड, जब आप आ जाते हो इसके साथ, बिकॉज दैट टीम हैव प्लेड मोर नंबर ऑफ टाइम्स ऑन फ्रैक्चर एंड ब्रीज, उनके पास कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है। ऑन द अदर एंड आपके पास जो एक सेट स्ट्रैटेजी के साथ, एक नया स्ट्रैटेजी के साथ आते हो, यू माइट बी एबल टू सरप्राइज देम फॉर अ कपल ऑफ राउंड्स, बट जो टीम ऑलरेडी थोड़ा एस्टैब्लिश हो चुके हैं वैसे मैप्स में, दे इमीडिएटली स्टार्ट ब्रिंगिंग द राउंड्स। तो सोच समझ के खेलना पड़ेगा यहाँ पे कैप्टन। ऑफ कोर्स सोच समझ के खेलना पड़ेगा, बट एनिग्मा गेमिंग वी ऑल नो व्हाट दे आर नोन फॉर, वो थ्रिफ्टी राउंड्स। थ्रिफ्टी राउंड्स हमने देखा था जरूर Oh पहले मैच के yes. दौरान भी, बट या एनिग्मा गेमिंग, इफ यू पुल ऑफ अ थ्रिफ्टी टुडे अगेंस्ट मेड इन थाईलैंड, I'll tell you, like, there's a long run ahead of you. but देखिए, यहाँ पर सिर्फ दो ही टीम्स थी जो ऐसी रीजन से पहुंच पाई है एपैक में, एशिया पैसिफिक रीजन में। सबसे बड़ी बात है कि दोनों में से एक टीम इंतजार करेंगे 15 जून कब आने वाला, बिकॉज देखिए 15 जून में ही आपको जो चैंपियंस थे ऐसे रीजन से वो खेलते हुए नजर आएंगे। ऑल्टर ईगो के अगेंस्ट में ग्लोबल स्पोर्ट्स वर्सेस ऑल्टर ईगो का वो मुकाबला रहेगा 15 जून को 11:30 बजे सुबह, तो उसके लिए भी आप लोग जरूर तैयार रहिए। बट आज का ये जो मुकाबला है एनिग्मा गेमिंग वर्सेस द वन एंड ओनली मेड इन थाईलैंड, मुकाबला अगर जीते एनिग्मा गेमिंग, अकॉर्डिंग टू माय यू कैन से प्रेडिक्शंस, प्रेमोनिशंस, शायद से एनिग्मा गेमिंग के लिए क्वालिफिकेशन थोड़ा आसान रहेगा, बिकॉज मेड इन थाईलैंड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स इन दैट दिस ग्रुप हैज। I mean, I agree with you, Captain. जैसे मैं यहाँ पे मैप पिक्स भी देख रहा था, नाउ स्प्लिट इज वन ऑफ द वीकेस्ट मैप्स मेड इन थाईलैंड, एंड उनके वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट जी हाँ, जैसे हम बात कर रहे थे एक पर्मा बैन हो सकता है, आई थिंक इमीडिएटली जैसे मौका मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट टू तो बैन्स होता है। जैसे आपने बात किया, कहीं ना कहीं ब्रीज इमीडिएटली बैन करते हुए नजर आएंगे यहाँ पे एनिग्मा गेमिंग, एंड उसके इमीडिएट बाद आपको एक बैन देखने के लिए मौका मिल सकता है स्प्लिट। नाउ दैट्स वेयर एवरीथिंग कैन चेंज अराउंड, क्योंकि जैसे एक मैप पूल है वो थोड़ा एनिग्मा का बड़ा है कंपेयर टू मेड इन थाईलैंड। मेड इन थाईलैंड का मैप पूल अगर बात करेंगे, इट इज स्पेसिफाइड टू अ कपल ऑफ मैप्स। ब्रीज क्योंकि ऑलरेडी पिक्चर से बाहर जा चुका है, कहीं ना कहीं थोड़ा मौका आ सकता है यहाँ पे जो मैप है आइस बॉक्स के ऊपर। बट अगेन, टॉकिंग अबाउट मेड इन थाईलैंड, आइस बॉक्स पे ज्यादा नहीं खेली है, बट जब भी बार खेली है, दे हैव ऑलरेडी वन इट। एक ही बार उनको लॉस मिला है, बिकॉज ऑफ विच इट शोज अ हायर परसेंटेज। बट ऑन द अदर एंड एनिग्मा का अगर बात करेंगे, जो सफर है उनका, वो आइस बॉक्स में पहले जीतती नजर नहीं आ रही थी, बट उसके बाद ग्लोबल स्पोर्ट्स को टेक डाउन करना शुरू किया, एंड देन इट बिकेम द स्ट्रॉन्ग होल्ड। एंड अभी एक बहुत बेहतरीन मैप है एनिग्मा का, एंड व्हेनेवर दे प्ले ऑन दैट मैप, इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी टू टेक देम डाउन। बट जी हाँ, आई थिंक आइस बॉक्स भी एक पिक हो सकता है कैप्टन इन दोनों के बीच में। वेल, हो सकता है जरूर। एनिग्मा के आइस बॉक्स की कहानियां तो हम हमेशा दोहराते हैं। वेल यस, इट वाज 10-0, वहां से 10-13 हो, आई मीन 13 राउंड्स एट स्ट्रेच, दैट्स एनिग्मा गेमिंग फॉर यू। बट आज का ये सफर ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। इनफैक्ट आज वो फाइट करना पड़ेगा एनिग्मा गेमिंग को। फियर द एनिग्मा कहा जाता है उन्हें ऐसे सर्किट में, बट विल द एपैक टीम्स फियर द एनिग्मा, या फिर उनकी का मौका मिलेगा? विल डेफिनेटली सी। बट सैम, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स गोना हैपन टुडे?
Well, taking a look at the rosters, made in Thailand के roster आप देख सकते हैं सैम. What do we have to say about these players? I mean, देखिए, the mechanical skills जो इनके पास है, उस mechanical skills को beat करना भी एक चैलेंज रहता है पूरे के पूरे एपैक सर्किट में. बट देखिए, जो रन था इनका अपने रीजनल क्वालिफायर्स में, दे वर नॉट ऑन द टॉप, एंड इसीलिए एनिग्मा गेमिंग भी, जैसे कि आपने देखा, वो रनर्स अप थे ऐसे सर्किट में. सो दे आर प्लेइंग हियर अगेंस्ट मेड इन थाईलैंड. सो मेड इन थाईलैंड वो तो अपना जी जान लगाने वाले. डिपेंड्स ऑन एनिग्मा गेमिंग नाउ कि वो कैसे खेलेंगे. एक बार अगर आप रोस्टर की बात करते हैं, यस, इट्स गोना बी अलॉन, इट्स गोना बी डिलेंड, कदूम, कॉन्ग. कॉन्ग की जब भी नाम लेते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्ग, किंग कॉन्ग आए हैं खेलने, तो कॉन्ग के अगेंस्ट में खेलना, इट्स गोना बी अ हार्ड वन. It's gonna happen right here, right now. Best of 3 का matchup, map veto हमारे सामने आएगा. उसके बाद हम जरूर agent selections भी देखेंगे. Any predictions on the map veto? दो हमने तो already बात कर लिया कि perma bans कौन से रहेंगे. But what about the picks? I think अभी picks का अगर बात करेंगे, I think Icebox should be there, and उसी के साथ कहीं ना कहीं Bind और Haven को देख सकते हैं, या Ascent और Haven को. It can be similar to जो हम पहले matchup को देखे, क्योंकि Icebox वहाँ पे ban हुआ था. I mean, Icebox was the decider, not the first picks, but यहाँ पे Icebox कहीं ना कहीं शुरुआत में आ सकता है. बट अगेन, बिकॉज दिस इज द प्ले-इन्स, वेरी अर्ली स्टेजेस, कैप्टन, मुझे जो लग रहा है कि जो शुरुआत में आपको देखने के लिए मौका मिलेगा, इट्स दैट की टीम्स विल बी चूजिंग दोस क्लासिक मैप्स ऑफ वैलोरेंट, ना कि जो हमें देख रहे हैं आइसबॉक्स, ब्रीज, ये मैप्स नहीं है. सो Ascent, yes. So Ascent, Haven and Bind, right? But वही पे खत्म हो सकता है. बट कब तक वो आएगा या फिर नहीं, विल डेफिनेटली सी. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रहेगी वो है एजेंट्स की. डिड एनिग्मा गेमिंग स्विच अप इन एजेंट कॉम्पोजिशंस? बट अगर आप मेड इन थाईलैंड की बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक वो एजेंट्स बिल्कुल भी स्विच ओवर कर चुके हैं या फिर करेंगे भी. बट एनिग्मा गेमिंग, दे आर नो फॉर सरप्राइजेस. सो वो सरप्राइजेस क्या रह सकते हैं, देखना जरूर पड़ेगा. बट यहाँ पे जरूर देखेंगे कि कैसे यहाँ पे खेलेंगे गेम्स. जो कि ऑलरेडी हम मेड इन थाईलैंड का बात किए, एनिग्मा गेमिंग इज आल्सो अपकमिंग राइट नाउ टू फाइट अगेंस्ट देम. Of course, but you know what? हमारे साथ साथ हमारे बहुत ही शानदार को-कास्टर भी जुड़ते हुए नजर आए हैं. Mamba is right here, so let's bring him on here, and उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे कि इस मैच के probabilities क्या क्या रहने वाले हैं. So Mamba, let's cue you in, and we have Mamba as well. So Mamba, welcome back to the desk once again, and how are you doing? I'm doing well. बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. It's been a while जब मैं रोल स्विच किया है. अभी last time when we met I was the host, but now of course back on the casting desk. बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. I hope you guys are doing well as well. And मैच जो होने वाली है of course Enigma खेलने वाले मेड इन थाईलैंड के साथ, तो हमारी जब भारतीय टीम्स खेलती है of course एक्साइटमेंट कुछ और होती है. एंड मैं मैच का इंतजार कर रहा हूँ. I've been waiting for this since the time we actually came back from LAN. उम्मीद करता हूँ आज की जो मैच होने वाली है मोमेंटम कैरी ऑन करेंगे. श्योर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के सामने उनकी हार हुई थी जरूर, लेकिन it was very close. तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है उनके पास. ऑफ कोर्स उनका जो सपोर्ट स्टाफ है, आप उनके कोच की बात करें, लूकस की या वाईबी की, यू नो, ऑल इन ऑल इट्स वर्किंग आउट रियली वेल. प्लेयर से भी मेरी बात हुई थी, सो दे आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट. But you know what? Let's take a look at Enigma Gaming's team. क्या क्या लेके आए हैं वो, and who all are going to play. So let's take a look at them. Well, बहुत ही strong team है ये जरूर. But you know, since Mamba is here, I'll just throw the first question to Mamba right here. So Mamba, what do you think about the roster? I mean, Antidote as the IGL, पहले वो duelist खेलते थे, अभी IGL role में, I mean, he's doing good, right? Oh, wonderful, he's doing wonderful. जो एक्सपीरियंस उन्होंने कलेक्ट किया, क्योंकि मैं इनको देखता हूँ पिछले 7 साल से जब वो ब्रेकआउट हुए थे, ऐसी कि he came in onto the scene as a prodigal son. जो आप बात करते हैं नए प्लेयर्स आते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग प्लेयर थे. उन्होंने अपनी हाइप पे लिव किया एंड he's performed really well. लेकिन आप बात करें एक्सकाली के बारे में भी, बहुत ज़्यादा हार्ड फ्रैगर हुआ करते थे, अभी भी फ्रैग आउट करते. बट आई डू बिलीव जो एक्स फैक्टर होगा टीम के लिए वो रॉफ्यूल और आरवीके के अंदर होने वाला, बिकॉज रेक्स, एक्सकाली, एंटीडोट के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है. ऑफकोर्स वो एंकर्स हो सकते हैं टीम के, लेकिन ऋषि एंड रॉफ्यूल, ये 2 प्लेयर्स वैसे जो गेम को पलट सकते देखते देखते. Of course, and Sam, like हम young talents की तो हमेशा बात करते ही हैं. Roffuel and Aviki, I think they have probably the rawest aim. वो aim को और भी develop करना and साथ ही साथ main talent को challenge करना. How do you think it's gonna go down? देखिए, एक बेहतरीन चीज जो रॉफ्यूल का है, he just is on the fly. वो अडेप्ट करते हैं, इम्प्रोवाइज करता है, एंड ही जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर. ऐसे नहीं लगता कि ही इज जस्ट स्टक ऑन टू वन थिंग. तो जैसे
आई वुड से टाइम बढ़ता जाता है, राउंड्स बढ़ता जाता है, वी जस्ट सी रॉफ्यूल फ्लाइंग। आई मीन जेट पे बहुत ज्यादा खेलते हुए नजर आता है, बट उसी के बीच यहाँ पे चेंजेस भी कर चुके हैं, चेंबर भी खेलते हुए नजर आ रहा है। सो आई थिंक दिस स्विच अप फॉर हिम, थोड़ा वर्सिटैलिटी जो बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं बाकी सारे टीम्स को मुश्किल में लेके आएगा कैप्टन। Of course, and साथ ही साथ ये जो मुकाबला है, we all know it's a best of 3. So पहले 2 bans आएंगे, then 2 picks, then again 2 bans, and then we head into the decider. तो पहले मैचअप पे तो हमने देखा था कि it was a very quick one. RRQ they were like, okay, we need to go forward, हमें आगे बढ़ना है, we need to qualify. It doesn't matter, हम सीधा बढ़ेंगे group stages पे. But what do you think, Mamba, Enigma Gaming के chances क्या रहेंगे? Because this is the first time they have in fact stepped into the international circuit. True, this is in fact the first time they've stepped into the international circle. लेकिन एक्सपीरियंस की मैं जब बात कर रहा था, देखिए जितने भी प्लेयर्स हैं, आई डू बिलीव रॉफिल और आरवीकी के अलावा तीनों प्लेयर्स के पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, बहुत ज़्यादा सीजनड प्लेयर्स है, उनके लिए कुछ नया नहीं होने वाला। वाईबी की बात करें, उनके पास भी बहुत ज़्यादा अनुभव है, 15 साल का करियर रहा था उनका, खुद खेले हुए है रीसेंट सर्किट में भी। तो उस हिसाब से आई डू बिलीव टीम्स की नर्व्स आराम से मेंटेन कर रहे होंगे। लेकिन हम मैप वीटो की बात करें तो वी कैन हैव हेड इनटू प्रेडिक्शंस एज वेल। बात करें जो मैप्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है, लूसिफर, डू यू वांट टू स्टार्ट ऑफ विद इट? देखिए हम ऑलरेडी बात कर रहे थे इसी के बीच में जब आप आने से पहले कि जो पिक्स है, जो बैंस है, द वीक पॉइंट्स हियर राइट एज नो इन द स्टार्ट इटसेल्फ, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैप है एनिग्मा का, दैट्स गोइंग टू बी स्प्लिट एंड दैट्स गोइंग टू बी अ वीक पॉइंट फॉर मेड इन थाईलैंड। बट ऑन द अदर एंड जैसे हम बात करते हैं ब्रीज एंड आइस बॉक्स, ब्रीज यहाँ पे कहीं ना कहीं बैन हो सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि एनिग्मा डज नॉट फील मे बी कंफर्टेबल विद इट और मे बी इज जस्ट हाइडिंग इट ऑन द अदर एंड। बट अगर बात करेंगे मेड इन थाईलैंड, दे वांट अ कंफर्टेबल पिक, और कंफर्टेबल उनका पिक होने वाला है आइस बॉक्स, बिकॉज दे हैव अ क्लोज टू 83%। बट जी हाँ, जैसे हम बात कर रहे थे, दे डोंट हैव अ लॉट इन टर्म्स ऑफ द विन रेशियो एंड विन मैचेस, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अभी तक खेला है सिर्फ और सिर्फ 6 मैचेस यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब बात करें पिक बैंस के बारे में, देखिए जब आपको पता है कि मेड इन थाईलैंड का आइस बॉक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आई डू बिलीव पहले राउंड ऑफ बैंस में शायद आइस बॉक्स यहाँ पे बैन हो सकता है। फ्रैक्चर एंड बाइंड के बीच में जो सवाल है प्राइस, क्योंकि फ्रैक्चर एक ऐसा मैप है विच कुड अगेन बी द एक्स फैक्टर, डार्क हॉर्स हो सकता है। बट अगर बाइंड के ऊपर फ्रैक्चर को पिक किया जाता है यहाँ पे, अगर मेड इन थाईलैंड फ्रैक्चर को पिक करते हैं या फिर इवन एनिग्मा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोनों टीम्स के लिए। हम कहते हैं जो चीज स्ट्रैट्स होती है, जो पॉकेट स्ट्रैट आप कहते हैं कि भाई नहीं, यहाँ पे हम एक अलग कॉम्प खेलेंगे, विल ट्राई एंड थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क्स एंड सरप्राइज करेंगे सामने वाली टीम को। Of course, इन सरप्राइजेस की बात करते हैं तो I'll say कि I don't think Enigma Gaming आपको ब्रीज बैन करते हुए नजर आएंगे, because YB, I'll tell you, he hates that map. ब्रीज वो लिटरली हेट करते हैं, बट he's still studying that. He was studying that. I did see कि वो अपने टीम के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे थे ब्रीज के कुछ कॉम्पोजिशंस के ऊपर। आई मीन आज अगर ब्रीज आता है, काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे एनिग्मा गेमिंग के पास, बट ऑन द अदर साइड मेड इन थाईलैंड का ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैप भी रहता है। सो मे बी बैन अगेन, मे बी नॉट। सो it all comes down to the map veto. वो 3 मैप्स कौन-कौन से रहेंगे जरूर। Let's talk about one of the most OG maps, Haven and Ascent. What do you think about that, Sam? मुझे जो लग रहा है, आई मीन हेवन और एसेंट, जैसे शुरुआत में भी हम बात कर रहे थे, दे आर जस्ट क्लासिक मैप्स ऑफ वैलोरेंट एंड ऑलरेडी ये प्लेन स्टेज है, क्योंकि अभी भी लंबा सफर होने वाला है। नॉट ऑल द टीम्स लाइक टू स्पिल आउट ऑल देयर बीन्स, दे डोंट वांट टू गिव इट देयर ऑल, क्योंकि अगर बात करेंगे आइस बॉक्स, ब्रीज एंड फ्रैक्चर, दीज आर काइंड ऑफ गेम चेंजर मैप्स, कहाँ पे मे बी बाकी टीम्स बहुत सारी बार खेली नहीं है। एंड आई थिंक इफ दीज मैप्स कम इन वेरी अर्ली ऑन, थोड़ा ज्यादा रिवील आउट हो सकता है, बट अगेन इट्स स्टिल अ डू और डाई सिचुएशन। अगर प्लेन्स में आप अगर मौका खोएंगे, आप सीधा एलिमिनेशन में जाएंगे, एंड उसके बाद अगर आप जो अपॉर्चुनिटी है ऑलरेडी एपैक में रिप्रेजेंट करने के लिए, प्लेऑफ तक जाने के लिए, एंड वहां से वीसीटी मास्टर्स, यू डोंट वांट टू मिस आउट दैट अपॉर्चुनिटी, सो गिव इट योर ऑल फ्रॉम द गेट गो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन प्राइस, बिफोर यू गो एंड कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ हेवन एसेंट आई डू बिलीव पिक हो सकते हैं यहाँ पे दोनों, बिकॉज दोनों टीम्स इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो मुझे लगता है कि ये 2 मैप्स यहाँ पे पिक हो सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखिए, यू हैव नथिंग टू लूज। आप जब प्लेन्स के अंदर होते हैं तो यू हैव एवरीथिंग टू गेन, तो आप यहाँ पे स्टैट्स बचा के कोई मतलब नहीं बनता। देयर इज नो पॉइंट गेटिंग कंफर्टेबल। तो यहाँ पे आप अपने बेस्ट पिक्स कीजिए, आप अपनी गेम खेलिए। ऑफ कोर्स अगर सामने वाली टीम ने आपको प्रॉपर्ली स्टडी किया तो आपको काउंटर कर पाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको कंफर्टेबल गेम खेलना, आपको कॉन्फिडेंट गेम खेलना है। तो आई डू बिलीव ये दोनों मैप्स यहाँ पे खेले जा सकते हैं। बिल्कुल, साथ ही साथ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मैप्स वी हैव, यू नो, साइडलाइन एज वेल। फ्रैक्चर को हमने एग्जैक्ट साइडलाइन तो नहीं किया, बट फ्रैक्चर एज यू वर सेइंग माम, बाकी दिस कैन बी द एक्स फैक्टर मैप, लाइक वो पॉकेट स्ट्रैट्स वो सब जरूर डिप्लॉय हो सकते हैं, बट फ्रैक्चर एज अ होल हमने एनिग्मा गेमिंग को ज्यादा खेलते हुए नहीं देखा। ऑन द अदर साइड मेड इन थाईलैंड, दे आर वेरी स्ट्रांग एंड दे हैव शोन अस व्हाट दे गॉट ऑन दैट मैप। सो फ्रैक्चर पे अगर जाता है
you know RVK वहां पर आपको ब्रीच खेलते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ एंटीडोट विल कम डाउन टू द डुअलिस्ट रोल, maybe because मैं थोड़ा सा चैटर सुन रहा था कि एंटी might come in as the second duelist as well. If Enigma Gaming can do that, I mean it's going to be a lot for Myths to handle. Well, जब no, आप no, sorry, go खेलते on, हैं Lucifer. ना, आई थिंक जब आप फ्रैक्चर पे खेलते हैं इट जस्ट अलाउस यू टू ब्रिंग इन सम न्यू थिंग्स कि हमें पता है फ्रैक्चर इज नॉट एज अ नॉर्मल मैप जो हम वैलोरेंट के पूल पे देख रहे हैं, तो आई थिंक दैट कैन कम थ्रू। बट जैसे कैप्टन आई एग्री विद यू, इट्स अ वेरी स्ट्रांग मैप फॉर मेड इन थाईलैंड, क्योंकि उन्होंने जब भी प्लेऑफ्स में खेला है एंड स्पेशली इवन दो दे वर पुश डाउन टू द लोअर ब्रैकेट, वहां से भी उन्होंने अपना सफर तय किया ऑन फ्रैक्चर इटसेल्फ टू स्टार्ट देयर विक्ट्री ऑफ। एंड जब भी फ्रैक्चर में जीता इमीडिएटली अप कम्स हेवन, एंड वहां पे कॉन्फिडेंस भी था, वहां पे भी क्लोज आउट करते हुए नजर आए। जी हाँ, लोअर ब्रैकेट में वहां पे फाइनल्स में कहीं ना कहीं कैपिटलाइज नहीं कर पाए, बट अदर देन दैट आई थिंक देयर फ्रैक्चर इज लुकिंग रियली गुड मांबा राइट नाउ। फ्रैक्चर माइट बी लुकिंग गुड, there's no doubt about that, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि दोनों टीम्स के लिए फ्रैक्चर स्ट्रांग है, इट्स नॉट जस्ट वन टीम, दोनों टीम्स यहाँ पे खेल सकती है उसको, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से मैप पूरा इवॉल्व हुआ है। जब आया था देयर वाज एक ओपन बुक था, ब्लैंक स्लेट था वो, क्योंकि जो मैप का डिजाइन है वो बहुत ज्यादा यूनिक है, इट अलाउज यू टू रोटेट क्विकली फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। जो जिपलाइन है, एंड द बेस्ट पार्ट इज जब तक आप 2/3 जिपलाइन क्रॉस नहीं करते आपको आवाज भी नहीं आती, तो ऐसा नहीं कि वो स्लो रोटेशन है, बहुत ज्यादा क्विक रोटेशन है। एंड दिस इज समथिंग जब नियॉन इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये बाकी सारे मैप्स में भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इट्स लाइक इट्स अप देयर विद मेडिकेशंस कि भाई नहीं, उनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई डू बिलीव यहाँ पे ये मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर फ्रैक्चर पिक होता है, जो भी टीम फ्रैक्चर जीतेगी, दे हैव अ मैसिव चांस ऑफ वॉकिंग अवे विद द विक्ट्री, बिकॉज देखिए बाकी सारे मैप्स इतने लंबे समय से है कि वहां पे इवॉल्व करना स्ट्रैटेजीज को इतना आसान नहीं होने वाला। ऑफकोर्स जब नए एजेंट्स आते हैं या फिर आप नर्व्स की बात करते हैं, चेंजेस की बात करते हैं, तब धीरे धीरे छोटे मोटे चेंजेस आते हैं। बट आई डू बिलीव एनिग्मा यहाँ पे कुछ नया दिखा सकती है हमें। Of course, and Enigma के नए करतूत तो हमने बहुत ज्यादा देखे। Like who would have thought that they will bring completely change up the agent composition? हम हमेशा से ही देखते आ रहे थे पहले। I'm talking about 2 months ago जब RV के आपको Sentinel पे दिखते थे and you know Rexy खेलते थे Initiator। But what happened is कि उसके बाद as soon as Skyesports joined 2-3 months ago, in fact वो 4-5 महीने हो चुके हैं जब उन्होंने ज्वाइन किया है, they switched up roles। Skyesports आपको या तो वो duelist खेलते हुए नजर आ रहे थे और he was going in for that controller। Anti left the controller, fell back into a Sentinel। एंड साथ ही साथ Rexy एंड RV के जो switched up roles, कुछ ही स्पेसिफिक मैप्स रहते हैं, जैसे आप Ascent की बात कर लीजिए या फिर Haven की बात कर लीजिए, जहां पर आपको RV के जो है Sentinel रोल पे दिखते हैं। बट Rexy I really think कि आज they have to come in with the best thing they have played on। कंफर्टेबल अपने एंड से रहना पड़ेगा, ना कि मैप में जाके कंफर्टेबल होना है। दैट माइट बी द की टू विक्ट्री। I agree with you यहाँ पे। बट लूसिफर जस्ट वन सेकंड, आई नीड टू मेक दिस पॉइंट बिकॉज देखिए जिस तरीके से वो चेन्नई में लैंड पे खेले थे, उन्होंने बूट कैंप सेटअप किया हुआ है, तो दे आर वेरी कंफर्टेबल दैट। जिस तरीके से उनकी प्रैक्टिस भी चल रही है, आप उनको सोशल मीडिया पर अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि प्रैक्टिस फुल फोर्स में चल रही है। बट एट द सेम टाइम आई डू बिलीव प्रेशर उनके ऊपर जितना अब हम सोच रहे उतना प्रेशर नहीं होने वाला है उनके ऊपर, बिकॉज दे आर लुकिंग फेयरली कॉन्फिडेंट। तो फॉर मी इट वुड बी अ सरप्राइज इफ इट वाज अ वाइट वॉश, but I do believe there is going to be a strong fight from both the teams। यहाँ पे दोनों टीम है, जो भी रिजल्ट होगा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2-1 होगा कम से कम। आई एग्री विद यू ऑन दैट मैम। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो दोनों टीम से जो कॉन्फिडेंस यहाँ पे देखने के लिए मौका मिल रहा है, आई मीन देयर रन्स वाज प्रीटी गुड। अगर बात करेंगे जो क्वालिफिकेशन रन था एनिग्मा का, इट वाज फ्लॉलेस अंटिल द ग्रैंड फाइनल्स। अगर बात करेंगे यहाँ पे मेड इन थाईलैंड का, देयर फर्स्ट राउंड वाज वेरी गुड फॉर देम, दे वर वेरी डोमिनेटिंग, बट उसका इमीडिएटली अपर ब्रैकेट राउंड 2 में वहां पे मात देते हुए नजर आए। उसके बाद लोअर ब्रैकेट रन वाज रियली गुड फॉर देम। लोअर ब्रैकेट फाइनल्स तक उन्होंने अपना सफर तय किया, इट वाज वेरी फ्लॉलेस देयर, बट उसके बाद लोअर ब्रैकेट फाइनल्स में हारते हुए नजर आए। सो इन टर्म्स ऑफ run it was good, but उसके बाद यहाँ पे APAC में एंट्री हो चुका है। Now is where they have to step up their game, they step up their ante। अगर यहाँ पे अगर वो नहीं करेंगे मुश्किल हो जाएगा if they're not ready for the opponent team, because अभी आपका मुलाकात हो रहा है अलग अलग रीजन से अलग अलग प्लेयर्स के साथ। जैसे कैप्टन ने यहाँ पे जरूर बताया कि यू हैव टू बी कंफर्टेबल। यहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल कहीं ना कहीं दोनों टीम्स हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ जो मेटास आ सकते हैं, जो पिक्स आ सकता है, क्योंकि हमें पता है जो I would say in general, not only I would say SA या ACA APAC अगर पूरा देखेंगे वहां पे कहीं ना कहीं एक मेटा पिक्स है, उससे हट के वो कहीं ना कहीं कंफर्ट पिक्स के ऊपर खेलते हुए नजर आता है, एंड उसके वजह से जो ओपोनेंट टीम्स होते हैं दे जनरली गेट सरप्राइज कैप्टन। Of course, and वो जो opponents लेके आएंगे उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा Enigma Gaming को। Well, we've talked a lot about Enigma Gaming, but I'd really love to talk about Made in Thailand। देखिए Made in Thailand का जो overall roster है, अब बात कर सकते हैं Alone की। Alone
Like his name is Alone, and you know what? He does it exactly that way. Alone जाएंगे, अगर Ascent का मैप रहता है, he'll just go into mid, and mid पे जाने के बाद he swings left, right, center. He'll get 3 picks and he'll immediately fall back. I mean, उनको shut down करना Ascent के मैप पे mid पे बहुत ज्यादा valuable होता है. If we talk about Kadoom, his name is Kadoom, but he can go kaboom. I'll give you to that. Yes. 100%. WannaFly is probably one of the best players right now in that entire team circuit, and unka aim itna raw hai. It's exactly like, raw fuel from the SA circuit and Kadoom from Made in Thailand. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन हम बात करें थे कि इंडियन टीम्स जब पिछले 4 मैचेस हुए, अब बात करें ओवरऑल सर्किट के बारे में, ओवरऑल साउथ एशियन सर्किट के बारे में, वीसीटी की बात नहीं कर रहे। पिछली 4 बार जब भी इंडियन टीम्स गई है, दे एंडेड अप लूजिंग आउट। तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होने वाला है, बट एट द सेम टाइम इट्स आल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग कि नहीं, वी आर गोइंग टू बी द फर्स्ट टीम गोइंग आउट, हम अपनी टीम के लिए विक्ट्री लेके आएंगे। एंड हमेशा आसान नहीं होता, बट एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस एज वेल। एंड यहाँ पे जितनी बार इंडियन टीम्स बाहर गई है खेलने के लिए, पिछली 2 बार की अगर आप बात करें तो बहुत ज्यादा अनुभव मिला था। बट लेट्स talk about the veto here. Price split coming in as a ban. Not surprised at all over there. Yeah, of course. I mean, split तो आएगा ही ban. हमने पहले मैच में भी देखा था कि split was the first ban. In fact, Breeze gets banned. I mean, Enigma Gaming, come on, dude. You have to play Breeze sometime, right? हम लोग expect करते हैं कि आप Breeze पे थोड़ा study करके आएंगे, maybe surprise the opponents, but Breeze gets banned as well. So, Sam, what do you think? Like, which can be the first map pick? Oh, it's Heaven. Oh my god. I thought of Icebox, but जी हाँ, जैसे मैं बात कर रहा था, Fracture और Heaven उनका कहीं ना कहीं होल्ड है, पर Enigma goes on the attack. Enigma, I think इस बार Ascent choose करते हुए नजर आएंगे. I mean, they're very good on that, and it's a classic matchup of Valorant, right? I mean, whenever there is a best of 3, I think Ascent का मुकाबला कहीं ना कहीं होना चाहिए, Captain. There you go. Of course. Ascent is हमारे दोनों जो predictions थे, like Heaven and Ascent, and it's exactly the same. It's deja vu from game 1, right? But Mamba, I want to ask you, do you think Fracture is still on cards here on the decider? Oh, absolutely. Fracture is still on cards. I do believe Enigma might go in for an icebox ban because of the stats. I'm purely speaking on stats क्योंकि numbers आप देख सकते हैं, आप हमेशा future नहीं देख सकते. But I do believe icebox ban never mind, veto उन्होंने ही कर दिया icebox because this is surprising as a matter of fact. मुझे लगा था मिथ खेलना चाहेंगे आइसबॉक्स, अगर आप उनके स्टैट्स देखेंगे तो आइसबॉक्स में उनका प्रदर्शन अच्छा था, बट एनिग्मा आल्सो कमिंग विद द ब्रीज बैन, आई डू बिलीव कि होमवर्क यहाँ पे किया गया है। एंड मिथ गोइंग इन फॉर अ 5D चेस मूव। अब सवाल ये है कि एनिग्मा कौन सा मैप बीट करती है। आई डोंट नो व्हाई, आई स्टिल हैव अ फीलिंग दैट फ्रैक्चर खेला जा सकता है, बट नेवर माइंड, वो फ्रैक्चर वीटो कर देंगे। सो डिसाइडर मैप इकलौता ही बचेगा। एंड या देयर हैज बीन अ मैसिव मेटा शिफ्ट। Bind, it is going to be Bind. I mean, yeah, okay. So Heaven, Ascent and Bind back to the square one days जब Enigma Gaming शुरुआत किए थे। Icebox नहीं है, surprise है। मुझे लग रहा था कि Icebox आएगा। But talking about the map picks, Mama, I really think that this might be a 2-1. There's no chance this can be a clear 2-0. डिपेंड्स ऑनेस्टली। देखिए यहाँ पे हेवन की अगर हम बात करें, एनिग्मा के पास मोमेंटम एंड कॉन्फिडेंस का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहने वाला, बिकॉज हेवन पे अटैकर साइड पे आप जब स्टार्ट करते हैं, हेवन आपको पता है कि अटैक हैवी मैप है, डिफेंस करना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली विद 3 साइड्स, राइट। जब 3 आपके पास स्पाइक साइड्स डिफेंड करने के लिए होती है, तो एनिग्मा पिकिंग अटैक वुड वर्क आउट फॉर द कॉन्फिडेंस। एंड आपको पता है कि एनिग्मा एक ऐसी टीम है, खासतौर पर अगर आप रॉ फ्यूल की बात करें, अगर उनको मोमेंटम मिलता है तो आपने देखा ही चूज थ्रू ऑपोजिशन, वो नहीं मौका देते सामने वाली टीम को। बट ऑफ कोर्स इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ दे एक्चुअली प्ले इन द सर्वर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एनिग्मा इंडियन फैंस के लिए यहाँ पे अटैक में अच्छी शुरुआत कर पाएंगे, बिकॉज अगर हेवन में शुरुआत अच्छी नहीं कर पाए, वो स्पिल ओवर होगा सेंट में भी, एंड वहां पे एनीथिंग कैन हैपन। बट अगर गेम नंबर 3 पे गया, देन इट्स एनीबॉडीज मैचअप, बिकॉज आई स्टिल डू बिलीव, अंदर मेरे दिल के अंदर उम्मीद है ये 2-1 होगा। I agree with you as well, Mamba, कि यहाँ पे 2-1 होने का बहुत बड़ा मौका रह सकता है, but as you rightly pointed out, it all depends on Heaven कि Heaven का शुरुआत कैसे होगा। अगर Heaven का शुरुआत कहीं ना कहीं एनिग्मा की तरफ से बेहतरीन हुआ, then we might end up seeing it be one-sided, but also on the same end कि अगर ये जो पहला मैप है मेड इन थाईलैंड जीतते हुए नजर आए, then I feel like it's going to be a 2-1 all the way, क्योंकि Ascent में मुझे लग रहा है एनिग्मा का जो I would say होल्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग है, and especially raw fuel likes to fly, जैसे हम बात कर रहे थे, that blade storm starts popping off, he just runs in. I mean, he's a madman, especially जब अगर उनको आप छोड़ देंगे in a 1v5 situation, 1v4 situation, उनके टीममेट सब जा चुके हैं, he just goes out all bonkers. He's like it's a do or die situation. तो कमाल करके दिखाएंगे हम भी। Yeah, but देखिए एक चीज हमें मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा जनता को कि Global Esports was dominating Ascent for a long time. पूरे SCS में until they met the match, Enigma Gaming वो triple initiator setup. I mean playoffs तो उन्होंने dominate किया ही है. In fact, group stages में भी they were just going ham with that
ट्रिपल इनिशिएटर सेटअप, लेकिन अचानक से मुलाकात होता है पहले ही मैप पे एसेंट पे। इनफैक्ट एक कमबैक करके दिखाया था एनिग्मा गेमिंग ने। सो यस, एनिग्मा गेमिंग वाज द ओनली टीम जो एसेंट को तोड़ पाए थे, एंड दैट टेल्स अस कि कितना ज्यादा स्ट्रांग एनिग्मा गेमिंग के लिए दूसरा मैप रहेगा। बट पहला मैप हेवन का है जरूर। सो हेवन पे आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द डिफॉल्ट सेटअप रनिंग इन फ्रॉम एनिग्मा गेमिंग। आपको एंटीडोट और किलजॉय खेलते हुए नजर आएंगे, एक्सकैली ऑन द ओमेन, रेक्सी आपको सोवा खेलते हुए नजर आए। We all know raw fuel, शायद वो चेंबर खेल सकते हैं, maybe he goes in for that jetpack as well. But what about the fifth player? What can RVK play? Maybe a breach, because breach meta, it's back once again. It's dicey, honestly, it's dicey. ये देख के ही पता चलेगा. I do believe यहाँ पे predictions करके मतलब नहीं, because Icebox जब ban हुआ, because 83% win rate आपने बताया था Luciville, Myth का 83% win rate, and they decided to sacrifice that map. I'm not sure यहाँ पे क्या चल रहा है, unless of course it's a 200 IQ move and made in Thailand इतना ज़्यादा confident feel कर रहे हैं कि they don't need to play their best map and they're saving it for later on in the tournament. But of course at the same time ये बहुत बड़ा एक अब कहते हैं ना कि ललकार रहे सामने वाली टीम को, एनिग्मा को ललकार रहे वो, एंड इफ एनिग्मा मैनेजेस टू बीट देम देन ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर देम. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एजेंट कॉम आई डू बिलीव अगर वो चेंज करे ना करे, दैट्स नॉट गोइंग टू मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस. यहाँ पे कॉन्फिडेंस इन प्लेइंग योर नेचुरल गेम, ये सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है. आई एग्री विद यू ऑन दैट. आई मीन जो नेचुरल गेम प्ले अगर दोनों टीम से जो बाहर आ सकता है, स्पेशली देखिए एनिग्मा दे अंडरस्टैंड हेवन इज अ वेरी अटैकिंग फेवर मैप, एंड उसी की वजह से जो साइड है ऑलरेडी अटैक चुनती हुई नजर आ चुकी है, इवन दो मेड इन थाईलैंड मेड द चॉइस ऑफ द मैप. तो कहीं ना कहीं अगर उस पे उनको मौका मिला दे विल बी जस्ट प्रीटी डैम गुड. बट अगर बात करेंगे जो पिछला मैचअप हुआ था आरआरक्यू वर्सेस टीम बिग बैम, वहां पे हम सोच रहे थे कहीं ना कहीं बिग बैम शुड हैव वन आउट हेवन, बट जो प्ले था आरआरक्यू की तरफ से, जो डिफेंसिव अग्रेशन देखने के लिए मौका मिला, आई थिंक इफ दैट कम्स आउट फ्रॉम मेड इन थाईलैंड एज वेल, एनिग्मा मुश्किल पे आ सकती है इन द अटैकिंग हाफ चॉइस. जी हाँ, लेकिन एक और साइड मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, एनिग्मा की अगर आप बात करें, उन्होंने 51 बार ये मैप खेला जिसमें से वो 29 टाइम्स जीते हुए. सो जो विन रेट है उनका that's actually incredible. But at the same time अब बात करें MITH के बारे में, with this lineup they only played it for 13 times. अगर आप numbers की बात करें, experience दोनों teams के पास of course बहुत ज़्यादा, but Enigma is feeling very confident on this. And given that they're starting on the attacking side, अगर वो रोटेशंस मैनिपुलेट कर पाए सक्सेसफुली, अगर मेड इन थाईलैंड वो फेक्स बाय करती है, then of course Enigma is going to have a massive upper hand on this, especially in terms of momentum. और मैं मानता हूँ कि इनके लिए momentum बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because अब raw fuel की भी बात करें, I do believe उनकी जो mentality it works in a very peculiar way. जो भी उनको मिले, जिन्होंने भी उनको लैंड पे उनके साथ इंटरैक्ट किया, उनको पता है. आई कैन गिव यू एन एनेक्डोट. जब लैंड हो रहा था चेन्नई में, तो देयर वर 2 कोच बूथ्स, एंड जब वाईबी दूसरे कोच बूथ में वो बैठे थे, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज गो सिट इन द डिफरेंट ऑन द अदर वन, बिकॉज वो हमारे लिए लकी है. सो एट द सेम टाइम इट्स आल्सो मेंटल गेम, बिकॉज अब गेम के अंदर कितना भी कुछ भी कर ले उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट यू हैव टू आल्सो बी वेरी स्ट्रांग मेंटली. Of course, and let's not forget कि हम मोमेंटम की बात करें तो पेस के भी बारे में भी हम बात करें. देखिए, we have seen it कि entire ऐसे सर्किट में it's mostly a slow paced game. कुछ initial rounds अगर हार जाते हैं, entire team just goes on a very slow and a very low gear. On the other side, अगर आप बात करते हैं किसी भी टीम की पूरी APAC में, इनफैक्ट we did see that in matchup 1 as well, कि एक बहुत ही फास्ट पेस एग्जीक्यूट निकाला जाता है. Previously they did start off, जब हम देखते थे पिछले सीजन मास्टर्स में या फिर चैंपियंस की बात करेंगे, they were executing rounds only at the last 40 seconds. लेकिन अभी they just going ham. वो क्या करते हैं, immediate execute निकालते हैं, and जब तक डिफेंडर्स रिस्पॉन्ड कर पाए कोई जवाबी कार्रवाई नहीं किया जा सकता. विल ऑफ कोर्स सी कि क्या आज एनिग्मा गेमिंग अटैकिंग हाफ में वैसे ही कुछ करना चाहेंगी, और जैसे कि लूसिफर आप कह रहे थे, will they bait out rotations? Will we get to see that? Mamba, what do you think on that? I do believe शुरुआत थोड़ी स्लो होगी यहाँ पे, unless of course जो composition है वो बहुत ज़्यादा skewed होगा एक टीम के फेवर में. अगर एनिग्मा के पास composition का एडवांटेज होगा, then of course वो खेलेंगे, जाएंगे, they'll try and control the pace of the game. और वो ज़रूरी भी होता है, जब आप attacking side में शुरुआत करते हो, you need to control the pace of the game. As defenders, it can be done, लेकिन ज़्यादा मुश्किल होता है. बट एट द सेम टाइम आई डू बिलीव कि यहाँ पे स्लो शुरुआत करेंगे, स्लो एंड स्टडी रहेंगे. लेकिन आपने एक चीज़ मेंशन करी थी, अगर कोई टीम शुरुआत में राउंड्स हारती है तो बड़े स्लो हो जाते हैं. बट एट द सेम टाइम मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स नॉट व्हाट यू डू इन द सर्वर, इट्स ऑल्सो व्हाट यू डू इन हियर. क्योंकि टीम जब कम्युनिकेट करना बंद हो जाते हैं, प्लेयर्स का मोराल लो हो जाता है, तो वो बात नहीं करते एक दूसरे के साथ, एंड उसकी वजह से हर एक प्लेयर अपनी अपनी गेम खेलने लगता है, उसकी वजह से पूरा पेस लो हो जाता है. बट देन अगेन यहाँ पे हम बात करें प्रोफेशनल प्लेयर्स के बारे में जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, अनलेस ऑफ कोर्स इट गेट्स ऑन द नर्व्स. It can. There is high possibility वो हो जाए, but उसके लिए तो एक वन साइडेड गेम चाहेगा, एंड दोनों जो टीम्स है आई थिंक किसी के लिए भी ये वन साइडेड गेम होगा, अनलेस ऑफ कोर्स मेड इन थाईलैंड
they just dominate on the defenders. अब जैसे कि RRQ ने किया था, RRQ जिस तरीके से रीड कर रहे थे, especially आप पिस्टल राउंड ले लीजिए, like second half का पिस्टल राउंड, you remember Sam की वो double trouble, those two picks on C-Long, I mean that changed the entire momentum of the game. Enigma Gaming को कुछ वैसे ही करना पड़ेगा अगर वो करने में सक्षम होते हैं, then of course we might see Haven walking into the hands of Enigma Gaming. I agree with you, Captain. कि देखिए, it's all about the read. कभी ना कभी जैसे माम्बा ने बताया, yes, it is a mental game, but अब mental कब breakdown हो जाता है? When somebody is able to read you out like a book, and I think वहाँ पे जब एक मौका मिल जाता है, when you're reading the opponent, and especially देखिए, वहाँ पे read क्यों हो रहा था? There was a double duelist setup coming through, and उस double duelist setup के वजह से हमें पता है, defense में you will have that difficulty, and उस difficulty को कहीं ना कहीं हटाने के लिए you have to go aggressive at one of the other ends, and उसको read कर रहे थे, they went for a peek and they saw the players, headhunter था वहाँ पे, and they just took down those players. अगर इस बार भी वो होता है, maybe a double duelist setup coming through from either of these teams. Enigma unlikely, but maybe यहाँ पे Made in Thailand की तरफ से double duelist setup आ सकता है, because defense में देखिए, they just need close to 4 or 5 rounds, then attacking half में वो double duelist फायदा दे सकता है, but I would say it's again a risky move, क्योंकि हम देख रहे हैं in the recent metas people are depending most on the utility based gameplay, and अगर वो utility based gameplay ज़्यादा फायदा दे रहा है, they're letting go of the duelist as well, क्योंकि देखिए चेंबर जो इतना ज़्यादा involvement आजकल दिखा रहा है, even though with the trademark lost, I feel like teams are ready to give up the duelist and just play on more of utilities, क्योंकि information ज़्यादा है, you can outsmart the opponent, अगर ऐसा फायदा मिलता है, why not play the game on base of utilities? What do you think on this, Mamba? I want to pitch in on this. आप देखिए पुराने मेटा की अगर आप बात करें, आप EU के मेटा की बात करें, 4 या 6 महीने पहले Sage as a duelist यूज किया जाता था. We've seen some really popular players do this, but at the same time जब से Neon आया, Neon का impact on Haven, I still believe कि बहुत सारी teams या बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं, they don't understand how much this agent can actually have impact on this map. यहाँ पे आप double duelist की बात करें, I don't think that will happen, but at the same time Neon, there's a massive possibility यहाँ पे आपको कदूम नियॉन भी दिखाई देगा मेड इन थाईलैंड की अगर हम बात करें तो, क्योंकि देखिए हमने बहुत बात कर ली एनिग्मा के बारे में, मिथ की अगर हम बात करें, कदूम यहाँ पे आपको नियॉन के ऊपर नजर आ सकते हैं, एंड श्योर आप चेंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इमेजिन इफ दे हैव अ फास्ट पेस स्टार्ट विद 2 इनिशिएटर्स एंड नियॉन, that's a deadly combination, but it's also very hard to pull off. अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो वो बैकफायर हो सकता है, क्योंकि आपको सेंटिनल की भी इतनी ज्यादा जरूरत होती है, बट एट द सेम टाइम आई डू बिलीव अगर वो कॉम्बो अगर यहाँ पे आपको देखने मिलता है तो बहुत ज्यादा फास्ट पेस गेम देखने मिल सकती है. नियॉन को रोकना इतना आसान नहीं है, अभी भी बहुत सारी टीम स्ट्रगल करी उसको काउंटर करने के लिए, एंड वी हैव सीन हाउ इंपैक्टफुल नियॉन इज. Of course, and let's not forget कि आप अगर मेड इन थाईलैंड की बात करते हैं, there's another thing I'd like to really mention. देखिए ये टीम जो है they did lose in the loser brackets, so वो loser brackets का जो loss था against Skyesports, I mean वहां पे चल के मेड इन थाईलैंड they were hurt. वो जख्मी शेर वाला फैक्टर तो हमेशा से ही रहता है, so वो जख्मी शेर क्या कर सकते हैं अभी प्लेन्स पे. एजेंट्स कॉम्पिटिशंस we can predict as much as we want, लेकिन जब तक वो एजेंट सिलेक्शन हमारे सामने आते नहीं है तब तक कुछ भी कहना काफी मुश्किल रहेगा. So yes, मेड इन थाईलैंड they have to step up their game indeed. And अगर आप बात करते हैं दूसरे मुकाबलों की, मैं देख रहा था यहाँ पर कि फुल सेंस के अगेंस्ट में they did win a 2-1. इसके साथ अगर आप बात कर रहे हैं X10 के बाद, X10 के साथ they win a 2-0. So X10 के अगेंस्ट में 2-0 win करना, that is massive, that's really really huge. लेकिन उन्होंने जरूर Xerxia Esports के अगेंस्ट में एक 1-2 का लॉस भी फेस किया है. Xerxia, they are the strongest team right now in APAC, and ये APAC की जो टीम है Xerxia, उनके साथ मुलाकात हो सकता है ग्लोबल esports का, जो आप डायरेक्टली ग्रुप स्टेजेस में एंजॉय करेंगे. बट यस, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ मेड इन थाईलैंड, आई थिंक Enigma Gaming, even if they come with 100% preparations, I still think कि उनको उससे भी ज्यादा गेम के अंदर आउटपुट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मेड इन थाईलैंड will come and they will just shut you down with a 2-0 score line. आई एग्री विद यू, बट एक चीज यहाँ पे कैप्टन मैं बताना चाहूंगा कि WannaFly, जैसे आप बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ द होल टीम पर्सपेक्टिव जो उनका जर्नी था, एंड ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट कदम क्या कर सकते हैं, बट मैं देखना चाहता हूँ WannaFly, क्योंकि देखिए ऑलरेडी रॉफ्यूल के बारे में बात कर रहे थे कि इफ ही स्टार्ट्स फ्लाइंग एंड फ्रैगिंग ही इज जस्ट फ्यूल्ड अप कंप्लीटली, बट WannaFly वो गेम चेंजर बन सकते हैं. हम बात ही कर रहे थे चेंबर के ऊपर, एंड WannaFly खेलते भी नजर आ सकते हैं, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि WannaFly कितना ज्यादा इंपैक्ट अपनी टीम के लिए दिलाएंगे. देखिए आई डू बिलीव यहाँ पे WannaFly का इम्पैक्ट जरूर होने वाला है. मैप लाइक हेवन आपको सेंटिनल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि आप जब 3 साइड्स डिफेंड कर रहे होते हो, आप तीनों साइड पे नहीं रह सकते, ओनली 5 प्लेयर्स, राइट. तो आपको एक आध साइड को सैक्रिफाइस करना होता है और सेटअप करना होता है इस हिसाब से कि आप उसको डिफेंड कर पाए.
ऑफ कोर्स एंड साथ ही साथ मैं जरूर कहना चाहूंगा हेवन पे जो ओवरऑल विन रेशियो है वो रहेगा मेड इन थाईलैंड का 62%. आई मीन दैट्स अ नैरो मार्जिन. सिर्फ और सिर्फ आपको 12% का ही वो एडवांटेज मिल रहा है विनिंग साइड पे, लेकिन अटैकर साइड पे इनका जो 5% एंड डिफेंडिंग साइड पे उनका विन रह चुका है 53%. सो प्रीटी बैलेंस्ड आउट. हमें ये जो स्प्लिट है देखने का मौका मिल रहा है बिटवीन द अटैकर्स एंड द डिफेंडर्स. लेकिन जो स्कोर लाइन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. स्कोर लाइन जितनी भी बार हेवन पे हमने देखा है, इट हैज बीन अ क्लोज वन फॉर मेड इन थाईलैंड, बी इट अ विन और अ लॉस. देखिए कैप्टन, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ क्लोज वन, बट उससे पहले हम जरूर थोड़ा इंतजार करें प्लेयर्स का जुड़ने के लिए. बट उसी बीच हम भी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड मिलेंगे जब प्लेयर्स के साथ मैच का शुरुआत होगा. Why you gotta do me like that? Don't say you love me, then go and leave me. It can get ugly, trust and believe me. Saying to myself, looks so deceiving. Trying to fight back, too far from easy. I've seen your hands. Delilah, don't you know I've seen your hands. Delilah, don't you know my heart turned cold, lost control. Looking at this beautiful distraction, fell in love with a fatal attraction. I really let my guard down, now relaxing. Why did I open up? She taking way too much. Put in my all and got nothing back. I'm feeling so ashamed, I fell into your game. Why you gotta do me like that? Don't say you love me, then go and leave me. It can get ugly, trust and believe me. Saying to myself, looks so deceiving. Trying to fight back, too far from easy. I've seen your hands. Delilah, don't you know I've seen your hands. Delilah, don't you know I gave you all of me, had me so deceived. You chose to leave my life, so I'm on my own in the cycle. I can't believe. Don't say you love me, then go and leave me. It can get ugly, trust and believe me. Saying to myself, looks so deceiving. Trying to fight back, too far from easy. I've seen your hands. Delilah, don't you know I've seen your hands. Delilah, don't you know
Well, once again, we are back and मेरा नाम कैप्टन प्राइस, मेरे साथ जुड़ते हुए लूसीफर एंड मामा. वेलकम बैक अगेन. एंड कुछ ही देर में जो हमारा मैच है जिसके बारे में हम इतनी बातचीत कर रहे थे स्टार्ट होने वाला है. सो या कमिंग बैक टू द टॉपिक वंस अगेन मामा, व्हाई डोंट यू शेड सम लाइट ऑन एनिग्मा गेमिंग्स रीसेंट फॉर्म, स्पेशली एक पर्टिकुलर मैप पे वो रहने वाला है असेंट का. देखिए, लेट्स लीव आउट असेंट फॉर अ सेकंड. यहाँ पे हम बात करेंगे उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में. आप लैंड की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने क्वालिफाई किया यहाँ पे प्ले-ins में, पूरे लैंड में अंटिल द ग्रैंड फाइनल्स उन्होंने एक मैप भी ड्रॉप नहीं किया था. तो कॉन्फिडेंस उनके पास बहुत ज्यादा है. दे प्लेड अगेंस्ट अ क्राउड, इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, सॉरी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. तो प्रेशर उन्होंने एब्जॉर्ब किया. आई डू बिलीव यहाँ पे और ज्यादा कंफर्टेबल होंगे बिकॉज उनको प्रॉपर बूट कैंप मिला है चेन्नई में, जहां पे वो 2-3 दिन से चिल कर रहे हैं. देव बीन प्रैक्टिसिंग अ लॉट. सो आई डू बिलीव कॉन्फिडेंस उनके पास बहुत ज्यादा होने वाला है. सेंट की बात करें, अगेन लैंड पे उन्होंने मैप्स ड्रॉप नहीं करते until and unless of course they went against global esports. लेकिन global esports के साथ ही बहुत क्लोज मैचेस थी. 11-13 की स्कोर लाइन आपने देखी हुई है. तो आई डू बिलीव इट्स नॉट गोइंग टू मेक that much of a difference. कॉन्फिडेंस उनके पास बहुत ज्यादा हाई है. एंड बीइंग अ मोमेंटम बेस्ड टीम, स्पेशली विद प्लेयर्स लाइक रॉफ्यूल, मुझे लगता है कि यहाँ पे they have a better chance than usual. अगर आप बात करें रैंडमली, अगर ये दो टीम्स की मैच होने वाली थी विदाउट अ कपल ऑफ मैचेस इन द पास्ट, तो शायद मैं मिथ को थोड़ा ज्यादा मैं चांसेस देता. बट यहाँ पे एनिग्मा जितना स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, जितने पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर, आई डू बिलीव एनिग्मा हैज अ बेटर चांस देन ऑल द अदर मैचेस. आई एग्री ऑन दैट माम्बा, क्योंकि देखिए ऑल्सो कि जो हम बात भी करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स एज वेल, द टीम मिथ, उनके जो स्टैट्स है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मैप्स एंड मैचेस इन देयर मैप पूल, वहां पे ज्यादा मैचेस उन्होंने खेला नहीं है. सो देयर एक्सपीरियंस समवेयर इज अ लिटिल बिट राइट नाउ ऑन द कार्ड्स, ऑन द लाइन. बट ऑन द अदर हैंड एनिग्मा का अगर बात करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है. आई मीन ऑल्सो दैट इन द एसए सर्किट वहां पे टीम्स जो डोमिनेट कर रहे थे, इट वाज वेलोसिटी एज वेल एज ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स. एंड उस बीच में यहाँ पे एनिग्मा घुसते हुए एंड आल्सो टेकिंग दैट एक्सपीरियंस इनटू फैक्टर एज वेल, एंटीडोट कमिंग इनटू द पिक्चर एज द आईजीएल, वहां पे कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है बदलाव हो चुका है. एंड आल्सो वाईबी कमिंग इन एंड पिचिंग इन, एनिग्मा को वो एक्सपीरियंस एडेड ऑन बेनिफिट एंड आल्सो टू play together as a team. I think वहां पे कहीं ना फायदा मिला, because if you see right now in Enigma's form, they play together as a team. हम बात करते कि team generally try to go out a little bit solo, but हम देख रहे कि they like to go solo only when they're in a risky situation, जब उनके पास numbers नहीं है. But otherwise they play together, stick on together, they work on the trade game and हर वक्त अपने positive trade रखने के लिए मौका ढूंढते हैं. Of course, and साथ ही साथ अगर हम बात कर रहे थे, देखिए जब ब्रेक आया उससे पहले we were talking about the win percentage of Myth. Let's talk about the win percentage of Enigma Gaming. Not much of a difference, 64% का विन, लेकिन ज्यादातर विन्स जो है वो आपको अटैकिंग हाफ में देखने का मौका मिल रहा है कंपेयर टू मिथ, जिनके पास डिफेंडिंग हाफ में ज्यादा विन्स थे. वेल 58% विन रेशियो. इट्स अ क्लोज वन, इट्स अ वेरी क्लोज वन. कंपैरेटिवली आपको ऑन पेपर तो जरूर दिख रहे हैं कि एनिग्मा गेमिंग की टीम स्ट्रांग है, बट दे हैव जस्ट प्लेड इन द एसए सर्किट इटसेल्फ. एंड अगर आप मेड इन थाईलैंड की बात करेंगे, वेल दे हैव स्टेप्ड अप. पहले भी हमने देखा है इनको एपैक पे खेलते हुए, एंड अभी एपैक चैलेंजर स्टेज 2 में they are fighting out against Enigma Gaming. So Haven, I'll predict it's going to be a very very close one. लेकिन उसके बाद अगर जीत जाते भी हैं Enigma Gaming, अगले दो मुकाबले काफी मुश्किल रह सकते हैं, because Ascent का win ratio I can see it's a 60% win ratio. And अगर आप opponents की बात करेंगे, well there again Enigma Gaming on paper looking strong, लेकिन आज मैप के दौरान क्या होगा? Mamba, do you think there is a high chance कि एक one-sided game बिल्कुल ना देखने का मौका मिले हमें? There is definitely a chance कि वन साइडेड अफेयर नहीं होने वाला है. मैं I'm giving that benefit of doubt to Enigma यहाँ पे, क्योंकि हिस्टोरिकल रिजल्ट्स की हम बात करें, हम कितने भी प्रेडिक्शंस कर ले, दैट दे विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑफ ऑन द प्रीवियस मैचेस. हमारे पास जो स्टैट्स अवेलेबल है उसके ऊपर हम प्रेडिक्शंस करते हैं. उसी की वजह से हमने बात करी आइसबॉक्स के बारे में, फ्रैक्चर के बारे में, बोथ ऑफ व्हिच बाय द वे प्रूवन रॉन्ग. तो आप you can always try and project कि आगे क्या होगा, but at the same time आपको जो untangible चीजें होती है, जैसे कितना confidence है, कितना comfortable feel कर रहे हैं, उसको भी account में लेना पड़ता है. You have to give it some sort of credibility, and आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये one sided match नहीं होगा, unless of course Haven एक one sided domination होता है. क्योंकि Myth, while like देखिए जितनी भी strong team हो, Enigma is going to try the best, but अगर Myth dominate करती है Haven में, especially in the first half, तो वो शायद mood set कर सकते हैं बाकी की दो matches के लिए. Yes, and adding on top of this, देखिए दोनों टीम्स एक दूसरे से पहली बार मुलाकात कर रही है. सो अगेन फॉर देम टू गेट टू नो ईच अदर, कैसे खेलेंगे ये लोग, आई मीन ऑन पेपर, ऑन वीडियोस, ये सब कुछ दोनों टीम्स देख चुके होंगे, अपने ओपोनेंट्स को स्ट्रैटेजीज पढ़ चुके होंगे, द मेटा दैट माइट कम इन उसको भी यहाँ पे जान चुके होंगे. मीटिंग ऑन द सर्वर फॉर द फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ कैन गो बैक एंड फोर्थ शुरुआत में, बट उस
बार we will get to know after I would say 5 to 6 rounds कि कौन सी टीम अपना हेवन का जो मजबूत जोड़ है वो दिखाती हुई नजर आएगी, क्योंकि again it's not about always defense या attacking half favored map, it's also about कि teams कैसे function करेंगी उस map में, and then we end up seeing the attacking favor map might be completely defense oriented just because वो team इतना aggressively खेल रही है, इतना aggressively hold करती हुई नजर आ रही है, और maybe on the attack itself it works better, but जी हाँ, it all depends कि teams synergy and especially how they are reading out each other and जैसे comfortable होता है as the round progresses. Of course, and साथ ही साथ अगर आप मैप स्प्लिट की बात करें, अगर हेवन की बात कर रहे हैं, एनिग्मा गेमिंग कितनी बार पिछले 3 महीनों में खेले हैं हेवन को? 80 times. 80 times they have played on Haven, and अगर आप मेन टैलेंट की बात करते हैं, it's merely a 21. So 21 में भी अगर आप 62% विन रेशियो ला पा रहे हैं, that's a good one. That's a good one. But Enigma Gaming के लिए 80 maps, that's some huge knowledge जो उनके पास already available है. अभी उसमें से सॉर्ट आउट करके मेड इन टैलेंट के अगेंस्ट में जो भी बेस्ट इनके स्ट्रैट्स रहेंगे, जो भी बेस्ट इनके काउंटर स्ट्रैट्स रहेंगे, उसका इंप्लीमेंटेशन, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल. बट देखिए, जो शुरुआत होने वाला है, कुछ इनिशियल राउंड्स तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल रहेगा. इनफैक्ट अगर 5-0 या फिर 6-0 भी होता है दोनों टीम्स के फेवर में, आई थिंक इट्स गोना बी हार्ड टू से अंटिल एंड अनलेस वो फर्स्ट हाफ खत्म होता है. एंड साइड स्विच के बाद आई थिंक द हाफ स्कोर विल मैटर अ लॉट विनिंग टीम के फेवर में. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा. लेकिन यहाँ पे देखिए, हम बात करें एजेंट सिलेक्ट, थोड़ी देर में हमारे पास आएगा जरूर, बट लेट्स फोकस ऑन बाइंड फॉर अ सेकंड इफ इट गोस टू द थर्ड मैच. यहाँ पे एनिग्मा, दे आर कमिंग एज प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट अंडरडॉग्स इन द टूर्नामेंट, स्पेशली इन दिस मैच. अगर आप इसकी बात करें, अब जनरल मूड की भी बात करें, फोरम से जब डिस्कशन होता है, जब आप बात करते हैं ऑडियंस के साथ, यू सी द जनरल मूड, दे नो मिथ हैज द अपर हैंड. बट एट द सेम टाइम, ये जो डेविड वर्सेस गुलात की बैटल होने वाली है, देयर इज अ हाई चांस that Enigma can come in. At least we're hoping so, because देखिए, बात करें हम हिंदी ब्रॉडकास्ट पे, of course हमारे जितने भी ऑडियंस है, जितने भी दर्शक है, वो भी सपोर्ट करें Enigma गेमिंग को, and trust me, so are we. But at the same time, यहाँ पे we have to be realistic. अगर फर्स्ट गेम में उनको मोमेंटम नहीं मिलता है, तो there is a chance it might not go to the third game. But I'm hoping, मैं बाइंड में देखना चाहता हूँ, because बाइंड is very dicey. अगर आप बाइंड में आपके एजेंट कॉम में अगर आप कुछ यूनिक करते हैं, especially with the teleports as well, right? There's a lot of room for new stats, तो मैं वो देखना चाहता हूँ. Of course, yes, bind. Yeah, Captain, go ahead. Yeah, all right. So देखिए, bind आते ही ना मेरे को बस एक ही चीज याद आता है. That's going to be the raw fuel and Hicka supremacy जो हमें पहले देखने का मौका मिलता था B side पे. But अभी के लिए we have seen Hicka. He's not been playing for a long time, and अभी this roster overall Skyesports join करने के बाद they have done something जो शायद से कभी किसी ने सोचा नहीं होगा. Enigma Gaming stepping into the international stage, and as a team they have been doing great. लेकिन Enigma Gaming ने overall पिछले 3-4 महीनों में 80 बार bind खेला है, 80 times, जिसमें से उनका विन रेशियो है 60%. मेड इन थाईलैंड however 12 बार खेले हैं, only 12 times. तो आप देख सकते हैं मेड इन थाईलैंड कितने कम मेहनत के साथ भी they have proved out to be way more productive on bind. 67% win ratio overall. So on paper मेड इन थाईलैंड के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेंगे जब हम जाए बाइंड पे एज अ डिसाइडर, वो मैप हमें देखने का मौका मिलेगा. बट सैम, व्हाट डू यू थिंक ऑन द सेम टॉपिक इफ वी स्पीक अबाउट बाइंड? देखिए, मैं वही बता रहा था, ऑन पेपर इफ यू रीड आउट द स्टैट्स इट लुक्स अ लिटिल बिट बेटर फॉर मेड इन थाईलैंड, क्योंकि उन्होंने बहुत कम मैचेस खेले एंड दे फाउंड देयर विक्ट्रीज एज वेल. थोड़ा मैप पूल्स में उनका कहीं ना कहीं चल नहीं रहा है, बट बाइंड अगेन देयर विल बी रेस एक्शन कमिंग थ्रू, तो जरूर मैं इंतजार करूंगा. बट अभी चलेंगे एजेंट सिलेक्शन की तरफ. जी हाँ, एजेंट सिलेक्शन की तरफ चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है. बट here's the thing, right? Here's the thing, जिस तरीके से रॉ फ्यूल ऑन जेट, I'm really happy. डबल इनिशिएटर की मैं जब बात कर रहा था, देखिए डबल इनिशिएटर सेटअप की मैं बात कर रहा था, बट नियॉन नहीं है यहाँ पे. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो नियॉन खेल सकते हैं, बट उन्होंने जेट लिया, which is still good enough. बट देखिए, यहाँ पर एजेंट सिलेक्शंस भी काफी चेंज्ड है. रॉफ्यूल, आई मीन जेट, इट्स ओके, वी ऑल प्रेडिक्टेड इट. रेक्सी ऑन द ओमेन, एंड ऑन द किलजॉय, वेरी प्रेडिक्टेड. बट आरवीके कमिंग इन विद दैट फेट. फेट सिर्फ एक ही बार खेला है अगर आप बात करेंगे आरवीके को इस मैप के ऊपर, हेवन के ऊपर. एक्सकैली ऑन द स्काई, सेम गोस फॉर हिम एज वेल. सिर्फ एक ही बार हमें ये पूरा का पूरा एजेंट कॉम्पोजिशन हेवन पे देखने का मौका मिला है. एंड आई एम गोना बी सुपर हाइप्ड अप बिकॉज़ कुछ ही देर में हम आगे बढ़ेंगे इस मैचअप को विटनेस करने के लिए. मेड इन थाईलैंड however once again एक डबल इनिशिएटर सेटअप आ रहा है. स्काई एंड सोवा वर्सेस स्काई एंड फेड. क्वाइट डिबेटेबल, डोंट यू थिंक, मामा? Not really, honestly. डिपेंड करता है कि उनकी टीम किस तरीके से खेलना चाहती है. आप बात करें सोआ एंड फेड, दीज आर टू एजेंट्स जो अगर आपको यूज करना आता है इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. स्पेशली आई डू बिलीव फेड के साथ आपके पास ज्यादा लीव है, बिकॉज काउंटर्स की अगर आप बात करें वो इतने ज्यादा भी डेवलप नहीं किए. जब भी आपके पास नया एजेंट होता है, इफ यू स्पेंड इनफ टाइम ऑन इट,
तो मैं हमेशा एक बेनिफिट ऑफ डाउट नए एजेंट को देता हूँ. श्योर, अब सुआ की अगर आप बात करें, इट्स एन ओल्डर एजेंट, ज्यादा नोन है, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो वर्क्स इन बोथ वेज. वो डबल एज स्वॉर्ड होता है क्योंकि उनके काउंटर्स भी उतने मालूम होते हैं आपको. आई थिंक उसी की वजह से जैसे आप बता रहे थे फेट कैन काइंड ऑफ कम इन एज एन एडवांटेज. बट मैं सोच रहा था फेट दोनों साइड्स में देखने के लिए मौका मिलेगा, बट एक्चुअली दैट डिड नॉट हैपन क्योंकि फेट को यहाँ पे जाने के लिए मौका दे चुके हैं मेड इन थाईलैंड अलॉन्ग विद द नियॉन एज वेल. सो दे आर गोइंग एंड स्टिकिंग ऑन टू देयर जनरल पिक्स ओनली. सिर्फ एक छोटा रिस्क उठा रहा है. आई मीन आई वुड से रिस्क इन टर्म्स ऑफ मे बी वो फेट गेम प्ले अगर काम नहीं किया, बिकॉज इट्स वेरी क्रूशियल, बिकॉज एज यू सेड इट्स वेरी अर्ली ऑन. टीम्स भी अभी भी उसको सीख भी रही है. दे माइट हैव लर्नड अ कपल ऑफ लाइनअप्स, बट अगर कहीं ना कहीं वो लाइनअप्स काम ही नहीं किए, देन मे बी इट्स ऑफ नो यूज एंड वो पूरा वेन में जा सकता है यहाँ पे माम्बा. I mean, I don't think that's going to be a problem, honestly. देखिए लूसिफर, because देखिए हम बात करें प्रोफेशनल प्लेयर्स के बारे में एंड वो यूजुअली इतना ज्यादा मिस नहीं करते. श्योर एक आध दो मिस होते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट ऑल इन ऑल आई डू बिलीव वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो गए. इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी अगर हम सर्वर में होते, बट देयर इज अ रीजन व्हाई हम यहाँ पे बैठे हैं, वो प्लेयर्स वहाँ पे सर्वर में खेल रहे हैं. देखिए आई मीन I've still had a little bit of experience playing with them and against them, but trust me when I say this, जितना इन्होंने improve किया, it's phenomenal. It's dramatic. It's dramatic. And साथ ही साथ, you know, I'm just noticing कि chat right here, like जो हिंदी broadcast पे enjoy कर रहे हैं, they're all predicting it's a win for Enigma Gaming. I mean, come on, dude. Someone has to predict something in favor of Made in Thailand as well. But आप देख सकते हैं, mostly it's 13-10, 13-7. So everyone is calling for that, you know, overall close game. But we'll take a look at the video as well. So you know what? Let's take a look at it. Well, of course, in a while हम आगे बढ़ेंगे मैच को विटनेस करने, मैप को विटनेस करने, हेवन का मुकाबला, डबल इनिशिएटर कमिंग इन फ्रॉम बोथ एंड्स. लेकिन एक तरफ एस्ट्रा है, दूसरी तरफ ओमन है. एस्ट्रा आफ्टर दैट नर्फ हमने बहुत कम यूज होते हुए देखा है जरूर, ऑल्दो देयर इज वन टीम फ्रॉम द एसए सर्किट जो एस्ट्रा को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, लेकिन वो अभी चिल कर रहे हैं, अभी ग्रुप स्टेजेस के लिए वो प्रिपरेशंस करेंगे. एनिग्मा गेमिंग हाउएवर, रेक्सी को ओमन पे स्विच ओवर करवाना फ्रॉम अ सेंटिनल, आई थिंक इट वाज अ बोल्ड मूव एंड इट वर्कड आउट लास्ट टाइम दे प्लेड हेवन. I agree with you, Captain. बट यहाँ पे एक चीज जरूर रहने वाला है कि ये हेवन का मुकाबला है, एंड स्पेशली जैसे हम वो स्विचेस देखते हैं, आई थिंक एनिग्मा एज अ टीम इज गेटिंग वेरी वर्सेटाइल उनके लाइनअप में, एंड आई थिंक दैट्स वेयर दे हैव अ लॉट मोर थिंग्स टू प्ले अराउंड विद. क्योंकि देखिए अगर असेंट का बात करेंगे, हम बाइंड के भी बारे में बात करेंगे, वहाँ पे स्विचेस देखने के लिए मौका मिलता है, एंड एंटीडोट जनरली वांट्स टू प्ले ऑन दैट कंट्रोलर क्योंकि उनको मौका मिलता है टू प्ले वेरी कंफर्टेबली इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो प्लेइंग फॉर द टीम एज वेल एज ट्राइंग टू हेल्प आउट देयर टीममेट्स. बट जब ये स्विच अप आ जाता है फ्रॉम द टीम इटसेल्फ, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आपने बताया अभी, on that controller and then antidote switching up, ये कहीं ना कहीं और भी ज्यादा opponents को थोड़ा confusion में डाल सकता है माम्बा. श्योर, बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक प्लेयर्स को फर्क पड़ता है कौन किस तरीके से खेला, कौन सा एजेंट खेला. श्योर एक आध दो टेंडेंसीज होती है, आपको पता हो कि ये प्लेयर ये एंगल पीक करता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू मेक दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस. बट या नो, आई स्टिल प्रेफर ओमन, बट दैट्स जस्ट माय पर्सनल प्रेफरेंस ओवर एस्ट्रा. बट नॉनदलेस लेडीज एंड जेंटलमैन, गेम की तरफ रुक करते हैं. यहाँ पे मैच शुरू होने वाला है एंड बहुत ज्यादा एक्शन भी होने वाला है. लूसिफर, हाउ आर यू फीलिंग? प्राइस, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस? Well, I'm feeling great, but Lucifer will be joining us in the analyst segment once again, but it's going to be Mamba and myself carrying you through the entire show. फिलहाल के लिए पहले राउंड की बात करेंगे. देखिए Enigma Gaming looking to be very very aggressive, but defender side से already देखिए mid push हो चुका है. In fact, ग्रास डोर से भी आपको दो खिलाड़ी आते हुए, तीन खिलाड़ी आते हुए नजर आएंगे. एंटीडोट की HP लो रहेगी एंड एंटीडोट को बहुत सोच समझ के इंतजार करना पड़ेगा. अगर Wannafly एंटी को पिक ऑफ कर जाता है, that's going to be a huge and very important frag in favor of Enigma. But looks like Enigma Gaming, they've got the site already and my double's dead. हो चुके हैं. Antidote surviving with 20 HP. Gets a pick onto Wannafly. Too easy. जी हाँ, लेकिन यहाँ पे अब बात करेंगे. देखिए स्पाइक तो प्लांट हो चुके, बट एट द सेम टाइम धीरे रीटेक की बात आने वाली है. एंड एनिग्मा बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं. रेक्स की बात करें, अभी भी फ्लैंक पे इज टेकिंग अप टू मच टाइम, जो हमेशा जरूरत होती है आपको, खास तौर पे जब आप पोस्ट प्लांट खेल रहे हो. आरबी की बात करें, काफी ज्यादा एग्रेसिव खेल है, लेकिन धीरे कीप अप करेंगे. सवाल ये लेके आऊंगा, ओह माय गॉड, रॉ फ्यूल दो किल्स निकालो, तीसरा भी निकालने की कोशिश में, तीसरा निकालेंगे जरूर, एंड एनिग्मा इज लुकिंग ऑन टॉप ऑफ द गेम.
Well, yeah, it has a bit of skill popping off, but Deland finally Khilari goes down, but they actually closing it up, and that's Enigma Gaming walking away with the first round attacking half में शुरुआत जरूर अच्छी की Enigma Gaming ने. I was telling you, like, ये मुकाबला काफी cut through रहेगा, so might be a very long game indeed. जी हाँ बिल्कुल सही कहा, might be a very long game indeed, लेकिन रॉ फ्यूल just going absolutely ham over there. लेकिन हम बात करें ऋषि के बारे में भी, काफ़ी अच्छा सपोर्ट था उनके पास. एट द सेम टाइम जो रेक्स ने किया था पीछे से बाइंग टाइम, मेकिंग अ डिस्ट्रैक्शन, काफ़ी अच्छे तरीके से खेले. आप बात करें डिलेंट के बारे में, उन्होंने कोशिश बहुत ज़्यादा अच्छी करी, बट रेक्स इन द मीन टाइम कमिंग इन क्लच एंड फर्स्ट राउंड गोइंग टुवर्ड्स एनिग्मा. लेकिन बात करें यहाँ पे बाय के बारे में, एनिग्मा के पास प्रॉपर बाय है, मेड इन थाईलैंड, मे बी जस्ट सेविंग इट अप फॉर द नेक्स्ट राउंड ओवर हियर. लेकिन मार्शल लेके आप इतना क्लोज खेले तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. ओके, मुझे लगा एक शॉट कनेक्ट जरूर हो सकता है, बट नहीं हुआ वो. gets another, and he's trading gameplay. The whole chalu hai, which is over to close, and that's the second one. A very quick execute. Enigma Gaming, they adapt, and they have adapted so strongly. They are ready. It seems that पहले rounds में तो वही हमें देखने का मौका मिला है. जी हाँ बिल्कुल सही कहा, बट नाउ मुझे लगता है कि जिस तरीके से एनिग्मा ने शुरुआत करी है यहाँ पे रॉ फ्यूल सीधा वैंडल उठाते हुए, नॉट सरप्राइज एट ऑल ओवर देयर, बिकॉज उनके पास जो मोमेंटम है उनको कैरी ऑन करना है उसके साथ. बट एट द सेम टाइम अब मेड इन थाईलैंड की बात करें तो उनका बाय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है. आप यहाँ पे रिप्लेस को देखिए, रॉ फ्यूल जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं, मैंने कहा था बहुत ज़्यादा मोमेंटम बेस्ड प्लेयर है, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम स्किल उनके पास बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे आरवी ने किस तरीके से सर्वाइव किया, आई बिलीव उनको भी लगा था कि मैं कैसे सर्वाइव करके चलेगा ये. Possibly, but you have to give thumbs up to the Wannafly as well, because Wannafly ने सबसे पहले राउंड में तो he got shut down initially. Antidote को push किया, and Antidote just punished him. I mean that's your IGL. So yeah, IGL it's gonna happen there. On the other side, as far beats and control कोशिश जाती है immediately Nebula से choke off किया जाएगा. Vision नहीं मिलेगा. Opening round double door gone great. कोशिश कर रहे हैं रोक को रोकना है. Kadoom once again keeping on along. RVK versus Kadoom. I really wanted to see इस मोमेंट पे एक शेरिफ शॉट अगर देखने का मौका मिलता है from the sheriff master himself. RVK but it's a bonus flight shot out करने की कोशिश, heading जरूर किया जाएगा. देखिए Kadoom, he's down to just 3 HP and no armor at all. जी हाँ, नो आर्मर एट ऑल. लेकिन एंटीडोट धीरे धीरे स्नीक अप करने की कोशिश करे. सवाल ये क्या वो आराम से निकल पाएंगे, बट इन द मीन टाइम अब देखिए अलोन भी कोने पे बैठे हुए. ट्रेड जो हमारा पेटेंट स्विच सेट है वो काफी अच्छे तरीके से काम कर सकता है, लेकिन रॉ फ्यूल कमिंग इन क्लास, पहला किल निकाला, दूसरा पिक भी निकालेंगे. यहाँ पे बात Kadoom, ओ माय लॉर्ड, रॉ फ्यूल इज गोइंग क्रेजी. लेकिन रेक्स आएंगे, ट्रेड निकालेंगे जरूर, एंड यहाँ पे 2v1 सिचुएशन जो मैन एडवांटेज है उनके पास वो बहुत भारी साबित हो सकता है. उनके पास स्काई भी है, एंड डिलेन इज जस्ट क्रीपिंग अप. क्या वो किल निकाल पाएंगे? उनको जाना है 1v1 बनाना है तो, लेकिन Rex coming in clutch, and यहाँ पे उन्होंने आखिरी किल निकाला है. डिलेन को टेक डाउन करेंगे, and Enigma is looking really strong over here, Price. 3-0. I mean, by round को capitalize करना Enigma Gaming, they just did it. They have made it happen, and इसके साथ ही साथ उनको weapons मिल चुका है. They've got 2 upgrades already. 3 buys उन्होंने लिया है. Enigma Gaming, it's a good start. It's a good start to set an example in the from the SA to the APAC circuit as well. But जिस जो coordination हमें दिख रहा है Enigma Gaming की तरफ से, I think it's also gives you an example कि कितना मेहनत करके आए हैं ये खिलाड़ी, and it's there on the scorecard. But I told you before as well कि जब तक वो हाफ टाइम का स्कोर नहीं पहुंचता है तब तक कुछ भी कहना नामुमकिन रहेगा, even if it's 5 or 6 in any team's favor. Yeah, but for now I think Enigma is looking in control of the game. लेकिन it's still too early to say anything. But ये push करने की कोशिश कर रहे हो. Antidote on point. यहाँ पे उनको टेक डाउन करेंगे. नेक्स्ट के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है. What in the world was that? Wannafly यहाँ पे 2 शेरिफ के kills निकालते हुए, लेकिन equalizing the situation. Okay then यहाँ पे लग रहा है शायद Enigma might be on the back foot. यहाँ पे अगर वो किल नहीं निकाल पाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी. लेकिन ऋषि missing out. Oh my lord, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्प्रे उन्होंने whiff किया है, लेकिन Antidote पीछे बैकअप देने के लिए आ चुके हैं. नैरो स्वाम भी उनके पास लाइनअप से वो खेल सकते हैं आराम से. लेकिन अलोन फिल्स की बात करें, Qeon आएगा उनके पास थोड़ी ही देर में जिसका फायदा उठा सकते हैं. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे प्लांट नहीं हुआ है तो कोई मतलब नहीं बनता है नैनो सॉम खेल के. मैंने गलत रीड किया था, मुझे कहा प्लांट हो चुका है वहां पे, लेकिन प्लांट अभी तक नहीं हुआ. सो इट्स गोइंग टू बी अ मैसिव प्रॉब्लम. बट आरवीके यहाँ पे अपनी एबिलिटी से इस्तेमाल करके कोशिश करेंगे वो इन्फॉर्मेशन निकाले, बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. एंटीडोट यहाँ पे देखिए बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी है जो 1v1 स्प्लिट करके खेल रहे हैं. आपको यूजुअली तेज खेलने होते, लेकिन नाइटफॉल का इस्तेमाल
करेंगे यहाँ पे, अंदर पुश करेंगे जरूर। क्या लोन फिजिक किल निकाल पाएंगे? जी हाँ, आराम से निकाल लेंगे। एंटीडोट को टेक डाउन कर दिया। ऋषि को इंफॉर्मेशन जरूर मिली है, बट ही इज गोना गेट टेकन डाउन एज वेल। देयर वाज Myth had no business winning this round. Yeah, you have to give the credits to the play, right? वो तो sheriff kills completely changed the momentum of the round, and finally Myth एक round निकाल जाते हैं। Attackers half में Enigma Gaming they were looking strong for 3 rounds. I mean, Antidote को पहला pick मिला, but in the end, I mean, Wanna with those 2 sheriff kills, he did do a ton of damage. And जैसे entry होने की कोशिश की जाती थी side पे, rotation चाहे तो ले सकते थे, he was empty, but you know, they tried to come inside and punish his जरूर किए गए Myth के द्वारा। Heading over to the 5th round of the game. क्या Enigma Gaming अपने streak को जो lose किए हैं उसको वापस से gain कर पाते हैं, और it's going to be Myth all the way around. देखेंगे जरूर, बट यहाँ पे बात करके डूम के बारे में, उन्होंने अपना डैश एक्टिवेट कर लिया। जो जेट का पैश आया उसके बाद इट्स बिकम अ लिटिल मोर डिफिकल्ट टू यूज इट, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे राज कंट्रोल लेते हुए एंड मुझे लगता है स्प्लिट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे जरूर। लेकिन आप बात करें एक्सकैलिबर की टाइगर इस्तेमाल करते हो, अंदर जाएंगे, इंफॉर्मेशन निकाली उन्होंने, बट इज दिस गोइंग टू बी इनफ? ओके, देन यहाँ पे डिलेंड को स्पॉट कर लिया गया था। एनिग्मा देखिए कितना ज्यादा पेस का इस्तेमाल करते, कंट्रोल कर रही है गेम को, एंड कॉन्फिडेंस रग में इनके तौर पे नजर आ रहा है। Absolutely. I mean, this is some serious business that Enigma Gaming is into, and they're just showing it. साथ ही साथ अब देखिए Kadoom and Alone Bills दोनों खिलाड़ी बचे हुए, दोनों खिलाड़ियों के लिए ये राउंड करना मुश्किल रहेगा जरूर, लेकिन Kadoom जब ये ऑफ किया जाता है काफी दिक्कत रहेगा। Can go for a save तरीके से अगले राउंड पे, तब उनके पास plays रहेंगे, they have a rifle, they'll have a heavy weapon as well. I think वो already save करने के लिए back up कर चुके हैं Enigma Gaming. I'll tell you, हंट करने के लिए बिल्कुल भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखने वाले हैं वो, बिकॉज़ दे नो द वैल्यू ऑफ वेपन्स दैट इकोनॉमी उतनी भी ज्यादा स्टेबल नहीं है अभी एनिग्मा की, सो आई थिंक दे शुड वेट इट आउट एंड दे शुड जस्ट यू नो ट्राई एंड गेट द नेक्स्ट राउंड एज वेल। जी हाँ, बट आई डू बिलीव जिस तरीके से यहाँ पे मिथ खेल रही है, आई थिंक दे गोना टेक इट स्लो। आई एम स्टिल नॉट गोना काउंट देम आउटसाइड द गेम, बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा, व्हाटएवर एनिग्मा इज डूइंग राइट नाउ, जस्ट एग्रेशन के साथ वो खेल, इट्स वर्किंग आउट फॉर देम। लेकिन द मोमेंट मिथ को पता चलता है कि यार वो क्या टेम्पो कंट्रोल करना चाहते, क्या टेम्पो मेंटेन करना चाहते हो गेम का, फिर इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। बट वी डू हैव ए टाइम आउट कमिंग इन ओवर हियर। I mean, that's anticipated, right? एक टाइम आउट चाहिए था। Myth needs to rework on those strats at the moment because they have lost 4 rounds. I mean, बहुत ज़्यादा मेहनत अभी Myth को ज़रूर करना पड़ेगा। But I'm loving the way जिस तरीके से Enigma Gaming साइड कमिटमेंट दिखा रहे हैं। They're not going for any rotations. एक पिक मिलते ही सीधा उस साइड पे कमिटमेंट, रोटेशन करने का टाइम तक नहीं मिल रहा Myth को, and then they're just stuck in a numbers disadvantage. जी हाँ, बट इट ऑल्सो हैज टू डू विद एनिग्मा बीइंग सो एग्रेसिव, राइट? क्योंकि वो जितना टाइट खेल रहे हैं, दे प्लेइंग अ वेरी क्लोज नेट गेम। जब पिक मिलता है उनको, अगर उनके प्लेयर जो एंट्री फ्लैगर स्पेस बना के डाउन भी होते हैं, तो उनका ट्रे लिया जा रहा है बहुत ज़्यादा क्विकली, एंड आई डू बिलीव दैट्स अ रीजन व्हाई एनिग्मा हैज द अपर हैंड। रॉ फ्यूल की अगर आप बात करें, इतना ज़्यादा फ्लैग आउट करें, एवरीबडी एल्स इज प्लेइंग द परफेक्ट सपोर्ट रोल। मैंने बात करी थी 2 इनिशिएटर प्लस एग्रेशन के बारे में, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा पेस को कंट्रोल कर रहे हैं कि मेड इन थाईलैंड के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट आई स्टिल बिलीव यहाँ पे इवन दो स्लो शुरुआत होगी, 1-2 राउंड के अंदर आपको शायद मेड इन थाईलैंड का कमबैक होते हुए नजर आ सकता है। Of course, but वो comeback कितनी देर में आएगा या फिर नहीं, or is it going to be a complete 7 round stretch win जो Myth अभी लेके जा सकते हैं? Because देखिए जैसे ही वो टाइम आउट आता है, Enigma Gaming they have slowed down comparatively, काफी slow down वो कर चुके हैं। We'll see what happens. Definitely Kadoom के पास अब भी वो ऑप रहेगा। Wanna fly with a judge this time. 3 rifles also there in form of Andrew, but स्लो अप्रोच का ही एनिग्मा काउंटर में ना चला जाए, ट्रेलब्लेजर को डिनाई किया जाएगा कोई भी इनको, ओनली गाइस इनको रिवील, बट पैरानोया आएगा जरूर, एंड पैरानोया से जरूर यहां पर इनको कुछ देर के लिए डिनाई किया जाएगा। देयर रेक्सी कम्स इन, गेट्स वन पिक, एंड ओपनिंग साइड ऑलरेडी मिल चुके हैं। रॉफिल आल्सो टेक्स डाउन अलोन, एंड इसी के साथ नंबर्स फिर से एनिग्मा के कंट्रोल में कुछ ही सेकंड्स के अंदर। दैट्स ऑलरेडी हाफ वर्क डन। Spike planted. Oh, absolutely, that's already half work done, but I do believe अगर यहाँ पे मिथ को एक भी पिक मिलता है, अगर कोई भी ओवर कमिट करता है एनिग्मा की साइड से, तो वो जाएंगे रीटेक करने के लिए। बट नाउ आई थिंक उन्होंने डिसाइड किया है कि जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया, जितने क्रेडिट्स इन्वेस्ट किए, ओनली मेक सेंस फॉर देम टू फॉल बैक, एंड यहाँ पे Kadoom सेव करेंगे अपने ऑपरेटर को, जो बहुत ज़्यादा पिवटल साबित हो सकता है अगली गेम में। लेकिन जब एक टाइम आउट होता है, तब आप गेम की पेस को चेंज कर सकते हो। बट हियर्स द थिंग विद एनिग्मा, राइट? बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीके से खेल रहे हैं, उनको पता है उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे वो फोकस कर रहे हैं। दे बीन मेकिंग श्योर
कि जहाँ पे भी उनको वीकेस्ट लिंक मिल रहा है वहाँ पे वो एग्रेशन दिखा रहे हैं, दे कंट्रोलिंग द पेस ओवर दैट इन दैट एरिया. तो काम कर रहा है फिलहाल के लिए उनके पास, बट आई डू बिलीव कदूम शायद अगले राउंड में थोड़ा एग्रेशन दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि उनके पास जो ऑपरेटर है तो रिस्क एनवेलप को थोड़ा और पुश करे एंड जाके अर्ली पिक निकाले, बिकॉज दैट्स द ओनली वे फॉर देम टू रीगेन द कंट्रोल ऑफ द गेम बैक. अगर यहाँ पे सामने वाली टीम इतना ज़्यादा एग्रेशन दिखा रही है, इतना ज़्यादा पेस को कंट्रोल कर रही है, तो कई बार यू हैव टू प्ले देयर ओन गेम. आपको उन्हीं की गेम में उनको बीट करना होता है. Of course. And let's see, I mean, perfectly time उन्होंने जो इस्तेमाल किया from the shadows का, उसके साथ रॉ फ्यूल का immediate execution साइड के अंदर वो commitment दिखाना. Myth were caught so off guard, they didn't even realize कि already from the shadows का investment आया and tower के जगह पे they might have predicted शायद defender spawn पे आए, लेकिन that didn't work out. But of course, let's not forget कि अभी बस कुछ ही देर का इंतजार रहेगा हमारे अगले राउंड की शुरुआत में. Enigma Gaming with a good lead so far. Oh, wonderful lead so far. उनको obviously और rounds की जरूरत है. 3 rounds और अगर इनको मिल जाते हैं then they might have a picture perfect half. But अब देखिए बात करें रॉ फ्यूल के बारे में, he is feeling it. लेकिन यहाँ पे टेक्निकल पॉज आया हुआ, आई एम नॉट श्योर व्हाई दिस इज, या कौन सी टीम की वजह से आया हुआ, बट नॉनदलेस टेक्निकल पॉज आया. लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे अल्टीमेट्स के बारे में, तो नॉट एक्सेप्ट फॉर रॉ फ्यूल या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लेंड एंड वॉर ऑफ लाइक के पास भी लॉकडाउन, तो डिपेंड करता है किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे. मुझे लगता है अभी भी ये जो राउंड होने वाला है कदूम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. उम्मीद करता हूँ कदूम इस राउंड में थोड़ा एग्रेशन दिखाए एंड थोड़ा कंट्रोल वापस ले अपने हाथों में. Well, yes, and साथ ही साथ I'd like to also shed some light on the upcoming days of broadcast as well. Enigma Gaming अगर आज जीतती है, they have to just win one more game, and then they are already qualified for the group stages. लेकिन अगर आज वो हार जाते हैं, उनको loser bracket में 2 मैचेस लगातार जीतने हैं, if they even want a chance to qualify into the group stages. देखिए हमें पता है कि ग्लोबल स्पोर्ट्स एंड एनिग्मा गेमिंग का जो राइवलरी है वो बहुत टाइम से चल रहा है. सिंस द फर्स्ट इंडियन वैलेंट रैन वो राइवलरी चल रहा है. दे वर 0-3 एनिग्मा गेमिंग. उसका बदला लेने की कोशिश थी SCS लैन में, बट वो नहीं हुआ. ऑल दे कैन डू इज एनिग्मा गेमिंग दे कैन विन एट अ स्ट्रेच एंड शायद अगले स्टेज में जाके इनका मुलाकात ऑफ कोर्स नहीं होगा, अलग ग्रुप में जाने वाले एनिग्मा गेमिंग, लेकिन ग्रुप स्टेजेस के बाद जब अगला स्टेज आएगा वहां पर शायद वो बदला लिया जा सकता है. सो आई रियली लव दैट रिवेंज फैक्टर. एंड अगर मेरे सारे जो अभी कहावतें हैं सच हो जाते हैं, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटेंस APAC दिस सीजन. ओह एब्सोल्युटली इंटेंस तो होगा, उसमें कोई सवाल नहीं है. बट मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ दोनों टीम्स को. अब अगर आप देखें श्योर मिथ अभी थोड़ा स्ट्रगल करिए, बट रॉ फ्यूल जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे वो देखे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. आप एंटीडोट की भी बात करें, मैंने कहा था ही इज द एंकर फॉर द टीम. आपने देखा वो जो विंडो है मिड विंडो को भी गार्ड कर रहे थे. खास आई डू बिलीव वाज द सेकंड और द थर्ड राउंड जहाँ पे उन्होंने रुका था. रेक्स अच्छे से लर्व कर रहे थे, उन्होंने समय बहुत ज़्यादा बाय किया पहले राउंड में. सो दे वर्किंग एज अ वेल ऑयल्ड यूनिट एंड जो प्रेपरेशन है उनकी दिखाई दे रही है. यहाँ पे हमारे जो छोटे मोटे ईस्टर एग्स है, आप टेडी बेयर की बात कर लीजिए कहाँ पे. सो ऑब्जर्वर्स डूइंग अ वंडरफुल जॉब. बट 5 सेकंड में हमारा अगला राउंड शुरू होने वाला. मैंने कहा था देखिए एग्रेशन यहाँ पे दिखाई जरूर देगा आपको. कदूम अर्ली मिड पिक निकालने की कोशिश करेंगे एंड अगर इनको ये मिलता है आई डू बिलीव एनिग्मा माइट बी स्ट्रगलिंग विद दिस. पिछले दोनों राउंड्स में तो ऐसा लगा था कि करूम वाज लाइक यार कम ऑन लेट मी जस्ट यूज माय ऑपरेटर. आई मीन आई एम नॉट गेटिंग अ सिंगल पिक एज वेल, बट अभी मौका रहेगा. Antidote comes in with a right peak and he takes down and then that will control it down. But Raw Fuel is just Kadu with that catch completely being unproductive. Enigma Gaming, they have shattered myth in this round at least. कोई भी peak का फायदा नहीं मिलता है. Enigma Gaming, they have 5 players still standing alone with just a sheriff and this guy left with a vandal. सेव दोबारा करने की कोशिश रहेगी जरूर, बट अलोन आई डोंट थिंक ही वांट्स टू सेव इट ऑल, बिकॉज़ व्हाई वुड यू सेव अ शेरिफ? जी हाँ, बट एट द सेम टाइम आपको दाद देनी पड़ेगी यहाँ पे एनिग्मा को, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कॉन्टैक्ट प्ले किया बहुत ज्यादा स्मार्ट. मैं दाद देना चाहूंगा जितनी दैट वाज नास्टी. एक्सकैली वहाँ पे इज गोइंग टू फील द लेड बिटवीन हिज टीथ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम. लेकिन देखिए आप इनका जो कॉन्टैक्ट प्ले था उसकी दाद जरूर देनी पड़ेगी. बहुत ज्यादा स्मार्ट था एंड जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि जब ये पॉज आता है यू चेंज द मोमेंटम ऑफ द गेम. लेकिन जब इतना ज्यादा टेम्पो हाई होता है मैच का यू स्लो थिंग्स डाउन. आपने बिना एबिलिटी इस्तेमाल किए कॉन्टैक्ट प्ले किया एंड दैट कॉट देम ऑफ गार्ड. एंड उसकी वजह से आप मिड की बात करें, सी साइड की बात करें, दोनों जगह पे पिक्स मिले. रॉ फ्यूल ऑफ कोर्स गोइंग आउट देयर, लेकिन एंटीडोट की दाद देनी पड़ेगी. वहां पे उन्होंने किल निकाला. रॉ फ्यूल इज क्रैक्ड, इज एब्सोल्युटली क्रैक्ड.
Of course, there's no doubt on that. कोई भी doubt उसमें नहीं रहेगा. But देखिए आज Friday है तो I'm expecting a lot of action and वो action हमें पहले मैप में Enigma Gaming से देखने का मौका मिल रहा है. अगर दूसरे मैप को भी ऐसे ही खेलते हुए नजर आए, we'll just complete the first map then get to the second one also. I think that will be the correct way of doing things. But once again Antidote B window को guard कर रहे हैं. देखिए Made in Thailand हर राउंड पे वो B window पे काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं. Antidote so far he has just shut down that mid approach every time. इसीलिए इनका कंप्लीट विजन जो है इस राउंड पे डिनाई किया जाता है स्नेबिला के इस्तेमाल से. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कॉन गैरेट के ऊपर राउंड का दारोमदार रह सकता है, क्योंकि अगर उनको एक पिक मिलता है उनके पास सीकर्स आ जाएंगे जो पोस्ट प्लांट में उनको बहुत ज़्यादा काम आएंगे. सो आई डू बिलीव दे कैन ट्राई एंड प्ले अ रीटेक स्टार्ट ओवर, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि उनको किल मिलता है कि नहीं, क्या वो ऑब ले पाते हैं कि नहीं. लेकिन एक्सकाली देखे यहाँ पे हल्का सा जिगल करते हुए, बट भेजेंगे जरूर अपनी गाइडिंग लाइट को फ्लैश करने की कोशिश. नॉनदलेस डिलैंड भी आराम से वेट करें. लुक एट एनिग्मा प्लेइंग इट सो स्मार्टली, बट दिस कुड बैकफायर. यहाँ पे उन्होंने टेम्पो चेंज किया है थोड़ा जरूर. वापस क्या बी की तरफ कॉन्टैक्ट प्ले करेंगे, देखना ये बनता है. लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद वो एडवांटेज जो है उसको खो सकते हैं. लेकिन लुक द फेक बीइंग सोल्ड ओवर, इस साइड पे वॉक इन कर चुके हैं. ओह माय गुडनेस, फेक इतना ज्यादा अच्छा था. इवन विद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी हैड हम नहीं देख पाए. लेकिन लॉकडाउन आते हुए यहाँ पे, ये लॉकडाउन डिफेंडर्स की तरफ से आ रहा है जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. Does he have a nanoswarm lineup? I think he has a nanoswarm lineup and उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा. बट डिफेंडर लॉकडाउन भी यहाँ पर देखिए इस्तेमाल किया गया था, बट अटैकर लॉकडाउन भी आ चुका है. बट इस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा लॉकडाउन को तोड़ने के लिए. एंड अब इसकी ब्रेक पे निकलेगा. Skyesports is still there. He's trying to hold out and आखिरी One enemy remaining. अभी ये रिस्पांसिबिलिटी आती है, बट जी नहीं. The refuse came through by that time. That's a second round for Myth. देखिए यहाँ पे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा मिथ को. मैंने कहा था कि ये जो स्लो जिस तरीके से उन्होंने खेला है, श्योर रोटेशंस काफी अच्छे मैनिपुलेट किए गए थे वहाँ पे, लेकिन जैसे ही डिफेंडर लॉकडाउन आया, आई डू बिलीव एंटीडोट के पास भी लॉकडाउन अवेलेबल था. सीधा काउंटर करने की जरूरत थी उनको अटैकर के साथ साथ, ताकि वो अंदर ना जा पाए एंड यू कैन बाय मोर टाइम. क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्लेयर्स है वो आपके नैनोस्वार्म तोड़ देंगे. इवन इफ यू हैव देम अवेलेबल, दे आर गोइंग टू बी रेंडर्ड यूजलेस, एंड that's exactly what happened. So it's rather unfortunate, but फिर भी मैं कहूँगा एनिग्मा के पास अभी भी अपर हैंड है. So much. But you know what? RVK. I mean, this guy has some insane skill level. Like वो raw talent RVK and raw fuel में जरूर रहता है. And we have seen him go over and over again. इतना बड़ा advantage मिला देखिए alone को. He did do a lot of damage onto RVK, but once he swings around, RVK को pick मिलेगा and साथ ही साथ एक trade लिया जाता है के द्वारा with the blaze that he has online right now. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. बट लैंड इन द मीन टाइम यहाँ पे aggressive पीक करते हुए आप देखिए कॉन गैरेट को बहुत अच्छा पेट एंड स्विच सेटअप यहाँ पे स्पैम करने की कोशिश, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एंटीडोट को पिक मिलेगा. एंड ही नोस एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग, बट ही डज फाइंड द फर्स्ट पिक. विल गेट ट्रेडेड आउट, बट एक्सकैली के पास ज्यादा एचपी नहीं. उन्होंने देखा उनके ट्रेल ब्लेजर को क्या अंदर जाएंगे, ऑन फ्लाई पीछे हटेंगे, लेकिन एक्सकैली स्टिल सर्वाइविंग. कंट्रोल है उनके पास सी साइड का, लेकिन इज दिस गोइंग टू बी इनफ 2v2 जरूर. लेकिन उनके पास एचपी नहीं है. प्लांट करे पीछे की तरफ, व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग, बट रेक्सी के पास कंट्रोल है डिफेंडर एरिया का. I've got your trail. रेक्सी पर देखिए यहाँ पर सीक्रेट्स का भी इस्तेमाल किया गया एंड एक्सकैली का पोजीशन फिलहाल के लिए One enemy remaining. Last player standing. It's going to be a 1v1. It's Wanafly versus Rexy. Rexy has been proving himself as the clutch master over and over again इस मैप पे, लेकिन ये राउंड को क्लच करना मतलब एक बहुत मैसिव प्ले जा सकता है. हार्ड डिफ्यूज किया जाएगा, लेकिन किया जा रहा है एंड Wanafly survives. He survives. And I mean, I'm surprised कि कुछ भी डैमेज नहीं दिया गया रेक्सी के द्वारा. But it's a third round for Made in Thailand. I do believe अब मोमेंटम जो है धीरे धीरे स्लिप हो रहा है एनिग्मा की तरफ से. Okay, let's try and predict what will happen this round. Predict भी नहीं करूँगा. Let's try and anticipate क्या हो सकता है possibilities, because देखिए 2 राउंड अगर आप बात करें काफी स्लो खेला, तो स्प्लिट स्ट्रैटेजी खेली जा रही है, रोटेशन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, which is a good strategy. Don't get me wrong. बट गिवन द फैक्ट कि रॉ फ्यूल के पास ब्लेड स्टॉर्म अवेलेबल है यहाँ पे, बाकी सारी एबिलिटीज के ऊपर भी एक बार नजर डालेंगे जरूर. आरवीके के पास भी नाइटफॉल अवेलेबल है. एक चेंज ऑफ पेस नजर आ सकती है हमेशा. This is the reason Made in Thailand they invested 3 rounds. They invested 3 ultimates to get 1 round, and उस राउंड को जीतने के बाद getting a second one out of stretch, I mean that's really good. But देखिए यहाँ पर Dylan, he just tries to play around that box, the default plant, but उनको थोड़ी देर के लिए जरूर संभल के रहना पड़ेगा, because wall bank से damage थोड़ा सा पड़ा है. Nothing to worry about so far. RVK be in control.
गेन कर चुके हैं, लेकिन एंट्री अभी तक नहीं मिली है। Up there. One apply gets one. Kadun gets another. Attacking off coming in from Antidote, लेकिन results अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। Rock आ गया, information down किया गया, Rexy को भी down किया जा रहा है। Probably going for a flawless 15 अभी तक कुछ सक्षम नहीं हुआ है। Could have been a flawless, and this is why I was telling you, Mamba, कि जब तक half time नहीं होता है, you cannot see anything as to the pace, the momentum, किसको ज़्यादा favor कर रहा है। देखिए, इतना बड़ा lead के बाद भी वापस Made in Thailand वो comeback कर रहे हैं। Could be a 6-6 even. Could definitely be a 6-6, but मुझे लगता है एनिग्मा ने यहाँ पे टाइम आउट लिया हुआ है, because जिस तरीके से पेस चेंज हुए गेम के, जिस तरीके से मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, I do believe एनिग्मा needs this time out, and काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट चीज़ है ये करना। Perfect timing, but I'm still not going to count them out. I do believe जो Blade Storm है उसका इस्तेमाल कर सकते हो to change again the momentum in their favor, and थोड़ा ज़्यादा quickly खेल सकते हैं, initial pick निकाल सकते हैं वो, but देखना ये बनता है कि क्या वो इसका इस्तेमाल करेंगे इस राउंड के अंदर। I do believe yes, but depend करता है कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है। Rexy, he's played out so well. Initial कुछ rounds, 4-5 rounds, he's played out so well. But एक राउंड वो लॉस कर जाना, it should not get to your head. कुछ भी हो जाए वो आपके दिमाग में चढ़ना नहीं चाहिए। And ये आप कह सकते हैं it can be a semi eco buy, it can be a half buy even, because देखिए इकोनॉमी दोनों तरफ से मुझे जो दिख रहा है it's pretty stable for now. लेकिन एक्सकैली अगर फुल बाय लेते हैं अगले राउंड में उनके पास बाय नहीं रहेगा। RVK he's already got a buy for him, अगले राउंड पे बाय लेना बहुत मुश्किल रहेगा। Rexy however, he is the only one जो अगले राउंड पे भी इस राउंड पे बाय लेने के बाद he can just work out. Waffle के पास पैंडल रहेगा, उनका ब्लेड्स भी रेडी रहेगा, नाइटफॉल is also ready as well. Rexy 2 और points, he'll be getting his from the shadows as well. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पे आई डू बिलीव कहाँ कौन से साइड पे आप प्लांट करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लॉकडाउन की वजह से। एंड अगर आप डिफेंस साइड का कंट्रोल ले सकते हैं, ओनली देन इट मेक्स सेंस टू प्लांट ऑन सी, बिकॉज लॉकडाउन अवेलेबल है डिफेंडर्स के पास, और वो लॉकडाउन का इस्तेमाल कर सकते हो रीटेक लिए, एंड दैट्स गोइंग टू बी tough. That's going to be really tough for the attackers to counter. But बात करें एंटीडोट के बारे में, आराम से अंदर क्रीप इन करे, दोनों प्लेयर्स कॉन्टैक्ट जाने की कोशिश करें, लेकिन अब स्पॉट हो चुके, फ्लैश आके जरूर अंदर, लेकिन टैलेंट पहला पिक निकाल दो, यहाँ पे सर्वाइव करना है। एंड कॉन गारी की बात करें, उन्होंने भी एक्सकैली के ऊपर पिक निकाला हुआ है, looking really strong. Suddenly Rexy भी taking take down, लेकिन एंटीडोट is still surviving, trying to find one more, लेकिन गोलियां खत्म हो गई उनकी unfortunately. एंड कॉन गारी देखिए कितना ज्यादा पुश कर रहे हैं, वो बैक स्टैप करने की कोशिश RVK की अगर हम बात करें, क्या यहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएंगे? मुझे लगता है कि वो क्रीप इन जरूर करेंगे, बट यहाँ पे कीप कर रहे कटूम एंड निकालेंगे उनके ऊपर आराम से। They read it so well. They read it once again. Garage को एक खिलाड़ी गार्ड करे, एक खिलाड़ी सीलों को गार्ड करे, एक खिलाड़ी जस्ट गार्ड कर रहे थे सी विंडो को। जैसे ही आगे गए, अभी के वो शट डाउन 6-1 से अभी हम आ चुके हैं 6-5 के, ऑलमोस्ट एक इक्वलाइजर की कगार पे हम खड़े हुए हैं। ये पिक जो है मेड इन थाईलैंड का है, तो इवन इफ दे विन दिस मैप आई एम नॉट गोना बी सरप्राइज्ड एट ऑल, लेकिन अगर अगला मैप जीत जाते हैं मेड इन थाईलैंड, इट्स गोना बी जीजी फॉर एनिग्मा गेमिंग, एंड लूजर ब्रैकेट में फिर जाके उनको परफॉर्मेंस अपना दिखाना पड़ेगा, व्हिच आई थिंक कोई भी एनिग्मा गेमिंग के टीम से या उनके फैन फॉलोअर्स कोई भी नहीं चाहेंगे। True, but I think लूजर ब्रैकेट के बारे में बात करने के लिए I do believe it's a little too early guys. यहाँ पे उस चीज़ के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा देर है, बट बात करें RVK के बारे में, होल्ड करे इस शॉट, एंड आई डू बिलीव दिस इज गोइंग टू बी अ 5-man पुश, जो काफ़ी अच्छी बात है। उन्होंने स्प्लिट स्ट्रैटेजी ट्राई कर ली, उन्होंने कॉन्टैक्ट खेलने की ट्राई कर लिया, लेकिन अब कमिट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात मैंने पहले भी कहा था, लॉकडाउन जो अवेलेबल है दैट कुड बी ए मैसिव प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे एंटीडोट प्लांट करते तो काउंटर कर सकते हो लॉकडाउन के साथ। मैं देखना चाहता हूँ कि एंटीडोट को प्लांट दिया जाए, रिकग्नाइज करे ये टीम कि उनके पास लॉकडाउन अवेलेबल होगा तो वो प्लांट करेंगे। बट देखिए नैनो सॉम भी यहाँ पे फटते हुए डिले करने की कोशिश, कौन स्पाइक प्लांट करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। Well, it's actually Skyesports जो स्पाइक को प्लान करते हैं। आई थिंक आखिरी राउंड के लिए वो अल्टीमेट को बचा रहे हैं, बट एंटीडोट ही नीड टू पिक नाउ फॉर यूजिंग दैट लॉकडाउन एंड नैनोस्टॉर्म ग्रेनेड लाइनअप। वी ऑल नो इट, यहाँ पर नैनोस्टॉर्म ग्रेनेड लाइनअप रहेंगे जरूर, ताकि कोई भी जाके इन लॉन्ग पे फॉल बैक ना कर पाए। बट RVK विद दैट ह्यूज फ्लैग मेक श्योर कि वो लॉकडाउन का फायदा ना मिले, एंड कैसे ही वो क्राउड डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं, पर क्या जाएगा एंड गेट वन मोर फाइट गेट द अदर एंड मौका नहीं मिल रहा है इनका कोई रिस्पॉन्स करने का। अरे another flash coming in, but it's made in Thailand who just choked down Enigma Gaming इस राउंड पे 6-6। ये हाफ यहाँ पर खत्म होता हुआ।
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। एंड ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है। देखिए, इन द हीट ऑफ द Switching मोमेंट आप ये सारी चीज़ें नोटिस नहीं कर पाते, बट इमेजिन द काउंटर लॉकडाउन कमिंग। इतना ज़्यादा समय उनको मिलता है। श्योर आरवी के पीछे से फ्लैंक कर रहे थे, बट ही कुड हैव बीन यूज्ड इन अ बेटर वे ओवर देयर। तो ऑफ कोर्स छोटी मोटी चीज़ें हैं, श्योर, नो डाउट अबाउट दैट, बट ये सारी की सारी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकती है। हाफ टाइम पॉज यहाँ पे हमारे पास है। रॉफिल इज परफॉर्मिंग रियली वेल, लेकिन ऑल इन ऑल यहाँ पे मेड इन थाईलैंड clawing their way back in the game, and Enigma के पास बहुत ज़्यादा काम होने वाला है यहाँ पे करने के लिए। एक Scaly in the meantime, लास्ट जो फ्लैश उन्होंने पॉप किया था, अपने आप को ब्लाइंड कर दिया, थोड़ा सा जल्दी पॉप कर दिया था। मे बी इवन देन ही माइट हैव हैड अ चांस, बट जब स्प्रे खुल जाते हैं स्मोक के अंदर तो आप बाहर नहीं निकल सकते। इट्स अ मीट ग्राइंडर। Of course, and I just say कि मेड इन थाईलैंड वो पहले कुछ राउंड्स के बाद जो स्टडी वर्क उन्होंने किया है, जो इम्प्रोवाइजेशन दिखाया है, it's been really well. देखिए, रॉफिल on the attacker side, he's been popping off. And defender side पे अगर आप सेंटिनल की बात करेंगे, yes, it has to be WannaFly who has done a fantastic job. लेकिन अभी साइड स्विच हो चुके हैं। एनिग्मा गेमिंग डिफेंडर्स हाफ पे आने वाले हैं। मेड इन थाईलैंड हाउएवर, उनके पास जो टेबल इनिशिएटर कॉम्पोजिशन है, इट्स गोइंग टू बी सोवा एंड स्काई। सोवा फॉर द इन्फो एंड स्काई फॉर द फ्लैशेस। सो साइड एंट्री गेन करना काफी आसान है सकता है, बट उसके बाद जब बारी आएगी पोस्ट प्लान पोजिशनिंग की, तब काफी मुश्किलें फेस करने पड़ सकते हैं मेड इन थाईलैंड को। बिकॉज एनिग्मा गेमिंग के रीटेक्स जो है, हमने देखा है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एससीएस के दौरान। जी हाँ, ऑफ कोर्स उनके रीटेक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट यू कांट काउंट बैक ऑन द पास्ट, राइट? क्योंकि आपको सामने वाली टीम का कैलिबर भी देखना होता है, उनका एक्सपीरियंस भी देखना होता है। एंड आप देख सकते हैं कि जब वो, आई डू बिलीव दे 1-6 डाउन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 1-6 डाउन होने के बावजूद उन्होंने जिस तरीके का कमबैक किया है, जिस तरीके से मेंटली रीसेट किया है, WannaFly को दाद देनी पड़ेगी। इवन तो किलजॉय खेले, काफ़ी ज़्यादा पिक्स निकाले उन्होंने, एंड कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे। दे आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस। वो ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे। उनको पता है कि यार नहीं, हमने ये चीज़ प्रिपेयर करी, हम यही चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। जीते हारे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वी आर गोइंग टू गेट आवर एग्जीक्यूट्स डन राइट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई दे आर स्टिल इन द गेम। बट वेल, बात करें हम यहाँ पे मैप पिक के बारे में भी, देन लेट्स नॉट फॉरगेट मेड इन थाईलैंड का पिक था ये। या एंड दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि एनिग्मा गेमिंग अगर अगला मैप ना जीते बहुत मुश्किल होगा। बिकॉज देखिए, मेड इन थाईलैंड का जो भी मैप पिक अभी तक आया है, ऑन द रिकॉर्ड्स उन्होंने वो मैप जीता है, बट इट आल्सो सिग्निफाइज कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। गाइडिंग लाइट से ए राउंड एंट्री क्लियर किया जाएगा, ट्रेल ब्लेजर का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बस इतना ही मिलेगा कि देयर इज समवन ट्राइंग टू कम इन फ्रॉम शॉर्ट। लॉन्ग पे आरबीकी पिक करते हैं एंड 64 एचपी का डैमेज, बट अलोन ऑन द अदर साइड एक स्कैली के पुश को डिनाई करेंगे इसी लॉन्ग पे, एंड इमीडिएटली रेक्सी को उनका जगह स्विच करना पड़ेगा। अभी ए साइड पे आप दो खिलाड़ी देख सकते हैं, बट आई रियली फियर कि क्या एक ए कमिटमेंट आ रहा है एंड एनिग्मा हैव नो आइडिया अबाउट इट। गार्डन पे ही अभी देखिए आप स्काई एंड एस्ट्रा इंतजार कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ ये दोनों भी ए कमिटमेंट, देयर इज ओनली वन प्लेयर ऑन साइड हियर जिनके पास शायद ही कोई मौका मिले। देयर इज नो वन इन फैक्ट इन साइड, एंड साइड कंप्लीटली खाली। आई मीन वेटिंग आउट द रोटेशन। Made in Thailand, they have done it. बेहतरीन फेक है। यहाँ पर रीटेक बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला, बिकॉज देखिए आप बात करें इनिशिएटिव के बारे में, नो गाइडिंग लाइट्स अवेलेबल फॉर द डिफेंडर्स, लेकिन रॉफिल अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड श्योर आपके पास आरवी के उनकी एबिलिटीज अवेलेबल है, बट रॉफिल को पहला पिक निकालना पड़ेगा जरूर है। एंटीडोट ऊपर उनको स्मोक कर दिया जाएगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। रिकॉन डार्ट को भी तोड़ा जा रहा है, लेकिन रॉफिल नीड्स टू वॉक इन एंड फाइंड दैट फर्स्ट पिक। स्पॉट हो चुके दो प्लेयर्स अंडर हेवन किल, जो गेटिंग से हो सकता है, लेकिन रेक्स गोइंग इन, फर्स्ट ऋषि को यहाँ पे टेक डाउन कर दिया जाएगा, बट ओह माय लॉर्ड, Made in Thailand, cleaning them up. I mean, WannaFly है तो कोई भी ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं रहेगी। Enigma Gaming, however, they have to go for an eco now. You can see 3 sheriffs उनके पास आ चुके हैं, बट जिस तरीके से होल्ड आउट किया, देखिए रेक्सी ने पहला पिक निकाला भी थी, बट उसके बाद just look at that wave that came from long and short. Enigma Gaming had nothing to answer with. Well, true. And they fell for the fake as well. So काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट था, बट आई डू बिलीव अगले 3 राउंड बहुत ज्यादा पिवटल होने वाला है। गाइडिंग लाइट का इस्तेमाल करके ए लॉन्ग क्लियर करते हुए, एंड जितनी ज्यादा जल्दी वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, उतनी ज्यादा जल्दी इन्फॉर्मेशन लेते हुए यहाँ पे अपना डैश भी एक्टिवेट कर चुका है। आई डू बिलीव अंदर पुश करेंगे, जैसे पहला पिक मिलेगा स्मोक डैश, जी नहीं, डैश का इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुका है, बट इन द मीन टाइम यहाँ पे टेक डाउन जरूर हो जाएंगे। बट एंटीडोट विद द शेरिफ इज यूजुअली आरवी के जो शेरिफ के ऊपर आपको नजर आते हैं, बट वन फ्लैश देखिए काउंटर फ्लैश खेलते हुए आराम से रुकना चाहते, उनको पता था, एंटिसिपेट करे थे वो फ्लैश को, एंड सीधा दीवार के अंदर देख रहे थे। रेक्सी स्पॉट हो चुके हैं यहाँ पे, आई डू बिलीव वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिट फ्लैग्स के लिए जाएंगे,
एंड एक्सपीरियंस नजर आ रहा है आपको मिथ की तरफ से, क्योंकि वॉन ऑफ लाइट जब गए काफी ज्यादा दर्शक सोच रहे होंगे वो दीवार की तरफ क्यों देख रहे थे. ही वाज एंटिसिपेटिंग एक्सकैलीज फ्लैश. वहां पे गाइडिंग लाइट को एक्सपेक्ट करके बैठे थे ताकि अगर उनके प्लेयर्स ब्लाइंड हो वो फिर भी काउंटर पुश कर पाए. Rexy with the sheriff now आ रहे हैं वो डिफेंडर स्पॉन की तरफ से, बट वो गाइडिंग लाइट नाइस नॉट देयर. Rexy को भी शट डाउन किया जाएगा गैरेट ने द्वारा. एंड 8वां राउंड मेड इन थाईलैंड के पास. आप बस देखिए कैसे पासा पलटा है. अभी ओवरऑल लोड आउट उनको मौका मिलेगा कि फुल बाइक के साथ आगे आए. 19,300 क्रेडिट स्पेंड. इस राउंड को निकालने की कोशिश जरूर रहेगी एनिग्मा गेमिंग की. फुल बाय राउंड पिछली बार हमने देखा था एनिग्मा गेमिंग जब वो बोनस बाई पे थे तब जरूर मेड इन थाईलैंड का फुल बाई राउंड उन्होंने तोड़ा था. मेड इन थाईलैंड भी वही कोशिश करेगी. वन ऑफ लाइफ स्टिल कंटिन्यूइंग ऑन विद दैट शेरिफ. आई मीन ओके कंप्लीटली बोनस को खेलना चाहते हैं. हाउ बाई लेके आए हैं जरूर. फुल शील्ड नहीं रहेगा एनिग्मा की 3-4 खिलाड़ियों के पास. तो समथिंग टू वरी अबाउट बिकॉज़ एट दिस रेंज फैंटम का वन टैप भी आपको शट डाउन करके जा सकता है. जी हाँ बिल्कुल सही कहा. लेकिन कौन गैरेट की बात करें फिलहाल के लिए, देखिए आप अभी भी वो रोटेट करें, सॉरी मैनिपुलेट करें रोटेशंस को. एंड वी ओनली हैव RVK टुवर्ड्स ए लॉन्ग जो अर्ली इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करे, बट क्या वो रोक पाएंगे पूरे के पूरे पुश को? आउटड्रोन आते हुए जो इन्फॉर्मेशन निकालेगा जरूर. एंड वहाँ पे RVK को स्पॉट कर दिया गया है तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी उनके लिए. लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखा रहे हैं. सो द क्वेश्चन इज क्या यहाँ पे उनको रुक पाएंगे? देखिए I'll tell you, this is not an orthodox team we are talking about. यहाँ पर मेड इन थाईलैंड जो ओपोनेंट्स में हैं उनके लिए the default strategy to be निकाली जाए. It's not gonna work out. Look at that. Rockville missing out a lot of confidence and Kadum immediately उनका फायदा उठाते हुए 3K निकाल चुके हैं. एक immediate conversion on the numbers over there. Kadum gets a fall through that smoke onto Rexy as well. He's up for an ace and Scan is the only one who's stopping him, but no more stopping because Kadum gets that ace. And they show us why Made in Thailand is one of the strongest teams जो इस ग्रुप में खेलते हुए नजर आ रहे हैं. I think you have to just not forget कि अगर Rockfield वो पिक निकाल जाते Kadum का, maybe the entire round would have been Enigma's, but kudos to them. An ace for Kadum, showing us what his skill level is. उनके mechanical skills कितने ज्यादा strong हैं. 6-1 का स्कोर था. 6-1 से 6-9 कर चुके हैं मेड इन थाईलैंड. एक लगातार स्ट्रीक वो मेंटेन कर रहे हैं 8 राउंड्स का, जिसको अभी तक एनिग्मा गेमिंग तोड़ नहीं पाई है. एनिग्मा गेमिंग का टैक्टिकल टाइम आउट लिया जाता है. ह्यूज मिस्टेक मेड ऑफ कोर्स, बट उसके ऊपर कैपिटलाइज करना. आई मीन Kadum ही इज जस्ट डेफिनेटली शोन अस व्हाट ही इज केपेबल ऑफ. उनके पास अभी ब्लेड स्टॉर्म भी अवेलेबल रहेगा एंड ब्लेड स्टॉर्म के साथ साथ रॉफिल वर्सेस Kadum का वो ब्लेड स्टॉर्म बैटल है. सीट की कौन सा जेट जीतेगा इस जेट मुकाबले में. बट 6-1 से 6-9 समथिंग टू रियली वरी अबाउट. टैक्टिकल टाइम आउट यहाँ पर खत्म होता हुआ एंड कुछ ही देर का इंतजार है अभी हमारे अगले राउंड की शुरुआत में. दिस इज गोइंग टू बी द 16th राउंड ऑफ द गेम एंड ये 16वां राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर ये राउंड जीत जाते हैं मेड इन थाईलैंड देन दे आर ऑन डबल डिजिट्स. बट अगर एनिग्मा गेमिंग जीत जाती है दे स्टिल विल बी हैविंग अ फाइटिंग चांस. आई मीन Mamba and ace for Kadum and then 9th round. I mean completely capitalized किया है इस राउंड को Kadum ने single-handedly. जी आई थिंक एट दिस पॉइंट आई डू बिलीव मिथ इज इन द ड्राइवर सीट. यहाँ पे एनिग्मा के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है कुछ करने के लिए. एंड आप देख सकते हो कि क्रैक्स आर फॉर्मिंग अप इन देयर अटैक एंड यूजुअली डिफेंस में होते हैं. बट जब अब मोराल कम हो जाता है आपकी टीम का वो नजर आता है आपको. एंड यहाँ पे देखिए Kadum की बात की अगर पिक कोशिश करेंगे पहला पिक निकाल पाएंगे. जी हाँ आराम से निकाल लेंगे. एंड utter domination coming in from Made in Thailand. Flawless round. Enigma Gaming on the other hand they have a lot of work to do. Ascent उनका पिक जरूर है, sure, no doubt about that, but उनको mentally recover करना पड़ेगा इस मैच से. Of course. But अब देखिए बस जो कॉन्फिडेंस हमें एनिग्मा गेमिंग से इनिशियल कुछ राउंड्स में देखने का मौका मिला. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट 7 राउंड्स. जो कॉन्फिडेंस था उसके बाद जैसे वो कॉन्फिडेंस अभी बाउ डाउन कर चुका है. एंड अटैकिंग हाफ में जिस तरीके से मिथ ने लगातार 4 राउंड्स निकाले हैं, देयर इज नो आंसरिंग. एनिग्मा गेमिंग अभी तक एक राउंड नहीं निकाल पाए हैं इन द प्रीवियस 9 राउंड्स एट अ स्ट्रेच. So we'll definitely see. What I'm not a huge fan of though, अब बात करें रॉ फ्यूल के बारे में, उनके पास ऑपरेटर है.
जब आपको पता योर बैक इज अगेंस्ट द वॉल, व्हाई वुड यू नॉट टेक मोर रिस्क एंड ट्राई एंड कैपिटलाइज ऑन दिस? जिस तरीके से वो खेला, आई डू बिलीव इज स्टिल प्लेइंग अ लिटिल मोर कंजर्वेटिव. जितना एग्रेशन वो दिखा सकते उतना दिखा नहीं रहे हैं. श्योर आसान नहीं होता इनिशियल पिक निकालना, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो रिस्क लेना. लेकिन सीकर्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे कदूम अंदर जाएंगे जरूर. गाइडिंग लाइट का इस्तेमाल भी जरूर होगा. इसके बाद इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है. आरवीके पहला पिक निकालेंगे, लकीली सर्वाइव्स है, बट ऑफ कोर्स अपने स्किल का भी इस्तेमाल करते हुए आरवीके एक और किल निकाला. इट्स अ वंडरफुल गेम प्ले कमिंग फ्रॉम, लेकिन एंटीडोट इज गोइंग टू कम इन क्लच एज वेल. उन्होंने 2 किल्स निकाले एंड एनिग्मा कमिंग बैक इन कंट्रोल ऑफ द गेम. यहाँ शानदार तरीके से आरवीके ने खेला. श्योर पहली फाइट वो सर्वाइव करके, लेकिन दूसरा किल जो निकाला तो शानदार था. Of course, I mean Antidote and RVK, two huge picks for themselves. ये दोनों जो दो खिलाड़ी डाउन करके गए. Now Wanafly, he's the only one alive and 30 seconds he's left. just waiting. Check that corner. No, he's not going to take that corner and immediately get punished. 7वां राउंड एनिग्मा गेमिंग के नाम. I wonder तो अगर यहाँ पर एक चाकू मोमेंट होता तो और भी ज्यादा मजा आता जरूर. But you know what? Keeping it to the professional level. No banter as of now from Enigma Gaming. I do believe professional matches में knife करना कोई गलत नहीं होता. I love it. Look, guys, I'm going to be honest. I absolutely love it, but sure, I can understand why it would be a little, I wouldn't call it disrespectful, but bantery between players. And trust me, बहुत सारे players हैं यहाँ पे. Xcali as a matter of fact, अगर उनकी बात करें, उनको अगर वो मौका मिलता है वो जरूर करेंगे. Teabag भी कर सकते हैं, but at the same time, mutual respect between the players. But banter is always fun to watch. But बात करें टाइम आउट के बारे में, made in Thailand. ये जो टाइम आउट लिया है बहुत स्मार्ट टाइम आउट है. मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों. क्योंकि मेड इन थाईलैंड को इस टाइम आउट की जरूरत नहीं है, बट दे वांट टू ब्रेक द मोमेंटम ऑफ एनिग्मा एंड दे आल्सो वांट टू रीसेट बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स वेंट रॉन्ग फॉर देम. जिस तरीके से उन्होंने अंदर पुश किया था, जिस तरीके से वो ट्रेड्स नहीं निकाल पाए, तो जो भी डिस्कस करना है अभी वेंट कर लो. आपके पास जो टाइम आउट का समय उसमें आप वेंट कर लीजिए, रीसेट कीजिए एंड ऑफ कोर्स एनिग्मा को वो मोमेंटम ब्रेक कीजिए. जो उनके पास कॉन्फिडेंस आया, लेट थिंग्स काम डाउन, लेट द डस्ट सेटल एंड देन go on into the next round. अगर यहाँ पे इसके बाद वो राउंड जीते हैं तो ये टाइम आउट उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकता है. बट एट द सेम टाइम बात करें एंटीडोट के बारे में, उनके पास लॉकडाउन रेडी है. X 1 orb away from his ultimate. तो देखना ये बनता है कि क्या रीटेक स्टार्ट यहाँ पे हमें नजर आती है या फिर वो लॉकडाउन बेट कर पाएंगे. इमेजिन अगर वो लॉकडाउन बेट स्ट्रैटेजी करते हैं. इट्स वेरी हार्ड टू पुल ऑफ बाय द वे, स्पेशली ऑन अ मैप लाइक हेवन. लॉकडाउन बेट स्ट्रैटेजी बहुत मुश्किल होती है, बट आई डू बिलीव प्लेयर स्मार्ट है कि वो इतनी जल्दी बेट नहीं करेंगे. बट लुक एट दिस सेटअप फ्रॉम एनिग्मा. बहुत ज्यादा क्रूशियल साबित हो सकता है. एंटीडोट की बात करें, वो अंदर खेले, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे चुके एंटी. पानी फर्स्ट वन, लेकिन कुछ ट्रेड कमिंग फ्रॉम कॉन्गारिड. बट देखिए आरवीके आगे आते हैं एंड सही टाइम पे नाइट बॉल के साथ साथ सीज का इस्तेमाल आया. प्राउलर भी एक डिप्लॉय किया जाता है जरूर, लेकिन पिक अभी तक नहीं मिला है. आफ्टर दैट फर्स्ट इनिशियल फाइट आउट अभी तक तो किसी के पास भी एक एडवांटेज नहीं मिला है. बट रॉफ्यूल ही इज डाउन टू 59 HP. 2 bullets from a vandal will be enough to shut him down. अगर वो बॉडी शॉट या फिर लेग शॉट भी रहता है, बट रॉफ्यूल के लिए ये ऑप पिक. एंड आई थिंक यहाँ पर अगर एक ऑप एंड वैंडल की जगह पे अगर दोनों वैंडल्स रहते, could have been a better approach जो ए लॉन्ग पे अभी करने की कोशिश की थी एनिग्मा गेमिंग ने. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि एनिग्मा इज स्टिल इन कंट्रोल. डिलैंड वहां पे सो गए देख सकते. मुझे ऐसा लगा कि ऋषि जिस तरीके से आराम से टुक स्वीट टाइम एंड उन्होंने किल निकाला है. सो आई एम नॉट श्योर इफ डिलैंड सो रहे थे वहां पे. कॉन्गारिड की बात करें, इज गोइंग टू गेट टेकन आउट. रॉफ्यूल ऑफ एंगल पे खेलते हुए ऑपरेटर के साथ एनिग्मा वंस अगेन फीलिंग द हीट. यहाँ पे किल निकालने की कोशिश, बट रॉफ्यूल बीइंग अ लिटिल ओवर एम्बिशियस. वहां पे उन्होंने आगे पुश किया था एंड टेक डाउन हो जाएंगे जरूर. इंफॉर्मेशन निकाली गई है, एक्सकैली को सर्वाइव करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे मेड इन थाईलैंड कुछ कर पाएंगे. एटलीस्ट एनीथिंग मीनिंगफुल. अलोन फील्ड्स की बात करें, सारे प्लेयर्स इंतजार करेंगे कि टाइमर रन आउट हो जाए उनके, उसके बाद किल निकाले, लेकिन नहीं. आरवीके डिसाइडेड टू पीक बिफोर दैट. वो टाइमर के बाद उनको मार सकते थे, बट नॉनलेस यहाँ पे जब तक आप राउंड्स जीत रहे, इट डजंट मैटर. I just say Enigma Gaming now they're looking good. अच्छा खेल रहे हैं. डिफेंडिंग हाफ पे फाइनली उम्मीद की किरण जगा चुके हैं. एंड रॉफ्यूल आई मीन वो तो चुन के बदला लेने की अभी कोशिश करेंगे, बिकॉज़ इतनी बार रॉफ्यूल को हमने देखा है. देखिए डिप्लॉइंग द प्रॉलर एंड उनको पिक ऑफ किया जाता है, तो नाउ ही इज गोइंग टू द टीम डुअल्स एंड वहां पर वो जीत भी रहे हैं. बट ऑन द अदर साइड 11 राउंड की तलाश में है मेड इन थाईलैंड. ये राउंड हारते हैं उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा टेंशन नजर आ सकती है.
on the other side अगर आप Enigma गेमिंग की कोशिश थी ऑफिल के पिक करने की, पीक करने की, लेकिन 1 of 5 इमीडिएटली डिनाई करेंगे। ट्रिलबिजी के साथ-साथ पुश कर चुके हैं एंड ए साइड कंप्लीटली खुला मिलता हुआ एंटीलोप दैट ड्रॉप डाउन इमीडिएटली थोड़ा जाएगा 100 that's the side given up, that's the cost में given investors as well। थाईलैंड किसी भी हाल में ये राउंड गंवाना नहीं चाहती है। जी हाँ, कोई भी हाल में यहाँ पे राउंड गंवाना नहीं चाहेंगे, लेकिन आरबी के पहला पिक निकाल दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप बात करते हैं, क्योंकि देखिए इनिशिएटर आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हैं, लेकिन वन ऑफ लाइक होते हैं कि पीछे से बैक साफ कर दो, क्या किल्स निकाल पाएंगे। पहला पिक निकाल दो, दूसरा पिक निकालने की कोशिश, लेकिन एक्सकैली को अंदर पुश करना पड़ेगा। ही इज बीइंग प्रेशर्ड, वो भी टेक डाउन हो जाएगा वहाँ पे एंड सो अनफॉर्चुनेट, लेकिन वंडरफुली प्लेड बाय मेड इन थाईलैंड। जितना स्मार्ट गेम प्ले यहाँ पे, इट्स अनबिलीवेबल, इट्स अनबिलीवेबल। Amazing work। 11-8 एंड जैसे मैं कह रहा था मेरे थाईलैंड 11th राउंड की तलाश, बिकॉज़ अगर हार्ड इकोनॉमी काफी डेंट रही थी, बट जिस तरीके से वनफ्लाई आपको आते हुए दिखे अलोंगसाइड दैट स्काई, आई मीन दैट वाज हाफ गेम डन ऑलरेडी। आधा रीटेक, आधे से ज्यादा रीटेक का जो प्रोबेबिलिटीज थे वो बढ़ चुके थे। मैच पॉइंट की तलाश में लेकिन कदूम की बात है पुश करते हुए मुझे लगता है कि ये फास्ट टेक आ सकता है, लेकिन आर्मी के पहला पिक निकालेंगे वन फ्लाई के ऊपर एंड पीछे हटेंगे जरूर। यहाँ पे डार्क कवर भी आते हुए तो काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन। अब बात करें डिफेंडर्स के बारे में, पूरा सेटअप देखिए सी साइड के तरीके से लगा हुआ है, तो एंटीडोट यहाँ पे इकलौते होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ओहो, बहुत ज्यादा एग्रेशन यहाँ पे, काफी ज्यादा एग्रेशन दिखाते हुए देखिए इसका टेकन डाउन एज वेल। यहाँ पे एनिग्मा गेमिंग बैक इन कंट्रोल एंड जितने भी हमारे भारतीय फैंस होने वाले हैं, खुशी की लहर नजर आ रही है उनके अंदर। ऑफ कोर्स वो दिख रहा है एंड किसी भी हाल में चाहते हैं कि ये इक्वलाइजर तक पुश इन किया जाए, इवन इफ इट्स 12-12। अगर ओवर टाइम तक भी जाता है, वी नो एनिग्मा गेमिंग के ओवर टाइम पे कितना ज्यादा उन्होंने कितने ज्यादा चांसेस रहते हैं एंड दे हैव डन इट ओवर एंड ओवर अगेन, बट इट्स नॉट ओवर अंटिल इट इज। सो कदूम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये 40 सेकेंड्स बहुत स्लो अप्रोच खेले, बट स्पाइक लेके आ रहे हैं वो ए साइड पे अकेले एंटीडोट सी साइड को गार्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट सी एंड बी दोनों की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। ड्रॉफ्यूल ऑपरेटर के साथ वापस करेंगे, बट इट्स ड्रॉफ्यूल शट्स डाउन कदूम एंड राउंड नंबर 20 डिफेंडर्स हाफ एनिग्मा के कंट्रोल में जाता हुआ 11-9, 2 राउंड्स अवे फ्रॉम विक्ट्री, मेड इन थाईलैंड 2 राउंड्स अवे फ्रॉम कमबैक एनिग्मा गेमिंग। जी हाँ, बट इट्स नॉट ओवर अंटिल द फैट लेडी सिंग्स एंड अभी भी स्कोर लाइन 11-9 है। 2 राउंड्स चाहिए मेड इन थाईलैंड को एंड ऑफ कोर्स 4 राउंड्स चाहिए यहाँ पे एनिग्मा को। मुझे एक सेकंड लगा यहाँ पे मैच करने के लिए, माय मैच इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं सोचा यार 3 राउंड बोल दूंगा गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन करना पड़ा था मेंटली आधी सेकंड के लिए। बट नॉनदलेस बात करें यहाँ पे एनिग्मा गेमिंग के बारे में, कॉन्फिडेंस जरूर नजर आ रहा है उनके अंदर, लेकिन क्या यहाँ पे एक चेंज ऑफ पेस हमें नजर आ सकता है कमिंग फ्रॉम मेड इन थाईलैंड। जरूर पॉप फ्लैश किया वहां पे, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी मीनिंगफुल, कुछ नेबुला लगाया हुआ है। मेरे साथ ही साथ एक स्लो अप्रोच पिक निकालने की तलाश, ऑलरेडी एक अल्टीमेट ऑर्ब उठा के आई थिंक द स्काई वांट्स द सीकर्स ऑनलाइन जितनी जल्दी हो सके सीकर्स को चाहते हैं एंड जैसे ही वो ऑर्ब मिला वो सीकर्स आ गए वापस, बट कैले अपने गाइडिंग लाइट की मदद से इंफॉर्मेशन निकालेंगे देयर स्टिल समवन प्लेइंग आउट इन गार्डन। अलार्म बॉट डिटेक्ट किया जाएगा, टर्रेट डिटेक्ट करेगा, मैं बैठ दैट पार्ट एंड इमीडिएटली बैक ऑफ करते हुए नजर आएंगे अलोन एंड उनके साथ कौन करेगा। जी हाँ, यहाँ पे करूम की अगर हम बात करें, आराम से इंतजार करें, काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन कर दिया राउंड को। एक्सकैली के पास सीकर्स है, आई डू बिलीव उनको थोड़ा सा वो शायद थोड़ा पैसिव खेल सकते हैं, रीटेक के लिए उनके सीकर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं, बट इन द मीन टाइम अगर वो टेक डाउन होते दैट कुड बी ए मैसिव प्रॉब्लम। इन्फॉर्मेशन उनको मिल चुकी है इसलिए वो पीछे हट रहे हैं। यहाँ पे गाइडिंग लाइट का इस्तेमाल करेंगे, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन कितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वन एंड डन स्पॉट में सीकर्स का इस्तेमाल करेंगे प्रीएम्प्टिवली। वो देखना चाहते कितने प्लेयर्स आप इंतजार कर रहे हैं ना। बात करें कदूम के बारे में, उसको पुश कर दिया या पीछे एंड अंदर डैश नहीं कर पाएंगे, पीछे हटेंगे, लेकिन देखिए बहुत अच्छा टाइम प्रीएम्प्टिवली इस्तेमाल जरूर किया उन्होंने सीकर्स का, लेकिन एक्सकैली का रीड परफेक्ट था। 20 सेकंड्स, लेकिन अभी भी बी साइड की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, बट डू दे हैव इनफ टाइम? ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। डू दे हैव इनफ? एंटीडोट इंतजार करें, आर्मी के पहला किल निकाले, क्लीनिंग देम अप वन बाय वन। कौन गाने की बात कर अंदर जा रहे हैं एंड एक्सकैली इज गोइंग टू कम इन क्लच, वांट टू फ्लाई रेक्सी के ऊपर किल निकालते हुए एंड वेल 1 versus 3। क्या लगता है कौन सी टीम यहाँ पे जीतेगी? Well, it's of course surprise whatsoever. I mean, it's not a question, Mama. Come on, it's 6 seconds in a 1v3.
Well, Enigma Gaming once again still they are fighting. It's Enigma Gaming fighting, but अभी तक हमने Enigma की तरफ से वो फॉर्म नहीं देखा है जहाँ पर we can actually say कि फिर Enigma, because ये मैच जीतते हैं we'll be able to see it. अब देखिए जो टाइमिंग के साथ साथ RVK एंड एंटीडोट का क्रॉस फायर था, एक एलिंग से एक सीलिंग से, they did immense work out there. Spike कैरियर को डाउन करना वो सब प्रायोरिटी वो दिखाया एंड 10th राउंड एनिग्मा गेमिंग लेके जाते भी हमें नजर आया. 11 10 21st राउंड डन फॉर 22nd राउंड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं. रॉबियल बीट के ऑफ इनफैक्ट एक टिक निकाला जाएगा जरूर, लेकिन बैक ऑफ करने का टाइम उसको नहीं मिला. It could have, then it could have been another hard one and शायद ही इक्वलाइजर could have been. जी हाँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पिक निकाला उन्होंने, इनिशिएटर के ऊपर पिक निकाला हुआ है, सो आई डू बिलीव. बट ये जो पिक था एंटीडोट का, आई एम नॉट श्योर अगर वो उसकी जरूरत थी. बट नैनोस्वार्म वहाँ पे फेल करते हुए जो काफी अच्छी बात है, अटैकर्स का लॉकडाउन आते हुए. बट इन द मीनटाइम अलोन फिल्स की बात करें, उन्होंने किल निकाला. आरवीके को टेक डाउन कर दिया जाएगा गाइडिंग लाइट के साथ. शायद नीचे एक्सकैली कूद सकते हैं, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा अपने टीममेट्स का बैकअप के लिए. एंड पोटेंशियली पुश फॉर जिया, उन्होंने पुश किया जरूर, लेकिन किल निकालने के बाद खुद ट्रेड हो गए. नाउ इट्स गोइंग टू बी अ 1v3. रेक्स के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. धीरे-धीरे क्रीप अप करे, क्या वो किल निकाल पाएंगे? सबसे पहला आराम से क्रीप इन कर रहे हैं मेथोडिकली, सर्जिकली एक एंगल पे क्लियर करते हुए. पहला किल निकाला, दूसरा निकालने की कोशिश, लेकिन डिलेंड उनको नहीं करने देंगे. एंड एनिग्मा losing out on this round. Myth coming into map point. Still doable. Mamba is still doable. We know it, it's still doable. लेकिन there was a nice freaking shot there from Raw Fuel. But क्या हमें एक इक्वलाइजर इम्पैक्ट देखने का मौका मिलेगा? बिकॉज़ देखिए 12-12 का स्कोर बहुत मुश्किल रहेगा, स्पेशली विद द बाइस यू हैव. एनिग्मा गेमिंग एक बुलडॉग, 3 खिलाड़ियों के पास हाफ शील्ड. यहाँ पे रॉ फ्यूल एग्रेशन दिखा तो एक्सकैली भी पुश करने की कोशिश करे. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जिस तरीके से इन्होंने चेंज ऑफ पेस दिखाया है. इट्स वंडरफुल. एक्सकैली आगे खेलेंगे, लेकिन क्या कौन कह रहा है उनको पिक कर पाए? उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन पहला पिक निकाले, दूसरा पिक निकालने की कोशिश. डैमेज भी बहुत ज़्यादा किया वहाँ पे, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट रूम को टेकन डाउन कर दिया गया. यहाँ पे कौन गैरेट की बात करें, लाइनिंग लाइट आ जरूर, बट बैकअप देखिए, व्हाट बैकअप कमिंग इन. रॉ फ्यूल एक तो निकालेंगे, उनके पास एक और अपड्राफ्ट अवेलेबल था, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. आरवी के अकेले यहाँ पे 1 versus 1 सिचुएशन. क्या निकाल पाएंगे? Waterfly 36 points of health. अब स्पाइक अभी भी प्लान नहीं हुआ है. आरवीके को मालूम है उनके पास बहुत ज्यादा समय. as long as the spike does not get planted, वो गारंटी करेगी अगर रोटेट करे सामने वाले प्लेयर तो वो रोटेशन को काट पाए. लेकिन क्या होने वाला है यहाँ पे? आर दे गोइंग टू गो बैक टू बैक, या फिर आर दे गोइंग टू क्रॉस ईच अदर? Waterfly अभी भी सी साइड की तरफ इंतजार कर रहे हैं. एंड आरवीके को देखिए कितना पेशेंटली इज आरवीके गोइंग टू बी कॉट ऑफ गार्ड. ये सबसे बड़ा सवाल होगा. बट इन द मीन टाइम हॉन्ट उनके पास अभी भी अवेलेबल है. एंड वेल पोस्ट प्लान में शायद इस्तेमाल हो सकता है इफ ही गेट्स द टाइमिंग राइट. लेकिन पेशेंस देखिए Waterfly के द्वारा. ऋषि यहाँ पे थोड़ा इधर उधर हिल रहे बिकॉज ही इज गेटिंग अनईजी. उनको आइडिया नहीं है बिल्कुल भी कि स्पाइक कहाँ पे प्लांट होने वाला है. बट देखिए आखिरी 20 सेकंड पे जैसा मैं सोच रहा था एग्जैक्टली वही पुश आ रहा है. आरवीके ही इज रेड इट सो फार. अभी भी बी साइड पे ही है, ए साइड पे प्लांट तो नहीं होगा. सो जब स्पाइक का आवाज आता है, जब उनको वो स्पाइक प्लांट का आवाज आता है, तभी अगर वो अपने हॉन्ट का इस्तेमाल करके सीधा पुश इन कर जाते हैं, तब शायद वन फ्लाई को पिक अप करके नजर आए. यहाँ तो हॉन्ट वर्क पे हॉन्ट आएगा भी. आउट द बॉक्स टेक्स इट, लेकिन जी नहीं. आरवीके मेक श्योर की and he survived sort of 1 HP. Are you kidding me? देखिए very close. बहुत ज्यादा स्मार्ट खेला उन्होंने. उनको पता था हॉन्ट अवेलेबल है, एंगल्स आइसोलेट किए उन्होंने मेथोडिकली. उनको पता था ग्रीन बॉक्स की अगर पीछे कोई होगा तो हॉन्ट का इस्तेमाल करके उनको आइडिया आ जाएगा. बट एट द सेम टाइम आई डू बिलीव वहाँ पे जो मेटल बॉक्स था उसकी वजह से डैमेज उनको कम पड़ा. लेकिन यहाँ पे रॉ फ्यूल के लिए ऑपरेटर भी उठा लेंगे. एंड दिस कुड बी लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस कुड बी द राउंड व्हिच पुशेस इट टू ओवर टाइम. बिकॉज आप क्रेडिट्स देखिए इतने ज्यादा नहीं है मेड इन थाईलैंड के पास. Enigma Gaming, however, उनके पास भी फुल बाइन नहीं रहेगा. They have to go with like bulldog, full shield, या फिर phantom half shield. अब देखिए जहाँ पर भी जिस साइड पे भी कमिटमेंट आ रहा है, उसी साइड पे मोस्टली आपको जो है मेजन देखने का मौका मिल रहा है. 12-11 Enigma Gaming एक राउंड ओवर टाइम एंड मेड इन थाईलैंड. एक राउंड पहले मैप का नाम लिखने के लिए. इट्स अ वेरी क्लोज गेम. इट्स अ वेरी क्लोज गेम. कॉर्नर चेक नहीं किया गया, कॉर्नर चेक नहीं किया गया. तो देखना अपना तरीके से इस्तेमाल करूं. कंजिन गेट्स एक्शन ऑफलाइन. लेकिन लिंक स्टार के द्वारा ये ट्रेड आएगा जरूर. साइट
अभी तक नहीं गवाया गया है। टाइम का खेल है अभी। It's just a times game. It is just a times game, लेकिन अभी भी 1 मिनट 10 सेकंड बाकी है हमारे पास। दोनों तरफ से एक प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया गया है, लेकिन जो टेम्पो है आई डू बिलीव लेट गेम में बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। अब बात करें रॉ फ्यूल के बारे में, इतना ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहे हो ऑपरेटर के साथ। ए लॉन्ग पूरा का पूरा लॉकडाउन किया हुआ, ये अलाउ करता है आपको आरवीके को बी की तरफ रोटेट करने के लिए, बिकॉज अगर कोई क्रॉस होता है इवन टुवर्ड्स ए शॉट, वो रोटेशन बुला सकते हैं। बी और सी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। आई एम नॉट श्योर व्हाई आरवीके इज रोटेटिंग बैक, बिकॉज उनके पास इन्फॉर्मेशन है ए लॉन्ग के बारे में। एंड अगर ये सेम चीज़ के ऊपर कमिट करते देन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मेड इन थाईलैंड to commit to the C side, लेकिन यहाँ पे अंदर जाते हैं कौन गैरेट अंदर जाएंगे जरूर, लेकिन इंफॉर्मेशन गाइडिंग लाइट भी जाएगी, लेकिन अपने आपको फ्लैश कर दो। एक्सकैल इज गोइंग टू गेट टेकन डाउन, एंटीडोट भी यहाँ पे टेक डाउन हो चुकी, लेकिन इट्स गोइंग टू बी 2v4 30 रीटेक। seconds left. ऋषि है हमारे पास, रॉफिल भी है, ऋषि गोइंग इन बट इट्स गोइंग टू गेट टेकन डाउन 1v4। बहुत ज्यादा मुश्किल होना है, पहला पिक निकाल दो। रॉफिल इज मोर देन केपेबल ऑफ पुलिंग दिस ऑफ, बट ही नीड्स टू क्रीप अप, ही नीड्स टू गो इन। एक और पिक निकाला है, परफेक्ट रीड यहाँ पे अलोन फिल्स पीछे आने की कोशिश, लेकिन क्या रॉफ्यूल के ऊपर पिक निकाल पाएंगे? धीरे-धीरे क्रीप इन करते हो, लेकिन रॉफ्यूल विल गेट टेकन डाउन। अनफॉर्चुनेट, अच्छा रीड था, लेकिन एनिग्मा पुटिंग अप अ वैलिएंट फाइट। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ये जो मैप पिक था मेड इन थाईलैंड का था, एंड अगर यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस वो दिखा पा रहे हैं, दे शोइंग दिस मच प्रॉमिस ऑन दिस मैप, then of course अगला मैप पिक उनका होने वाला है, and I'm sure they will be able to make a comeback. I think कुछ देर के लिए ना my heart just stopped. कुछ देर के लिए my heart just stopped because 13-11, 13-11, so close. No one expected Enigma to come out so strong. No one expected that. But yes, let's not forget, जिस तरीके से यहाँ पर हमें मुकाबला देखने का मौका मिला है, we are going to be heading on to a set of course, and अगर let's just say ऐसा ही competition level रहा, it is Enigma's map for sure. No, absolutely, no doubt about that. But Lucifer भी हमारे साथ जुड़ने वाले, उनको मैं वेलकम करना चाहता हूँ। वेलकम बैक Lucifer। Thank you. लेकिन 13-11 एक्सपेक्ट किया था क्या आपने, स्पेशली ऑन MITH का मैप पिक? देखिए, मैं शुरुआत में जरूर जिक्र किया था कि इट्स कैन बी वन साइडेड इन द स्टार्ट ऑफ 5 or 6 राउंड्स, एंड उसके बाद जब दोनों टीम्स एक दूसरे को जान जाएंगे, वी ऑलरेडी कॉल्ड इट, राइट? वी ऑल थ्री कॉल्ड इट, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग गेम। लॉन्ग क्योंकि होगा, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लोज, एंड वही होता हुआ नजर आया। आई मीन द वे इट वेंट वन साइडेड फॉर एनिग्मा, एंड उसके बाद यहाँ पे मेड इन थाईलैंड भी वन साइडेड किया, एंड आफ्टर दैट बोथ ऑफ देम केम at tiptoes against each other. I felt like ये पहला ही मैप कहीं ना कहीं ओवर टाइम जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, लेकिन प्राइस आई डू बिलीव यहाँ पे फार्मेसी को बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे होंगे, भाई धक हो रहा है, दवाई भेज दो प्लीज। जिस तरीके से मैच यहाँ पे खेली गई थी, इट वाज वेरी एक्साइटिंग टू वॉच, इवन एज कास्टर्स, राइट, इवन एज स्टोरी टेलर्स। बहुत ज्यादा मजा आया था हमें इसको देखते हुए। आई कैन ओनली इमेजिन हमारे दर्शक क्या महसूस कर रहे होंगे अभी। Of course, but you know what? We'll take a short break and be right back. So we'll see you after a short break.
Let me show you. Tell me I got this. Welcome back, ladies and gentlemen, to the VCT Apex Challenger Stage 2. मेरा नाम है रंजीत मामा सीनियर पटेल और alongside me is Lucifer, the man, myth, the legend, जिसके साथ मैं कास्ट करने वाला हूँ आज, and a wonderful person to cast with, wonderful person to work with as well. Land पे बहुत ज़्यादा मजा आता है, but let's get back to the game यहाँ पे. जिस तरीके से स्कोर लाइन थी 13-11, nobody expected that. Sure, हमने सोचा था कि क्लोज मैच होने वाले है. शुरुआत के पहले 7 राउंड में हमें लगा कि शायद एनिग्मा might even win this. बट एक का दो छोटी छोटी गलतियों की वजह से यहाँ पे मेड इन थाईलैंड के ऑन टॉप, बट एट द सेम टाइम क्रेडिट देना पड़ेगा बट क्रेडिट इज ड्यू. मेड इन थाईलैंड का पिक था, दे केम इन प्रिपेयर्ड एंड उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा दे हैंडल देमसेल्व्स रियली वेल. जो प्रेशर था उतना ज्यादा अपने आप के ऊपर चढ़ने नहीं दिया. दे डिड नॉट फील द प्रेशर एज मच एंड एट द एंड ऑफ द डे दे केम आउट ऑन टॉप. आई एग्री विद यू मामबाग. देखिए जो यहाँ पे मेड इन थाईलैंड शुरुआत में लग रही थी, आई फेल्ट लाइक आफ्टर वाचिंग दैट एंटायर मैचअप दे वांटेड टू लर्न मोर अबाउट एनिग्मा. उसकी वजह से थोड़ा स्पेस दे रहे थे एंड वील टॉक मोर अबाउट इट. चलते हैं आप स्कोर बोर्ड की तरफ. जैसे आप स्कोर लाइन देख सकते हैं, जैसे हम बता रहे थे 13-11 का इतना क्लोज कॉम्बैट. बट जैसे मैं बता रहा था, इट वाज आई फेल्ट लाइक मिथ कहीं ना कहीं यहाँ पे सोचना चाहती थी, समझना चाहती थी कि एनिग्मा कैसे खेलती है. एंड शुरुआत में जरूर उन्होंने ग्राउंड दिया, बट उसके बाद जैसे हम बता रहे थे, दिस इज देयर मैप चॉइस एंड उनको जीतना था. And they won that victory. आप देख सकते हो. In terms of, I would say, damage, Myth were very brilliant. क्योंकि उनके पास जो timing था ना मामबाप, whenever they were trying to go against Enigma, they were finding when Enigma कभी ना कभी जब utilities का इस्तेमाल कर रहे थे. I think that's where their openings were. कि जब Enigma utilities का इस्तेमाल कर रही थी, maybe APAC putting up his Prowler or maybe his Horn, and उसी timing पे आगे बढ़ेंगे. अगर एक अपड्राफ्ट या डैश कोई सुनाई देता है उनको, they try immediately push in Excalibur. अगर ट्रेलब्लेजर या फ्लैश का इस्तेमाल कर रहे थे, just finding those small niche opportunities and वहाँ पे कैपिटलाइज करते हुए नजर आ रही थी. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा. हम देखें, हम ग्रास वगैरह सबकी बात कर सकते हैं, लेकिन एक चीज दैट रियली स्टैंड्स आउट फॉर मी, राइट? आप कॉन गैरेट के स्काई की बात करें, आप एक्सकैली के स्काई की बात करें, कॉन गैरेट के पास 11 असिस्ट थे. किल्स निकाले जरूर. लेट्स फॉरगेट अबाउट द किल्स फॉर नाउ, क्योंकि केडी डिफरेंस जो है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे. लेकिन यहाँ पे देखिए, 2 प्लेयर्स आर फोकसिंग ऑन एनिग्मा की तरफ से आरबीके एंड ऑफ कोर्स मिथ की तरफ से वानाफ्लाई. 1.2 केडी फॉर आरबीके, 207 कॉम्बैट स्कोर एंड 17 किल्स, एंड वानाफ्लाई के लिए 20 किल्स, 255 का कॉम्बैट स्कोर एंड 2.3 KDA. But I want to go back to the 2 skies that we're talking about. जो 2 initiators की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. एक्सकैली के जो फ्लैशेस है, जो गाइडिंग लाइट थी, उतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थी बिकॉज वो असिस्ट नजर नहीं आ रहे हैं. I agree with you. यहाँ पे देखिए, Excalibur as well as Kong Garrett, जैसे आप बता रहे थे, इनके बीच में अगर एक मैचअप करते हैं, I felt like Excalibur was being held back and उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको वो मौका नहीं मिला in terms of flagging on, because we know, right, Excalibur is as a player उनको बहुत पसंद है. He wants to play on his own. He wants to like free flow. And वो कहीं ना कहीं I would say थोड़ा सहमे हुए लग रहे थे यहाँ पे माम्बा. He was looking a little bit held back क्योंकि teammates को information चाहिए था, because he was the only I would say kind of informant. On the other end, it was Fade, right? They have to kind of rely on these 2 informants. अगर ये दोनों गिर जाते हैं, then it's done for. On the other end, opponent के पास Sova था, so they can work on lineups and they can keep that Sova far away. And उसके confidence के ऊपर, Con Garrett, he was just there being majorly as a flasher and try to push opponents for a fight. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा. बट एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे कि श्योर आप बात कर सकते हैं एक्सकैली फीलिंग हेल्ड बैक, बट एट द सेम टाइम लेट्स नॉट फॉरगेट, जिस तरीके से हम चर्चा करें ऐसा लगता है कि वो वन साइडेड अफेयर. इट वाज एब्सोल्युटली नॉट अ वन साइडेड अफेयर. बट हमें पता है पोटेंशियल क्या है इन प्लेयर्स के, एंड आई डू बिलीव एक्सकैली हैज अ लॉट मोर टू टैप इन, बिकॉज मैंने देखा इस प्लेयर का पूरा ग्रोथ होते हुए देखा पिछले 6-7-8 सालों में. एंड अगर ये प्लेयर अपने दिन पे खेलता है, इज अनटचेबल. Anywhere in the world is untouchable. उनके पास इतना ज्यादा स्किल है, so I wouldn't take it away. Sure, उनका जो रोल था उसकी वजह से he was being a little held back, but I do believe अगले मैप में they're going to bounce back stronger. And again, मैं बार-बार कहूँगा, Ascent
हमारा एनिग्मा का पिक होने वाला है एंड ओवर देयर मैं देखना चाहता हूँ इन अ मोर प्रोएक्टिव रोल वहाँ पे एक्सकैली को. नॉट श्योर कौन सा एजेंट खेलेंगे, लेकिन अगर वो कोई भी एजेंट सेलेक्ट करता है, आई वांट टू सी हिम इन अ मोर प्रोएक्टिव रोल एंड थोड़ा ज्यादा पुश करते हुए मैं देखना चाहता हूँ उनको. I agree with you. I mean, Excali एक I would say जो agent selection है generally on Ascent जो खेलना भी चाहिए, it looks and tends to be on that KO. But जब पिछले बार इनका मुलाकात हुआ था जब असेंट पे खेल रही थी वहां पे एक्सकाली चेंज टू असेज व्हिच इन द रीसेंट टाइम्स ऑफ असेंट बहुत कम देखने के लिए मौका मिलता है. एवरीबडी स्विचिंग इनटू दैट केओ मेटा डबल इनिशिएटर सेटअप जहां पे फ्लैश एंड डैश इज कमिंग इनटू द पिक्चर. पिछली बार हम देख रहे थे इट वाज विद द स्काई दैट फ्लैश एंड डैश सेटअप. उसके बाद ब्रीच के साथ भी देखने के लिए मौका मिल रहा था बट ऑल ऑफ देम स्टार्टेड डाइंग डाउन बिकॉज वो केओ इट गिव्स यू दैट मैन्यूवरेबिलिटी एंड ऑल्सो उसके साथ आप टीममेट के साथ खेल सकते हैं. एंड ऑल्सो अनदर वन विद दैट केओ आप जो कर सकते हो ओपोनेंट को सप्रेस कर सकते हो in terms of using their utilities. So कहीं ना कहीं दो फायदा मिल सकता है. One is your raw aim battle, along with that you flash out the opponent and I think you can win out the duel. But जी हाँ मौका ढूंढना पड़ेगा. यहाँ पे देखिए मौका ढूंढ जरूर रहे थे but just because it was their pick they were looking very well, I would say accustomed to the map and जी हाँ उनको पता चल रहा था कि what Enigma were trying to do. एक कॉर्नर अगर एक्सकाली को जहाँ पे वो विंडो के नीचे छुपे हुए थे ना, if he got 2 kills over there, maybe Mamba, I think from there even confidence would have gotten built up. I mean, Excali loves to make those plays. वहाँ पे सिर्फ उनको एक पिक मिला, then he got it immediately traded out. Oh, absolutely, no doubt about that. लेकिन अगर उनका जो स्ट्रैटेजी था शुरुआत में आपने देखा कितना ज़्यादा पेस को कंट्रोल करते, कितना ज़्यादा फास्ट खेल रहे थे. आई डू बिलीव नियॉन could have been a good pick as well. I don't want to dissect too much into the agent picks yeah, because हर एक ये जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके comfortable picks पे खेल रहे हैं. Raw Fuel can play really well as well. But Neon could potentially have been a better pick. ये बहुत ज़्यादा debatable topic होने वाला because Raw Fuel का जो impact था no doubt about that. But अगर आप खेलने वालों फास्ट लेन का इस्तेमाल करके कवर बना के अपने आप के लिए there's a lot you can do. खास तौर पे जब आप बैक साइड की बात करते हैं आप स्टन कर सकते हो. So sure आप डाइसेक्ट कर सकते हो but all in all 13-11 still a very close score line. But let's focus on the next map, Ascent, जो एनिग्मा का पिक होने वाला है. यहाँ पे I do believe I want to see Excali in a more proactive role and hopefully उनका impact हमें नजर आएगा क्योंकि आप KD डिफरेंस की अगर बात करें हर एक प्लेयर का जो KD डिफरेंस है वो नेगेटिव रहा है. आप शुरुआत करेंगे RVK से -1 अप अंटिल रेक्स -6. तो फ्लैगिंग डिपार्टमेंट में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी टुवर्ड्स द एंड जहां पे वो मिड गेम में अगर आप देखें तो मोमेंटम गया था वापस मिथ की तरफ एंड मिथ ने काफी ज्यादा डोमिनेट किया था मिड गेम में. टुवर्ड्स द एंड श्योर दे स्टार्टेड मेकिंग अ कमबैक बट इट वाज अ लिटिल टू लेट. I agree with you. I mean, देखिए कमबैक जो हम बात करते हैं when the opponent has a better lead थोड़ा मुश्किल हो जाता है and you also put yourself under pressure. शुरुआत में मम्बा आपने जरूर जस्टिफाई किया था. It's also about the mental game. And एक बार opponent एक lead लेके चले जाते हैं then you're putting yourself under pressure on every round. आप कहीं ना कहीं capitalize कर सकते हो, बहुत close आ सकते हो but you're still working under pressure saying that एक छोटा गलती और हम round खो सकते हैं. And वो एक छोटा गलती हुआ in the last round where we saw कि Enigma की तरफ से एक्सकाली भी होल्ड कर रहे थे. एंटीडोट एक्सकाली वाज ऑन डिफॉल्ट जस्ट प्लेइंग अराउंड बैक साइड एंड एंटीडोट का अगर बात करेंगे ही वांटेड टू स्विंग एंड हेल्प एक्सकाली बट उस स्विंग को कवर कर रहे थे वहां पे वॉर्नफ्लाई एंड इमीडिएटली जैसे स्विंग आया ही एलिमिनेटेड दैट एंड देन द फ्लैश केम इन. एक्सकाली कुडंट डू एनीथिंग. बोथ ऑफ देम वर फ्लैश्ड फॉर अ सेकंड बट द एडवांटेज था वहां पे क्योंकि उनको ऑलरेडी पता चल चुका था समवन इज प्लेइंग अराउंड डिफॉल्ट क्योंकि ट्रेल ब्लेजर भी आया था उस जगह से. बट यस दैट इज हेवन जो हम बात कर रहे थे एंड जैसे आई वुड से हाउ इट फ्लोड एंड वर्कड आउट फॉर मिथ. बट राइट नाउ इट्स अबाउट असेंट जैसे हम बात कर रहे थे. अगेन फ्रॉम एन अटैकर साइड इट मैप वी आर स्विचिंग इनटू डिफेंस फेवर जहां पे शुरुआत में फायदा नहीं मिलेगा एनिग्मा को बिकॉज दे चूज द मैप दे आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग ऑफ एन अटैक. बट Enigma on Ascent love both attack and defense and कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपना पूरा सर्किट में खेला है अटैकिंग हाफ में डोमिनेशन किया है अभी तक. या बिल्कुल सही कहा बट लेट्स टॉक अबाउट सम मोर नंबर्स. देखिए हम बात करते हैं जो एवरेज डैमेज पर राउंड. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट क्योंकि आप उसको चाहे उस तरीके से यू कैन परसीव इट यू कैन रीड इनटू द नंबर्स एज मच एज यू वांट. बट यहाँ पे मैं जो असिस्ट के इम्पैक्ट की बात कर रहा था स्पेशली विद एक्सकाली बीइंग ऑन स्काई 3 असिस्ट थे उनके एवरेज डैमेज पर राउंड की बात करें 127 था. श्योर किल्स निकाले. इट इज एन FPS गेम एट द एंड ऑफ द डे. यू नीड टू टैप हेड्स. आपको सामने वाली टीम को एलिमिनेट करना होता है. यू नीड टू होल्ड ऑफ एरियाज. बट एट द सेम टाइम डिलेंट की अगर हम बात करें उन्होंने सिर्फ 9 किल्स निकाले थे. उनका जो एवरेज डैमेज पर राउंड ADR था वो 66 था बट एट द सेम टाइम ही हैड 9 असिस्ट्स. तो नेबुला का इस्तेमाल जिस तरीके से अपनी यूटिलिटीज का इस्तेमाल करते वो अपने टीममेट्स को एनेबल कर रहे थे टू गो आउट देयर एंड गेट दोस पिक्स. श्योर एक्सकाली ने इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा निकाली बट अब जो फ्लैश एंड डैश की बात करते हो या फ्लैश एंड पीक टू बी एबल टू यूज योर यूटिलिटी टू द best of its users and of course allow your teammate कि वो आगे जाके उनके पिक्स निकाले वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे. एटलीस्ट द नंबर्स शो दैट क्योंकि मैच के अंदर आप देख सकते हैं लेकिन नंबर्स शो
कि एक्सकैली किल्स जरूर निकाल रहे थे, लेकिन असिस्ट के मामले में आई डू बिलीव अगर वो ज्यादा असिस्ट निकाल पाते, अगर वो अपनी टीम को ज्यादा अच्छे से सेटअप कर पाते, then it would have been a little better for the team. But at the same time, I can't also take away from the fact जिस तरीके से उन्होंने ट्रेल ब्लेजर का इस्तेमाल किया, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा निकाल रहे थे वो. So his play style in this matchup, right, was based on information. वो इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे instead of setting the players up, which is fine, which is completely understandable, क्योंकि दो काम होते हैं इनिशिएटर एंड एंट्री फ्लैगर का. एक आप स्पेस बनाते हो, जब भी एंट्री फ्लैगर एक एरिया के अंदर जाते हैं, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि एंट्री फ्लैगर को किल्स निकालने होते हैं. दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू. एंट्री फ्लैगर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्पेस बनाना. इनिशिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दो, स्पेस बनाना, इन्फॉर्मेशन निकाला, एंड ऑफ कोर्स इफ यू प्लेइंग एन एजेंट लाइक स्काई, देन ऑफ कोर्स डिसेबल देम एज वेल. वो चीज यहाँ पे देख सकते हो. इट्स वेरी वेल राउंडेड, बट नॉनदलेस एसेंट की तरफ हम रुक करेंगे और देखेंगे क्या पिक्स होने वाले. एक्सकैली ऑन केओ. नाउ sure, we could see a more proactive role on him. Antidote on Omen, RVK on Soa, and Rex on Killjoy. This is very interesting. I'm sure they've played this before, no doubt. Don't get me wrong. उन्होंने ये खेला हुआ है पहले, but interesting nonetheless. देखना जरूर पड़ेगा how it's going to be functioning. I mean, it could have been a mirror lineup, except for Dylan and Antidote. वहाँ पे आप Astra as well as Omen का पिक देख रहे हो, एंड जी हाँ, आपने जरूर दांत भी दिया था पे Dylan का, जैसे वो खेल रहे थे on Astra. I mean, as we said, with that nerf, it gets a little bit difficult, but if somebody is making it work, it looks very very good, and वही करते हुए नजर आ रही है Amit, and let's hope कि यहाँ पे एक और मैचअप होते हुए नजर आए. आखिरी मैप की तरफ हम बढ़े. That's going to be bind the decider matchup, but जी हाँ, अगर मौका मिल चुका है Amit को एक पॉइंट लेने का इस सीरीज में, they'll be looking forward to closing it, because they right now confidence भी उनके साइड पे रहेगा, and which can help their mental game in the run. But Enigma, because Ascent में इतने बार खेल चुकी है, and they've won out so many times, and also have done their comebacks to get victories, confidence ज़्यादा भी रहेगा Enigma का. They'll be feeling, I would say, as they're jumping in, they'll be feeling very accustomed to the map. कहीं ना कहीं वो fear नहीं रहेगा, because their hashtag is also hashtag fear the Enigma. तो कहीं ना कहीं वो fear strike करते हुए नजर आ सकते हैं यहाँ पे, because it's their map choice. But जी हाँ, जैसे हम बात कर रहे थे, the agent selections coming through. I mean, again, tagging along with KO and Jet, कहीं ना कहीं वो फायदा मिल सकता है. दोनों साइड पे वो KO देखने के लिए मौका मिल रहा है. So that flash and dash gameplay still is on the cards. But I feel like अभी जो Congalid and Excali का वापस रोल बदला है from that Sky to KO, will be seeing a lot of their battles also. And इस मैप में ज्यादातर maybe again Rafuel versus Kadum, क्योंकि Kadum, how he was flying around and also taking kills, वो ज्यादा देखने के लिए मौका मिला है Heaven पे, other than Rafuel, क्योंकि Rafuel का ज्यादातर I would say plays बहुत बारी shut down किया जा रहा था, because as soon as the information was gained, they were just jumping right into the space where, जैसे आप बता रहे थे, जो entry fragger है space दिलाना चाहिए, and Kadum, I think he was doing that job really well. Entry ले रहे थे, he was getting that space. If that space was not given, immediately myth rotate करते हुए नजर आ रहे थे, which was kind of looking missing from Enigma. But now, because Enigma का map choice है, I feel like they'll be very accustomed. And also, जैसे हम बात कर रहे थे, Enigma love attack and they're very aggressive on it. Oh, absolutely. और mid control बहुत ज़्यादा यहाँ पे important होने वाला है. It's going to be pivotal for them to have mid control. Yes. क्योंकि वहाँ से आप opportunities open up. आप market जा सकते हैं, आप defender base जा सकते हैं, वहाँ से A, B, जहाँ पे भी split करना कर सकते हैं. खास तौर पे मिड कंट्रोल इसलिए जरूरी, ताकि आपको ए शॉट से कोई पिक ना कर जाए, या फिर मिड से कोई एग्रेशन दिखा के आपके कनेक्टर की तरफ कोई पिक ना निकाल पाए. ऑफ कोर्स आई एम श्योर द प्लेयर्स नो दिस, बट फॉर द ऑडियंस ऑफ कोर्स मैं बताना चाहूंगा कि मिड कंट्रोल इज गोइंग टू बी वेरी पिवटल. एट द सेम टाइम दोनों एरियाज यहाँ पे you don't need to have control of the entire map, but information बहुत जरूरी होने वाली है. एंड KO किस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो तो मैच में हम देख पाएंगे, बिकॉज वी कैन स्पेकुलेट, हम कितनी भी बार प्रेडिक्शंस कर ले, बट इट ऑल कम्स डाउन टू द प्ले स्टाइल्स ऑफ दीज प्लेयर्स एज वेल. बट मैं देखना चाहता हूँ थोड़ा सा और एग्रेशन, थोड़ा सा और फ्री फ्लोइंग गेम प्ले फ्रॉम Excali, because I know this player is capable of much more than what he's done in the last game. Yes, exactly. I would say the entire Enigma team, right? कहीं ना कहीं जैसे वो step in कर रहे bigger stage पे, this first game did not feel like it was complete Enigma shining over there. On the other hand, Myth वहाँ पे देखिए, they wanted to make sure they dominate and move further down the line. So, जैसे उन्होंने ओपोनेंट को पढ़ा, दे स्टार्टेड वर्किंग आउट एंड गेटिंग मल्टीपल राउंड्स. हमने देखा बैक टू बैक 8 to 9 राउंड्स उन्होंने लिया. बट अभी चलते हैं असेंट के मुकाबले के ऊपर. शुरुआत होगा जहां पे हम ऑलरेडी बता चुके थे, एनिग्मा स्टार्टिंग ऑफ एन अटैक, 2 गोस्ट का इन्वेस्टमेंट, एक फ्रेंजी का यहाँ पे मेड इन थाईलैंड की तरफ से लोन, एंड एक गोस्ट, मेक इट 2 फ्रेंजीज कमिंग इन. वन ऑफ लाइफ भी वहां पे फ्रेंजी के साथ खेलना चाहते हैं, बट लास्ट मोमेंट चेंजेस, इट्स गोइंग टू बी 2 गोस्ट. बट अगेन यही देखिए, एनिग्मा को पसंद है स्पेशली बी साइड पे एग्रेशन, एंड लुक्स लाइक दे गोइंग टू बी स्टार्टिंग ऑफ देयर. जियान काफी ज्यादा फास्ट खेल रहे हैं यहाँ पे.
रॉफ्यूल इस्तेमाल करे, स्मोक डालेंगे जरूर, स्विच भी बंद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या पिक निकाल पाएंगे सबसे बड़ा सवाल होने वाला। अलोन फिल को देंगे यहाँ पे, गोलियां चला दे, लेकिन रॉफ्यूल कमिंग ऑन टॉप, वांट टू फ्लाई इन द मीन टाइम, एक किल निकालेंगे जरूर, लेकिन ट्रेड्स बहुत जल्दी आते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले। रॉफ्यूल स्टिल सर्वाइविंग ऑन 40 एचपी बट एंटीडोट वाचिंग द बैक, सब उनको पता है प्लेयर आएंगे जो Antidote is going to get clapped into the next map. And यहाँ पे काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट उनके लिए टॉप फ्यू एग्रेशन दिखाते हुए पहला पिक निकालेंगे, ये बहुत ज्यादा शानदार थी, शॉक स्टार्ट दी जाएगी आरवीसी इन द एंटिसिपेशन गेम, समय बाय करते हुए अपने आप के लिए यहाँ से पीक करेंगे जरूर, एक और पिक निकालेंगे, फ्लैश आया लेकिन रॉ फ्यूल इज गोइंग टू गेट टेकन डाउन, Kadoom with the sheriff is looking absolutely on point, 1 versus 2 निकाल सकते हैं, रेक्स अगर पीक करेंगे शायद टेक डाउन हो सकते हैं, बट इट ऑल कम्स डाउन टू वेटिंग गेम, रेक्स इंतजार करेंगे उनका नीचे कूदने का, यहाँ पे दोनों में से कोई भी प्लेयर पीक नहीं करने वाला, लेकिन Kadoom के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज डिश आउट हो चुका है, फाइंडिंग वन मोर पिक, लेकिन आरवीके विद द परफेक्ट टाइमिंग, ये राउंड भी एमवीपी मैं कहूंगा आरवीके है। आई एग्री विद यू, क्योंकि देखिए Kadoom इतना क्लोज लेके आ चुके थे उस राउंड को, अगर एक और किल अगर वो दोनों साथ में नहीं पिक करते, दैट वुड हैव बीन डन, दैट वुड हैव बीन अ क्लच कमिंग थ्रू फ्रॉम Kadoom। एंड ना सिर्फ वहाँ पे एक रीड भी आया था, एंटीडोट रेड इट रियली वेल, कि कहीं ना कहीं एक बैक स्टैब भी आ रहा है, ही वाज रेडी फॉर इट, बट Kadoom breaks the alarm bot and immediately switches on to Antidote's head and smacks him out। I mean, हमने किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे इमीडिएट कनेक्शन होगा, बट Kadoom makes it happen and now Enigma they won the round but it was very close, इसकी वजह से यहाँ पे एंटी को में एडवांटेज जरूर रहेगा उनका, and they immediately switched into the side of A जहाँ पे 3 प्लेयर्स तैनात है, they're checking every angle, यहाँ पे पहला प्लेयर का पोजीशन पता चल जाएगा, but Kadoom gets eliminated, Dylan trying to hold it off and delay things, कौन गैरर भी वहाँ पे साथ देते हुए, but better weapons paying off for Enigma, and वहाँ पे already एडवांटेज पे आ चुकी है 3v2 का। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन वॉर ऑफ फ्लाई की बात करें धीरे धीरे पुश जरूर करेंगे, एनिग्मा अगेन स्टार्टिंग ऑफ रियली स्ट्रॉन्ग, लेकिन रॉफ्यूल थोड़ा सा ज्यादा क्लोज खेल रहे हैं, अलोन फेल शॉट के साथ कैच निकालते हुए रॉफ्यूल स्पॉट हो जरूर चुके, लेकिन ऑलराउंड का इस्तेमाल करेंगे, प्लेयर्स को स्पॉट कर दिया गया है, यहाँ पे उतरेंगे नीचे जरूर, लेकिन वॉर ऑफ फ्लाई फाइंडिंग अ ट्रेड, यहाँ पे 1v1 होने वाला जरूर है, लेकिन आरवीके वंस अगेन द लास्ट मैन स्टैंडिंग, the last person to click ahead, and बहुत ज़्यादा close हो गया था, and anti-eco should not be this close. I agree with you. I mean, देखिए ऑलरेडी ट्रेड्स हो रहा था साइट में, उसके बाद उनको इन्फॉर्मेशन मिल गया था, आखिरी 2 प्लेयर्स राफ्टर से आ रहे हैं, Rafael took the fight, won that first duel, but immediately trades and especially वो shock dart का kill, अगर वो नहीं होता ना, I think Mamba it would have been at least a better one, but यहाँ पे anti eco में बहुत ज़्यादा economy damage हो चुका है. Now because of that, I don't think Enigma will have a bonus, so either they have to play with a commitment that full buy खेले, या maybe they have to just go in for an eco, and they're going in for the commitment, Mamba. यार आरवी को शेरिफ दे दो, फर्क नहीं पड़ता. Exactly right. But jokes apart, yeah, no, money is definitely going to be a massive concern, क्योंकि मिथ के पास क्रेडिट्स का एडवांटेज है यहाँ पे. रेक्स की अगर हम बात करें यहाँ, अच्छा अकेले पूरा एरिया क्लियर करना चाहते हैं. मैंने कहा था मिड कंट्रोल बहुत ज्यादा पिवटल होने वाला, बट देखिए रॉफ्यूल धीरे धीरे क्रीप अप कर, लेकिन अलार्म बॉट भी होने वाला है वहाँ पे, व्हिच कुड बी अ प्रॉब्लम. यस इंडीड, वहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा. आउल ड्रो देखिए रेक्स को वहाँ पे मार्क कर देगा, एंड इन द मीन टाइम आरवी के ए शॉट क्लियर करेंगे, एंड शायद उनको हटना पड़े, आराम से ऊपर से निकलेंगे, मार्क भी कर देंगे प्लेयर को. लेकिन क्या गार्डन कंट्रोल ले पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये होने वाला है. पॉप फ्लैश आ जरूर था, लेकिन 2 बाउंसेस की वजह से रॉफ्यूल अंदर जाएंगे, उनको टेक डाउन कर दिया जाएगा. Kadoom taking him down, but कौन गया धीरे धीरे पुश करेंगे. आरबीके might just get taken down हुए अगर वो पीछे से स्नीक अप कर देंगे. वॉरफ्लाई को देखिए मार्केट कंट्रोल करके बैठे हुए वो एंटी फाइंडिंग अ पिक फॉर हिमसेल्फ, लेकिन वॉरफ्लाई नीड्स टू स्टे अलाइव. एक्सकैली फाइंडिंग 1, फाइंडिंग 2, वॉरफ्लाई को भी टेक डाउन कर देंगे वहां पे, एंड अचानक से swinging the game back in their favor, लेकिन RVK बैक सब नोटिस करते हुए यहाँ पे क्या वो किल निकाल पाएंगे कॉन्गैरेट के ऊपर. जी हाँ, किल निकालेंगे, and it all comes down to Dylan all alone in a 1 versus 4. देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी ये एनिग्मा का राउंड होने वाला है. आई मीन दे हैड कमिटेड फॉर दिस राउंड एंड बाय अप भी कर चुके थे, तो फायदा भी मिला है उनको, एंड दे वेटेड. पिक्स लिया, जी हाँ उनका पहला पिक निकाला, बट स्टिल दे वर चेंजिंग द साइड्स अराउंड, एंड उसके वजह से दे वर एबल टू ब्रिंग इन रोटेशन, जिसकी वजह से आई वुड से haphazard movement मिथ की तरफ से देखने के लिए मौका मिला, एंड दे वर अनेबल टू काइंड ऑफ होल्ड आउट द पोजीशन दे वर इन. एंड जी हाँ, जो रीच भी था एनिग्मा की तरफ से, दैट दे इमीडिएटली स्विच्ड अराउंड व्हेन दे काइंड ऑफ हैड द इंफॉर्मेशन कि 3 लोग ए साइड पर रह सकते हैं. आरवीके राइट नाउ ऑन द हंट कि आखिरी खिलाड़ी कहाँ पे है. डिलन इज जस्ट वेटिंग आउट. इट लुक्स लाइक एन एग्जिट फ्रैग गेम फ्रॉम हिज एंड. ऑलरेडी स्पॉट कर चुके हैं एक्सकाली को, बट एक्सकाली इज जस्ट होल्डिंग एंड हगिंग द वॉल, एंड डिलन मौका नहीं दे रहे उनको ये पिक निकालने का. ही इज जस्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी. आरवीके ऑन द अदर एंड वो जरूर सोच रहे थे कहीं ना कहीं ए साइड में रहेंगे खिलाड़ी, but that also did not work out. But Enigma again pulling off strong 3 rounds in the first half and also on the attack.
जी हाँ बिल्कुल सही कहा, बट हम बात कर रहे थे क्रेडिट का एडवांटेज होने वाला था मिड के पास, फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ा. दे प्लेड इट रियली स्मार्ट. एनिग्मा की मैं बात कर रहा हूँ, काफी अच्छे तरीके से खेले, पेशेंस दिखाया. एक्सकैली आल्सो कमिंग आउट ऑन टॉप विद ऑल दीस पिक्स, लेकिन वहां पे एक्सकैली हैड नो बिजनेस सर्वाइविंग. आई एम नॉट क्वाइट श्योर किस तरीके से उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने किल निकाला. एंड पीकर्स एडवांटेज इन फुल फोर्स, लेकिन एक्सकैली यहाँ पे अपनी अल्टीमेट का इस्तेमाल करेंगे. रॉफिल शायद अंदर जाएंगे जरूर, एबिलिटीज नहीं आने वाले. जी हाँ, डैश अप ड्राफ्ट करेंगे अंदर एंड क्या किल निकाल पाएंगे. जी हाँ, लेकिन लोन फिल्स फाइंडिंग द फर्स्ट वन. रॉफ्यूल फाइंडिंग वन फॉर हिमसेल्फ, नीड्स टू फाइंड वन मोर, विल गेट टेकन डाउन अनफॉर्चूनेटली. व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? Walks right into the bucket. यहाँ पे Bladestorm आ चुका है. Bladestorm से कदूम एक पिक निकालेंगे. Awike finds the trade, but it's going to be on Conquered. Oh no, Excali. He's the last one. आप उनको वहाँ पे उनका कोर को स्टेबलाइज करने के लिए रेक्सी चले जाते हैं, and then he gets taken down because of that, and that is around that myth one. I mean वहाँ पे it was not a buy-up round for them, but जो बकी के साथ कमाल दिखाया अलोन ने, I think everything fell from there. Everybody right walked into the Bucky and ate up those shells. They gobbled up shells from Alone, and उसके वजह से Alone felt really confident. उस confidence के वजह से बाकी सारे खिलाड़ी from mid started popping off, using their utilities, using their weaponry, whichever they had on hand, and round को convert करते हुए नजर आया माम्बा. जी हाँ बिल्कुल सही. नल का इस्तेमाल किया था उन्होंने वहाँ पे, बट आई डू बिलीव दे वांट टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. दिस टाइम इट माइट वर्क आउट, लेकिन जो एग्रेशन उन्होंने दिखाया था, आइडिया बराबर था, लेकिन उन्होंने टेलविंड का भी इस्तेमाल किया, अंदर गए, बट इट जस्ट डिड नॉट वर्क आउट. एट द एंड ऑफ द डे ब्लेडस्टॉर्म था ऑपोजिशन के पास, जिसकी वजह से वो ऊपर से पिक निकाल पाया. इनको स्टेबलाइज करे ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट टाइमिंग थोड़ा ऑफ हो गया था उनके साथ. बट नॉनदलेस आरवीके को फिलहाल इंतजार करना पड़ा. कॉनगैरेड ए शॉट को लॉक डाउन करते हुए. He's taking control. Position and presence भी यहाँ पे डिटेक्ट हो चुका है. ये दो खिलाड़ी ट्रीज की तरफ आने वाला है, but in the meantime Spike again making its way towards mid. बहुत बार mid execution देख रहे हैं हम, but they're like backing off after understanding कि maybe वहाँ पे alarm bot है या nano swarm है, and they're thinking of backing off. Odin आ चुका है mid पे. Odin से already Rexy का pick निकाल चुके हैं वो, and I think they're a little bit worried. Numbers का disadvantage. Ooh, on the crossover, Congarage spots RVK, and immediately एक और swing के लिए गए थे, खुद punish होते हुए नजर आएंगे. Shock dart उनका पीछे करते हुए नजर आ रहा था, but he's able to dodge. एक और shock dart अगर आएगा, maybe he could have been taken down. But right now recon के मदद से he's just checking in close quarters. But Spike अगर बात करेंगे, it's heading over towards B. जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बट for now we have Raffle pushing in. उन्होंने टैरेट को तोड़ेंगे जरूर, लेकिन अंडर डैश करना पड़ेगा उनको, but he's also blind from the paranoia. इंतजार करना पड़ेगा आरवी के on the perfect flank. यहाँ पे क्या आरवी के पिक निकाल पाएंगे? वन ऑफ लाइक की बात करें, होल्ड करे आराम से, लिनकॉन गैरेट यहाँ पे टेक डाउन हो सकते हैं. जी हाँ, आरवी के ने पिक निकाला जरूर, लेकिन टिलेन ने बहुत अच्छा ट्रेड निकाला. लोन फिल्स की बात करें, गेट्स वन, नीड्स टू फाइंड द सेकंड, वो ट्रेड हो जाएगा. वन ऑफ लाइन इन द मीनटाइम, होप बीइंग अ रॉक एंटीडोट ऑन द चार. नो वे, एंटीडोट, नो वे, मेकिंग अ मिस्टेक. एक्सपोज कर दिया उन्होंने अपने आप को. बहुत अनलकी, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट. अगर वो पीछे हटते, वो फिर भी स्पाइक शायद उठा पाते इफ मिथ वहां पे स्लिप अप करती तो. लेकिन एनिग्मा nonetheless trying really hard, but unfortunately it did not work out. देखिए एक पैसिव गेम खेला था. I mean especially WannaCry's position was just brilliant, क्योंकि उस पोजीशन में कोई उनको चेक नहीं कर रहे थे, because all the attention was on that Odin. जो पहला बुलेट उससे फायर हुआ, and then they heard that continuous bullets running out of that nozzle. I think सब उसके ऊपर ही ध्यान रख रहे थे. They wanted to take down Alone, and जी हाँ उन्होंने निकाला भी, but उस बीच WannaCry he was just taking players and swinging right and left with his weapon, and players को eliminate किया, and उसके बाद उनको मौका मिल गया. And now you can see Enigma finally calling a timeout, क्योंकि back to back 2 rounds उन्होंने जो गवाए है वो गलतियों के ऊपर था. Not just because Made in Thailand was just trying to overpower them. Made in Thailand वहाँ पे एक trap setup करके sneakily they were just waiting for them, and Enigma सीधा वहीं पे एंट्री लेते हुए नजर आया. पिछले राउंड में एक बकी के साथ वहां पे अलोन फिल्स करते हुए नजर आए, इस बार ओडिन के साथ करते हुए नजर आए. एंड आई थिंक इफ दे कीप गेटिंग इनटू दीज सिचुएशंस जहां पे एक वेपन के वजह से दे आर लूजिंग अ लॉट मोर प्लेयर्स, मुश्किल में आ सकते हैं माम्बा. मुश्किल में आ सकते हैं जी हाँ, लेकिन एनिग्मा I do believe अच्छा टाइम आउट उन्होंने कॉल किया, बट फिलहाल के लिए पैसा नहीं उनके पास. मे बी दे कुड हैव वेटेड फॉर वन मोर राउंड. यूजुअली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब देखिए यहाँ पे तो फिर भी टाइम आउट का इस्तेमाल हो रहा है, बट दिस इज बैक इन द डे लॉट ऑफ इयर्स अगो, जब टाइम आउट का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, तो इको राउंड जब होते थे वो बेस पे बैठ के दे यूज्ड टू यूज इट एज अ टाइम आउट. तो ये इट्स अ नाइस बिट फन फैक्ट ये कहूँगा मैं. बट रॉफल इन द मीन टाइम ब्लेडस्टॉर्म का इस्तेमाल करें, उनको आइडिया है वहाँ पे अलार्म बॉट रहता है. तो Kadum in the meantime उनको टेक डाउन करने क्लाउड बर्स्ट का इस्तेमाल जरूर किया था उन्होंने, लेकिन इट्स नॉट गोना वर्क आउट. डैश भी एक्टिवेट कर चुके हैं, ट्रेड नहीं आएगा यहाँ पे. फ्रैगमेंट
से डिले करेंगे सामने वाले पुश को. And Enigma is definitely looking on the backstab. Yep. I think Enigma gets go down. Skali का position ping हो चुका है. He's been tagged from the outdrawn, but अभी भी he's looking forward to saving himself. उनको कुछ नहीं मिला, but look at that. Spike कोई down. भी यहाँ पे किसी डायरेक्शन पे वो जा रहे थे. Just One the enemy right remaining. off mid. And एक एक करके players गिर चुके हैं. आखिरी खिलाड़ी Antidote with a sheriff. Team Ace. हाँ बात लेन क्लीनिंग अप आखिरी किल निकाला उन्होंने एंड फ्लॉलेस टीम में दोनों चीज़ें हुई वहाँ पे. बट एनिग्मा दिस टाइम राउंड लास्ट राउंड उन्होंने टाइम आउट लिया था, चीज़ें डिस्कस करी. अब ये राउंड बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाला है बिकॉज अगर यहाँ पे वो राउंड नहीं निकाल पाते दैट कुड बी ए मैसिव प्रॉब्लम. बट दैट वाज सो नैटी. क्रिस पे दिखाई देता कि ये प्रोफेशनल प्लेयर्स क्यों है. बट इन द मीनटाइम ऑल इन ऑल MITH की शुरुआत भले स्लो लेकिन they always manage to make a comeback. Exactly. I mean, देखिए हेवन पे भी ये हुआ था. They let Enigma gain rounds, get comfortable. और उसके बाद अपने खुद का जलवा दिखाते हुए नजर आते. They try to play passive, they try to give wrong information, जिसकी वजह से वो kind of बोलते हैं ना कॉर्नर चेक करने के लिए पीक करते हैं and then there's a surprise for them waiting right around the corner. थोड़ा स्लो यहाँ पे एनिग्मा की तरफ से खेला जा रहा है because they know this is a very heavy committed round. फुल बाई के साथ यहाँ पे आ चुका है. अगर एक और बार गलती करेंगे मिथ यहाँ पे लीड लेते हुए नजर आएंगे एंड उसके बाद इमीडिएटली दूसरा राउंड भी लेते हुए नजर आएंगे एंड स्कोर लाइन विल बिकम 5-3. 2 राउंड का लीड मिल सकता है. That's what they are worried about. वापस clear करने के लिए एक बेहतरीन flash immediately Rockfield jumping up getting into the he was knife out. I mean अगर switch करते तो मुश्किल हो सकता है. It's still making life difficult but AWK puts an end to him and finally Enigma finding their flow, finding the site and Spike planted. Listen, as good as the round was, this shouldn't have happened. I can imagine Rockfield's face being like, "Arey, bhai, ruko ek second." but no, the fun in games, right? It's fun in games, but at the same time, Rockfield being in a precarious position, लेकिन फिर भी उन्होंने kill निकाला because of all the chaos around him. यहाँ पे nano storm का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो peek ना कर पाए, but they can break it. No, they can't. Doesn't matter. वो आराम से peek कर लेंगे. यहाँ पे बात करें WannaFly के बारे में, उतरेंगे center box की तरफ. लेकिन बैक स्टैब ऊपर से आते हुए क्या WannaFly यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे? जी नहीं, रेक्सी पीछे से आएंगे, गोलियां चलाई जरूर है, नैनो फॉर्म भी डालेंगे, वहीं जितने आए और यहाँ WannaFly को What in the God's name was that? he switches to 180. Okay, WannaFly. यही हम बता रहे थे मामा, like WannaFly is a player who completely turns around. And मौका रख सकते थे. I mean 1v3 situation is not dual, but yeah, situation का हमने बात किया. अगर वहाँ पे थोड़ा वहाँ पे मुड़ जाता है Alone Fills, then maybe we would have seen this round completely in a different picture. क्योंकि WannaFly he wanted to make that clutch happen, but जी हाँ, swing out correct time पे हुआ and Enigma they're able to have their lead as well as their weaponry. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा. But Enigma coming back on top बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उनके लिए, उनकी मोमेंटम के लिए. And यहाँ पे Recon that खोल के बैठे कदूम को देखो कितना ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहे फिलहाल के लिए वो. एंड मिड कनेक्टर की तरफ अपनी ऑप खोल के बैठे हैं. पर AWK इन द मीनटाइम कमेंट नहीं करना चाहते वहाँ पे, वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन. लेकिन जो डिफॉल्ट इनका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. यहाँ पे रेक्स आते हैं अपनी टरेट का इस्तेमाल करके बीम इनको लॉक इन करते हैं. देन पूरा एरिया क्लियर करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे जाना है. दे गेट सम इन्फॉर्मेशन गिविंग. रिकॉन बात का इस्तेमाल करते हैं, बेट करते हैं हमेशा ताकि अगर उनको पीछे आना हो तो वो फिर भी वो कर पाए. बट AWK इन द मीनटाइम आराम से इंतजार करेंगे. टॉस भी अवेलेबल है. अब सवाल ये बनता है किस तरीके से अप्रोच करेंगे इस राउंड को. इज इट गोइंग टू बी अ बी फेक या फिर रेक्स पूरा लव करने वाला है? देखना जरूर पड़ेगा मामा. बट लुक एट दिस, दोनों टीम्स के पास चारों अल्टीमेट्स है एक्सेप्ट ऑन दोस जेट्स. सो इट माइट बी अ हेवी अल्टीमेट बेस्ड गेम प्ले, बट जिस पोजीशन पे वॉक इन करना चाहती है Enigma with the spike, it needs to be a lot more heavy in terms of ultimate as well as utility, as nobody is buying this pick. Lockdown जरूर आ चुका है, but they're still there. But आप देखिए Thomas Shadows को भी इस्तेमाल किया था, but that was just a fake being. कोई भी खिलाड़ी साइड से हटा नहीं है after that lockdown, and Con Garrett immediately capitalizes from threes. 2 players को eliminate करेंगे and immediately look at them, they're running away. उनको पता चल चुका है इस साइड में कोई मौका नहीं मिलने वाला है. And Rexy थोड़ा आगे जरूर गए थे, but now the time is lost. 10 seconds left. Second बचने वाला है and they were nowhere close to it. अगर हो सकता है कुछ डेप्थ Qeon फिक्स खुद ही होते हुए नजर आ रहा है. तीसरा Con Garrett निकालते हुए आखिरी खिलाड़ी, he's just at catwalk hiding.
यहाँ फिलहाल ये तो यही करते थे, छिपे रहेंगे, एंटीडोट सर्वाइव करेंगे, गन भी बचाएंगे अपने आप के लिए, बट 4-4 दोनों टीम के लिए वेरी क्लोज गेम मैन, दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई लाइक इट एज वेल, बिकॉज़ इट मेक्स फॉर अ गुड मैच, एंटरटेनमेंट वाली बहुत ज्यादा होती है, कास्ट करने में मजा आता है क्योंकि वन साइडेड अफेयर जब भी होता है बीच पर इट्स नॉट फन। नाल कमांड का इस्तेमाल हुआ था यहाँ पे सप्रेस करने के लिए, लेकिन कौन गैरेज जिस तरीके से 2 पिक्स निकाले, पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया था, एंड एंड ऑफ द डे थर्ड पिक निकाला स्कैली के ऊपर, आराम से बैठे कॉन्फिडेंस के साथ वो पीक कर रहे हैं, एंड आरबीके ऑन द शेरिफ, आर यू गोना सी द शेरिफ वांट्स टू डू समथिंग ओवर हियर, वो बैक स्टेप करेंगे, देखना ये बनता है, बट आई डू बिलीव ही कैन बी द डिफरेंशिएटर श्योर, बट हिज रेपुटेशन प्रीसीड्स हिम। यहाँ पे शेरिफ लेके वो पीक करेंगे जरूर, रॉ फ्यूल भी आगे जाने की कोशिश करें, उनको पता है अलार्म बॉट होता है यूजुअली यहाँ पे, क्लाउड बस का इस्तेमाल करके उसको रोक सकते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा आगे रखा हुआ है उस चीज को, एंड ऑपरेटर खोल के बैठे रहेंगे, जैसे ही मौका मिलेगा वो पिक निकालेंगे, जी हाँ आराम से अभी भी इंतजार कर रहे हैं, बता दें फॉल बैक की भी कर चुके हैं अंदर वो, एंटीडोट बीइंग सुपर एग्रेसिव विद हिज वैंडल, एंड यहाँ पे काफी अच्छा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया हुआ उन्होंने, दिस इज एग्जैक्टली व्हेन दे कैन मेक अ प्ले टुवर्ड ए शॉट, लेकिन एंटीडोट को टेक डाउन कर दिया जाएगा, अकेले क्लिक करके आई एम नॉट श्योर व्हाट द आईडिया वाज, लेकिन फ्रैगमेंट्स उनको डिले कर दिया जाएगा, रॉफ्यूल भी टेक डाउन हो जाएंगे, एंड दैट्स नॉट अनफॉर्चुनेट, आई डू बिलीव एंटीडोट को वहाँ पे थोड़ा सा और सपोर्ट मिलता तो कुछ और हो सकता था, लेकिन Rex, Excali, both of these players on a sheriff. What is going on over Excali? Rex दोनों picks निकालेंगे, दोनों headshots निकालेंगे, reducing it to a 2-3, and now it's anyone's round. एग्जैक्टली देखिए, अगर इस लौते प्लेयर को वॉर्नरफ्लाई को आइसोलेट करेंगे, वेर एबल टू टेक हिम डाउन, मौका मिल सकता है, बट स्पाइक को देखिए, पहले स्पाइक को रिकवर करना पड़ेगा, उसके बाद साइड के अंदर एंट्री लेने के लिए मौका ढूंढना पड़ेगा, एंड स्पाइक इज नोवेयर इन देयर हैंड्स, एंड अभी रेक्सी इज गोइंग इन, बट एडीएस के साथ कॉन गैरेट ही इज रेडी, क्रॉसओवर जरूर करेंगे, बट लुक एट रेक्सी, वन स्टे बुलेट इज एनफ टू टेक हिम डाउन, एक काली के हाथों ऑपरेटर आ चुका है, ही वाज क्रॉसिंग ओवर एंड फाइनली गेट्स दैट स्पाइक क्लोजर, एंड देखिए इस बीच में कॉन गैरेट एज वेल एज साथ में आते हैं, दे आर ऑन द बैकस्टैब, You're on the backstab, लेकिन देखिए एक्सकैली होल्ड करे बैकस्टैब को, यहाँ पे कितनी भी कोशिश कर ले, एक्सकैली नीड्स टू फॉल बैक, रेक्सी एक एचपी पे सर्वाइव करे, बैक साइड से ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ही आल्सो एग्रेस आउट, नेटुला के पास इंतजार करेंगे, पे एक और पिक निकालेंगे, ही नीड्स टू फॉल बैक, बट रेक्सी ऑन 1 HP, इज गोइंग टू गो ऑन द बैकस्टैब, या फिर एक्सकैली शेरिफ, ओह माय गॉड एक्सकैली, व्हाट अ मॉन्स्टर, what in the god's name was that round, Excali, Rex clutching this out. यहाँ पे I do believe आपको एक टाइम मिल सकता है, if they have it available, I'm not sure if they have one. What a round. What two geniuses. Two geniuses. oh yes, I mean जो पहले निकाला, उसके बाद देखिए वहीं पे क्विक रिएक्शन कर सकते थे, एंड रेक्स ऑल्सो 1 HP, अगर वो स्पाइक को रिकवर करने में वहां पे कामयाबी नहीं पाते, गिर जाते स्पाइक रिकवर करने के टाइम, would have been lost, and Enigma again making sure they retain the lead. अभी भी जाने के लिए 2 खिलाड़ी पुशिंग कर रहे हैं फ्रॉम बी मेन, रेक्सी ही इज द वन वेटिंग, बट पहले टरेट वो इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगा उसको कि खिलाड़ी आगे जरूर आ रहे हैं, रेक्सी विल डिसाइड टू स्विंग, अगर स्विंग करेंगे मुश्किल में आ सकता है, बट ही टॉप्स ऑन एनाकॉम एंड देन ही इज ट्राइंग टू पुश अप, यहां पे देखिए आरवीके ही स्विंग द पर्सन एंड नाउ ही वांट्स टू टेक हिम डाउन, बट लुक एट दिस, आरवीके को एक पिक जरूर मिलेगा, बट कॉन गैरेट इमीडिएटली वेटिंग हिम आउट, एंटीडोट को ऑपरेटर कॉन गैरेट निकालेगा, बट आउट अपना डिग्री के साथ एक पिक निकालेंगे, बट रेक्स से ही पुशेस इन एंड 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट करेंगे, बी साइड का पूरा कंट्रोल ले चुके हैं। जी हाँ, ये जो फेस है वो काफी ज्यादा शानदार था, it was wonderful to see this, but at the same time डिलेन की अगर हम बात करें फिलहाल के लिए पुश करते जाएंगे अंदर, एंटीडोट इज गोइंग टू ट्राई टू विन द कॉर्नर, लेकिन क्या फील आपको इतना he had been brilliant on the that stunts off, and अभी हमने देखा
फ्यूरी काउंटर भी हुआ पर the last match में I want to see Excalibur फर्स्ट लेन, उसके बाद शेरिफ का वो निकले। सोच समझ के खेलना पड़ेगा बेहतरीन मिला बट they did lose. setup खेल रहे, so this could also give them a little more information कि B-man शायद ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है यहाँ पे 0 पॉइंट का इस्तेमाल and we do have raw fuel moving in slowly. Dylan को distract Raptor positioning antidote तैनात है अपने ऑपरेटर के साथ कौन with the defender lockdown coming through. Raw fuel थोड़ा aggressive जाना चाहते हैं. He's just हो रहा है यहाँ पे. They have to be worried about it. Cosmic Divide के through वो bullets नहीं I'm not sure what went wrong, especially Excalibur की जो position थी वहाँ पे on a flight जो shot मारा था उन्होंने काफी ज़्यादा भाई देखने के लिए मौका मिल रहा है जैसे हम बात कर रहे थे पिछली बार नहीं था end of the execution of A or B, A main या B main जी हाँ बट कौन क्या एक पिक निकाल creeping and is going to get spotted. क्या किल निकाल पाएंगे उनको पीछे हटना पड़ेगा शायद वो पुश करे but it's not going to be easy. अटैकर किल जो आते हुए यहाँ पे लॉकडाउन आएगा बी साइड की तरफ लेकिन is this a fake? No, it's not a fake. स्पाइक मार की तरफ जा रहा है यहाँ पे उनको किल निकालना पड़ेगा. अगर स्पाइक वहाँ पे ड्रॉप होता है could be a massive problem. रॉफिल को टेक डाउन कर दिया गया लेकिन यहाँ पे फ्रैगमेंट का भी इस्तेमाल करेंगे. एक्सकैली रेक्स needs to go and needs to survive. यहाँ पे वॉल बैंक करेंगे ये देखने वाली बात होती है. अंदर आएगा फ्लैश लेकिन लोन फिल्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं. इस्तेमाल करेंगे एक्सकैली एक और किल निकाल दो. एक्सकैली बीइंग द एब्सोल्यूट मॉन्स्टर दैट ही इज इन दिस टाउन. किल्स निकाल दे अपनी टीम के लिए लेकिन कदूम अंदर आएंगे क्या प्लान स्टिक करेंगे जी नहीं प्लान स्टिक नहीं करना चाहते किल निकालना चाहते इस गोल गेट उनके पास बिल्कुल भी दैट इज सो अनफॉर्चुनेट. स्प्लिट सेकंड डिसीजंस यहाँ पे अगर शायद प्लान उन्होंने किया होता तो मे बी एनिग्मा वो राउंड निकाल पाती. एग्जैक्टली आई मीन आवी के थे वहां पे अगर वो प्लांट हो जाता देन मे बी ही कुड हैव डिफेंडेड. जी हाँ जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे इट वाज वेरी फियरफुल. आई मीन जो
the movement coming in from him, the first pick that he took on Rexy, and उसके बाद immediately वो और भी swing करना चाहते थे, and he was reading it right, but unfortunate वहाँ पे Enigma को वो round भी हारना पड़ा. But look at this Kadum, he was reading it right. अगर swing भी करते, अगर Excali plant भी कर लेते, he would have still found Excali, क्योंकि Excali animation में रह सकते थे. But I mean, ifs and busts and speculations हम सिर्फ कर सकते हैं, but अभी भी 6-6 का ये half होता हुआ नजर आ चुका है. And again, Myth not completely on the driver's seat. It is back and forth. आप देख सकते हो 2-3 राउंड यहाँ पे Enigma लेती हुई नजर आ रही है, उसी के बाद immediately 2 और राउंड यहाँ पे Myth लेती हुई नजर आ रही है. But Myth right now they are on the attacking half, जो बहुत पसंद है Enigma को to get a very advantage, I would say big difference on the attackers half. वो लेने के लिए बिल्कुल मौका ही नहीं मिला यहाँ पे Mamba. But on the other end, Myth will be right now on the attacking half. Hopefully ये 6 राउंड जो Enigma ने लिया है, it is enough for them to actually defend the entire second half. अगर defend नहीं कर पाएंगे, we already spoke about it, Myth already have a series point under their belt. Qeon, they already have a series point under their belt, but at the same time, देखिए एक चीज मैं कहूँगा, it's still 6-6. Ascent, I personally believe it's a very balanced map. So it all comes down to how Enigma plays the defense, and जिस तरीके से if the first half is anything to go by, they're looking fairly strong. मिड गेम में हमेशा हमने देखा, फर्स्ट मैच में भी देखा था कि मिथ थोड़ा सा कंट्रोल वापस गेन करती है, लेकिन इस बार देखिए एक्सकाली, मैं बात कर रहा था उनके असिस्ट के बारे में, जो KSC परसेंटेज होता है वो इस बार बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है. ही इज प्लेइंग वेल विथ हिज रोल. किल्स तो निकाल ही रहे. रॉ फ्यूल श्योर थोड़े से मोमेंटम की जरूरत है उनको. अगर उनको थोड़ा सा भी मोमेंटम मिला, यहाँ पे थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस मिला, दे गोना लॉक दिस डाउन. I agree with you. I mean, Rafael just needs those couple frags, and especially जो confidence, eco in terms of the pistol rounds जब मिलता है immediately anti-eco में, अगर वहाँ पे वो pistol round में उनको kills मिलता गया, then it's going to be very difficult to stop him, because वो तुरंत pistol round के बाद he'll be looking forward to getting that operator out, and उसके बाद मुश्किल जरूर हो सकता है. कदम के साथ भी operator देखने के लिए मौका मिला. I mean, it was not completely dominating, but जी हाँ, जब भी वो operator शुरुआत हो रहा था, it was getting them, I would say rounds. But यहाँ पे देखिए mid heavy hold coming through from Enigma. 4 खिलाड़ी तैनात है मिड की तरफ से, and RVK is just holding from trees. Rocky का position पता था, उसके Prip is rushing into this trap, and it's just for Myth. उनकी मौत कहाँ पे भी मैं बताता हूँ. जो रिकॉन बोल्ड उन्होंने मिस किया वहाँ पे, that is where the round ended itself. And this shows homework. ये दिखाता है कि उनका जो पूरा का पूरा अप्रोच रहा है इस टूर्नामेंट में आते हुए, जिस तरीके से उनके कोच ने रिसर्च करी है, जिस तरीके से उनकी टीम ने बैठ के वर्ड्स देखे, उनको पता था मिथ को क्या करना पसंद है, उसी तरीके से उन्होंने क्रॉस फायर खेला ना. वेरी हेवी मिड सेटअप एज वेल, व्हिच टर्न आउट टू बी मीट ग्राइंडर टुवर्ड्स मिड. कोई मौका ही नहीं मिला. Dylan is trying to delay things. He gets the second. He's going in for the third, but दूसरा शॉट था उसके साथ raw fuel. I mean, if he pulled off 2 more, I would have kind of given up. 5 HP के साथ थे raw fuel. He could have lost it, and then again Dylan isolate कर सकते थे, but how? I mean, he just had a classic over there, Mamba. सिर्फ और सिर्फ क्लासिक के साथ अगर इतना डैमेज कर सकते हैं एक लौते खिलाड़ी, who was in a situation where she should have lost the round long time. But then again, let's not underestimate जो राइट क्लिक होता है बर्स्ट. आप जब भी आप इस्तेमाल करते तो इट्स अ लॉट डैमेज. अभी तो फिर भी गन को थोड़ा सा नर्व किया गया. अर्ली पैचेस की अगर आप बात करें, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक का स्पैम कर सकते थे पहले, which was insane. एंड इसकी वजह से आप और भी ज़्यादा डैमेज दे पाते. जो डैमेज पर सेकंड होता था वो बहुत ज़्यादा हाई होता था. बट ये देखे यहाँ पे डिलेन जस्ट टॉइंग अराउंड, वो लोन फिल्स के अंदर पुश करेंगे. एक्सकैली इन द मीन टाइम वन फ्लाई के ऊपर निकालेंगे, एंड Enigma is looking in control. They are absolutely looking in control. Yeah, pistol round बहुत crucial होता है in terms of confidence, and I think it's getting back for them. But yeah, इसके बाद immediately उनको 2 और round अगर convert करेंगे, we might see a better second half coming in from them. वापस Alone Fells is just looking forward to boosting himself on the wall and trying to find a pick, but मौका ही नहीं दे रहा है. हर वक्त वो one way smoke की वजह से छुपते हुए नजर आ रहे हैं. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा. बट यार ब्लास्टिक्स की अगर हम बात करें, स्किन at least it's my personal favorite. Oh, antidote through the smoke by the way. But I do believe this is Enigma's round, no doubt about that. Reveal जरूर होंगे antidote, but I don't think he has anything to worry about. Shadow step भी available है अगर उनको पीछे push करना है तो. Oh, Rex with headshot onto Kadum. Alone Fells भी take down हो जाएंगे, but this is a Blastics versus RG. एक कौन सी select करेंगे आप? Blastics. Blastics.
high five. I think that's the right choice. That's the right choice. Sure, RG is nice, but Blastix, it just feels different, you know? Yeah, I mean, it just makes the game a little bit even more fun. I mean, randomly भी कभी-कभी बार हम जो walls पे spray करते हुए नजर आता है just to see that animation. But yes, in the game right as of now, दोनों teams एक दूसरे को take down करना चाहते हैं, but 2 राउंड पे सिर्फ टेक डाउन किया है यहाँ पे एनिग्मा ने. they've just gotten 2 राउंड लीड एंड लीड देखिए अभी तक जो एनिग्मा खेलती हुई नजर आ रही है ऑन असेंट they've not given the lead to myth. हर वक्त वो लीड अपने पास रखे. इट जस्ट गॉट इक्वलाइज्ड. यहाँ पे देखिए एक फोर्स अग्रेसिव राउंड लेने के लिए मौका ढूंढ रहे थे बट इट वाज अ वेट एंड होल्ड. जैसे हमने देखा था पिस्टल राउंड में जैसे एनिग्मा ने रीड किया था यहाँ पे मिथ ने रीड किया था कि कहीं ना कहीं अग्रेसिव आएगा. लुक एट दिस रीड स्प्रेइंग थ्रू स्मोक. एंटीडोट ने एक बार किया था, इस बार एंटीडोट के ऊपर कदूम करते हुए नजर आएंगे. कदूम ही इज नॉट स्टॉपिंग, फाइंड्स द थर्ड. आखिरी खिलाड़ी भी वहां पे गिर सकते थे कदूम के हाथों अगर वो बी साइड की तरफ रह सकते थे बट रेक्सी इज ऑल द वे एट ए. जी हाँ, I mean, this round is fairly simple. It's done and dusted, but how much do you think are the chances कि अगले राउंड में हमें रॉ फ्यूल एग्रेशन दिखाते हुए मिले शायद ऑपरेटर के साथ भी अगर उनके पास पैसे हो तो? I think it's highly possible. Raw Fuel likes to go aggressive and उनके teammates उनको कहीं ना कहीं सेटअप भी करते हुए नजर आ रहे हैं. जो हम स्लैश एंड डैश गेम प्ले बोलते हैं, I think एक्सकाली के साथ टैग अलॉन्ग करते हुए नजर आ सकते हैं अगले राउंड में. बट जी हाँ, it all depends on the economy. क्या वो ऑपरेटर आएगा? जी हाँ, एंड उसके साथ I saw that sneaky Odin coming through from Avi. I don't know why उन्होंने वहाँ पे स्विच अप किया बाइक को. I would have loved it. एटलीस्ट एक राउंड में हमने देखा था अलोन के हाथों ओडिन था. उसके बाद I would say it would have been justified, right, मामा कि एक बार एटलीस्ट ओडिन डिफेंसिव हाफ में देखे. Yeah, justified होता ज़रूर, but यहाँ पे I think it's what is more important. By the Odin उन्होंने refund कर दिया. यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ ऑपरेटर का पिक and that's exactly what we're going to see. आर्मी के थोड़ा एग्रेशन ज़रूर दिखा रहे हैं but कंटेन्ड एग्रेशन है, कैलकुलेटेड एग्रेशन दिखा रहे हो. लेकिन नेबुला आएगा, इसकी वजह से शायद उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. डैश भी एक्टिवेट हो कर चुके, लेकिन इट आल्सो डिपेंड्स ऑन इफ दे एक्टिवेट द राइट डैश. ही कैन गो एंड यस इंडीड क्लाउड बस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी भी इंतजार करते हो. फ्लैश आया जरूर है, लेकिन क्या वो पिक निकाल पाएंगे? उनको पीछे हटने की जरूरत है, बट ही नीड्स टू सर्वाइव एज वेल. यहाँ पे बहुत मुश्किल पोजीशन में दरवाजा बंद जरूर किया जाएगा. इज इट गोइंग टू बी एबल टू फॉल बैक? तो फाइंड आउट. लोन फिल्स यहाँ पे आउट ड्रोन इस्तेमाल कर रहे थे. ए शॉट की तरफ एक्सकैली को डाउन कर दिया गया है. कॉन गैरी ने पिक निकाला, बट एक और पिक निकालने की कोशिश. RVK in the meantime trading, replying back. लेकिन वो जो पिक था बहुत ज्यादा crucial. Reading the game like a book. Yes. And अच्छा लगता है जब हम भी सोचते कि नहीं, this is something which is possible. And Raw just going out there with the operator. Aggression के साथ पहला पिक निकाला उन्होंने. I mean, 2 players वहाँ पे लाइन अप हो सकते थे, but still getting the first and then looking forward to the second. But जी हाँ, जब बैक ऑफ करना था किया जरूर. इंतजार जरूर हो रहा है. It's still going to be a 3-4 disadvantage for Myth. Antidote swing out जरूर देखेंगे, but he does not get any times of connection. Raw को वो कॉल जरूर आ चुका है, so he'll be holding one of the lanes, but वो भी confused है कि कहाँ hold है. Finally Antidote giving him the call, but losing his opportunity, जिसके वजह से Wannafly he gets a chance to swing out. Rexy वहाँ पे immediately trade जरूर करेंगे, but Rexy का position पता चल चुका है. They wanted to eliminate Rexy, but he held his ground to defend the spawn and 3 players को eliminate करते हुए Enigma back in groove. लीड वापस उनके हाथों में रहने वाला है. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. एंड इट वाज वेरी पिवटल. बट अब देखिए यहाँ पे जो राउंड होने वाला है, दिस कुड बी एनीवन्स राउंड, स्पेशली गिवन द फैक्ट दैट Myth is going to try and do something cheeky. अगर वो करती है, then again the favor will swing back a little bit, just the tiniest of margins back into Myth's favor, even though उनके पास rounds ज़्यादा नहीं है. But अगर आप credits की तरफ नजर करेंगे या उसके ऊपर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना crucial round है Enigma के लिए. But even more so for Myth, because अगर Enigma ये round जीते, they might be able to close out the game. But यहाँ पे raw fuel spot हो जाएंगे. Unfortunately, perfect position में थे वहाँ पे kill निकालने के लिए. दरवाजा बंद करेंगे. And A shot की तरफ आउट रोड आ जरूर रहा है. शॉट डार्ट जाएगा, which is going to give some damage, लेकिन काउंटर आउट शोन आते हुए यहाँ पे. एंड एक प्लेयर को मार्क जरूर कर दिया जाएगा. He has one more shot dart to work with, लेकिन गलती नहीं करेंगे. He's not going to be baited over there. डैमेज नहीं होगा, बट धीरे धीरे शॉट दूर अंदर पुश कर सकते हैं, लेकिन रेक्स को देके पीक करेंगे जरूर. RVK trying to stay alive. रेक्स का पहला खिलाते हुए, लेकिन परफेक्ट क्रॉस फायर वहां पे. रेक्स ही लॉकडाउन लगाएंगे, इंतजार करेंगे उनकी टीममेट्स का आने के लिए. एंड व्हाट अ होल्ड, such a perfect hold onto A shot, textbook crossfire, and Raw Fuel is not going to miss those. Those are sitters for him. वो मिस नहीं करेंगे ये शॉट्स को.
आखिरी दो खिलाड़ी यहाँ पे मिड की तरफ से। आई मीन स्पाइक उनके हाथों में अभी भी है, बट दे डोंट हैव द नंबर्स टू प्ले अराउंड विद। एक्सकाली को स्पॉट जरूर किया था वॉनफ्लाई ने, उनके हाथों में स्पाइक भी जरूर है, बट नाउ इट्स गोना बी रॉ फ्यूल रिपोजिशनिंग। बट लुक एट द पोजीशन जो कॉन गैरेट गेन कर चुके हैं, नोबडी इज रीडिंग दिस। रॉ फ्यूल ही चेक्स, वो स्विच करेंगे इमीडिएटली। स्पॉट्स गुड सी भी वॉनफ्लाई भी वहां पे बी मेन से पीक करते हैं एंड ही स्पॉट्स रॉ फ्यूल looking in the wrong direction, but it's a good trade. यहाँ पे Antidote ultimate के साथ वापस आ चुके हैं. He wanted to make sure he helps his teammate and eliminate करेंगे उस spike carrier को, and finally double digits Enigma के नाम पे आता हुआ, and they're right now looking way better than Haven. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा था, लुकिंग वे बेटर देन हेवन। मैंने कहा था कि ये राउंड बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। एनिग्मा ने ये राउंड निकाला। अब क्रेडिट्स देखिए, मिड्स के पास भी इतने क्रेडिट्स नहीं है, तो मोमेंटम की जब बात आती है, क्रूशल राउंड्स की बात आती है लूसिफर, देयर आर सर्टन राउंड्स जो जीतना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। आप बीच के राउंड जीते ना जीते उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो राउंड जहाँ पे आप उनकी इकोनॉमी ब्रेक कर सकते हो, वो राउंड अगर आप जीतते हैं, स्पेशली ये राउंड के लिए आसान होने वाला है, बट अगर 12th राउंड वो जीतते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनके लिए 12th राउंड निकाल के जाते हैं, एनिग्मा इज विनिंग दिस गेम, नो डाउट अबाउट दैट। एंड यहाँ पे मिथ सोच रहे होंगे व्हाट कैन दे डू। श्योर, अल्टीमेट्स रेडी है उनके पास। अब बात करें ब्लेड स्टॉर्म के बारे में, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। दिस राउंड इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर एनिग्मा टू प्ले सेफ। अगर वो इनिशियल पिक्स देते हैं ब्लेड स्टॉर्म के साथ, तो आपको पता है कि एंटी इको में क्या होता है। इको राउंड में सामने वाली टीम आपको अगर ब्लेड स्टॉर्म से आप अर्ली पिक देते हैं, स्पेशली समबडी लाइक लेट्स से रॉ फ्यूल, देन यू आर इन ट्रबल। यू आर इन ट्रबल बिकॉज रॉ फ्यूल ऑप कर रहे हैं, एंड अगर मिड पे वो अपना पिक दे बैठते हैं, देन इट्स अ मैसिव प्रॉब्लम। यस, आई मीन सोच समझ के वहाँ पे खेलना पड़ेगा। आई मीन वी नो राइट, कदूम पिछले बार भी कर चुके हैं, इस बार भी कर चुके हैं सेंट पे ही विद दैट ब्लेड स्टॉर्म, सो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। बट जी हाँ, रॉफिल के हाथ भी वो ब्लेड स्टॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है। ही जस्ट नीड्स टू फाइंड द फर्स्ट ओपनिंग फ्रैग, एंड वो लग रहा है कि सेटअप है तैयार। दे आर लुकिंग गोइंग एंड पीकिंग फॉर एन ए अग्रेसिव हिट, बट नाइफ इमीडिएटली डिस्ट्रॉय होता हुआ। वो ब्लेड स्टॉर्म अभी भी एक्टिव है कदम की तरफ से। दे जस्ट नीड द टाइमिंग, एंड आल्ड्रोन जरूर आएगा इमीडिएटली, वहाँ पे डिनाई किया जाएगा, बट इट वाज विद द ऑपरेटर, जिसकी वजह से रॉफिल फंस सकते थे, बट साथ लेते हुए एक्सकाली ही मेक्स श्योर कदम फॉल्स राइट इन हिज पाथ। एंड जी हाँ, बाकी सारे खिलाड़ी को मौका भी नहीं दिया ए में एंट्री लेने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, बट फॉर नाउ कदूम इज गोना गेट टेकन डाउन। देखिए, जो द बिगेस्ट थ्रेट हैज ऑलरेडी बीन टेकन डाउन। बाकी सारे प्लेयर्स जी हाँ इम्पैक्ट क्रिएट जरूर कर सकते हैं, बट दैट्स ओनली इफ एनिग्मा मेक्स अ मिस्टेक, जो मुझे नहीं लगता होगा। यहाँ पे रॉ फ्यूल के पास एचपी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट इज फाइन। उनके पास ऑपरेटर है, एक क्लिक करने की जरूरत है उनको, एंड दैट्स अबाउट इट। मूवमेंट टुवर्ड्स द लेन, यहाँ पे टैरेट है जो थोड़ा डैमेज जरूर देगा कॉन गैरेट, लाइक नॉट इन थोड़ा, इट्स टेकिंग अ मैसिव चंक। यहाँ पे रिकॉन की वजह से इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको मिलने वाला है, इट्स इनक्रेडिबल। वीडियो पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश। एक्सकाली इज नॉट गोइंग टू फॉल फॉर दैट फेक। वॉनफ्लाई को टेक डाउन कर दिया जाएगा, एंड एनिग्मा इज लुकिंग इन कंट्रोल ऑफ दिस वन लूसिफर। देखिए, हर एक एंगल को चेक किया जा रहा है। एक्सकाली इज क्लियरिंग ऑफ ए मैन, एंड उसी बीच रॉफ्यूल जस्ट गोस टू चेक मिड। ही इज वन द प्लेयर, उनको टेक डाउन करेंगे। एक्सकाली भी जैसे हम बात करते हैं, मैन ऑलरेडी पुश कर चुके थे, ही हैड कम क्लोज टू अटैक हिज स्पॉन, ही हैज अ 3K, एंड आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे alone fills position already, and presence भी detect हो चुका है। Now they're looking for swinging on to him. Position पता है, they're looking for picking up a fight, but they want to make sure कि वो शेरिफ के हाथों पीछे नहीं जाना चाहते हैं। They wanted to make sure alone fills को ही वहाँ पे eliminate किया जाए, and now Enigma on 11-7, एक और राउंड दूर यहाँ पे मैप पॉइंट की तरफ से, एंड जी हाँ, इसको इक्वलाइज करने के इस सीरीज को। जी हाँ, बट एक्सकाली जिस तरीके से खेल रहे, देखिए इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर। आप देखिए, फुल 180 स्विच हुआ है यहाँ पे, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम, ट्रस्ट मी। जिस तरीके का कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया इस मैच के अंदर, किल्स भी है उनके पास, असिस्ट भी है, ही इज आल्सो टॉप फ्रैगिंग फॉर द टीम। मैंने कहा था लास्ट मैच में, ये प्लेयर के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मल्टीपल ओकेजन, एंड एग्जैक्टली वही कर रहे फिलहाल ये राउंड। ऑफ कोर्स अगर एनिग्मा निकाल दिया, देन द गेम इज डन। और एक्सकाली वंस अगेन इज गोइंग इन। देखिए, उन्होंने जरूर अल्टीमेट्स के साथ एंट्री लेने के लिए मौका ढूंढा, एंड एंट्री लेने के लिए मौका भी मिला, बट लुक एट द बैक स्टैप, ऑलरेडी नंबर का एडवांटेज यहाँ पे ले चुके हैं। एक्सकाली ऑल्सो हैड यूज्ड हिज अल्टीमेट, बट अभी देखिए दोनों प्लेयर्स एंटीडोट एज वेल एज एक्सकाली साथ में खेलते हुए नजर आया। स्पाइक प्लांट हो चुका है, कॉस्मिक डिवाइड नो मोर। पिछली बार की तरह कॉस्मिक डिवाइड के साथ कुछ आई वुड से स्नीकी प्ले एंड लाइक 100 IQ 1000 IQ प्ले नहीं कर सकते, अभी जा चुका है। नाउ दे हैव टू रिलाई ऑन दैट पोस्ट एंड ट्राई टू होल्ड थिंग्स ऑफ। अल्टीमेट का इस्तेमाल हंटर फ्यूरी को डॉज करते हुए नजर आ रहा है, बट रॉफ्यूल का प्ले एक्टिवेट हो चुका है। आखिरी प्ले कनेक्ट नहीं कर पाया, बट अरुण फिल्स अपने हंटर फ्यूरी के साथ एक विकेट निकाले, बट इट बिकम्स
आखिरी खिलाड़ी रहने वाला है एक्सकाली। ही इमीडिएटली ट्रेड्स ऑन रेक्सी। वहां पे रेक्सी सिर्फ स्प्रे कर रहे थे, वांटेड टू बेट आउट द प्लेयर हु वाज हाइडिंग इन द बैक साइड। एंड यहाँ पे मैप पॉइंट पे आता हुआ एनिग्मा गेमिंग। Enigma, it very well could be 13-7। मैंने कहा था 2 राउंड बहुत ज़्यादा पिवटल है। अभी भी देखिए कितने क्रेडिट्स है मेड इन थाईलैंड के पास। एंड एनिग्मा, इनका जो मैप पिक था, they didn't just play well, they're dominating on this map। यही एक और राउंड के लिए उनको करके दिखाना है। If they manage to pull this off, then they're still in the game। लोअर ब्रैकेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। एंड ऑफ कोर्स जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी एक्साइटमेंट बरकरार रहेगी, बिकॉज लुक we're all hoping Enigma, at least the Indian fans are hoping Enigma सीधा ऊपर अपर ब्रैकेट से ही वो आगे क्वालिफाई करे। और in the meantime काफी स्पेशल लाइन I'm assuming, but the shock out coming in, Kadum को थोड़ा डैमेज जरूर दिया जाएगा। and he's trying to one sneak in, but RVK नेबुला के पीछे इंतजार करेंगे। सवाल ये कौन सी टीम पहला पिक निकालती है यहाँ पे, देखना जरूर पड़ेगा। फर्स्ट पिक व्हिच कैन इमीडिएटली चेंज द पेस ऑफ द राउंड। जरूर मिड पे रहेगा, बट शॉट आउट लाइनअप कमिंग इन फ्रॉम आरवीके। आई एम जस्ट लविंग दिस जो अडैप्टेशन आरवीके सोआ पे दिखाया ना मांबा, इट्स जस्ट ब्रिलियंट। ही हैज सो मेनी लाइनअप्स एंड कभी-कभी बार हम वी कंप्लीटली फॉरगेट द गेम एंड वी जस्ट लुक एट आरवीके's लाइनअप्स। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, बट आई एम नॉट श्योर उन्होंने अगर प्लेयर्स को लेफ्ट राइट पे स्पॉट किया है। अगर नहीं किया है, दैट कुड बी मैसिव ब्रीच इन सिक्योरिटी टुवर्ड्स मिड, बिकॉज विदाउट दैट इन्फॉर्मेशन उतने प्लेयर्स को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अभी फिलहाल ये जंप स्पॉट कर रहे हैं यहाँ, बट अलार्म बॉट फूट चुका है। यहाँ पे क्या रिकॉन डार्ट अवेलेबल है, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जी हाँ, रिकॉन डार्ट अवेलेबल जरूर है, बट प्लेयर्स पीछे हटते हुए डार्क कवर भी आ चुका है। एंड स्नीकिंग अप, लेट मी फाइंड अ पिक और बस का इस्तेमाल करके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। एक कैली भी इंतजार कर रहे हैं, लॉकडाउन भी आते रहेगा, बट इन द मीन टाइम Kadum पुश करेंगे किगार फॉर ही विल बी टेक एक्सक्लूसिव निकाला जो ब्लेंड देखिए बहुत फ्लैश आते हुए, लेकिन एक कैली नीड टू पीक अराउंड otherwise it's going to be in trouble। Can't get it and Dylan in the meantime finding 2 picks for himself। 3-4 सिचुएशन में यहाँ पे वाटर फ्लैग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ, रेक्सी के ऊपर किल निकाला जरूर है। दिस वाज Enigma's round to lose more than Mid's round to win। Spike planted। Last player I don't standing। know what happened over there and एक करके players eliminate होते हैं। Bob were trying to make things work, did get one, but 2 players साथ में swing करते हुए first and second lane से they make it even a little bit harder and also a little bit delaying things कि Enigma Gaming यहीं पे close out ना करे। But देखिए Enigma जो back to back round जीती है उसकी वजह से वापस एक और बाई करने के लिए मौका जरूर रहेगा। But this was just a brilliant read। इस read के वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जब लॉकडाउन आएगा they'll be using the fragment and then they'll be able to capitalize। But जी हाँ, उस fragment को इस्तेमाल किया, then they still had the numbers under control। But जब वो push आया साथ में coming in from a team made in Thailand, तब सब कुछ जाके बिखर गया from Enigma Gaming and they left had just 2 players surviving। Flash आएगा to go in and get A main control मिलेगा, nobody going in aggressive and the Qeon also giving them no information to gain। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पे आरबी को वो देखिए परफेक्ट टाइमिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। जैसे अंदर पुश करेंगे रिकॉन बोल का इस्तेमाल करेंगे, मे बी वो एक किल निकाल पाए स्पैम करके, लेकिन क्या वो होगा, फिलहाल के इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे दिस इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मिथ टू गो इन फॉर अ कॉन्टैक्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की स्ट्रैटेजी है। इट्स इनक्रेडिबली हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड, बट आई डू बिलीव यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी आता है, बिकॉज टैरेट भी लगा हुआ है, तो वो कॉन्टैक्ट लेके लिए अगर जाते भी है देन इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। लेकिन आउट जोन का इस्तेमाल करेंगे, इंतजार करें और रिकॉन डार्ट का, जैसे ही रिकॉन डार्ट आएगा देन दे स्टार्ट मूविंग इन। अब यहाँ पे रिकॉन डार्ट आ चुका है, बट ये देखिए Nexi, away shot, fuel holding me long, and Nal command का इस्तेमाल करके जेट भी अंदर आएगा जरूर। Nexi needs to stay alive, he could be the difference maker over there। बात करके धूम के बारे में खोलिए, खिलाएंगे जरूर, but he's going to get taken down। RVK finding one for himself, it is still in the favor of mid, लेकिन RVK एक और किल निकाल दो, ट्रेड हो जाएंगे जरूर। Is this going to be a 1 versus 3? जी हाँ, Scanning needs to pull it off, more than capable of pulling it off। देखेंगे जरूर यहाँ पे कैसे खेलते हुए नजर आएंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल टू क्लोज दिस राउंड। आखिरी खिलाड़ी है एक्सकाली, आई मीन इट्स लुकिंग अ लिटिल बिट वीक राइट नाउ पिछले राउंड की तरह भी, बट एक्सकाली ब्रिंग्स इट टू 1v1 सिचुएशन, बट कॉन गैरेट इमीडिएटली उसको एलिमिनेट करते हुए नजर आएंगे। ही ब्रिंग्स एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। ये देखिए बैक एंड फोर्थ जा रहा है यहाँ पे मांबा, एंड आई एम राइट नाउ ऑन माय टिप टोज। आई मीन सीट के एज पे आ चुका हूँ मैं कि ये समझ नहीं आ रहा है कि मिथ आर दे मेकिंग अ कमबैक रियली आफ्टर एनिग्मा रीचिंग टू मैप पॉइंट। I mean, it's more than possible. We've seen how Enigma has struggled, especially to close out games, right? हमने ये देखा हुआ है, so it's nothing new to them. But
let's not be too harsh on them. They're still close. They played like champions, and अभी भी उनके पास समय है. शायद एक round reset की उनको जरूरत पड़ सकती है, and that's exactly why there's a timeout which has been called in. ऐसा उनके पास है. They could choose to let this round slide and let the opposition build up an economy, but it's not going to make a difference because Enigma को सिर्फ एक round की जरूरत है यहाँ पे, and अगर वो एक round निकाल सकते हैं, then they'll push it to game number 3. I agree with you. एक round सिर्फ चाहिए. I mean, it happens. I mean, best of the best teams map point में आ जाती है, but उसके बाद close out करने के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर face करती है, and that's what is happening. And Enigma calling the timeout at the right time to make sure कि देखिए इसके बाद और rounds नहीं देना चाहिए, because once the double digits come in, मामा हमें भी पता है कहीं ना कहीं वो comeback seems even more closer possible and overtime तक जा सकता है. And when it goes to overtime, it is a 50-50 chance, and जो भी वहाँ पे immediate control दिखाते हैं वो जीतते हुए नजर आ सकते हैं. So I think this timeout is going to be very crucial. Enigma इसके बाद immediate close out करना जरूर चाहिए, but weapons कहीं ना कहीं उनको इतना ज़्यादा फायदा नहीं दे रहा. आप देख सकते हो शेरिफ रॉफ्यूल के हाथों and Marshall. On the other hand, अगर बात करेंगे मिथ का, they have everything that is looking good for them in terms of weapons. जी हाँ, but Xcali is going to try and push him. Can he find those picks? Finds one, finds the second, needs to nail the third, लेकिन वो take down हो जाएगा. Enigma का aggression काम आएगा यहाँ पे. कौन गैरेज की बात करें, स्मोक के थ्रू फायर करेंगे जरूर, but Antidote needs to stay alive. यहाँ पे उनके पास man advantage है. They don't need to throw this away. Antidote के ऊपर पूरा का पूरा राउंड होने वाला. अगर एंटी यहाँ पे टेक डाउन होते हैं, then that's going to be a massive problem. Backup आ जरूर रहा है, लेकिन draw fuel is being a little too aggressive, at least for my comfort. यहाँ पे वो पीछे हटेंगे जरूर, लेकिन Xcali फ्री फ्लोइंग गेम प्ले की मैं बात कर रहा था, कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था, मोमेंटम की मैं बात कर रहा था, एंड यहाँ पे शोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज केपेबल ऑफ. अ सुपरस्टार who's always been there अपनी टीम के लिए परफॉर्म करते हुए. Every single player on Enigma has been stepping up, but it's great to see Antidote again playing really aggressive. यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं 50 seconds अभी भी बाकी क्लॉक के ऊपर. But Myth is waiting it out towards being in. The question is Antidote going to be able to find the pick? Rocktool being aggressive, but it's going to get taken down. That is unfortunate. Paranoia का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे, if Antidote gets taken down, that could be a massive problem. RBK is going to use Hunter's Fury, लेकिन Andy needs to fall back. If he gets taken, finds one, needs to find the second as well. We get traded out. 30 seconds left. 2v2 यहाँ पे. And advantage जरूर था, but this could go either way. Recon not available जरूर. And now we get two players who can pull this off. यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश करेंगे. उनके पास 2 नैनो स्वॉर्म्स भी अवेलेबल है. RVK does have the recon board. Wanderfly का पिक निकालना जरूर पड़ेगा, लेकिन क्या इंतजार करेंगे. जी हाँ, अभी भी playing patiently. They need to find out दोनों प्लेयर्स कहाँ पे. recon dart का इस्तेमाल जरूर करेंगे. बैक साइड को क्लियर करने की कोशिश. पहला पिक निकालेंगे, दूसरा निकाल पाएंगे. जी हाँ, Enigma closing it out. 13-9, pushing it to game number 3, and Enigma. What a way to close it out. What a way. Sure, आखिर में लगा था कि शायद Made in Thailand might be able to make a comeback over here. Lekin Enigma is not going to let that happen, keeping their hopes and dreams alive. Push it to game number 3. Exactly, we are jumping into bind इसके immediate बाद, but माम्बा क्या ही शानदार मैचअप देखने के लिए मौका मिला. We did talk about it कि जब एक टीम पिक करती है अपना मैप, they look forward to closing it, and वही होता हुआ नजर आया. But it came a little bit too closer to comfort वहाँ पे. जी हाँ, जो आखिरी राउंड भी था जहाँ पे यहाँ पे Enigma close out की, they had that nerve, right? जहाँ पे वो भी freak out कर रहे थे कि all of a sudden we are back to a 2v2 situation, and उसी time पे they slowed the game down, जिसके वजह से they were able to calm themselves down, because we always know 2v2 situation is an even-Steven situation, and उसको कहीं ना कहीं immediately capitalize करते हुए नजर आया, and they did close it out in a brilliant fashion. I mean, it got too close to comfort. Everybody would accept that, but जब close out करने के लिए मौका मिला, and when they understood, जैसे आप बात करते हैं ना, that impactful round or those crucial rounds, Enigma को पता था अगर इस round में close out नहीं करेंगे, then it'll be double digits, and then maybe Myth can push it up to the overtime. So they wanted to make sure that does not happen, and they closed it out. Mamba, brilliant game coming in from Enigma to immediately counter that victory. So we are at a 1-1, and इसके बाद चलेंगे यहाँ पे bind, which is going to be the decider and can swing either way. Here's the thing. It might sound wild, but I've seen this happen. Xcali on Yoru. You think it can happen? Countering you in Neon. It can again. Look, here's the thing. Not right? देखिए ये build-up करेंगे जरूर, but let's rewind back a bit to this map. मैंने बात करी थी Xcali के बारे में, not having a lot of impact in game number 1. लेकिन game number 2, he was obliterating the opposition. जिस तरीके से उन्होंने खेला, is proving his worth. And is proving his skill, is proving his talent. And made in Thailand, ko single digit. Let's not forget, even though it was too close to comfort, single digit is still single digit.
जो डिफेंसिव हाफ स्पेशली देखने के लिए मौका मिला, इट वाज जस्ट टू ब्रिलियंट माम्बा. आई थिंक एनिग्मा जस्ट डिफेंसिव हाफ दिखाए. आई एम रियली लविंग इट. लेट्स होप दे हैव द सेम डिफेंसिव हाफ ऑन बाइंड. बट अभी चलेंगे एक छोटे के ब्रेक की तरफ. You think that I'm running in place? Y'all really testing my patience. Right before I blow up the spot, I had to get back to the basics. What if my talent is wasted? And see what I'm lacking the placement. Thought since I rap in the basement, but my come up is legend, is greatness. I don't care now, it's pedal to the metal. I can never quit now, I will never settle. Puppet to the game, I'm pulling strings like Geppetto. We in the same game, but I'm on a different level. I passed it. Gotta keep grinding till I'm laid up in the casket. No fake round, but you feeling too plastic. Yeah, y'all feeling too plastic. They say my style crazy, but then it's straight jacket. Wow. Why you still testing my patience? Trying to turn me into something I ain't trying to be. All the hate is in heavy rotation. You gon' lose yourself, quit testing me. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind, cause I'm looking like Wesley, test me. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind, cause I'm looking like Wesley, test me. Cause I'm looking like Wesley, test me. Don't make me lose my mind, cause I'm looking like Wesley, test me. Yeah, guess I know no better. I ain't got no chill, so they call me a devil, I know. Look, I am just a man on a mission. If I want it, then I get it, I go. And if you're trying to test me a beast, you gon' need Liam Neeson. The chance that you taking is flagrant. You're testing your luck. If you think you make it out, then you're sadly mistaken. Careful what you putting your stake in, cause I ain't got no patience and no limitations. You trying to figure me out and I know I don't make sense, but no one's there when you call like you trapped in the Matrix. You need to take a break from it, I think you should take 6. Cause yes, I hold a throne and no one else can replace this. The pain will only go deeper the harder you chase it. I'm the greatest that you ever made, it's time that you face it, so tell me. Why you still testing my patience? Trying to turn me into something I ain't trying to be. All the hate is in heavy rotation. You gon' lose yourself, quit testing me. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. You think that I'm running in place? Don't make me lose my mind. Y'all really testing my patience. Right before I blow up the spot, I had to get back to the base. What if my talent is wasted? You see what I'm lacking the place. Thought since I rap in the basement, but my come up is legend, is greatness. I don't care now, it's pedal to the metal. I can never quit now, I will never settle. Puppet to the game, I'm pulling strings like Geppetto. We in the same game, but I'm on a different level. I passed it. Gotta keep grinding till I'm laid up in the casket. No fake round, but you feeling too plastic. Yeah, y'all feeling too plastic. They say my style crazy, but then it's straight jacket. Wow. Why you still testing my patience? Trying to turn me into something I ain't trying to be. All the hate is in heavy rotation. You gon' lose yourself, quit testing me. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Welcome back, ladies and gentlemen, to the VCT Stage to APAC Challenges Play-ins. We are here on an intense game between Enigma Gaming versus Made in Thailand. दोनों यहाँ पे एक मैप अपना जो है जहाँ पे I'm just a man on a mission. If I want it, then I get it, I go. जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने लेकिन let me go back to this game. मैं start से बात करना चाहूँगा. 22 kills, 15 kills. Both खेले थे Qeon, probably the most well-rounded player on the server in that match. लेकिन we got some numbers as well. One obviously इतना ज़्यादा करते हो यहाँ पे 1.1 के more shots in the medium. Headshot percentage as well. देखिए headshot percentage बड़ा unique stat it depends on what sort of weapons you've been using as well. What sort of weapons you've been depending upon. Because अगर आप operator इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर the forces इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा वो आपका headshot percentage lower करेगा ज़रूर. Outtrack करने की बात करें, Enigma has been on the top of the game 10 बार compared to 6 times they outtracked their opposition in a round. Don't make me lose my mind, 'cause I'm looking like Wesley, test me.
Welcome back, ladies and gentlemen, to the VCT Stage 2 APAC Challenges Play-in. मेरा नाम है लूसीफर, मेरे साथ वापस जुड़ चुके हैं माम्बा. We are here on an intense game between Enigma Gaming versus Made in Thailand. दोनों यहाँ पे एक एक मैप अपना जो है जीत चुके हैं माम्बा. But right now it's going to be heading over to the decider. But उससे पहले जो ascent पे ही हुआ है, it was just good. Enigma, they played out well. They were strategically ready. And जैसे हम देख रहे थे on Haven, जहाँ पे Made in Thailand had red Enigma, यहाँ पे हमें देखने के लिए मौका मिला where Enigma had red Made in Thailand. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. लेकिन लेट मी गो बैक टू एक्सकाली. मैं स्टार्स की बात करना चाहता हूँ यहाँ पे. 22 kills, 15 deaths and 14 assists. वो खेले थे KO and probably the most well-rounded player on the server in that match. लेकिन we'll crunch some numbers as well. Damage obviously Enigma ज़्यादा करते हो यहाँ पे 1.1k more, but in the meantime headshot percentage as well. देखिए headshot percentage एक बड़ा unique stat है क्योंकि it depends on what sort of weapons you've been using as well, what sort of weapons you've been depending upon. क्योंकि अगर आप operator इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर tour de force के इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा, वो आपका headshot percentage lower करेगा ज़रूर. But outfrag करने की बात करें, Enigma has been on the top of their game thus far. Compared to 6 times they've outfragged their opposition in a round, and that's just insane to see. Exactly. हम वही बात कर रहे हैं कि देखिए जो डिफेंसिव हाफ से जो प्ले था एनिग्मा गेमिंग की तरफ से फ्रॉम द पिस्टल फ्रॉम द गेट गो, वहां पे वो रीड कर रहे थे जो भी प्ले होगा, जो भी सेटअप था. यस दे डिड लिटिल फंबल अप अ कपल ऑफ राउंड्स, बट जी हां, जब उनको वापस स्टेबलाइज करना था एंड क्लोज आउट करना था आफ्टर रीचिंग मैप पॉइंट, उन्होंने क्लोज आउट जरूर किया. आप देख सकते हैं क्राफ्ट में भी, आई मीन स्पेशली वेयर वी सॉ 13th राउंड एंड दे वर बोथ एट इक्वल. सुपर नीचे में भी, आई मीन क्लोज आउट स्पेशली वेयर वी सॉ उसके बाद कहीं ना कहीं एनिग्मा ऊपर आती हुई नजर आई. स्लो एंड वेरी बट इमीडिएटली वी सॉ डाउनफॉल. उसके बाद कहीं ना कहीं एनिग्मा ऊपर आती हुई नजर आई. स्लो एंड वेरी बट इमीडिएटली वी सॉ डाउनफॉल. उसके बाद जब वो रहे, बट जैसे आपने पॉइंट आउट किया स्काली वाज 12-9 उसके बाद जीत गए नजर है. बट जैसे आपने पॉइंट आउट किया इक्वल टू स्काली वाज जो उसको पसंद फेल्ड दोस चीप प्लेस, दोस फ्लैशी आउट प्लेस, द फ्लैशी प्लेस एंड को पसंद था दोस चीप प्लेस, दोस फ्लैशी आउट प्लेस, मौका मिला एंड ये साथ भी उनका मिला है. वो टीममेट्स एंटी को सब करने के लिए मौका मिला है. वेल साथ भी उनका मिला है. वो टीममेट्स बट व्हेन वी नीडेड रॉफिल स्पेशली ऑन वेल एक्ट रॉफिल कपल ऑफ राउंड्स वहां पे आई थिंक रॉबर्ट प्लेड अ वेरी रॉफिल स्पेशली ऑन बैक, especially in the first round itself देखिए यहाँ पे played a very dominant and impactful. especially in the first round itself देखिए यहाँ पे highlights आपको बता रहे हैं कि पहले राउंड में कितना ज़्यादा impact था उनका, and he's been impactful in the rounds when obviously he had to perform, but at the same time I do believe मैं थोड़ा सा critical होना चाहूँगा यहाँ पे रॉफिल के बारे में. Not because he played bad, he played really well, don't get me wrong, but मुझे पता है उस प्लेयर का potential कितना, उस प्लेयर का caliber कितना ज़्यादा है, and for him to have an impact in the game, मुझे पता है. आपने देखा हुआ LAN पे, as a matter of fact, if he pops off, वो मैच नहीं, वो डेथ मैच खेलते हैं सर्वर के अंदर. I agree with you. I mean that's an undeniable fact जो रॉफिल करके दिखाते हैं. But जी हाँ, the way Myth also played here and especially Wannafly, he got us to a nerve-wracking situation जहाँ पे दिल के धड़कन है ना बहुत तेज चली गई थी. We were thinking like this round is done, but then Xkali pulls off that operator. मुझे आज के दिन में ना at the entire day, even the first and the second map, Xkali का जो switch up है, especially also bringing out that operator twice in the game, was just brilliant Xkali के तरफ से. And that also tells us क्योंकि देखिए जो एनिग्मा के टीम में ना ज्यादातर भरपूर हमें ज्यादा ड्यूलिस्ट देखने के लिए मौका मिलेगा. जी हाँ, RVK और रेक्सी का अगर बात करेंगे, they have been those supportive players, but other than that बाकी तीनों खिलाड़ी they've been that duelist. तो capability अभी भी है, when they have to jump in and take that responsibility वो लेते हुए नजर आ सकते हैं. And also I like this duo of Xkali as well as Rockfield, and इनका जब duo साथ में आपको देखने के लिए मौका मिलता है ना, it just is, I would say, जैसे आप गेम प्ले Xkali का फ्लो हो रहा था, वैसे Xkali and Rockfield they become monsters together. Oh, absolutely, no doubt about that. लेकिन let's not forget that one round जहाँ पे Xkali and Rex ने वो round निकाले थे. I do believe it was a 2v4, 2v5. I don't remember exactly क्या situation था, लेकिन two sheriffs coming on top of everybody, and overall जिस तरीके से उन्होंने round निकाला, खासतौर पे Xkali का वो operator and last sheriff kill first lane में, I think उनके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं, उनके गेम प्ले ने बोला है, and that's a wonderful thing. But going back to Antidote, right? Antidote always flies under the radar because one, वो call कर रहे होते, he's always making sure that the troops are rallied well together, and I believe along with that he's doing a wonderful job. उनके 15 kills से 14 deaths से 5 assists थे, and all in all I think he played really well, so props to him for over that. But मैं बात कर रहा हूँ अगर पूरा का पूरा lineup एक साथ pop off होता है including Rawfield, Oh yes. ये 13-9, 13-6, 13-7, 13-5 as well, as a matter of fact हो सकता था.
I agree with you. I strongly feel that can happen क्योंकि देखिए अभी भी पहला दिन है and they're still looking forward to getting accustomed with teams from other regions. ये बहुत बारी खेलने के लिए मौका नहीं मिलता है. ऐसे नहीं कि हर रोज उठते हैं ये प्लेयर्स. सेम गोस मेड इन थाईलैंड या एनिग्मा गेमिंग जिसको भी ले लीजिए, ऐसे हर रोज नहीं होता कि हर रोज उठते हैं और अलग अलग टीम से मुकाबला करने के लिए फ्रॉम अलग अलग डिफरेंट रीजन्स. इट डज नॉट हैपन. सो जैसे यहाँ पे इनका मुकाबला हो रहा है इन एपैक चैलेंजर स्टेज 2, इट इज हीटेड अप एंड ऑल्सो कि एक और रिस्क है जहाँ पे आप प्लेन्स में हो. अगर यहाँ पे आप एलिमिनेट होते हुए नजर आते हैं देन दिस इज स्टिल द फर्स्ट स्टेज. एंड अगर यहाँ पे आप एलिमिनेट हो जाते हैं देन योर ड्रीम्स टू गेटिंग इनटू द VCT मास्टर्स, स्पेशली जो अभी कोपनहेगन में दैट वी हैव काइंड ऑफ स्विच्ड अप इनटू अ डिफरेंट प्लेस, इट इज काइंड ऑफ getting that intensity and also bringing the hype around the scene itself. तो हम देखना चाहते हैं कि अलग अलग रीजन से कौन ज्यादा और भी ज्यादा डोमिनेट कर सकते हैं. बिकॉज वी रिमेंबर राइट लास्ट टाइम मास्टर्स में हमने देखा था अ कपल ऑफ टीम्स वर कंप्लीटली ब्रिलियंट. हमने देखा था लाउड भी वहां पे आखिर तक आया था एंड वी आल्सो सी Xerxia as well put up a brilliant performance. तो हम इस बार भी देखना चाहते हैं who are those going to be upsets who are going to be creating in the VCT Masters. बट अभी भी देखिए उसका अभी भी डिस्कशन बहुत लंबा चल सकता है अगर करेंगे तो. बट बाइंड का मुकाबला अभी है मामा which is going to be the decider for both these teams की कौन आगे जाके यहाँ पे बूम esports के साथ अगला अगला मैचअप खेलेंगे या सीधा जाके एलिमिनेशन मैचअप पे खेलते हुए नजर आएंगे. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस बाइंड. जी हाँ बिल्कुल सही. इट ऑल डिपेंड्स ऑन बाइंड बट आई थिंक दैट्स स्टेटिंग द ऑब्वियस बिकॉज ये तीसरा मैप है एंड whoever wins of course advances, whoever loses goes to the lower bracket. Bind is going to be very interesting given how Xcali played in the last game. There is a high possibility we might see him on Yoru, or I might be completely wrong. But I do want to see Yoru, I'll be honest, because teleports के साथ there's so many things you can do, right? Especially with that agent. तो अगर वो हमें देखने मिलता है then it's going to be incredible. मजा आएगा हमें. But नहीं होता then again I'm sure they must have figured out some plan. But Lucifer, what sort of a gameplay are you expecting? Because हमने पहली 2 मैचेस में देखा था बहुत ज्यादा aggression दिखाया. Early game में मेड इन थाईलैंड के पास इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं था. You think they're going to try and turn the tables around this time? आई थिंक सो बिकॉज वॉर्नर फ्लाई चेंबर पे खेलते हुए नजर आ चुके हैं बट इस बार अभी तक पिक नहीं किया. एंड बाइंड इज वन ऑफ दोस मैप्स वेयर दैट चेंबर पिक कैन कम थ्रू. एंड ऑल्सो इसको काउंटर करने के लिए मुझे लग रहा है रॉफ्यूल भी कहीं ना कहीं चेंबर के साथ आ सकता है. एंड वी माइट एंड अप सीइंग 2 रेजेस ऑन बोथ द एंड्स. आई मीन ऑन द इनिशिएटर्स जी अभी भी वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रहेगा ऑन व्हाट दे आर गोइंग टू बी पिकिंग इन. क्योंकि हमने देख रहे हैं आजकल की जब फेड का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है I would say more than happy to let go of Sova because it's changing up. And also कि Fade का जो initiator utilities है they are a lot annoying compared to Sova जो ping out करता है. I mean those prowlers coming towards your end and आपको जैसे turret के साथ fight लेते हो you have to take a fight with the prowler to I would say destroy it and then try to fight with the opponent. And उसी time पे अगर opponent swing out करते हैं तो मुश्किल हो सकता है. So I think the initiators are going to be the ones which can change the round. But also अगर controllers का बात करेंगे यहाँ पे माम्बा, I think it should be brimstones coming from both the ends. But who knows? At the end of the day, it's about teams who are comfortable with it. Picks लेके आएंगे. But अगर मैं आपसे पूछूंगा, आपने योरू को ऑलरेडी जस्टिफाई कर चुके कि it can come out from Xcali. But again, Xcali I feel like रेस के ऊपर आ सकता है. But if I ask you which can be the other agent can come through from either one of these teams? Brim obviously is going to be there because you can't negate Brim, right? क्योंकि उनकी जो abilities है they fit perfectly with the map. Sky could definitely be there. Sky is a very good initiator to play on Bind. But then again, at the same time, it really depends on what you want to play. Fade, I'm not too sure. It's still too new to sort of weigh the pros and cons. But वो भी हमें नजर आ सकता है. But Raze and Yoru के बीच में decision होने वाला Xcali के लिए खास तौर पे. But let's move on into a draft. And alone fills Raze के ऊपर आते हुए blend on Brim, Congarad on Sky. We have Chamber and Wipe. Xcali on Fade. Wow. Breach. I mean, जब हम एज सिलेक्शन थोड़ा बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं दोनों साइड से. Kazoom, I did not speculate. Alone Phil's going into the race. I mean, Waterfly का वो prediction भी हम देख रहे थे. He should have played the Chamber, but he's playing on the Viper. So finally ये controller setup जो double controller with the Viper and Brimstone देखने के लिए मौका मिल रहा है from Made in Thailand. But on the other end, Breach and a Fade setup coming in from Enigma. That's something to watch out. जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने. It's something to watch out for. But हमारे जो visuals है खास तौर पे आप मेयार की बात करते हैं. This is really cool. I like it. But Bind में शुरुआत करेंगे हम ladies and gentlemen. We're going to hop into the matchup and I'm sure it's going to be one hell of a match because दोनों matches काफी close गई थी. Enigma at least in Ascent they had a little bit of domination. But over here सबसे बड़ा सवाल यही होने वाला है कि Enigma can they carry on with the same momentum?
they've built it right now. And also देखिए पिछली बार जब स्कोर लाइन हुआ था 13-11 का स्कोर लाइन in favor of Made in Thailand, but इस बार 13-9, and as you said, single digit is going to be single digit whether it's one round away or multiple rounds away. So I think वो momentum के साथ carry forward कर सकते हैं, but this is decided. जैसे हम बात कर रहे थे, this map is kind of even Stevens for both of these teams. So ऐसे नहीं बोल सकते कि it can be completely Made in Thailand or it can be on the cards for, I would say, Enigma Gaming, but bind again with these agent selections especially. And one thing I'm going to be happy about is RVK Cypher patch, and we all know how good RVK is on the Cypher. I mean, I would have loved it to see on Split, but Split यहाँ पे ban होते हुए हमने शुरुआत में ही देख चुका है. But still, Cypher is on cards, and I want to see how many players यहाँ पे trap होते हुए नजर आएंगे from Made in Thailand. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. लेकिन आरवीके की अगर हम बात करें, he is one of the most versatile players I've seen so far in the circuit, at least in the Indian circuit. अब बात करें उस प्लेयर के बारे में, आपने उनको कितने ज़्यादा रोल्स में देखा. आपने उनको फेड पे देखा हुआ, आपने उनको सोआ पे देखा हुआ है. अगेन चेंजिंग हिज एजेंट अप. सो I do believe आरवीके के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. He still has a lot of more room to grow. And अगर आप उनको ड्यूलिस्ट रोल में भी डालेंगे, I do believe he can do really well. But at the same time, of course, as a player is still in a very nascent stage. Experience है उनके पास, no doubt about that, but with the right environment, this player can really thrive, and he's one of the most promising players from the Indian subcontinent. Oh, I agree with you. I mean, जो I would say उनका improvement देख रहे हैं, especially from where he started off and then he joined Enigma Gaming, it has been completely uphill. उनका जो performance है, it has been completely brilliant. But same जैसे हम एक खिलाड़ी का performance बता रहे हैं in general, क्योंकि we more know about the South Asian region, we've lived over there and we have seen the entire circuit play around. But जी हाँ, ऐसे ही मैं matchup के दौरान भी मैं बात करना चाहूँगा जो होंगे कदूम. He has just been stepping up on every round. I mean, जब भी वो शुरुआत होता है ऐसे लग जाता कि I think this round is done in Kadum's hand, क्योंकि वो जो एंट्री दिलाते हैं, वो स्पेस जो दिला देते हैं, irrespective किल मिलता है कि नहीं, it all depends on his entry, and then other players completely start entering into the side. देखिए एक बार जब कदूम का एंट्री होता है with the Bladestorm on ascent, वहाँ पे Rofuel as well as Xkali साथ में थे. They immediately put down Kadum, and that's when you see immediate switch of coming from Made in Thailand. वहाँ पे उन्होंने decide किया था A, but when Kadum fell down, they immediately moved to B, and that tells you कि Kadum के पास कितना ज़्यादा momentum है, and he's bringing in it again in the game. But right now, with the Chamber and Raze being picked up from Alone Fills, I want to see how much impact Alone Fills can be. क्योंकि अभी तक Alone Fills, I would want to say कि एक शांत खिलाड़ी थे from Made in Thailand. He was on the back lines, giving them the necessary information with that Soa, Hunter's Fury के साथ भी 1-2 picks निकाले थे, but he was not the one in the forefront on the spotlight. But अभी spotlight में आना ही पड़ेगा, and I'm looking forward to how that race plays out on Alone Fills. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा. We'll have to see how the race plays out, but देखिए हमने देखा उन्होंने बहुत impact create किया on any agent that he's played. But nonetheless, ladies and gentlemen, game number 3, the decider map और for this matchup, कौन सी टीम जाएगी लोअर ब्रैकेट में, कौन सी टीम आगे बढ़ेगी, हमें पता चल जाएगा थोड़ी ही देर में. But nonetheless, I'm going to have Captain Price join me in. Lucifer, thank you so much for joining us. But nonetheless, Xkali in the meantime is going to get taken down. Launching smoke. I mean, थोड़ा दिक्कत होगा जरूर, but देखिए और भी ज़्यादा दिक्कत बढ़ने वाली है because Rocky gets picked and so does Antidote, and Rex gets down A. Just shut down. A very, very quick defending round, pistol round coming in from Myth, however. But देखिए RVK उनके पास चारा नहीं है. He has to go in for that 1 versus 5 and Kadum already flank पे मौजूद है, just waiting it out. But you don't challenge RVK in a duel. He's gonna shut you down. Doesn't matter. One of like a immediate cover आएगा जरूर. And Myth, for the first time, they walk away with the pistol round in the first half. Well, first round going in towards what मैंने सवाल पूछा था Lucifer से Sam. Sorry. Price. It's the same thing. It's the same thing whatsoever. But nonetheless, मैंने सवाल पूछा था कि क्या हमें यहाँ पे change of pace नजर आएगा. And we did see this because दोनों matches में Enigma Gaming की बात करें, pistol round जीत रहे थे. They had the momentum going on in the field. लेकिन इस बार उनके पास वो momentum नहीं होने वाला है. And it'll be interesting to see किस तरीके से cope करते हैं इस चीज के साथ. Of course, साथ ही साथ देखिए Enigma Gaming, the way they played Ascent, I loved it personally. Calm, composed. वो मुझे थोड़ा सा second half में यहाँ पे missing नजर आया. Rofuel tries to gain entry into sight. Cloudburst के साथ साथ sneak in करने की कोशिश, लेकिन नाकाम किया जाएगा वो जरूर. Rexy, very big responsibility. Guiding that को जरूर dodge करते, लेकिन information मिल चुका है कि there's someone loitering around in hookah.
सो हुक्का भी क्लियर करना पड़ेगा एंड विद दैट बीके ट्राइज टू गो इन ऑन का इस्तेमाल टैग हो चुके हैं जरूर मार्क किए गए हैं अलोन को लेकिन यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से बेट आउट करते हुए नजर आए उस टेलीपोर्टर की मदद से nothing done with the use of so many utils so far by Enigma game. Yeah, but then again, good shot by Xcali, लेकिन eco round है, so ज़्यादा expectations भी मैं नहीं रखूँगा. But I do believe Brimstone यहाँ पे बहुत ज़्यादा creative होगा. Orbital spec जब आपके पास होता है, आप A का जो elbow होता है, वो आराम से lamp clear कर सकते हैं. Oh, the Sheriff Monster comes in clutch. एक kill निकाला उन्होंने, but यहाँ ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं कर पाएंगे. 2 players उन्होंने डाउन किया. It's an okay eco round. ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाया, but it's not something's better than nothing, right? But at the same time, weapons का advantage होने वाला है. यहाँ पे मिड कोशिश करेगी बोनस खेलने का, but अगर ये राउंड एनिग्मा नहीं निकाल पाती, then that's a problem. Of course, and bonus buy निकालना पड़ेगा. Enigma Gaming देखिए so far so good. They've done it well. They've done a little bit of work. मजबूर किया है यहाँ पर 2 खिलाड़ियों को वेपन ड्रॉप करवाने में. But full buy round. Attacking half में Enigma Gaming, they have to get a lot of rounds. And I mean by lot, at least 4. At least 4 rounds उनको चाहिए because bind overall we know it's a defenders oriented map. So defenders के पास वो peekers advantage and definitely बहुत सारे और भी advantages रहेंगे. We'll talk about, but इस बार एक भी execution clash में cross hold किया जा रहा है, but double cross है तो उसको वो तोड़ना आसान नहीं रहेगा. Dylan just walks in, but Xcali will be trading off 2 players and ये बहुत बड़ा एक impact deal कर सकता है इस round पे जरूर. With that breach on the attacker side, side entry gain करना बहुत ही आसान रहेगा जरूर. Is this the first round for Enigma or will the bonus buy pay off for Myth? Well, ये हमें पता चलेगा थोड़ी देर में, लेकिन Enigma is looking pretty strong right now. मैंने कहा था कि Myth की बात करें, the playing bonus over here, RVK in the meantime, Kaboom ने वो shot miss किया, otherwise it would have been very difficult. Waterfly in the meantime, Spectre का इस्तेमाल करके snake bite खोला जरूर था, लेकिन Dexy आके उनका kill निकालेंगे and Enigma is going to get themselves back into the match. अब 2 players down हुए तो पैसा उनके पास होने वाला, but at the same time Myth के पास भी काफी ज़्यादा पैसा होगा. No operators being pulled down right now, but Regum की बात करें, थोड़े फोर्स का इस्तेमाल किया था उन्होंने, लेकिन ज़्यादा impact create नहीं कर पाया वो. Of course, and साथ ही साथ that's the first round for Enigma Gaming. देखिए impact जरूर रखा है इस round पे, because आप देखिए वो तो the force was nullified, but operator buy अगर आता है, it will come a little bit late. I think after the 6th round is done, maybe आप जब थोड़ी सी इकोनॉमी स्टेबल हो जाए और मेरे टैलेंट की शायद से आपको ऑफ बाय देखने का मौका मिले, बट Xcali तो समझ के रहना है. साथ ही साथ very aggressive, और यहाँ पर डबल होल्ड किया जा रहा है शवर्स को. On the other side, Congered पॉकेट में इंतजार कर रहे हैं. Does Rexy have a read on him? It's going to be interesting to see if he has a read on him, but काफी ज़्यादा slow कर दिया यहाँ पे गेम प्ले को. हर एक player from both the teams they're trying to get some information. सामने वाले player के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अलोन फिल्स की बात करें, यहाँ say hi for a selfie, पीछे हटना पड़ेगा उनको. फोटो खिंचवाया जरूर था उन्होंने अपना वहाँ पे, but there's nothing else he can do. लेकिन Rex देखिए कितना ज़्यादा patiently खेले, लेकिन अगर एक भी wall bang आता, even a stray bullet can give away his position. यहाँ पे शायद फॉल्ट लाइन का इस्तेमाल करेंगे धीरे धीरे करके, but in the meantime ये देखिए Xcali अंदर पुश करेंगे जरूर. Rexy स्काई स्मोक्स खोलेंगे जैसे उनकी टीम में ऊपर आ पाएंगे. और फ्लाई को स्पॉट कर दिया जाएगा, उनको पीछे हटना पड़ेगा. he is stunned, but अभी भी अंदर इस्तेमाल करें. फ्लैश आएगा ब्रीच का, लेकिन no picks whatsoever. He was just completely blinded. उस टाइम पे अगर पुश आता तो मुश्किल रहता जरूर वन फ्लाई के लिए. But you know, I'm super hyped about one little thing that दोनों टीम जो है ना, they're just competing on each other's throat. I mean, कोई भी मौका नहीं दे रहे कि opponent team respond कर पाए. But so far so good. अभी के लिए ये पहला हाफ शुरुआत strongly हुआ है जरूर. But RVK taking on to you all. Immediately अपने जो सबको pop up करेंगे. Face your fear. Seconds left. किया जाएगा लोन के द्वारा. That's the night ball coming in. It's going to be a 2v3. आसान नहीं रहेगा जरूर, but possible. मैंने पहले भी ये करके दिखाया, so we'll see what happens in this round. जी हाँ, लोन फिल्स के पास एक सैचल अवेलेबल जरूर है, which he can use to get on top of the truck, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की मूव होने वाला हो. यहाँ पे गार्डिंग लाइट का इस्तेमाल, फ्लैश जाएगा अंदर जरूर, लेकिन RVK दोनों kills निकालेंगे. The cleanup crew coming in, and RVK are the closing round on. Enigma coming out on top of this one as well, and now they're in the driver's seat क्योंकि Myth के पास अब इतने ज़्यादा पैसे नहीं होने वाले हैं. And if they can manage to win the next 2 rounds, Enigma, they might walk away with a very good first half. But
Mamba, इस moment पे आपको तो लाइन याद ही होगा. Like it's been barely few days. Remember RVK pulling off a clutch and then the crowd just goes wild. I miss those moments, honestly. I miss those moments. अगर कोपेनहेगन तक यहाँ पर तय कर पाती है पूरा सफर, Enigma Gaming or whoever it is. I mean, we won't get the exact fields, but you know, it's going to be done again. So let's see what happens. But इस बार एक shot इसको निकालने की कोशिश करेंगे जरूर. देखिए दो खिलाड़ी आगे आए थे, दोनों बैकआउट कर जाते हैं and पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं आर्मी है Enigma Gaming का, रेड कमिंग क्राउडर के साथ पुश बैक किया जाएगा जरूर. Robuel goes in with that judge. Robuel and the judge probably the best friend right now. So you want to go ले सकते हैं. I've always noticed this anti-ecos have been a problem for Enigma more often than not because जिस aggression के साथ वो खेलते हैं, that change of pace does not help them. यहाँ पे antidote की बात करें, वो अंदर अगर push करते हैं तो he will be judged. And Xcali in the meantime यहाँ पे रुकेंगे जरूर. कोशिश कर रहे कि वो एक हाथ पिक निकाल पाए. He's being very sneaky over here. लेकिन क्या उनको किल मिलेगा? उन्होंने आवाज जरूर करी. I do believe Sky ने उनका footstep सुना हुआ, लेकिन he's gonna go around the corner. कोशिश करेंगे पिक निकालने के लिए. स्पॉट हो चुके वहाँ पे. रोटेशन बेट करे, लेकिन क्या स्पाइक वापस आएगा यहाँ पे? ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला. इन्फॉर्मेशन निकालने की पूरी कोशिश करते हुए Xcali is holding the line. He needs help right now. लेकिन Trailblazer का इस्तेमाल करेंगे, उसको भी तोड़ा जाएगा. I do believe A plant होगा. जी हाँ, Xcali holding the fortress. अकेले प्लेयर पुशिंग करते, लेकिन alone is creeping up. क्या वो निकाल पाएंगे? जी हाँ, उनके पास जल्दी can push in. He might be able to walk away with both these kills and he's going to jump around the corner. क्या अंदर के निकाले? Satchel निकाला, लेकिन plan नहीं करने देंगे. Look at that though. The heat seekers coming in. That's just amazing. Do you think B-side plant होगा because one is already waiting there now? Possible है, but they don't have enough time. That's the problem. यहाँ पे उठेंगे तो भी water fly किल निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे, तीसरा भी निकालने की कोशिश, but do they have enough time? The spike carrier is down and that's a terrible round from Enigma. A terrible round. Good use for you too, sir. आप देखिए वहाँ पर सबसे पहले Ocean Cloud को deploy किया गया, then Snake by dropping किया गया. As soon as they knew कि 20 second है सिर्फ and they have to come in from hookah, कोई और position नहीं रहेगा. क्या करते हैं? Completely hookah को एक hook point बना देते हैं. Enigma just walk into that trap जो बनाया गया था. Apply Shidwara and that's another round. जो Enigma आपको गवाती हुई नजर आई. काफी बढ़िया एक राउंड निकल सकता था. The use of the satchels forcing out Enigma from A side. Great round coming in from One of Life, and let's not forget the contribution of the as well. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने बात. Again, more than myth winning that round, it was Enigma who lost the round. मैं सही कहूँगा, because what in the world was Xcali? Oh my God, that has to hurt. That has to hurt so much. The lone player with the judge is going absolutely ham. Wonderfly नीचे नजदीक killing and there's not a lot he can do. Well, down to a 3v4. Alone ने जितनी मेहनत करनी थी वो करके गए. सबसे पहले काली को डाउन किया, then Rexy को. इनफैक्ट RVK को भी काफी डैमेज्ड वो कर चुके हैं. Toxin screen down. From Enigma Gaming. देखिए फिर से B side पे ही कमिटमेंट आ रहा है. This players who just waiting outside Poison orb on fountain. RVK बहुत बड़ी रहेगी. कारण कंट्रोल मिल जाएगा, ऑक्टेगन कंट्रोल उन्हें मिल जाएगा जरूर, लेकिन साइट में एंट्री देना मुश्किल रहेगा. बट ड्रॉपफ्यूल मेक श्योर कि कोई भी खिलाड़ी एल्बो से आके परेशान ना कर पाए. लेकिन तो अंडर हुक का बैठे हुए थे. वन ऑफ लाइक गेट्स अ टेक इमीडिएट रेट कमिंग इन फ्रॉम एंटीडोट एज वेल. एंटीडोट को बहुत रेयर देखा है हमने. आई थिंक हमने कभी भी एंटीडोट को इस मैप पे ब्रीफ प्ले नहीं देखा. इट्स यूजुअली RVK who plays that role. Now down to Spike 2v2. One enemy remaining. Lennon takes down Robuel. Qeon antidote in the 1v1 and he makes it happen. Enigma Gaming, they have another round in their half. 3-3 is the score. What a round by Antidote. What a round. I'm speechless, honestly. जिस तरीके से उन्होंने खेला, वो आखिरी खेल निकाला, इतना ज़्यादा pivotal था. But everyone stepped up. Every single player stepped up. जहाँ पे उनको step up करने की ज़रूरत थी. And all in all, Enigma coming out on top of that one as well. लेकिन यहाँ पे देखिए lone kills की अगर हम बात करें, जिस तरीके से उन्होंने kills निकाले थे Xcali के लिए, लगता है उनको थोड़े tracking routines करने पड़ेंगे देखने के बाद. I really believe अगर वो दो ट्रैक नहीं निकलते, but you have to give a lot of credit to Antidote. Just swinging around cubes के अंदर से really well played. I think mid भी अभी सोच रहे होंगे यार किस टीम के किस में पाला पड़ गया. 2-0 में खत्म कर सकते थे, but you know what? पहला मैप इतना क्लोज गया था. वो डेफिनेटली एसेंट शायद जीत जाएंगे. And now we get cage triggered. Punishing Kadoom. You know, शेरिफ मास्टर के गेट्स में आप एरर लेके आ रहे हैं. Cage triggered. Think you'll win that duel? I mean, good luck winning that. Well, you never know, right? Because there's anything can happen. This game is such
कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, and हमने वो चीज़ें होते हुए देखी भी है. But in the meantime, slow rotation towards the B bomb side coming in. यहाँ पे B की तरफ वो push करने की कोशिश करेंगे, but information देखिए डिफेंडर्स के पास बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन, ये 4 के 4 प्लेयर्स ए साइड के ऊपर है. एंड स्कैली पहले जाएंगे अंदर अपने टीममेट्स के लिए पूरा का पूरा एरिया क्लियर करते, रॉफी बीइंग द एंट्री फ्रैगर दैट ही इज, एंड यहाँ पे आराम से वो कंट्रोल ले लेंगे साइड का. साइड कंट्रोल मिल चुका है, बट Spike planted. मिल जाता है. हाईली लाइक राउंड दिखा सकते हैं with those sheriff guys. He's very much delayed. He connects that sheriff shot and immediately down किया गया खिलाड़ी को. Now they have a weapon to work with, and that's just orders like investment. बहुत ज़्यादा दिक्कत में लेके जा सकता है अभी Enigma Gaming. However, ये Enigma he will play it or not. So there's like investment सारे खिलाड़ियों को भी बहुत महत्वपूर्ण किया गया. I'll get one, RBK gets one as well, and weapon. आता वो one is like you for one side with the frag, but Rex के ट्रेड लेते हुए कांगरेट के ऊपर फाइनल कुछ सेकंड्स पे ये रीटेक की जिम्मेदारी. इवन इफ ही मैनेजेस टू डू द प्लेयर, टाइम रहेगा कि वो स्पाइक को यूज कर पाए, अटैक को प्लेयर्स भी नहीं डाउन कर पाए. एनिग्मा गेमिंग हैव द लीड ऑन द अटैकिंग साइड. जी हाँ, ऑर्बिटल स्ट्राइक का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किया गया था, बट एंटीडोट जस्ट एंटिसिपेटिंग इट टू परफेक्शन, परसेप्शन बोलने वाला था, बट जी हाँ, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने रीड किया. आरवीके की बात करें, काफ़ी अच्छे पिक्स निकाल रहे हो उनके. इट्स बीन ऑन पॉइंट, एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट, बट ब्लेंड ने जो डिलीट किया था वहाँ पे रॉ फ्यूल को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो रॉ फ्यूल. बट ऑल इन ऑल एंटीडोट यूजिंग हिज यूटिलिटी रियली वेल. बात करें रोलिंग थंडर के बारे में, फॉल लाइन एज वेल, बट इन द मीन टाइम रेक्सी डज हैव द ऑर्बिटल स्ट्राइक अवेलेबल. क्या वो ए शॉट पे इसका एल इस्तेमाल करेंगे? जी नहीं, ये राउंड में तो नहीं होने वाला है वो. बट हाइपर अल्टीमेट कमिंग इन. There's very few players जो अपने आप को इतना versatile कर पाते हैं, such as Antidote. सबसे पहले did he spot Balloon? I think he spotted Balloon already, or maybe not. That's the wall पे पुट करने के लिए raw fuel को एक तेज दिया जाता है, but still not done, still not over. Flashpoint आएगा जरूर. Alone still holding the generators. He's still on top of generators, but RVK on the other side, the land को down करेंगे. I know exactly where you are. And immediately, this is the second time I believe 7 rounds में जो neural theft यहाँ पर इस्तेमाल करने का मौका मिला. I mean, RVK, he's definitely popping on the best agent he can play. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बट RVK, oh, Kadoom is going to take him down, and that's a tight slap across RVK's face. यहाँ पर लोन फेस की बात करें, आराम से बैठे और ऑर्बिटल स्ट्राइक का इस्तेमाल, लेकिन कदूम एक और किल निकाल दो. Skyesports going to get taken down as well. बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाते हैं यहाँ पे कदूम. Is he going to go for the ace? He tried, but Rex is still alive. Get one, he's going to throw it as well, but will get taken down. Valiant effort. Rex ने बहुत शानदार वहाँ पे कोशिश करी, लेकिन that was not enough. That shit here, mate. 4-4. Onto the throats of the opponents. मौका ही नहीं मिल रहा है कि लीड लेने के बाद they can just win more rounds. एक बार अगर एनिग्मा गेमिंग जीत रही है तो उसकी इमीडिएटली बाद में एक सीसॉ राउंड हमें देखने का मौका मिला. मेड इन थाईलैंड आल्सो गेटिंग वन, बट आई बिलीव टैग टाइम आउट लिया गया है. एनिग्मा गेमिंग ने ऑलरेडी वो टैग टाइम आउट लिया था, सो इट हैज टू बी मेड इन थाईलैंड जिन्होंने ये टैग लिया है. दे नो कि डिफेंडर्स हाफ में जितने कम राउंड मिलेंगे मेड इन थाईलैंड को, उतना ही ज्यादा दिक्कत. ओह, इट्स एनिग्मा's टाइम आउट. ओके, माय बैड. एनिग्मा गेमिंग 4 राउंड्स निकाल चुके हैं. इफ दे गेट द लीड डिफेंडर्स हाफ में, आई वंडर विदाउट चेंबर आरवीके के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आएगी. सो व्हाट डू यू थिंक, चेंबर ओवर साइफर, मांबा, कौन सा एजेंट ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा इस मैप पे? सॉरी, रन द बाय मी अगेन, जो आपने आखिर में बोला वो सवाल. वेल, आई जस्ट टेल यू कि चेंबर और साइफर, व्हिच इज वे मोर प्रोडक्टिव इस मैप पे? Chamber or Cypher depends on what composition you're playing, honestly, because if you don't want to play a proper duelist, sure, you could try using Chamber, but I honestly feel Cypher does have the upper hand over here with at least the sort of composition that Enigma is playing right now, because defense में उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी. Sure, Chamber लेके आप you can hold off an area, but I still believe Cypher has the upper hand because of the sort of traps you can use on B. B का आपने trap setups देखे हुए ज़मीन के ऊपर, window के अंदर, that really allows you to get that initial pick. Of course, and RVK I think has probably the most innovative traps after T-Bone first.
Long execute निकाल की कोशिश, perfectly timed prowler, Enigma raw fuel, getting 2 for himself. Right, entry तो मिल चुकी है, लेकिन एक और खिलाड़ी है जो जज के साथ raw fuel को एक चाटा मारते हुए नजर आएंगे। आप शॉक से पुश बैक करने की कोशिश रहेगी, but he still not left tubes alone. ढीठ खिलाड़ी है, ये साइड बिल्कुल भी देना नहीं चाहते Enigma गेमिंग को। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, साइड नहीं देना चाहते, लेकिन रेक्सी अभी भी इंतजार करें। एक स्मोक बचा है उनके पास जो उसका इस्तेमाल करेंगे एंड नाउ पीछे भी आते हैं, बट रोलिंग थंडर इज गोइंग टू कम इन एंड यहाँ पे वो फोर्स करे रोटेशन को एंड उनको पता है कि बी साइड का कंट्रोल लेना है। इट्स गोइंग टू बी अ क्विक प्लांट एज वेल। यहाँ पे ये देखिए एक्सकैली कितना ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड उनको मालूम था। लेकिन now VK on the flank, he is going to be on the backside. Can he find the pick though? That is going to be the question. He's going to get taken down. Alone field वहाँ पे स्पॉट कर लेंगे स्मोक के अंदर स्पैम करते हुए, लेकिन उनको किल निकालना पड़ेगा अपने टीममेट के साथ। आगे पुश करेंगे, खडूम के पास 2 फोर्स भी है, यहाँ पे किल आराम से निकाल पाएंगे। बट नेक्स्ट नीड्स टू स्टे अलाइव, ही इज गोना गेट स्पॉटेड। जिगल करते हुए व्हाट अ वन टैप, यहाँ पे अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन क्या पिक ट्रेड निकाल पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। डिलेंड इज गोना फाइंड वन मोर एक्सकैली, वहाँ पे गलती करते हुए ही हैड टू फाइंड दैट पिक एंटीडोट इन द मीनटाइम, रिड्यूसिंग इट टू a 1v1, but एंटीडोट comes out on top. What a round, what a goddamn round। यहाँ पे एंटीडोट setting the example, इन द इन गेम लीडर, दूसरी बार यहाँ पे क्लच करते हो अपने राउंड के लिए। और एक चीज मैं पॉइंट आउट करना जरूर चाहूंगा, जब रेक्स ऊपर चढ़े थे, इंफॉर्मेशन था एक्सकैली के पास, व्हाई वाज ही नॉट देयर टू ट्रेड हिम? You have to ask him. I mean, you can ask him. Maybe some miscomps, but yes, captain's innings. I think Anti is doing a fantastic job. He's doing a fantastic job. But seesaw game चल रहा है, ये seesaw game चल रहा है। एक राउंड एनिग्मा जीत रही है, लीड ले रही है, तो दोबारा से रिटर्न में एक और राउंड मेड इन थाईलैंड लेके जा रहे हैं। Antidote has some insane level skills, and you see, I think Anti is the only player जो पूरे ऐसे सर्किट में default skins पे खेलते हैं। He doesn't have skins, he just wants to go for those aim duels, and he's damn good at it too. He is. There's no doubt about that. And I do believe this is a tactical timeout coming from MITH, if I'm not mistaken. But थोड़ी देर में पता चल जाएगा। But बात करें जो ट्रेड फ्लैग की मैं बात कर रहा था, it could have been Antidote और Excali, either of the two, क्योंकि देखिए रेक्स ने जो किया था was fine. उन्होंने एग्रेशन दिखाया जिसकी ज़रूरत थी। Of course, he could have played it in a different way as well, जहाँ पे वो पीक कर सकते थे towards elbow, but वहाँ पे elbow पे एक पिक निकाला, दूसरा प्लेयर एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उन्होंने। then defender जो कनेक्टर वहाँ भी उन्होंने पीक किया, but at the same time ट्रेड आना जरूर चाहिए था, because you can't be making these mistakes at such a high level, because ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप राउंड्स हार सकते हैं। but credit where credit is due, बहुत अच्छी तरीके से खेला एनिग्मा ने वहाँ पे, स्पेशली रोलिंग थंडर का इस्तेमाल करके जब वो अंदर गए, was wonderful. Of course, and on the other side, बिल्कुल नहीं भूलना चाहेंगे कि एनिग्मा गेमिंग देखिए कोई रिस्क नहीं ले रहे। You know it's a 4v3, you know कि उनके पास ज्यादा एडवांटेज है, but still साइड को क्लियर ऑफ करना very smart move coming in from Antidote. Again on a 5v5, but इस बार 2 बकीज है। बकीज का दर्द तो हम सबको पता है मामा, लाइक क्लोज रेंज पे I don't think if you have a vandal and you get buckied, उससे ज्यादा दर्द किसी और चीज से होता है। Oh well, बकी का दर्द मैं समझ सकता हूँ, मैंने मार खाया बकी का, I can completely understand. But in the meantime, Antidote की बात करें, फ्लैश पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे अंदर पुश करने की कोशिश, क्या रोटेशन मंगाने की कोशिश करें? जी नहीं, they want to commit to the A side। यहाँ पे देखिए, this is exactly why मैं कहता हूँ कि साइफर ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, because आप केज का इस्तेमाल करके इतने ज़्यादा एरियाज ब्लॉक अप कर सकते हो। रॉ फ्यूल RBK, oh no, बकी की हम बात कर ही रहे थे, and yeah, no, that's unfortunate. That is unfortunate. And once again, Qeon को डाउन करते हैं, and Qeon को डाउन करना has been a priority for Enigma Gaming for a long time now. But इसी बीच में Butterfly आगे आएंगे, Anti को डाउन कर जाएंगे, very low HP, pick the well, but Dylan, he just manages to get 2 frags for himself with that sheriff, and okay, 5-5, 6-5, 6-6. That's my score prediction for the first round. Thrifty. True, but again, pretty interesting to see the way this round played out, right? क्योंकि आप elbow control लेने की कोशिश कर रहे हैं, but then you have no information whatsoever, no flashes, nothing. Sure, आप double trade ले सकते थे, but the moment you found out there's a Bucky, I believe it was time to back off. And immediately, Player standing. Excali ने जो pick निकाला, if he had swung back again, फिर से अगर वो आ जाते, U-Haul पे fall back कर जाते, maybe एक doable round रहता। They land with that sheriff,
keep punished Enigma game. Get out of my 5 way. and 5. Cage trigger. और RV के आगे जा रहे हैं. Had to pick early on command. हुक्का पे info तो जरूर मिल चुका है कि there's someone coming in. And cyber cage के इस्तेमाल से वो बता चुके it's going to be RV the sheriff master himself. 5. Drop it on the blades. I think अगर आप इसका भी नाम ले रहे हैं Khadun के blades and Rockfield के blades. Probably the strongest ultimates that you get to see from either teams. Here. जी हाँ बिल्कुल सही कहा लेकिन RVK की बात करें इज ऑन द शेरिफ एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं शायद इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए जी शॉट लेंगे डिंग भी किया एक और किल एक और शॉट कनेक्ट करेंगे सॉरी एक किल निकालेंगे अपने आप के लिए रॉकफ्यूल के पास भी आता है लेकिन गाइडिंग लाइट का जो ब्लाइंड हो जाएगा एंटीडोट इन द मीनटाइम इज गोइंग टू फाइंड वन फॉर हिमसेल्फ लेकिन वाटर फ्लाई को यहाँ पे डाउन करना पड़ेगा जी हाँ रॉकफ्यूल इज नॉट गोइंग टू मिस दोस दीस आर इजी शॉट्स सारे किल निकाल दो यहाँ पे RVK is still holding it in still holding the entrance off and orbital strike इस्तेमाल जरूर हुआ था लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा except for the plan being delayed. Yep, and इसके साथ साथ really more. Oh, Rex is gonna burn. Teleport's ready. 40 HP, 45 HP maybe अभी बचा हुआ है. Boom once again and will cut small. Rex को down किया जाएगा हुक्का के भी कुछ predictive shots जरूर लिए जाएंगे but Rockfield के साथ साथ देखिए RVK जो क्रॉस होल्ड कर रहे हैं अगर ये क्रॉस को नहीं तोड़ा जाता है then ये साइड पे उनको ना बहुत मुश्किल रहेगा पर इसी बीच में एक्सकैली आ गया था खजूम को डाउन करेंगे डाउन टू सिंगल प्लेयर बैक साइड से आ रहे डिलेंड Rockfield backing off onto Octagon and उनके साथ ही जो रहने वाले हैं एक्सकैली he's already waiting in help okay you come in for Rockfield I'm going to shut you down देखिए डबल पिक आ रहा है Rockfield just running around and this time he's not going to win फिर से Enigma गेमिंग के पास राउंड Last round before the switch. न्यू मैप 6-6 का स्कोर अभी प्रोबेबल है जी हाँ प्रॉब्लम जरूर है बिल्कुल सही कहा आपने बात का Yeah, no, it was incredible the way Enigma played all in all क्योंकि picks उन्होंने काफी अच्छे तरीके से निकाले and it was just great to see but Dylan का aim यार इतना crispy है कि क्या कहेंगे आप Rockfield in the meantime as well with that blade storm played incredible and 5-6 is the scoreline Enigma एक और round निकालेंगे they'll have a lot of confidence to work with. Find you. जी नहीं जज stronger than the Vandal back off करवाने में मजबूर किया जाएगा rolling thunder investment one of the gets a third he's still on 30 HP and game manages to get it back बहुत बड़ा ये impact already deal किया गया है रूमिंग की दो खिलाड़ी है Rexy देखिए वो रोटेट करके आ रहे हैं जरूर लॉन्ग से RVK is in his own different world RVK is always in his world you're living in it यहाँ पे sheriff क्या करते हुए हमने लास्ट टाइम देखा यहाँ पे पिक्स निकाल रहे आप इनको कोई एजेंट दे दीजिए वो इम्पैक्ट जरूर क्रिएट करेंगे रेक्स ही नहीं टाइम यहाँ पे डीके हो रहे धीरे धीरे बट बहुत ज़्यादा रिस्क उठा रहे हैं यहाँ पे इज गोइंग टू बी एबल टू फाइंड द पिक इज गोइंग टू क्वेश्चन बहुत नजदीक जा चुके पड़ी द वाटर फ्लाई देखे क्या उनको स्पॉट कर पाएंगे रेक्स ही वेरी क्लोज बट इज गोइंग टू गेट टेकन ऑन जरूरत नहीं थी वो चीज़ करने की बट nonetheless it all comes down to RVK in a 1 versus 4 heal him up give him the ace 30 seconds left. Already gives him time to get alive. What fly? He just jumps in. Gets steals for himself. I'm loving it because हर मैप में हमें at least एक ना एक ace देखने का मौका मिला है. 6-6 on the cards. Deja vu. Oh yeah. It's unfortunate. Let's just leave it at that for Enigma game. But Myth played really well. Credit देना पड़ेगा उनको आपको कि बहुत अच्छी तरीके से खेला and Waterfly played it to perfection. Got an ace as well. Looks nice. अब जब VLR.gg पे जाएंगे आप stats देखेंगे अपने तो अच्छा लगता है. And RVK in the meantime top fragging for his team. Excali once again slowing things down a bit, but Rockfield struggle कर रहे इस पूरी सीरीज में आपने देखा Rockfield का impact था जरूर जब उनको जरूरत थी स्टेप अप करने की लेकिन जो कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए वो नहीं नजर आ रही उनकी तरफ से swing around gameplay पहले दो rounds well it's exactly a swing around is it no okay no it's not exactly that मुझे लग रहा था कि शायद से 1-1-1-1 चल रहा था but no पहले दो rounds तो निकाल के गए थे Myth and then 2 rounds were taken by Enigma Gaming so far so good अच्छा स्कोर हमें देखने का मौका मिला है at least Enigma would be very happy because attackers half में 6-6 स्कोर लेके जाना that's massive that's actually massive वो भी एक इतने heavily defender oriented मैप पे देखिए वाइपर का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे थे Myth
Viper plus Brimstone, that double controller composition, it's very painful to breach that defending half पे. लेकिन attacking half में what you can do is कि Viper के wall के साथ साथ आप एक side को fake कर सकते हैं. You might just go in for, you know, an commitment onto the other side. But कुछ ही देर का इंतजार, second half start होने वाला है. We'll see what happens. Although, Mamba, I have a small question though. B side पे, B long पे स्पेशली वाइपर स्पिट का कमिटमेंट, बट हर एक खिलाड़ी, एटलीस्ट 4 players from Enigma Gaming, वो हर बार कोशिश कर रहे थे वाइपर को निकालने का. Was it that evident कि they had to commit to that side? They could have rotated on to the other side as well. They could rotate, but it's always better. आपको अगर पता है कि कौन सा एजेंट कहाँ पे खेल रहा है, कौन सा प्लेयर का क्या प्ले स्टाइल है, if you can take them out, it's just better. क्योंकि that gives you a lot of control. But the most important aspect, right, is not even कि आप वहाँ पे kills निकाल रहे हो. अब रोटेशन मैनिपुलेट करो, आप फोर्स करो सामने वाली टीम को रोटेट करने के लिए. एंड दैट्स द रीजन व्हाई वो किल इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो उनका स्नेक बाइट हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप किल निकाल पाते हो, दैट्स द बेस्ट थिंग एवर. बट ये देखिए What? आई थिंक मुझे हल्का सा आइडिया है कि क्या हो रहा था वहाँ पे. शायद जब अर्ली इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, यूजुअली आप सुबह खेल रहे होते हैं तो आप अर्ली इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं. एंड दैट्स द रीजन व्हाई वो किया उन्होंने. तो काफ़ी स्मार्ट था, बट 4D चेस खेले यहाँ पे. बट आरबीके की एचपी देखिए आप, इज वेरी लो. पोटेंशियल का इवन एक खाना भी अगर उनको लगता है इज गोइंग टू टेक डाउन, बी साइड कंट्रोल फ्री में अटैक मिल जाता है मिथ को. इंसिनरेटिंग मोलोटॉव आएगा जरूर, बट लोन he's already pushed up on CT. अभी तक एंट्री नहीं लिया है. Satisfying. With that flank, make sure कि one of flank को कोई भी मौका नहीं मिलता है लाइनअप्स पे जाने का. वाइपर लाइनअप it has to happen, but करूँगा कुछ नहीं करेंगे ये टीम. डायरेक्टली के सामने आते हैं. One enemy remaining. With another and on grid. He's the one to shut down Enigma Gaming. Attacking half में अच्छी शुरुआत फिर से करते हुए Thailand. जी हाँ, लेकिन हम बात करें खडूम के बारे में, हेड हंटर का जिस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने फर्स्ट राउंड में भी देखा था. पहले हाफ में काफ़ी अच्छा इस्तेमाल, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं हेड हंटर के साथ. एंड इट्स ग्रेट टू सी कि एजेंट्स का जो स्ट्रेंथ्स है, एजेंट्स की जो स्ट्रेंथ्स है सॉरी, उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड इवन आफ्टर द स्मॉल एडजस्टमेंट टू चेंबर, अभी भी इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल एजेंट है वो. Of course, and now it's an anti-eco round. Did I see that correct? Those shorties in there. Two shorties. And it gets denied. But RBK, the Sheriff Masters, will be taking down Kadoom. Weapon down. Numbers equalized. They can be long commitment. Alright, with Zimmerberg, raw fuel. He has a shorty, and so does Excali. RBK gets another player offline, but alone. अपने blast back की मदद से लाइट एलिवेशन पे जाके इमीडिएटली पिक निकाल के आएंगे. They have an idea. डबल क्रॉस आएगा ड्यूट के दोनों तरफ से. That's raw fuel down. Spike planted. 3v2. Attackers have a huge advantage. जी हाँ, एडवांटेज है उनके पास. आई डू बिलीव फिलहाल के लिए एग्जिट फ्लैग्स के लिए जाएंगे, अनलेस ऑफ कोर्स उनको एक पिक मिलता है जिसकी वजह से वो शायद अंदर पुश कर पाए. बट आई डू बिलीव फिलहाल के लिए एग्जिट फ्लैग सबसे ज़्यादा सेंस बनाता है. बट एक्सकैली एक किल निकालेंगे अपने आप के लिए, दूसरा भी निकाल सकते हैं. डीके हो रहे हैं, लेकिन कौन गैरेट के ऊपर ही राउंड होने वाला है. आप देखिए स्मोक भी आ चुका है. सवाल ये कौन सी टीम यहाँ पे राउंड निकालती है. ऑफकोर्स बात करें मिड के बारे में, उनके पास एडवांटेज. रेक्सी को भी टेकन डाउन कर दिया जाएगा एंड एक्सकैली इज गोइंग टू गो डाउन. 8-6 इज स्कोर लाइन. एनिग्मा गेमिंग अभी भी कोशिश करेंगे. इको डाउन था उनके लिए, तो they're still very much into the game. यहाँ पे क्या मिड बोनस खेलेंगे? Are they going to risk it with the bonus? Do they even have the money? They don't. But time out आते हुए, I believe this would be from Enigma Gaming. Well, and साथ ही साथ I'd just like to mention कि देखिए Enigma Gaming को अगर वो पिस्टल राउंड हारते भी है, we see at least 2 or 3 of their players वो शेरिफ लेके आगे जाते हैं. They don't have a chamber, so 3 शेरिफ्स प्रेडिक्टिव रहते हैं. उसके कारण जो अगले राउंड का बाई आता है वो बाई कंप्लीट नहीं रहता है. यू हैव टू गो विद हाफ शील्ड्स, या फिर आपको एक यूटिल सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. गुड थिंग इसकी सबके पास यूटिल्स तो फुल ऑन रहेंगे. स्टिल एंटीडोट हैज टू प्ले विद हाफ शील्ड, सो डज आरवीके, और रेक्सी को भी वो हाफ शील्ड के साथ ही खेलना पड़ेगा. जी हाँ, रेक्सी को भी हाफ शील्ड के साथ ही खेलना पड़ेगा. बट let's not forget this round is going to be very crucial. RVK की अगर हम बात करें, शेरिफ के साथ हमेशा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो.
2 kills निकाले थे. It could have been their game, but a little too over ambitious मैं कहूँगा. 2 kills निकालने के बाद I think शायद पीछे हट सकते थे, but then again in the heat of the moment हम यहाँ पे जब replays देखते हैं हमारे पास सारी information होती है. It's easier for us to say कि ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, but still creating a lot of impact. So credit where credit is due. But raw fuel struggle कर रहे फिलहाल. 5 kills, 13 deaths and 2 assists. Raw fuel not popping off. Is that the reason कि Made in Thailand have the lead? इसलिए देखिए एक प्लेयर की अगर कमी है तो वो पूरी कर रहे हैं. RVK and Skyesports, they're doing a good job. Antidote as well. We did see him capturing 2 flashes for himself. नहीं तो ये 6-6 का स्कोर नहीं बनता. It could have been 8-4. But on the other side, Enigma Gaming, now they have to play very smart. एक immediate rotation आ रहा है. मेरे टाइम पे 2 sheriffs, headhunter, एक bulldog और एक vandal है बस. Easy. Antidote goes on forward, gets a pick. साथ देखिए आगे आने की कोशिश की जाती है alone के, लेकिन वो डिनाई किया जाएगा. Anti gets a 3K before he gets taken out by Dylan, and probably that's the round in favor for Enigma Gaming. Yeah, but those 3 kills are going to be crucial यहाँ पे. Enigma अगर ये ना उठाते, that's going to be terrible for the confidence. मुझे नहीं लगता वो चीज़ होगी यहाँ पे. One of like ये बात करें फिलहाल ये back-and-ball खेल रहे हो, but एक बार जैसे मैं स्टार्ट फोर्थ टाइम वो कि वो चीज़ करे और की बात करें वो एक और बिलोंग की तरफ से अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. नहीं देखना होना चाहिए. Enigma एक और राउंड का तो as a matter of fact I do believe it's the first round in the second half again. Scoreline 8-7 है. Credits कितने सारे प्लेयर्स के साथ ये मैं देखना जरूर चाहूँगा. Not a lot of money, but I think enough for Myth to survive in this round. They can, but उनको survival के लिए सिर्फ credits नहीं, even though they have weapons, उनको यही जो aggro pushes है जो Enigma बहुत ज़्यादा करती है उसको रोकने के लिए they have to do something. They have to do something or the other. How do they read it? Well, check every corner before you push. 16th round. ये round पे अगर Enigma Gaming अपना नाम लिखते जाते हैं, asked Myth के द्वारा Seekers available हैं. Seekers का इस्तेमाल तुम गैर करना चाहेंगे या फिर नहीं? I've got your trail. And there it is. इस्तेमाल किया जाए तो कॉन्ग्रेस के द्वारा इन खिलाड़ियों की एंट्री, इन खिलाड़ी की पोजीशन जरूर मिल जाएगी. पर देखिए यहाँ पर डिप्लॉय में फंस चुके खिलाड़ी. अब शॉट का इस्तेमाल. Antidote still with his arms out. Smack on the chest with the one and only judge. But दूसरी साइड में देखिए Enigma Gaming एक राउंड जीतते हैं फुल बाई. उसके इमीडिएट बाद जैसे फुल बाई आता है ओपोनेंट से डेवलप. I mean, here's the thing, right? They could still potentially try, but पैसा नहीं उनके पास, इतना ज़्यादा credits नहीं उनके पास. And when you pull off a round like that, जो last round में उन्होंने जीता था, आप इस तरीके से dominate नहीं हो सकते. You need to expect this change of pace. And Enigma not doing a very good job with that in that round at least. But अभी भी they're still in the game. 97 scoreline होगा. बहुत ज़्यादा मौके होंगे उनके पास. But अगला round अगर वो ज़्यादा इकोनॉमिक डैमेज कर पाए तो अच्छी बात होगी. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स अगर आप राउंड हारते हैं दैट डज नॉट मीन इट्स ऑल ओवर. आप इकोनॉमिक डैमेज कर सकते हैं ताकि यू हैव अ बेटर चांस ऑफ मेकिंग अ कमबैक इन द गेम. ऑफ कोर्स साथ साथ देखिए 2 वेपन्स जरूर सेव किया गया है रॉकी मेसी के द्वारा. उनका ये सेव पेनल्टी जरूर सवाल करेगा वेदर दे वांट टू कम विद फुल शील्ड. से रॉफिल को कोई भी डैमेज नहीं पड़ा, सो ही हैज 1000 पेट्स टू स्पेंड. बट रेक्सी हाफ शील्ड, फुल शील्ड, ओके फुल शील्ड आया है. इंटैक्ट पूरी यूटिल्स आए हैं जरूर. एक्सकैली के पास बाई नहीं है. एंटीडोट ही कैन गो फॉर अ बाई, ही कैन गो फॉर अ हाफ बाई. आरवीके भी हाफ बाई ले सकते हैं, बट इंस्टेड 3 शेरिफ्स एंड हाफ आर्मर लेते हुए नजर आएंगे. एक्सकैली ने तो अपना आर्मर बेच भी दिया इसी बीच में. 9 and 7 Myth are 1 round away from double digits, and अगर अटैकिंग हाफ में ये डबल डिजिट्स मिल जाता है then I can say it's going to be anyone's game. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा. This could be anyone's game, but now RVK is going to be on a sheriff. 2 guns है उनके पास. बाकी सारी की सारी टीम यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा यूज़ नहीं करना चाहती, which is a good call क्योंकि that allows them to have 2 more shots at making a comeback in this. RVK in the meantime would be the differentiator. A side पे अगर वो 2 किल निकाल पाते हैं, ये I don't know if that was a misclick, but गोली जरूर चलाई उन्होंने. रेपुटेशन की हम बात करते हैं. आर्मी रेपुटेशन प्रीसीजन जब भी उनके हाथ में शेरिफ होती है हम इस तरीके से बात करते हैं कि वो ऑपरेटर चला रहे, बिकॉज ही इज बीइंग सो कंसिस्टेंट विद दैट वेपन.
2 मिलियन बात करें नहीं है लाल को कोशिश कर रहे हैं लोन को स्पॉट किया गया वहां पे बट क्या कांटेक्ट पे होने वाला है एंटीडोट कोड पोटेंशियल यूजिंग चार्ज पॉइंट हमें और इस्तेमाल करें फिलहाल लोन ठीक करेंगे जरूर बात निकाल पाएंगे अब पेन शेयर दिखाएंगे और रोलिंग थंडर का इस्तेमाल क्या यहाँ पे पुश करेंगे जी नहीं मुझे नहीं लगता यहाँ पे पुश करेंगे इट मेक्स नो सेंस लेकिन डिले काफी अच्छी तरीके से किया है वाज इट क्या वो प्लांट के बाद यूज कर सकते थे पता चल जाएगा थोड़ी देर में लेकिन कबूम को देखे नीचे सिर्फ कबूम को देखे वो पीछे हटने की कोशिश करेंगे वॉर फ्लाई भी सवाल करें एक बार का इस्तेमाल करके एंट्रेंस ब्लॉक करेंगे जरूर लेकिन क्या एंटीडोट अंदर पुश करेंगे वल्नरेबल होकर अंदर जाना तो मतलब नहीं पता लेकिन आरबीके whiffing that shot is going to find the kill आरबीके still alive still keeping the hopes and dreams alive for Enigma Gaming oh yeah अभी पीक करेंगे लेकिन आरबीके को अब डाउन कर दिया जाएगा it is still 8-3 but oh my lord raw fuel coming in clutch actually good around the corner क्या निकाल पाएंगे यहाँ पे जी हाँ किल निकालेंगे जरूर it is a 2-1 waterfly को भी निकाल दिया जाएगा यहाँ पे raw fuel stepping up when he needs to 3K निकाला उन्होंने 5 kills से इसके पहले उनके पास and this is going to be a great confidence booster for him. Absolutely. And साथ ही साथ RVK ने जो स्पाइक प्लांटर को प्लांट करने से पहली बार रोका That was in fact the opportunity कि Enigma Gaming एक रोटेशन दे पाए उस रोटेशन की बदौलत ही यहाँ पर कंप्लीट टीम जो है आपको आती हुई नजर आई अब देखिए रॉकफील्ड जस्ट प्लेइंग ऑन बिहाइंड ट्रिपल बॉक्सेस उसके बाद जाके रॉकफील्ड स्विंगिंग अगेन एंड जैसे रॉकफील्ड को पिकअप किया जाता है आरबीके को पिकअप किया जाता है रॉकफील्ड यूजेस द अपॉर्चुनिटी टू गेट 2 प्लेयर्स डाउन उसके बाद रेक्स के पास एक वैंडल ऑलरेडी अवेलेबल था जो उन्होंने पिछले राउंड पे सेव किया था सो इट दे जस्ट हैमर डाउन एवरी प्लेयर दैट दे नीडेड टू डबल डिजिट अभी तक कैच नहीं कर पाए बट मिथ गोइंग इन वेरी एग्रेसिव स्पाइक कैम देख रहे हैं ये पिक गेट्स दैट पिक डैमेज बहुत ज्यादा होता है look at that antidote reads it like a textbook and the land resting go trade करते हुए नजर आएंगे 9 and 8 and Sky waiting he's waiting with a knife already there यहाँ पे इंतजार करेंगे एंटीडोट क्या अपने टीममेट को बैकअप दे पाएंगे गाइडिंग लाइक तो कॉन गैरेट के पास भी है लेकिन इज ही गोइंग टू वेट दिस आउट क्या उनको पता है एक्सकैली अंदर आई डू बिलीव ही हैज एन आइडिया एक्सकैली अंदर रोटेट कर चुके हैं सॉरी टेलीपोर्ट कर चुके हैं बट 3 versus 4 सिचुएशन अभी भी एनिग्मा के फेवर में लेकिन 50 सेकंड घड़ी के ऊपर बाकी एंड दिस कुड गो ईदर वे एक पिक चाहिए मेड इन थाईलैंड को 1 pick is all they need to force the rotation out from Xcali अगर वो चीज़ कर पाते then it's going to be great लेकिन फॉल लाइन का इस्तेमाल करते हो यहाँ पे I'm not sure if Antidote was expecting somebody to be on side लेकिन फॉल लाइन का इस्तेमाल करेंगे एंड फिलहाल के लिए डिलेंड उनके टीममेट के साथ पुशअप करेंगे हुक्का के अंदर 30 seconds निकाल left पाएंगे डू दे हैव द साइड बट रॉ फ्यूल को देखिए कहाँ पे खड़े हैं वो well he might just do everything that's needed he might just do it oh it's a pick a room down that's like 50% of the work already done लेकिन स्पाइक प्लांट हो रहा है तो रीटेक खेलना पड़ेगा इसको भी 2 का रीटेक Enigma Gaming they cannot mess this up whatsoever कोई भी गलती वो नहीं कर सकते कॉन्ग्रेड ऑलरेडी वो स्नीकिंग कर चुके हैं इट्स गोइंग टू बी आरबीके जो उनके अगेंस्ट में ये डुअल एंगेज करेंगे बैक साइड पे आपको दिखने वाले हैं डिलेंड और दैट्स ऑल बट हो रहा है 50 एचपी एंटीडोट गेट्स दैट पिक ऑन टू डिलेंड कॉन्ग्रेड इज द फाइनल प्लेयर जो सीटीपी के इंतजार में है जरूर पुश बैक करवाई जाएगी एंड इट्स ड्रॉप यू Well, we all wanted Rocky to step up, like the entire South Asian audience and as Carlsons as well. देखिए कोई भी पूरा complete off पे खेलता है हमें मजा नहीं आता है. So yes, Rockfuel he stepped up. We were talking about him having 5 bags. He already has 11 in 3 rounds. Momentum. Yeah. एक शब्द momentum. यही कहूँगा मैं and skill उनके पास बहुत ज़्यादा है but of course it's a very mental game as well. So कई बार मुश्किल होता है but he stepped up when he had to. ये सबसे ज़्यादा important चीज़ है. मैंने कहा लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने स्टेप अप किया जब उनको ज़रूरत थी बट ओवरऑल ज़्यादा प्लेस नहीं निकालता है बात अब बात करें लोन के बारे में फिलहाल के अंदर पुश करेंगे अपने टीम के साथ ब्लेंड लेके कवर दे रहे हैं बट नॉट गैरेड हल्के से इंफॉर्मेशन निकालते हुए नॉट अ लॉट टू वर्क विद दिस कुड बी एनिग्मास राउंड This can be but 2 चीजें डिनाई कर सकते हैं Enigma Gaming के इस राउंड को. पहली ये कि फर्स्ट पिक दे देना especially Kadum ready with his exclusive force going to be huge but Anti denies that and immediately Anti को back up करने का टाइम लिया जाता है एक तरफ Sky Smoke and दूसरी तरफ
Antidote comes in, he swings around onto Con Garrett, एक और पिक मिलेगा RVK भी wanna fly का पिक निकाल जाएंगे down to Dylan alone. Ouch. Yeah, no, there are no words for this. इसके लिए कुछ नहीं कह सकते. Just move on with the next one. Don't say there's one more. Antidote को भी take down करेंगे वहाँ पे. It's going to come down to Excali and Raw in a 1 versus 2. 1v4 को 1v2 में reduce करना, no trade to take. Raw पीछे से आ रहे हैं, and if we had been taken down over here, I'm sure वहाँ पे उनके कोई भी सर पर टकरे होते कि भाई कैसे 1 versus 4, how do you end up giving 4 1v1s, but that was not the case. Raw यहाँ पे he comes out on top of that fight, but अगर वो shot miss करते would have been anyone's round. But देखिए 9th round निकालने के बाद Enigma haven't lost a single one. I mean लगातार वो राउंड जीत रहे हैं. It was 9-7 if I'm not mistaken. But उसके बाद जाके लगातार राउंड जीत रहे हैं Enigma Gaming, and that is just so blessing to watch कि वो एक भी राउंड गवाए नहीं है. Even then काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है because 10वां राउंड आप लीड तो ले चुके हैं, लेकिन वो मैप क्लोज करना मुश्किल रहेगा. Tech or attack pause coming in? I think it's attack. Has to be a tactical time. Yeah. It can't be a technical pause because myth को जरूरत पड़ने वाली इस चीज़ के बारे में, and made in Thailand की अगर आप बात करें तो I mean this is a very storied team. It's a very storied organization as well. बहुत लंबे समय से खेल रहे, legacy है इनकी, but Enigma Gaming कोई कम नहीं है. Sure इतनी बड़ी legacy ना हो, लेकिन players step up करें. I'm sure all the South Asian fans, जितने भी लोग देख रहे हैं हिंदी स्ट्रीम को, बहुत ज़्यादा pumped up होने वाले हैं. 9 to 10 3 और राउंड की जरूरत है Enigma Gaming को. Can they pull this off? Are they going to be able to step up? थोड़ी देर में पता चल जाएगा. राउंड शुरू होने वाला है बस चंद सेकंड में, and made in Thailand in deep trouble. Well, it's Raw Fuel's turn, right? And Raw Fuel वो दिखा रहे हैं कि okay, I was not playing well, let me just step up. Puts himself अगले gear पे, and then we're seeing it. RVK definitely learned some insane cypher plays. I mean, what learned? He's been doing that over and over again. Okay. बहुत बड़ी responsibility उनके ऊपर clear करने की. The usual, the default start coming in. सबसे पहले scan किया जाएगा boom bot से, but alone coach, where do you pop the showstopper? You have one blast back left. अगर उससे कुछ कर पाते हैं बड़ा रहेगा जरूर, but antidote को down किया जाएगा after shock. Antidote डाल रहे थे and उसी बीच में खुद pick up हो जाते हैं. So good start for Enigma game, a good start for Made in Thailand इस round पे, लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं है because this is bind. Even a 2-2 split on either side can anchor it completely. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने बात. Raw Fuel in the meantime ऑपरेटर के साथ यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं इस नाइट को, एग्रेसिव एंगल होल्ड कर रहे हैं, एंड एक्सकैली की अगर हम बात करें वो भी जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं. एक्सकैली कोशिश करेंगे उसको निकालने की, उनको मिलेगा लोन की, बहुत कुछ लिक्विड निकाल दो. The land in the green time कितना भी अच्छे से स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन next is still surviving somehow. आजू बाजू जो भी गोलियां जा रही हैं बचाएंगे, निकालेंगे, दूसरा निकाल पाएंगे. सबसे बड़ा सवाल होने वाला है it's still surviving. The ground is on alone, जो निकालेंगे और danger है. खुद को टेक डाउन करने की कोशिश होती है. In the meantime he's going to come in. It all comes down to Raw Fuel up against Wanafly. Can he pull this off? 1 versus 1. बहुत important round होने वाला है. Wanafly playing inside his out. Raw Fuel creeping up. He does have an updraft. He does have the tailwind to work. लेकिन धीरे-धीरे जाएंगे जरूर. सबसे बड़ा सवाल ये होने वाला है क्या उनके पास patience है? Does he have the right read? I think he does have the right read. Oh, he's got one of it. Comes on top of this one. Oh my goodness. Enigma Gaming 1 round closer. ये पूरी सीरीज को क्लोज करने के लिए. I had faith in Raw Fuel. I tell you, I had faith in Raw Fuel. I did have faith in Wanafly as well because देखिए पहले हाफ पे जो ace clutch निकाला था, Wanafly did that with just a judge. इस बार वापस से वही मौका था कि वो करके जाए, but you know you're up against Raw Fuel, especially Raw Fuel on the blades. Has to make a play. On the other side, it's the 11th round for Mamba. बहुत क्लोज जा रहा है ये मैप, बहुत क्लोज जा रहा है जरूर, बट 11th राउंड मैप पॉइंट, मैच पॉइंट, सीरीज पॉइंट निकालने से सिर्फ एक राउंड एंड कोई भी गलती वो अफोर्ड नहीं कर सकते. इस बार रॉ फ्यूल के ऊपर इंतजार कर रहे हैं.
Gets a fake and that's the Doom offline, probably the scariest player. Down and out, लेकिन Alone Pills comes in with that jump. Gets Rockfield offline. ये रेस है तो ये बनने ही वाला है, किसी भी बार ट्राई करेंगे जरूर होगा। इसी बीच में 4v4 का रीटेक, एंड्रूड के पास रोलिंग थंडर की अवेलेबिलिटी आएगा तो वो उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले ऑर्बिटल स्ट्राइक एंड उसके बाद रोलिंग थंडर विल बी फ्लशिंग आउट द प्लेयर्स। तीन खिलाड़ी शॉट पे रहेंगे, एक खिलाड़ी सीओ से आने की भी कोशिश कर रहे हैं और उसको गार्ड करने के लिए आगे जा रहे हैं। आर्ट गेट्स हिम पिक्ड अप, न्यूरोसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलोन पिल्स लेकिन एंटीडोट को डाउन कर दिया है। एक्सटैली इमीडिएटली अलोन पिल्स का ट्रेड निकालते हैं। स्पाइक अभी तक कंप्लीटली डिफ्यूज नहीं हुआ, तो क्लोज कनेक्शन अब और स्ट्राइक इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी। कितनी देर हो सके ये करवाया जा रहा है। एक्सटैली वर्सेस वाटरफ्लाई, इट्स एक्सटैली गेटिंग दैट फ्री कैन, हाफ डिफ्यूज हो चुका है, नो वन इज देयर। match point, series point, Enigma Gaming के द्वारा. No, they are trying their level best to deny the loser brackets. I had to take a deep breath after that round. गर्म पानी के पीने की जरूरत पड़ी because I'm sure if the match keeps on going like this, we'll soon end up losing our throats. लेकिन Raw Fuel is performing so well right now. हर एक player अपनी टीम के लिए step up कर रहा है. Rolling Thunder की बात करो along with the Orbital Strike. अगर order ऊपर नीचे होता, अगर Rolling Thunder पहले इस्तेमाल होता, maybe Orbital Strike से उनको kill मिल सकता था वहाँ पे. But nonetheless, as long as you win the round, as long as it works out in your favor, it's all good. Enigma Gaming, they have started themselves a legacy. अभी तक बस एक ही राउंड दूर है वो. They have to just be patient, calm and composed. Raw Fuel holding it. आराम से इंतजार किया जा रहा है. There's 3 players actually जो Raw Fuel को परेशान कर सकते हैं. The 4th, the Brimstone adds on. Will Blazer नीचे तो टेलविंड का प्रयोग, लेकिन वाटरफ्लाई जब तक वो टेलविंड के साथ पीक करते तब तक रॉ फ्यूल को डाउन किया गया. एक राउंड की तलाश में रहेंगे जरूर मेड इन थाईलैंड, लेकिन देयर स्टिल 3 राउंड्स अवे फ्रॉम दैट ओवरटाइम. इसी बीच में आप देखिए फ्लैंक आ चुका है. आरबीके रीच टेक्स डाउन द डूम एंड हैज टू चिम्बर डाउन. नो मोर लर्किन कमिंग इन, लेकिन साइड कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं मिला है. बिकॉज़ कॉर्नर अप्रोच रेक्सी वर्सेस Spike down, B. Well, we'll find out soon enough. RVK kill निकाल दे अपने आप लिए. Waterfly को down कर देंगे वहाँ पे. He's gonna try and take it on the corner, लेकिन blinding light का इस्तेमाल. Oh my lord, Qeon got it though. On point. 1 versus 2. Rexy. इकलौते प्लेयर बाकी है. एक टेलीपोर्ट जरूर आएगा, लेकिन स्पाइक सीधा सीधा रोटेट कर रहा है. रेक्स इज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम व्हाटसोएवर. वो प्लांट रोक सकते हैं. ही नोज एग्जैक्टली व्हेन टू गेट हियर. दूसरा टीपी भी उन्होंने सुना हुआ है. उनको पता है स्पाइक कहां पे प्लांट हो रहा है एंड रुकने नहीं वाले. उनको पता है शावर टेक के जरूर ठीक करेंगे थोड़ी देर में. पहला किल निकालने की कोशिश, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे. अनफॉर्चुनेट. 10 to 12. अभी भी मौका है एनिग्मा के पास टू क्लोज इट आउट. अगर शावर्स के खिलाड़ी को वो पिक ऑफ कर पाते, इट वाज अ राउंड. इट वाज एनिग्मा गेमिंग विनिंग दैट एंटायर सीरीज. लेकिन वो शावर्स पे जो खिलाड़ी ऑलरेडी आ चुके थे टेलीपोर्टर्स की मदद से, आई मीन दे वुड हैव जस्ट मेड इट हैपन. आरवीके, डैम मैन, इनसेन फ्लिक्स कमिंग इन, बट क्रेडिट्स हमें जरूर देना पड़ेगा. 30 seconds left. एंटी का जो एक किल मिला, दैट कुड हैव चेंज्ड द टेबल्स. देखिए इंसिनरी मोनोटॉप आता है. वन ग्रेड यूज बर्निंग एंड इनफैक्ट वो गाइडिंग लाइट से अपने टीममेट को सहारा बना के दिए. Even if he gets taken down, round जो है उनके नाम आए. But a huge investment of फॉल्ट है, लेकिन फायदा नहीं मिलेगा. इको राउंड निकाला जा रहा है एनिग्मा गेमिंग के द्वारा. एनिग्मा गेमिंग अगले राउंड पे क्लोज करने की कोशिश करेंगे जरूर. करूंगी बीच में आरबीके को डाउन करेंगे. वाटरफ्लाई गेट्स एंडेड आउट ऑफलाइन एज वेल. इट्स डाउन टू ओनली 2 players, रेक्सी एंड रॉ फ्यूल. रेक्सी के पास एक मार्शल जो बहुत एक्यूरेट है अपने शॉट के साथ साथ. रॉ फ्यूल जस्ट हैविंग अ शेरिफ टू वर्क विद. जी हां, बिल्कुल ठीक है आपने. रॉ फ्यूल की बात कर फिलहाल क्यों. What a shot. Oh man, it's great to see a player pop off like that. लेकिन यहाँ पे 1-1 exit strategy. But I do believe that's good enough economic damage. But फर्क नहीं पड़ता वाला. आखिरी राउंड हुआ. Is Enigma going to be able to close it out? या फिर it's just going to go to overtime. थोड़ी देर में पता चलेगा. लेकिन Raw Fuel अपना ऑपरेशन निकालते हुए and we might see some aggression coming in from him. When we started off Mamba, तब हम एक डिस्कशन कर रहे थे सबसे पहले when I and Sam started off with the entire day. Like we were speaking about it, Enigma Gaming and Made in Thailand comparatively is the strongest team in the entire group. तो अगर Enigma Gaming आज Made in Thailand को take down कर पाते हैं, it's probably like they have already made their way
towards the group stage. इसको play-ins clear करना Enigma Gaming के लिए इसके बाद आसान रह सकता है. देखिए, triple smoke coming in from all the smokes deployed and जज के साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश, but is anti-aware. यहाँ पर जज के साथ खिलाड़ी तैनात है, anti-fake लेकिन जी नहीं करते, पर किया जाएगा जरूर एलोफिल्स का. Rexy जरूर एक kill निकालते हैं Thailand के ऊपर, but अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है. Viper Spit का commitment, उसी के साथ साथ Poison Cloud deploy करके प्लांट निकालने की कोशिश होगी, लेकिन दिक्कत ये है कि वो जो Viper Spit है वो पूरी साइड को कवर नहीं कर रहा है. Rexy के ऊपर एक फ्लैंक आएगा. Down to Raw Fuel in a 1v4 with the best weapon you can possibly have. Let's not forget he has a Blade Storm as well, but that's not going to matter because Qeon got it. उनको वहाँ पे टेक डाउन करेंगे and that's rather unfortunate for Enigma क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खेला था, अब जज की बात करें, आप शॉटी की बात करें, क्रिप्टोनाइट रहा है Enigma के लिए. जब भी सामने वाली टीम पुश करे या फिर इवन डिफेंड करे एल्बो के अंदर खास तौर पे, इट्स ऑलवेज बीन ए मैसिव प्रॉब्लम. यहाँ पे एंटीडोट पुश जरूर करे थे लेकिन नो ट्रेड पोटेंशियल व्हाटसोएवर, और ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, बहुत बड़ी दिक्कत की बात है बिकॉज यू नीड टू गेट द बेसिक्स राइट. श्योर हीट ऑफ द मोमेंट कम्युनिकेशन क्या था वी डोंट नो, बट यहाँ पे पॉज आएगा एंड हम देखेंगे दोनों टीम्स को ट्राइंग टू रीसेट. लेकिन इस बार मेड इन थाईलैंड ने ये पॉज लिया है रीसेट करने के लिए अपने आप को, बट एनिग्मा नाउ दे हैव टू गो बैक टू स्क्वायर वन. अटैकिंग हाफ में राउंड निकालना है. एनिग्मा गेमिंग दे नो कि जितना मेहनत उन्होंने डिफेंडिंग में किया है उतना अटैकिंग में भी वो कर चुके थे. एंड इनफैक्ट अटैकिंग हाफ में वेल आई रियली बिलीव ओके या सो इट्स लाइक 12 राउंड्स दोनों ही टीम ने स्प्लिट करके लिया है 6-6 पे. सो like Mamba you said when we started off, it's anyone's game right now. जी हाँ, whenever it goes to overtime it's always back to square one. रीसेट करना होता है आपको अपने आप को 0-0 एंड यहाँ पे कौन जीतेगा ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है. बट एट द सेम टाइम एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, दोनों टीम्स यहाँ पे मोमेंटम के ऊपर रोल कर रही है. इवन एनिग्मा राइट, राउंड्स हारे ज़रूर है लेकिन दे ट्राइंग देयर बेस्ट एंड देखना ये बनता है कि क्या इज देयर बेस्ट गोइंग टू बी गुड एनफ. विल फाइंड आउट इन 2 rounds. We will. इसी बीच में Enigma Gaming they have done something which no one possibly could have thought. Made in Thailand जैसे strong formidable team को वो तीसरे मैप तक लाए हैं एंड जीतने से बस 2 rounds दूर है वो, बस 2 rounds. Rexy holding the hookah peak, wanna fly रहेंगे जरूर एंड शोल्डर पिक करते हुए नजर आएंगे. आप 1 गिले पोजीशन जरूर निकल जाएगी ट्रेल ब्लेजर से इमीडिएटली, लेकिन इन्फो निकाला जाएगा. रॉ फ्यूल के ऊपर एक पिक्सल सा उनको जरूर दिखता है, बट अगेन अ जज कमिंग इन फ्रॉम वन अप्लाई. हो सकता है ये भी आया है इंजल के साथ साथ पुश करने की कोशिश. एक खिलाड़ी का पीक आएगा, रेक्सी डाउन करेंगे उनको, लेकिन इमीडिएट ट्रेड आने वाला है रेक्सी का डूम के द्वारा. Headshot. Once again a 4v4 लेकिन कदूम की अगर हम बात करें फिलहाल के लिए पीछे हटेंगे जरूर. ऑफ फ्यूल इन द मीन टाइम इज गोइंग टू ट्राई एंड पुश इन. क्या किल निकाल पाएंगे, बहुत क्रूशियल किल होने वाला इनके लिए बिकॉज ट्रेड पोटेंशियल नहीं है. फिलहाल के लिए पीछे हटेंगे वो एंड they've decided to move back towards the A site. Guys, what do you think is happening over here? Yeah, they're just rotating, they're just going in. 3 खिलाड़ी बचे हुए, सो A साइड पे जाना पड़ेगा. ये A साइड इतना ज्यादा खुला है, इतना ज्यादा खुला है ये A साइड, जितनी जल्दी हो सके प्लान करके अगर बैक ऑफ कर पाते बहुत ही बढ़िया रहेगा. बट देखिए अप्रोच रोकने के लिए जरूर कोशिश थी, लेकिन रॉ फ्यूल ही हैज टू बी स्मार्ट. टावर को चेक करना चाहिए. इनफैक्ट क्लाउडबर्स्ट की मदद से वो जरूर चोक ऑफ करेंगे. वाइपर्स ने बाइट को ड्रॉप किया जाएगा ताकि ट्रिपल बॉक्स का डिफॉल्ट प्लांट ना हो. डिफॉल्ट प्लांट डिलाइन गेट्स रॉ फ्यूल इमीडिएटली ट्रेड निकालेंगे जरूर, लेकिन वन फ्लाई को हेडिंग करते हुए भी नजर आए हैं. और का इस्तेमाल किया जाता है. एक्सकैली जस्ट वेटिंग इट आउट. एक्सकैली के अगेंस्ट में ये डुअल जो जीत के जाएंगे वो एंड ऑलमोस्ट एक राउंड निकालने से थोड़ी ही दूर है. रॉ फ्यूल गेट्स वन फ्लाई गेट्स वन एज वेल. इट्स डाउन टू अ 1v1. एक्सकैली विद 70 HP एंड वन फ्लाई on 1 HP. एक बुलेट का कनेक्शन अगर ये DK खत्म हो जाता है it's game over. But Excali is just playing with time. 8 HP, but no, Excali he gives it off. One fly with a huge play. 13th round, match point, series point for Made in Thailand this time. Switching sides. Match point. It's crazy how this round went by, but nonetheless बात करेंगे यहाँ पे स्कोर लाइन के बारे में. One more round is all Made in Thailand needs. लेकिन Rexy in the meantime इंतजार करेंगे.
देखिए ये एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, Enigma Gaming is still very much in the game right now. ऐसा नहीं कि this loud one more round, it's going to be difficult. Let's be honest, because जब pressure की आप बात करते हैं, this is the most amount of pressure they'll face at least in the upper bracket. Because अगर यहाँ से हारते lower bracket में जाएंगे वो, and over there वहाँ पे और भी ज़्यादा मेहनत और भी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी उनको. But यहाँ पे Enigma का time out आते हुए, what do you think is going to be the conversation price? Just one simple thing. Defenders half है, आराम से खेलो, round अपना है. That is it. Oh well. That's rather obvious, isn't it, though? Yeah, of course. But still, देखिए, Enigma Gaming, in spite of that 12-9 lead, जब वो 3 rounds लगातार दे दिए, इनफैक्ट I'll say 4 rounds लगातार दे दिए हैं वो मेड इन थाईलैंड को, अभी उनके दिमाग को शांत करना पड़ेगा. They need to calm down their minds before they get into this round. I really love how Valor does it in the Indian circuit, but abhi it's about APAC. And यहाँ पर Enigma Gaming, they need to do that exact thing. Raw Fuel going in for that off buy. एक B execute की तलाश में रहेंगे. Is it a 5 stack coming in from Hookah? Yeah, it is. एक 5 stack आ रहा है. Myth haven't done it even once. 5 stack Hookah को Skyesports के लिए तैयार है Enigma Gaming. We'll find out अगर वो तैयार है कि नहीं. Alone pills की अगर हम बात करें फिलहाल के लिए करेंगे taken out Excalibur Antidote, finding 2 picks for themselves. लेकिन Waterfly 2 और kills निकालेंगे अपने आप के लिए. It is going to be a 3v3 spike plant जरूर होगा, but is this going to be enough? Is this going to be enough? लेकिन ये बहुत बड़ा problem होने वाला. Retake के लिए Enigma is on the back foot. Tries. It's not going to be easy to retake this. It's not going to be easy, but Raw Fuel manages to get one pick. Kadum immediately आगे आते हैं. Antidote का pick निकाल जाएंगे. Waterfly के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, just playing on top of the tubes. लेकिन Kadum will be the game changer in this moment. Waterfly gets another pick. RBK को down करके जाते हैं. And immediately Kadum comes in. He secures it, and it's made in Thailand. जो जीत के आगे बढ़ने वाले हैं upper brackets में. Enigma Gaming, they might have lost the best of 3, but they have shown us what firepower, what competition South Asia is bringing this time in Challenger Stage 2. एक बहुत तबाही वाला इस stage पे आपको देखने का मौका मिलेगा. Well, we have Lucifer joining us as well. So, Sam, welcome back. How did you enjoy the game? You enjoy? That's not a question. I mean, that game जो अभी देखने के लिए मौका मिला, I mean, after Enigma having the lead, उसके बाद जो comeback देखने के लिए मौका मिला, I mean, we saw Raw Fuel stepping up when it mattered, but उसके बाद जब Wanderfly, ये खिलाड़ी के ऊपर मेरा नजरे था, then we saw Wanderfly stepping up, and I think वहां से उनको रोकना बहुत मुश्किल हो गया. He started gaining confidence, building the momentum, and I think every player coming in front from Enigma's end, वो नीचे जा रहे थे Wanderfly के ऊपर, and I think the game at the last few rounds was dependent on Wanderfly. देखिए मैं एक चीज कहूंगा यहाँ पे Price, I had to chime in over here. Enigma tried their best. They played really good, but again the good old curse हम हमेशा बात करते हैं जब वो match point पे होते हैं, they're not able to close out these games. क्या problem है? Is this a mental block? Is this just pressure getting to them? ये उनको sort करना पड़ेगा, because ये हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, we've seen this multiple times, even on LAN हमने देखा हुआ है इस चीज को. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए बनते जा रहा है. इट्स बिकमिंग द क्रिप्टोनाइट. SA and the 12th round, I mean, this has some stories, right? हम हमेशा बात करते हैं Ascent 9-3 Global Esports का, हम बात करते हैं 8-4 Ascent पे जो हमने recent देखा था. जरूर we often talk about एक game हुआ था, I remember, I believe it was Optic against Guild, जहां तक मुझे याद आ रहा है. There was a 10 to curse even जो play हुआ था. But talking about this little point, 12th round, एक round निकालना रहता है. We have seen Global Esports not able to do that. We have seen Orangutan. We have seen Enigma Gaming. आज APAC पे आके वो नहीं कर पाए. But I'm happy about the fact कि Enigma Gaming ने आज जो टक्कर दिया है Made in Thailand जैसे टीम को, that's just pulling off your hats and throwing it up in the air. It was very good. But here's the thing, Lucifer, before I let you chime in on this one, right? Sure, acha performance, and no doubt about that. And Sam, I want you to chime in this one as well. But should you really be happy with
putting up such a good fight. Sure, बहुत अच्छा खेले. This is probably one of the closest fights that we've seen. But ये match वो जीत सकते थे. So obviously there are ifs and buts and there are things that could have happened. But तारीफ फिर भी करेंगे इनकी. Enigma Gaming played their hearts out. ये चीज मैं जरूर कहूँगा. I agree with you on that. I mean, it was a very good fight. और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, but चलेंगे एक छोटे ब्रेक की तरफ. The plan. Yeah. Yeah. Second verse after the first. Take control with words, roll reverse, the rebirth of verb from inside out, outside in. We control the earth frequency. The heart of the world beats in me. It beats on beat as we breathe deep. Oxygen from trees feed. Gifts in our gift. This right here, proof we exist. Mind state is gravity, the way you uplift. Across seas swift, water quench thirst. There's a shift. Set sail like shit to find other lands. Some other lands, sun is planned. With the words I'm writing, I'm fertilizing the earth to rising, realizing global warming and the sea is rising. Pollution the planet needs metabolizing. Full of fire like a dragon fighting, creating hot springs when the pressure rising. It's ever rising, but I'm never frightened, cause the days will brighten. Yeah, the blend. Valorant Champions Tour APAC Challenger Stage 2 में आप सभी का फिर से स्वागत है, जहां पर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा एक बहुत ही हार्ट टचिंग defeat by Enigma Gaming. They tried but they failed. And मेरे साथ फिर से डेस्क पे जुड़ते हुए, मेरा नाम कैप्टन प्राइस, मेरे साथ डेस्क पे जुड़ते हुए लूसिफर एंड माम्बा. वेलकम बैक गाइस. एंड माम्बा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आई एम गोना आस्क यू अ क्वेश्चन. वो सवाल ये है कि 12वां राउंड, इज इट अ कर्स फॉर द एसए सर्किट? Not really. I'm not going to say that. It's not a curse for the SA circuit. I think it also has to do with the fact कि यार बहुत ज़्यादा teams जो होती है, certain teams have struggled with it. To put on a blanket statement and say कि सारी ऐसे teams के लिए दिक्कत है, I don't think that's going to be justified. Enigma के लिए हमने especially देखा हुआ इस चीज़ को होते हुए, so hopefully वो ये problem को fix कर पाए. उनके पास support system बहुत अच्छा है. They have really good support. Coach की बात करें, Lucas, उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, so I'm sure ये चीज़ वो फिक्स कर पाएंगे. But at the same time, let's not be too critical of them. मैं शुरुआत में कह रहा था कि there are two ways to look at it, right? एक, आप ज़्यादा खुशी भी नहीं मना सकते क्योंकि आपको पता था वो आप मैच जीत सकते थे. But at the same time, this is one of the closest matches we've seen. Oh yes, it was too damn close. जैसे आप पिछले जब हम ब्रेक लेने से पहले भी आप बात कर रहे थे कि the way this match is going back and forth, लग नहीं रहा था कि कहीं ना कहीं जो हम ओवर टाइम तक आएंगे, क्योंकि one side Enigma had gotten the match and हम देख सकते हैं कि शुरुआत में जो objective wins था, it was working out better for Enigma. But again, same case in scenario जो हो रहा था पहले मैप से, सेकेंड मैप से एंड आखिरी मैप में भी. Both of them were reading each other on every round, and I would say they were trying to counter one or the other way. And I think उसकी वजह से इतना करीब आया, and जो हम expect कर रहे थे पहले दो मैचेस में कि ओवर टाइम हो सकता है, वो जाके आखिरी मैच में हुआ. And again, looking at this graph, it might show you ups and downs, but उस ups and downs में भी आप देख सकते हो दोनों टीम्स बहुत करीब है. Of course, and साथ we all can say कि it was a well-matched game. I mean, I loved how both of the teams played. दोनों ने कांटे का टक्कर दिया, especially तीनों maps में. The first half score was 6-6. I mean, that's ironic, right?
देखिए फर्स्ट हाफ स्कोर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप मैच क्लोज नहीं कर पा रहे देन इट्स नॉट गोना मेक अ डिफरेंस। बट बात कर आरवीके के बारे में, ये प्लेयर इस पूरी की पूरी सीरीज में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करके गया है। रॉफ्यूल की बात करें, स्ट्रगल किया उन्होंने ज़रूर, बट मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस होती है उनकी। 2-3 राउंड होते हैं जहाँ पे वो शाइन आउट करते हैं, अपनी किल्स निकालते हैं, मल्टी किल निकालते हैं, एंड देन वापस ही गोज रियली साइलेंट। एक्सकैली इन द मीन टाइम, फर्स्ट गेम ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, एसएन प्लेड रियली वेल। लास्ट गेम में वापस क्वेश्चनेबल, बट रेक्स एंड एंटीडोट, ये दो प्लेयर्स ऐसे जो दे बीन फ्लाइंग बिलो द रेडार। बट ऑल इन ऑल जो 12वें राउंड का जो इश्यू आ रहा है इनको क्लोजिंग दीज मैचेस आउट, ये उनको फिक्स जरूर करना पड़ेगा। I would say every team. I mean, हमने जब भी देखा है कि जो भी टीम गेम द इंटरनेशनल स्टेज, let them be at the grand finals and उनका वो सीरीज पॉइंट हो सकता है। Then also a couple of teams do fumble because not only that they have the pressure कि क्लोज आउट करने के बाद हम जीत जाएंगे, but on the other end opponent भी और भी ज़्यादा फायर पावर के साथ आती हुई नजर आती है। And I think that's what happened क्योंकि शुरुआत एनिग्मा की तरफ से बहुत बेहतरीन था, they were getting their rounds, it was working, but then we started seeing those eco rounds जहाँ पे बकी के साथ, जज के साथ बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे थे, and then on a fly pulled off an ace as well. So I think when you see these kind of situations happening, that is just a booster dose of confidence, and उसके बाद टीम्स और भी ज़्यादा राउंड कन्वर्ट करने के लिए मौका देती है, and if they're able to do that, I think that team just keeps building on confidence and react करना बहुत मुश्किल हो जाता है। Of course, and साथ ही साथ we do get to witness the highlights as well. I mean, there were some flashy plays, of course. हम बिल्कुल भूलना नहीं चाहेंगे. I mean, that ace during the first half, that was amazing. That was amazing work done. तो देखिए जो कोशिशें थी, I think वो results के बहुत नजदीक आते हुए नजर आया है। कोशिशें हर एक प्लेयर ने की है। रॉफिल के बारे में मैं और मामा चर्चा कर रहे थे कि या ही hasn't been popping off so far, but immediately देखिए अगले राउंड पे he steps up with that 3K, उसके बाद एक क्लच and then he just goes on popping and popping. आखिरी राउंड तक भी उन्होंने कोई मौका नहीं दिया था। But then and there, made in Thailand. I mean, they did good, but Enigma Gaming टक्कर तो दिया है। Oh yes, I agree. From 16th round to 21st round, Rafael जैसे आप बता रहे थे बैक टू बैक खेलते हुए नजर आते हैं, बट अभी ध्यान देंगे जो टीम ऑलरेडी जीत चुके हैं मेड इन थाईलैंड, उनके MVP के बारे में, that's gonna be one of fly. I mean, हमने जरूर देखा था आई गेस कदून को या कॉन्ग्रेट को पहली बार, एंड अभी देख रहे हैं वन ऑफ लाइक, he's just playing very very well, and I don't think यहाँ पे कोई क्वेश्चन भी उठाएंगे इनके ऊपर कि वाइपर क्यों खेले इन्होंने, सेंटिनल क्यों खेल रहे थे पहले दो मैप्स में। he was just playing very very well. I mean, if he's doing that for his team, I think he's more than enough. I mean, देखिए 30 kills on one map as a Viper, which is difficult. You can all agree. It's not easy. It's not easy, but देखिए वाइपर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा था, खास तौर पे जब पोस्ट प्लान पोजीशंस खेले थे अल्टीमेट के साथ, वहाँ पे उनको डिफेंड करने के लिए बहुत ईजी हो रहा था। एंड आई डू बिलीव कॉम्पोजिशन का एडवांटेज हल्का सा था। हमने बात करी थी चेम्बर एंड साइफर के बारे में भी। साइफर का देखिए, इफ़ यू नो हाउ टू यूज साइफर प्रॉपर्ली, आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। वी हैव सीन दैट हैपन, बट ऑल इन ऑल वाइपर विद द पोस्ट प्लांट वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा था एनिग्मा को रीटेक करने के लिए, एंड दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स व्हाई एनिग्मा इतनी आसानी से मैच को क्लोज आउट नहीं कर पाई थी प्राइस। Of course, and Enigma Gaming, देखिए मैंने पहले देखा था यही मिथ का जो एजेंट कॉम्पोजिशन था। ऑफ कोर्स थोड़े से स्विचेस जरूर थे, हमने यही डबल कंट्रोलर सेटअप, इफ यू रिमेंबर, वी डिड गेट टू सी इट फ्रॉम टीम स्नेक्स। तो ये डबल कंट्रोलर वही सिर्फ इस्तेमाल करते थे, बट इस मैप पे वाइपर एंड ब्रिमस्टोन का डबल कंट्रोलर, इट्स लाइक 3 sentinels playing. It's not even 2 sentinels, it's 3 sentinels, because आपका वाइपर कंप्लीटली एक साइड को होल्ड ऑफ कर सकता है सिंगल हैंडेडली। We did see that happen. साथ ही साथ आपका ब्रिमस्टोन इंसेंडियरी आपके पास, इफ यू हैव योर ऑर्बिटल स्ट्राइक ऑनलाइन, देन उसकी मदद से, एंड स्काई स्मोक्स के अंदर हमें खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए थे काफी बार। दैट्स रियली रियली ह्यूज। के साथ साथ डिफेंडर्स हाफ में काफी बहुत हमें बढ़िया देखने का मौका मिला। बट आज का ये ओवरऑल स्कोर जो आप देख सकते हैं, गेम 1 that was RRQ, Regum Qeon and Big BAAM, टोटल में सिर्फ 2 ही मैच देखने का मौका मिला जहाँ पर we had a team victory. लेकिन Enigma Gaming, they punched it out on made in Thailand, लेकिन India ने made in Thailand who secured a 2-1 victory overall. जी हाँ बिल्कुल सही कहा। सॉरी लूजर अबाउट दैट, बट मेड इन थाईलैंड यहाँ पे 2-1 की स्कोर लाइन से आगे बढ़े जरूर है, बट लेट्स नॉट फॉरगेट बहुत क्लोज मैचेस थे। एनिग्मा को क्रेडिट जरूर देना पड़ेगा, बट दे स्टिल हैव द लोअर ब्रैकेट टू वर्क विद। वहाँ से वो जीत सकते हैं, दे विन 2 मैचेस कंसेक्यूटिवली, वो आगे बढ़ पाएंगे। एंड जिस तरीके से आज वो खेला है, देन
if it's anything to go by, it's very promising. तो अनुभव भी है उनके पास and यहाँ पे आगे बढ़ेंगे. तीसरी जो मैच नंबर 3 होने वाले मैच नंबर 5 as well. दोनों मैचेस उनको जीतनी पड़ी given that they win against CES and we might see them again. Of course, and ये जो Cerberus की टीम है, I mean Cerberus as a whole, they lost 2-1 against the opponents. but देखिए वहाँ पर भी जो है अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ है. दूसरी तरफ अगर आप पहले ग्रुप की बात करेंगे वहाँ पर लीड एंड RRQ जाते हुए नजर आए हैं. गेटो आर्टिस्ट के साथ साथ बिग बैम का भी आपको मुकाबला देखने का मौका मिलेगा. That's going to be a huge one. लेकिन वो जीतने के बाद the losers of Bleed and RRQ, who are very very strong teams, दोनों को टक्कर देना है विनर्स के अगेंस्ट में. I mean that is another insane thing we're about to witness. And I'll tell you कि ये जो वीक है हमारा, ये वीक बहुत ज्यादा, I mean वीकेंड है, अभी सैटरडे संडे मंडे रहने वाला है. It's going to be a good one. और कल का मुकाबला जैसे आप देख सकते हैं, गेम नंबर 1 it's going to be Big BAAM Esports versus Myth. उसके बाद गेम नंबर 2 रहेगा Bleed versus RRQ. गेम नंबर 3 Cerberus against Enigma Gaming, and game 4 Ghetto Artists versus Big BAAM once again. I would say यहाँ पे जो Boom Esports जो पहला गेम था कैप्टन, I was like Big BAAM. Even I was wondering. Boom BAAM तो होने वाला है कल के दिन में, that's for sure, क्योंकि 4 मैचेस है आज के दिन में. 2 मैच देखने के लिए मौका मिला है, तो 4 big matches tomorrow. 2 मैचेस जो 2 टीम्स का फेट डिसाइड करेगा, क्या वो आगे बढ़ेंगे या सफर कल के दिन ही खत्म होगा. सो टुमारो इज गोइंग टू बी बोथ क्रूशियल डेज, क्योंकि 2 टीम्स आगे बढ़ेंगे ग्रैंड फाइनल्स तक इस प्ले-इन्स का, एंड 2 टीम्स कल अलविदा लेते हुए नजर आएंगे. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट कल के दिन इट्स गोइंग टू बी एक्शन पैक्ड मौका. और बहुत ज़्यादा एक्शन होने वाला है, उसमें कोई सवाल नहीं है. एंड देखिए दैट्स द रीज़न वाई ये जितनी भी टीम्स है फिल्टर होके आए. ऐसा नहीं कि 1-2 क्वालिफायर्स खेल के आए. दे प्लेड लोकल सर्किट्स, वहाँ पे कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्म किया है. धीरे करके एक स्टेप करके वो आगे बढ़े हैं. बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स हैं, क्वालिटी मैचेस होने वाले हैं. आई डू बिलीव काफ़ी क्लोज मैचेस हमें देखने मिल सकते, बिकॉज व्हेन योर बैक इज अप अगेंस्ट द वॉल तो आप जान जोक देते पूरी मैच के अंदर, एंड उसी की वजह से वी विल हैव अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट प्राइस. Of course, and you know 2 टीम्स है जिनको तो मैं ग्रुप स्टेजेस से ही देखने वाला. I mean सब लोग हम ग्रुप स्टेजेस से ही देखने वाले हैं. एक तरफ है पेपर एक्स एंड दूसरी तरफ रहेंगे जोशिया. I mean दोनों टीम्स, there's only 2 slots, right? There's only 2 slots for Copenhagen, and यही दोनों टीम्स को ओवरऑल टक्कर देना है बाकी सबको. I'll tell you that. But you know what? आज के लिए इतना ही रहने वाला है. मेरे साथ मेरे होनहार काबिल को-कास्टर्स, the magician of words, in fact, Mamba, and साथ ही साथ the one and only talented Sam, तो हम लूसीफर के नाम से जरूर जानते हैं. This is going to be Captain Price signing off along with my co-casters. मिलेंगे आप लोगों से कल. टाइमिंग्स आप लोगों को मिल जाएंगे जरूर अपडेट्स पे. But till then, see you and everyone have a great day ahead. See ya. I don't need your farm. Life was so hard it made me weak. Built to last, this girl ain't weak. Sturdy and still when I plant my feet. Got it out the mud, now it's racks in my sleep. Look to God, He supplies my needs. Endless faith is what brought me next level prosperity. Silent power moves is what I'm giving. They love to hate the world they can't live in. Always present for the high roads. Go swim within the deep lows. Low. What told the future? Who knows? I don't do it for the likes, I do it for the love. Do it for the ones who really need a hug, cause they had it tough, never had enough. Feared, loved, and respected. Using words as a weapon. Test and she. Hurry up quick, El Jefe's coming soon. Sit up straight when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is her queendom, please respect her rule. Hurry up quick, El Jefe's coming soon. Sit up straight when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is her queendom, please respect her rule. Smile in my face, would in my place, but act gully on cyberspace. Let's pump brakes, let's be frank. Running after him when you're the chase. You are the catch and he's the net. How quickly do we all forget to honor these small policies, my darling? You are the empress queen. Man, respect or he'll neglect. You are the wind beneath his wings. You are the season, you are the reason why this world can breathe. Giving sons eyes to see and daughters dreams to believe. Anything less than the best for you is high treason, queen. Hurry up quick, El Jefe's coming soon. Sit up straight when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is her queendom, please respect her rule. Hurry up quick, El Jefe's coming soon. Sit up straight when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is a queendom.
gotta flex, flex, flex on the lean. I just wanna rap, rap, rap to the beat. I just wanna back, 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 cause I'm mean. I just gotta go back, I'm a freak. Gotta go. I just wanna rap, rap, rap to the beat. Move of emotion, they drunk at their problems. They always on road and they starting. She knows cause she is the same. She's trying to stop playing games. Move of emotion, they drunk at their problems. They always on road and they starting. She knows cause she is the same. She's trying to stop playing games. Where the people at, what they really want to know. Who's your lovers and who are your bros? Who are the enemies you do keep close? Who are the people that you shouldn't know? Where the people at, what they really want to know. Who's your lovers and who are your bros? Who are the enemies you do keep close? Who are the people that you shouldn't know? I just gotta flex, flex, flex on the lean. I just wanna rap, rap, rap to the beat. I just wanna back, 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 cause I'm mean. I just gotta go back, I'm a freak. Gotta go. I just wanna rap, rap, rap to the beat. The chains, my vest, my watch, my belt, my cheese, my house, my sneakers, my blouse. I just party hard, popping a one in the chart. I've already won, babe, I didn't even start.